Assalamu alaikum. Let us start with the name of Almighty, the Lord, the most merciful, the beneficent. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. I would request everyone to please stand up in the honor of the national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Our second day of Open Source Summit 2020. We have wonderful presentations and talk shows. For this, I will request Mr. Producer to please run the yesterday's activity so that people can understand what we have done yesterday, and then I'll request the President Open Source Foundation, Mr. Asim, to share today's agenda. Please run the presentation.
Thank you, Tahir Bhai, for a recap of day one. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good evening. Welcome to the second day of 7th Open Source Summit 2020. I'm Asim Shahryar Hussain, President of Open Source Foundation of Pakistan. On behalf of OSFP, I would like to welcome and thank all of the viewers of this is a joint event which has been organized by OSFP and POSF, Pakhtunkhwa Open Source Foundation, to educate our viewers about the new developments in open source globally as well as locally in Pakistan. This year, because of the COVID-19 situation, we are doing the summit as an online event. This year, we have a very comprehensive summit over 7 days, including different topics, panel discussions, and workshops related to open source. So we can call it a webathon, which could be the longest online tech event in the history of Pakistan. So we'll flood you with many open source talks, discussions, and workshops over the next week. Let me now give you a history of Open Source Foundation of Pakistan. OSFP is a volunteer organization which was registered with the Registrar of Societies in 2012 to promote and grow the adoption of open source in Pakistan in both public and private sectors. All members of OSFP volunteer their time for the foundation, and there are no paid positions. We have been working since November to line up speakers, trainers, and panelists for this long summit. We would also like to thank our sponsors and partners, especially Pakistan Software Export Board, which has been sponsoring Open Source Summit for the last 6 years. We would also like to thank Seekhna Seekho, Dayspring, Pro Pakistani, and many other event partners who are promoting this summit. So just like yesterday, we have planned another absorbing and educational day for our viewers and students today. Let me now delve into the agenda for today. I'll be sharing the screen with you for today's agenda. So first of all, we'll have Dr. Ashraf Masood, Vice Chairman of OSFP, giving a talk on Iqra City, which is an educational platform built on open source technologies. This will be followed by a talk on how secure is open source. The general impression about open source is because it is free software and it is shared with other users, it is not secure. However, Dr. Rafi Shan from KPITB will enlighten us what makes open source secure and why such impression is wrong about open source. Then Dr. Akif Khan from Prime Minister's Reform Unit KP government will give a talk on usage of open source technologies in government. Then Mr. Khalil Rashid, founder and CEO of EPTEC Germany and Pakistan, will give a talk on open source software to open source hardware, risc-v and OpenCL based runtime systems. This will be followed by another talk by Mr. Amir Zahoor, Assistant Professor at FAST University, Faisalabad, on the risc-v architecture and the global opportunities for open source usage in Pakistan. Then Dr. Tufail Khan, Assistant Professor, National Center of Robotics and Automation at UET Peshawar, will give a talk on open source robotics. Then at 9:20 p.m., we have planned an hour-long panel discussion on the role of open source technology in the vision of digital Pakistan. We have around 10 panelists in this discussion, including Mr. Naveed Sherwani, who's chair of the risc-v Strategic Alliances for risc-v International, Mr. Humayun Khan, Secretary, Science and Technology and IT from KP, Mr. Usman Nasir, Managing Director of Pakistan Software Export Board, Dr. Lutfullah Kakakhel, who's a founder member of POSF and an executive member of OSFP, Ms. Asma Kadir, who's an M&A and co-founder of OSFP,
Dr. Ashraf Masood, who is Vice Chairman of OSFP, Dr. Akif Khan from PMRU KP Government, Dr. Shahid Kamar, founder of Takmil Foundation, Mr. Shakil Ahmed, CIO GM of Utilities Corporation. We have a use case at Utilities where we have implemented OpenStack, and Mr. Babar Zahoor, founder of OSFP. This panel discussion will be moderated by Mr. Fawad Badwa, co-founder of OSFP and Bionics Agriculture Republic. And this will be followed by some more talks by Mr. Ziaullah Khan from Presidential Initiative on Artificial Intelligence and Cloud Computing. His topic will be teaching AI and cloud computing. And then Ms. Sidra Jalil, founder of Inspire Mill, will be giving a talk on using open data to deal with pandemics like COVID as a case study. And our last talk for tonight will be given by Dr. Asifullah Khan, Associate Professor, Department of Biochemistry, Abdul Wali Khan University, Mardan. And his topic will be Basic Local Alignment Search Tool for DNA Proteins Comparative Sequences Analysis and Large-Scale Biological Database Searching. With that, so that wraps up the agenda for today. Let me now hand it back to Mr. Tahir. And ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and get ready for another marathon session on open source tonight. Thank you. Thank you very much, Asim Bhai. Wow, wonderful. What an agenda we are going to have till 11 p.m. today. It's a roller coaster ride, I tell you. Stay tuned and stay glued. आपको खाना भी हमारे साथ ही खाना है, चाय भी हमारे साथ पीनी है, कॉफी भी हमारे साथ पीनी है. The panel discussion will be the ultimate panel discussion, inshallah, in the history of Pakistan on this subject. The panelists are gems of their own area. So we'll start our one-on-one discussion with our Vice Chairman, a wonderful personality, a dynamic person. He started his career from Pakistan Army, joined Military College of Signals as captain and retired as brigadier and dean for that organization. And now he is working for the industry, and he is a revolutionary person. He is the person who gave Pakistan the electric motor, electric cars, electric bikes. This is one area he's serving. The other one is ICRA City. That is the ultimate next option for the e-learning process, as we are facing problems in university, colleges, and schools with respect to COVID, as well as with respect to the challenges of physical education. We have 350 3.5 करोड़ लोग हमारे स्कूलों से बाहर हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे. हमें उनको कैसे लेके आना है इस फील्ड में? The only solution is digital education. So ब्रिगेडियर अशरफ साहब हमारे को-चेयरमैन भी हैं और इन इंडस्ट्री और एकेडेमिया के पार्टनर के तौर पे he is the wonderful personality, and he will talk about ICRA City, an educational platform built on open source technologies. Please welcome Dr. Ashraf Masood. Sir, am I audible? Hello? Hello? Am I audible, sir? आपकी आवाज आ रही है सर. Carry on. Sir, Bismillahirrahmanirrahim. I hope I am audible.
we are going Yes. to talk on ICRA City today. ताहिर साहब ने इतना जबरदस्त इंट्रोडक्शन कराया कि मुझे अभी कुछ थोड़ी सी शर्मिंदगी सी भी हो रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अल्फाज इस्तेमाल कर दिए. We have been listening to very distinguished speakers since yesterday, and they have been talking quite. सर आपकी आवाज हमें आ रही है, आप प्लीज जारी रखें अपने प्रेजेंटेशन. अच्छा, स्टार्ट. मैं ये कहना चाह रहा था कि कल से हम बड़े ही जो है तजर्बाकार और बड़े डिस्टिंग्विश स्पीकर्स जिसमें काफी सीनियर लोग इन्वॉल्व रहे हैं, उन सब लोगों ने काफी इम्पोर्टेंट बातें की हैं और मैं आज कोशिश करूंगा कि उन बातों के अंदर कुछ थोड़ा बहुत इजाफा कर सकूं जो स्पेशली ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के पर्सपेक्टिव से हम बात कर रहे हैं एंड स्पेशली इस फाउंडेशन के एंगल से बात कर रहे हैं. उसमें मैं एक चीज बात करना चाहूंगा कि ये जो इकरा सिटी वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क का प्रोजेक्ट है, मुझे ये बात करने में कोई आर नहीं है कि आल्दो मैंने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया और इसको इनिशिएट किया एंड वी हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर लास्ट सेवरल इयर्स, लेकिन मुझे इसमें कहने में कोई आर नहीं है कि ये OSFP का प्रोजेक्ट है. इट इज नॉट माय प्रोजेक्ट. इसमें जितने OSFP के सीनियर लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे लोग किसी न किसी शक्ल में इसके अंदर शामिल हाल रहे हैं और मैं एक छोटे से कंपोनेंट के तौर पे काम कर रहा हूं, जबकि ये बाकी सारी टीम जो है जिसमें बाबर जहूर साहब शामिल हैं, सलीम रफीक साहब शामिल हैं और बहुत से लोग हैं जो बिहाइंड द सीन काम कर रहे हैं, ये सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है. दे आर द रियल पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट. लेट्स कम बैक टू द सब्जेक्ट. द इकरा सिटी लर्निंग नेटवर्क has been inspired from the MOOCs model जो कुछ सालों पहले MIT ने शुरू किया, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज. हम सारे लोग उस बात को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, UCLA ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ने और सो मेनी अदर यूनिवर्सिटीज ने उसको अडॉप्ट किया और उनका पर्पस जरा सा मुख्तलिफ था कि वो बहुत सारे लोगों को एक ही वक्त में अप्रोच करना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, ताकि वो अपने इस नॉलेज बेस को लोगों तक पहुंचा सकें, जो कि अदरवाइज शायद फिजिकल एजुकेशन में उसमें काफी मुश्किल था. लोग इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में उनकी फैकल्टी को जो है उनसे नॉलेज गेन करने के लिए पूरी दुनिया से जाते हैं. वहाँ पे लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ट्रैवलिंग कॉस्ट है, रेजिडेंशियल कॉस्ट है, वीजा, ट्रैवलिंग एंड ऑफ कोर्स द ट्यूशन फी एटसेट्रा, एवरीथिंग पुट टुगेदर sometimes becomes unaffordable for the people. And this is what is the part जिसके लिए उन्होंने उसको शुरू किया. लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो मूक्स का कॉन्सेप्ट है, ये आल्दो उन्होंने तो अपने पर्पस से शुरू किया, लेकिन इसकी जरूरत हमें शायद उनसे ज्यादा है. हमारे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, वी ऑलरेडी नो दे आर इन टेंस ऑफ मिलियंस. हमारे पास हायर एजुकेशन की एक्सेस 2% लोगों के पास है सिर्फ मुल्क के. उसमें भी जो फैकल्टी हमारी है, जो टीचिंग फैकल्टी है, उसकी स्टेट क्या है, ये मुझसे ज्यादा बहुत से लोग यहाँ एकेडमिशियंस बैठे हैं, वो इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं. What we are giving out to our children
we know that thing, especially in the universities which are in little bit far-flung areas. तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन हमें एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नजर आता है, जो कि एजुकेशन को फिजिकल डोमेन से, ब्रिक एंड मॉर्टर की डोमेन से लेके उनको डिजिटल डोमेन के अंदर जो है लेके जाने की बात कर रहे हैं, जहां पे पूरी दुनिया में एवरी डोमेन इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डिजिटल डोमेन। इकोनॉमी की बात करें, उसमें सोशल मीडिया की बात करें, उसमें बेशुमार हर एस्पेक्ट की बात करें, ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं एंड सो मेनी अदर थिंग, वहां पे एजुकेशन भी डिजिटल डोमेन में जाने की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहा, तो जब हमने देखा कि दुनिया में मूक्स के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, कोर्सेरा है, यूडेसिटी है, देयर इज एन EDX एंड Udemy एंड देयर आर मेनी मोर। ये सारे प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं और दे आर फंडामेंटली वर्किंग ऑन कमर्शियल लाइंस। सो वंस वी wanted to join that network in one way or the other, we found it is getting very difficult. हम इस पर्पस को एक मिशन के तौर पे लेके जाना चाहते हैं, जबकि ये नेटवर्क एक कमर्शियल एक्टिविटी के तौर पे, एक बिजनेस एक्टिविटी के तौर पे चल रहे हैं। एंड इफ यू नो दैट मोस्ट ऑफ दीज नेटवर्क्स आर multi-billion dollar platforms, and some of them though claim that they are not for profit or non-profit, but practically speaking it is not so. Once the institutions, they tend to connect to that, they find it quite difficult, both administratively, financially and technically. So here we are, as I said, that we are looking in a concept of digital transformation of education as a mission at the national level and then of course at the international level. अभी जब इसको ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं, तो then we are talking into getting into a virtual education domain. Here we are not looking only at the MOOCs level. MOOCs is a concept of reaching out to people in massive number. But here we are talking that our physical institution, especially the higher educational institutions, how they convert from their current physical educational model into the digital education. It is not an easy path. The transformation is not simple. Today we are teaching in a regular classroom with a regular faculty, with a regular textbook, with a regular environment in a class. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हम उर्दू में, क्योंकि हमें बहुत से रिक्वेस्ट आ रही हैं उर्दू में सेशन अगर करें सर प्लीज। सर सॉरी, अच्छा मैं उर्दू में आना चाहूंगा। बाबर साहब थैंक यू। तो मेरा कहने का पर्पस ये था कि हम इसको एज अ मिशन इस तरह से लेके चल रहे हैं कि हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हेल्प आउट कर सकें कि वो अपने करंट फिजिकल एजुकेशन मॉडल से वर्चुअल मॉडल के अंदर जा सके। वेरएस के मूक्स का मॉडल सिर्फ एक लिमिटेड डोमेन को एक्सेस कर रहा है। हम एक स्मूथ ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग इन अ हाइब्रिड डोमेन वेयर एन इंस्टीट्यूशन एट एनी गिवन मोमेंट अपने फिजिकल एजुकेशन भी चला रही हो और अपनी इलेक्ट्रॉनिक या अपनी ऑनलाइन वर्चुअल एजुकेशन भी चला रही हो। तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल की बात कर रही है एंड दिस इज द एडवांटेज वी आर लुकिंग एट इट। मैं इससे मजीद बात करने से पहले मैं क्विकली जाना चाहूंगा इस बात के ऊपर कि मुझे जरा एक सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मैं ये बताना चाह रहा था कि ये हम नया काम नहीं करना चाह रहे।
बाबर ज़हूर साहब माशाल्लाह फाउंडर OSFP के हैं। ये वो काम ओपन सोर्स एजुकेशनल नेटवर्क के तौर पे पिछले कई सालों से कर रहे हैं। हम सिर्फ उनकी इस कोशिश को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, जब इस सारे मैकेनिज्म को तमाम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे प्रोवाइड कर सकें, जहां पे वो इनको यूनिफाइडली इस्तेमाल कर सकें और तमाम उन लोगों तक हम रीच आउट कर सकें, उस तरीके से रीच आउट कर सकें जहां पे कि वो अपनी करंट एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करने के काबिल हो सकें। तो मैं ये कह रहा था कि हम इसको एक पूरे ट्रांसफॉर्मेशन मैकेनिज्म के तौर पे लेके चल रहे हैं। इट इज नॉट ओनली अ मूक्स लेवल। सो ये मेरा एक बेसिकली मैसेज है इस सब्जेक्ट में, और हम एक उस हाइब्रिड मैकेनिज्म और प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन के कंपोनेंट्स भी मौजूद है, जिसके अंदर वर्चुअल एजुकेशन के कंपोनेंट भी मौजूद है, और जिसमें इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पूरा एक सिस्टमैटिक लेआउट और एक फ्रेमवर्क मौजूद है, ताकि तमाम इंस्टीट्यूशन अपने आप को इस डोमेन से स्लोली एंड ग्रेजुअली एज पर देयर एनवायरनमेंट। सर मैं दोबारा आपको इंटरप्ट करूंगा, हमें आपकी स्लाइड्स The advantage that we are looking at a technology which is internationally acclaimed, and we are talking about learning beyond bricks and mortars. And the last important point is that we are looking at deep localization. We are looking at incorporating the things which are required to our own students. हम अपनी लोकल फैकल्टी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम अपनी लोकल लैंग्वेजेस को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, हम अपने लोकल लिटरेचर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोगों को वो वाला नॉलेज देना चाहते हैं जो यहाँ पे लोगों को चाहिए, और वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो यहाँ की जरूरत है। हम एक मिड टू लो टेक सोसाइटी हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो एक डेवलप्ड वर्ल्ड से मुख्तलिफ है। हम वो सारी चीजें उस फॉर्म में देना चाहते हैं जो कि यहाँ के सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसमें ये है कि मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। जब हम इसको एज अ सिस्टम लेवल पे देखते हैं तो उसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट्स हैं जो मुख्तलिफ लेवल पे काबिल इस्तेमाल हैं। सबसे पहली चीज जो मैंने पहले जिक्र की है वो ये है कि इकरा सिटी ग्लोबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये बेसिकली एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो फिजिकल टीचिंग के लिए भी इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल कर सकती हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दोनों के लिए इक्वली फीजिबल है। Then we have made a model out of it for the school level, which is at the primary and secondary school level, and so that उनकी अपनी जो peculiar requirements है वो इसके अंदर एड्रेस की जा सके। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके अंदर एक वर्चुअल क्लासरूम है। दिस वर्चुअल क्लासरूम इज समथिंग लाइक Zoom और माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये वही वाला एनवायरनमेंट है, लेकिन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो बेसिकली इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एजुकेशन। देयर इज अ मल्टी यूजर white board, there is a setup so that which can be used exclusively for educational purpose. ये आपको मैं थोड़ी देर बाद जरा उसको बताऊंगा भी सही। और प्लस ये है कि then we have got an open educational forum where a lot of learning resources have been put up on Google Play platform as mobile apps, such that those resources are available, which are including the textbooks, the solution manual, key books, exam papers, and many more material for educational purpose at the school and higher education level. All these resource materials are available in the form of mobile apps on Google Play at free of cost to the people, for the user. तो ये हमारी पोर्टफोलियो है जिनको एज पर नीड बेसिस एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। वेल, दिस इज एन आर्किटेक्चरल व्यू, is a little complex, but just to give an idea that how this whole thing is been formed, ये एक बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर अगर आप देख सकेंगे तो एक नीचे एक सेंट्रल फ्रेमवर्क के ऊपर
There is an LMS, learning management system. There is a learning portal for the teacher side to actually look at this one. Yes, sir. Oh, अच्छा, मैं sharing a window. अभी शेयर हो रहा है, लेकिन ये स्टॉप शेयरिंग मैं करता हूं, मैं अभी देखता हूं. जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। थोड़ा-सा आप ज़रा इंतज़ार करें, डॉक्टर साहब की स्लाइड्स को इंशाल्लाह अभी हम रीशेयर करते हैं और मेरा ख़्याल है अज़ान भी शुरू हो गया, तो हम 2-3 मिनट अज़ान के लिए इंतज़ार करते हैं। जी, वेलकम बैक दोस्तों। डॉक्टर अशरफ का अभी थोड़ी देर में प्रेज़ेंटेशन शेयर होती है। उनकी कॉल आ रही है। सर
जी मुझे अभी आवाज हो गया, ठीक है। अभी देखें जरा, ठीक है, ओके ओके जी, सॉरी मतलब I'm sorry for the interruption. Probably there was some issue here. मेरा कहने का मकसद ये था कि ये डायग्राम थोड़ी कॉम्प्लेक्स ही है, ऐसे ही आर्किटेक्चरल व्यू है। बहुत सारे लोगों के लिए शायद इसकी कोई खास अहमियत ना हो, लेकिन बताने की बात ये है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी चीजें ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी से लेके इकट्ठी करके उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म किया गया है, उसमें डाला गया है और उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है कि तमाम कंपोनेंट्स इंडिपेंडेंटली भी चलते रहे और साथ के साथ में जो जो कंपोनेंट्स चाहिए वो इस्तेमाल करें और जो नहीं चाहिए वो नहीं इस्तेमाल करें। You can see from the top level that there is a teachers portal, there is a learning portal, there is a learning management system, there is an administrative portal, plus there are so many small components जो कि आपको शायद यहाँ पे पढ़ ना सक रहे हो। डैशबोर्ड्स हैं, बहुत सारी कैटलॉग्स हैं, बहुत सी और रिसोर्सेज हैं, इसमें एनालिटिकल इंजन्स हैं, प्रॉक्टरिंग है, एग्जाम्स हैं, लाइव क्लासरूम्स हैं और बहुत सारी चीजें जो इसके अंदर मौजूद हैं जो कि इस सारे को एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म की शक्ल देती हैं बेसिकली। लुकिंग एट द सिस्टम कंपोनेंट्स, ये कोई बहुत उस सेंस में मैं अगर बात करूं तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने जो सबसे पहले भी बात की है वो ये है कि ये यूनिफाइड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके अंदर फिजिकल एजुकेशन और मूक्स की तरह की ऑनलाइन एजुकेशन के कंप्लीट पैकेज मौजूद हैं जिसमें तमाम मैनेजमेंट हो सकती है। स्टूडेंट्स कैन स्विच फ्रॉम वन मोड टू द अदर। और जो लाइव वर्चुअल क्लासरूम है ये मैंने कहा कि ये बहुत सारे दूसरे मूक्स प्लेटफॉर्म में नहीं है, लेकिन चूंकि हमें फिजिकल एजुकेशन में भी इसकी जरूरत होती है और ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर भी इंटरैक्टिव सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये उसको एड्रेस करने के लिए ये उसका एक पैकेज बनाया गया है जो कि जूम की तरह की चीज है और ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही बेस करके इसको तैयार किया गया है। वर्चुअल स्कूल सिस्टम है, कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम है, देन वी हैव गॉट द मोबाइल एप्स व्हिच कैन सपोर्ट दिस एंटायर लर्निंग एक्टिविटी, ताकि इस सारी लर्निंग को एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से उसको एड्रेस कर सकें। एंड देन ऑफ कोर्स द इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस एनालिसिस, ये तमाम प्रॉक्टरिंग एग्जाम्स के रिजल्ट्स एनालिसिस और बाकी सब चीजें इसके अंदर में डाली गई हैं। ये उसकी कुछ वेबसाइट की खैर पिक्चर है टू बिगिन विद। इट्स ikracity.org, ये बेसिकली डोमेन है। इसके साथ तमाम और जो पॉसिबल डोमेन्स है जो इसकी रिक्वायर्ड है वो तमाम इसके साथ में लिंक्ड है। एंड वी हैव गॉट द नॉलेज डोमेन जो अभी तक हमने उसमें एक्टिवेट की हुई है। उसमें वी हैव गॉट ए कंप्यूटर साइंस कोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस अकाउंटिंग, लैंग्वेज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यही वाले नॉलेज डोमेन्स हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड आउट होते रहेंगे और बाकी डोमेन्स के भी मटेरियल जैसे जैसे आएगा वो इसके अंदर में ऐड होता चला जाएगा। ये कुछ कोर्सेज हैं जो इस वक्त एग्जिस्टिंग वहाँ पे मौजूद हैं प्लेटफॉर्म पे और लोग उसको जाके देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। दे ऑल आर फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट फॉर एनीथिंग एंड दिस होल लर्निंग मटेरियल जो पहले हमारा ओपन सोर्स एजुकेशनल नेटवर्क पे मौजूद था उसको अभी एक ट्रांसफॉर्म करके इस पैकेज के लिए उसको तैयार करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया गया है। और ये जो सिस्टम है ये आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। और ये मैंने जिक्र किया था, ये वर्चुअल क्लासरूम है जिसके अंदर आपको नजर आ रहा होगा इस पिक्चर में कि ये फिजिकल एजुकेशन भी इसके अंदर मौजूद है, लाइक ए रेगुलर क्लासरूम, प्लस कोई अपने घर से बैठ के देख रहा है, कोई कम्युनिटी सेंटर से में बैठ के मल्टीपल लोग इकट्ठे बैठ के एक ही स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर इंडिविजुअल लोग अपने अपने घर से या अपनी जगहों से जहां कहीं भी है वहां से। तो इट्स ए वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का एक कंबाइंड टेक्नोलॉजी है जो कि हर किस्म की सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट्स को और टीचर्स को एक
काइंड ऑफ ए एनवायरनमेंट देती है जहां पे उनकी टीचिंग और लर्निंग जो है वो ऑप्टिमाइज की जा सके. Well, it's got a similar function just like a Zoom, but the only thing is that we have got a multi-user whiteboard जिसमें multiple levels हैं, जिसके अंदर आप स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं कि वो उसमें कुछ लिख सकें, कुछ बात कर सकें, जवाब दे सकें, पोलिंग कर सकें. देन यू हैव ए ब्रेकआउट रूम जहाँ पे आप एक क्लास को ब्रेक करके छोटे छोटे सेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, छोटे ग्रुप्स में जो अपनी डिस्कशन कर सकें. प्लस और बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं विच आर पेक्यूलियर टू द एजुकेशनल साइड, और उसी को करने के लिए ये इसको कॉन्फ़िगर किया गया है. एंड दिस इज हाउ दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जूम और फॉर दैट मैटर टीम या किसी और उसमें, ताकि इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए स्पेसिफाई किया जा सके और उसी के अंदर ही इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके. आल्दो इसमें आप रेगुलर मीटिंग्स और दूसरी चीजें भी कर सकते हैं, बट देन इट्स ए वर्चुअल क्लासरूम जो बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए, उसमें इसकी एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्टली उसमें बनती है. वेल, प्रोस्पेक्टिव एसोसिएट्स, there is no end to it. There are universities, colleges, individual schools, training institutes, business enterprise, certification agencies can do their exams and tests and other thing, and individual teachers can bring in their learning material for the people to learn. Yeah, there is no limit to things like that. There are many prospective associates. There are organizations, there are individuals, and there are many things which can go into it, जिसमें हर तरह की एक्टिविटी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है. कहीं पे आप सिर्फ लोगों को एक सेमिनार की सूरत में कोई चीज बताना चाहते हैं, किसी जगह पे आप उनका कोई क्विज या छोटे टेस्ट लेना चाहते हैं, कहीं पे आप उनके कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स लेना चाहते हैं, which and then the courses are spanned over certain weeks and certain months, and then there are certification agencies which can would like to conduct the exams, जो के जिसके अगेंस्ट मतलब वो अपनी सर्टिफिकेशन करते हैं. वन प्लस मैनी थिंग, ये उन तमाम चीजों को एज पर रिक्वायर्ड बेसिस लोगों को अवेलेबल करती है. Well, there are many valued partners here with us. जरूरी नहीं है कि ये मतलब यही है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 34 स्कूल्स जो हैं वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं. कुछ क्लासरूम को यूज कर रहे हैं, कुछ इसके वर्चुअल स्कूल सिस्टम को यूज कर रहे हैं. इंडिविजुअल फैकल्टी फ्रॉम about 13 universities, they are using it for their own lecturing purpose individually. और अभी hopefully we can look into this thing कि हमारी universities और दूसरे लोग जो है वो ऑर्गेनाइज तरीके से एज ए इंस्टीट्यूशनल लेवल इसको जो है इस्तेमाल करना इसका शुरू कर सकें. कल मैं सुन रहा था KPK के मिनिस्टर साहब एडवाइजर हैं, वो जिक्र कर रहे थे कि वो मूक्स के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें कोर्सेरा है, जिसमें दूसरे लोग हैं जिस तरह से यूडेसिटी एंड अदर, वो कह रहे थे उनके साथ हम हैंड शेकिंग करके उनको पाकिस्तान में ला के यहाँ पे इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं. तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वी हैव गॉट एन इंडिजिनस प्लेटफॉर्म अवेलेबल which has got better features, which is more feasible and I would say more appropriate, compatible for our local environment. तो इसको इस्तेमाल करें. It is from all perspective, I can assume it's better than all those platform. वो सिर्फ एक MOOCs के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट इज आवर विजन एंड आवर मिशन, बेसिकली लुकिंग इनटू दैट डायरेक्शन. एंड आई वुड स्टॉप हियर बेसिकली फॉर एनी क्वेश्चंस और एनी क्यूरीज. एंड अगर कुछ इसमें क्वेश्चंस हो तो हमारी जो वेबसाइट है ikracity.org, वहां से कांटेक्ट करके और वहां से चीजें देख भी सकते हैं और वहां से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं. दी होल ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्लीट प्रोजेक्ट इज बीइंग हैंडल्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन. और उसको एक जिसको कहना चाहिए कि एक
पूरे सिस्टमेटिक तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है और तमाम इंस्टीट्यूशंस को अवेलेबल किया जा रहा है जो कि इस्तेमाल कर रही हैं। सो जिस किसी की भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो वो उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं। दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू स्टॉप एंड सर थैंक यू वेरी मच। आप ऑन टाइम हैं, आई एम रेडी टू टेक ऑन। थैंक यू। ताहिर साहब काइंडली अगर आप टेक ओवर करें। जी, thank you very much, Dr. Ashraf Saab. Wonderful topic, very close to my heart and very much linked with the present situation. हमें 3 क्वेश्चन आए हैं, चूंकि हमारे पास टाइम भी है आपके लिए अभी। एक क्वेश्चन तो ये आया था, प्रोड्यूसर साहब जरा क्वेश्चन अगर चला दें प्लीज। वी वांट टू आंसर दैट क्वेश्चंस। बड़े छुपते हुए क्वेश्चन हैं लेकिन वी वांट टू। We are always looking for challenges. Yes. जी ब्रिगेड साहब। जी मैं क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। हाउ टू गेट इक्रासिटी, इज इट अवेलेबल ऑन यूनिक्स रिपोजिटरी? नहीं, ये यूनिक्स रिपोजिटरी में अवेलेबल उस सेंस में नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं और इन मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके कॉन्फ़िगर करके अवेलेबल किया गया और उसकी जरूरत नहीं है रिपोजिटरी के तौर पे, इन द सेंस कि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड फॉर्म में है और जिस और इंस्टीट्यूशन ने उसको इस्तेमाल करना है या इंडिविजुअल ने, वो बेसिकली उनके लिए एक जो है वो उनके लिए एक इंस्टेंस बना दिया जाता है, उनका लिंक बना दिया जाता है और वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वहां से यूज कर सकते हैं और वहां से उनके तमाम एक्टिविटीज मैनेज हो रही हैं। पीछे एक मेन सेंट्रल डेटाबेस है जिसके ऊपर सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अगर इसको मूक्स के तौर पे चलाना है तो वो तो एक पूरा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। इंडिविजुअल टीचर्स कैन ब्रिंग इन देयर ओन मटेरियल एंड पुट अप देयर, और बाकी कोर्स की तरह ये भी कुछ उसके अंदर में मटेरियल इंक्लूड होता चला जाएगा। और जैसे कोर्सेरा या कोई और है जिसमें अभी कई हजार कोर्सेज वहां पे पहुंच चुके हैं, तो उसी तरह ये कोर्सेज की लिस्ट जो है ये ऐड ऑन होती चली जाएगी और उसके अंदर अवेलेबल होगा। एज सच इसको किसी और प्लेटफॉर्म पे डिप्लॉय करने की प्रोबेबली जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ क्वाइट ए ह्यूज पैकेज which needs a quite a heavy platform for the deployment, multiple servers, or they all are integrated और many packages जो open source से लिए गए हैं वो सारे integrated form में काम कर रहे हैं। इसलिए individuals के लिए शायद प्रैक्टिकल नहीं होगा कि इसको किसी अलग जगह के ऊपर डिप्लॉय करें, अनलेस कि एक इंस्टीट्यूशन एक्सप्लिसिटली चाहिए हो, तो वो फिर इक्रासिटी प्रोजेक्ट टीम के साथ में कैन म्यूचुअली वर्क एंड हैव दैट for that particular institution as a separate instance and a platform if it is needed. जी, तारिक उबैदुर रहमान साहब पूछते हैं कि ये ओपन सोर्स है, तो इसका जवाब है यस, दिस इज ओपन सोर्स। जी सर, इट इज ओपन सोर्स। इसमें तमाम मॉड्यूल्स ओपन सोर्स हैं। इसमें जितनी कॉन्फ़िगरेशन की गई है वो सारी ओपनली अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी चीज कोई खुफिया नहीं है जिसको के किसी अलग तरीके से किया गया हो। और जिस किसी को जो पोर्शन चाहिए होगा मतलब उसको उसी तरह से कॉन्फ़िगर करके इंस्टॉल किया जा सकता है whenever and wherever it is needed. राइट, अशफाक अहमद जान साहब ने ये सवाल किया था, आपने उसको आंसर कर दिया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। वी हैव टू एंड दिस सेशन नाउ फॉर योर काइंड इनपुट ऑन दिस वेरी इंडिजिनस प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द होल ग्लोब। इंशाल्लाह हम इसको ग्लोबल उस पर लेके जाएंगे। यहाँ मैं एक जवाब देना चाह रहा हूँ। कल के एक हमारे स्पीकर थे, उन्होंने कहा था कि जी हमें री-इन्वेंट द व्हील नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली दिस इज नॉट री-इन्वेंटिंग द व्हील, वी आर मॉडिफाइंग फॉर आवर यूसेज एंड वी आर सेविंग डॉलर्स जो हम बाहर भेजते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके बदले में आपको डॉलर्स भेजने पड़ते हैं और ज़र मुबादला हमारा खर्च होता है। तो डॉक्टर साहब, आपके इस प्रोग्राम से इंशाल्लाह हम पाकिस्तान के लिए बहुत सारी बचत करेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच, आई एम ग्रेटफुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह जी। व्यूअर्स, वंडरफुल सेशन, वंडरफुल गोइंग ऑन। सो हमारे पहले स्पीकर थे। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्पीकर, जेम ऑफ अ पर्सन। मैं गया पेशावर
हमारा एक इनिशिएटिव था, उसके लिए काम कर रहे थे, तो हमने 2-3 यूनिवर्सिटीज विजिट की, तो हमें स्पेशली ले जाया गया KPIT बोर्ड, और वहां पे हमें सर्ट भी दिखाया गया और बहुत सारे विजिट कराए गए। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं वो बड़ी जबरदस्त डाइवर्सिफाइड पर्सनालिटी है। मैं 2 प्रोविंसेस के बारे में एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, वन इज फॉर सिंध और वन इज फॉर KP। पंजाब जो है वो काम करता है, एजुकेशन में काफी आगे है, और वो 400-500 साल से ये लोग बताते हैं, हिस्ट्री बताती है, लेकिन ये सूबे भी बहुत काम करते हैं। पंजाब काम करके ढोल भी बजाता है, और फेडरल तो खैर ढोल बजाता है, काम कम करता है, लेकिन सूबा सिंध में, जैसे कल हमने भवानी शंकर साहब को सुना, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जामशोरो। मैं पहले दफा जब वहां गया तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप इतना कुछ कर रहे हैं और आपने कभी कोई न्यूज़लेटर नहीं भेजा, आपने कभी बताया नहीं, आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, आपने कोई प्रेस रिलीज नहीं भेजी। सेम इज द सिचुएशन विद केपी में इस वक्त जितना काम हो रहा है पंजाब IT बोर्ड के, नॉट लेस देन दैट, इवन इन सम केसेस जैसे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, इसमें दिस इज मोर देन दैट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ये लोग बड़े मासूम हैं, मैं स्पेशल ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, इनोसेंट। वो अपना सर डाल के काम कर रहे हैं, बस उसको दिखा नहीं रहे, उसको बता नहीं रहे, उसकी प्रेस कवरेज और मीडिया कवरेज और उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। दिस इज द सेम केस। मैं जब KP सर्ट को विजिट करके आया, तो हम पिछले 20 साल से शोर मचा रहे हैं कि पाकिस्तान में एक सर्ट होना चाहिए और उसके ऊपर काम होना चाहिए वगैरह वगैरह, और बहुत सारे हमारे चैंपियन हैं, ऑस्ट्रेलिया से डॉक्टर मंशाद सती हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमारे जो स्पीकर आ रहे हैं, जिनको मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, कि प्लीज आप एक हाथ से काम करें, दूसरे हाथ से ढोल बजाएं। इस दुनिया में ये बड़ा जरूरी है, काम करना भी और उसका ढोल बजाना भी। और माशाल्लाह KPIT बोर्ड इस वक्त जो काम कर रहा है, पिछले 5-7 साल में जो डेवलपमेंट हुई है, मैं इसको किसी गवर्नमेंट से मंसूब नहीं कर रहा, इंडिविजुअल्स ने बहुत सपोर्ट किया है, प्रोफेशनली बहुत सपोर्ट किया, और एक एक शख्स जो KPIT बोर्ड में या KP के IT सेक्टर में काम कर रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो ब्रिलियंट है और अपनी अपनी जगह बहुत मेहनती है। डॉक्टर रफी शान is the Chief Cyber Security at Khyber Pakhtunkhwa Cyber Security Emergency Response Team, an initiative of KPIT board, complement the digital ecosystem of Khyber Pakhtunkhwa. He is responsible for setting up provincial CERT, standardization of ICT-based services, risk and vulnerability assessment, and penetration testing of digital assets of government of Khyber Pakhtunkhwa. His role to the design, lead, and drive information security framework and information security related initiatives, complementing the digital ecosystem and promoting e-governance solutions in KP province. Working in the role of provincial CISO, Dr. Shan is steering provincial information security policy and providing services to various provinces, provisional and national bodies in relation to information security. He is a member of the President of Pakistan Committee on Information Security and Member Evaluation Board, National Center for Cyber Security, NCCS, and various other national and international forums, bodies. He has served at ComStats University, Islamabad over 13 years and has been promoting innovation, product development, and technology-based startups. Brief but very comprehensive, very impressive profile. Let me present you Dr. Rafi Shan. Dr. Saab, over to you. Apna mic unmute kar lijiye. Thank you so much, sir. Thank you. I'll be sharing my screen in a while. Sure. Thank you for the kind words. We have tried our best to contribute into the in cybersecurity and the province to help promote cybersecurity as well and the technology governance as well at the various levels. So कोशिश यही थी कि हम साइबर सिक्योरिटी को नेशनल लेवल पे भी सामने लेके आएं और सूबे के अंदर भी प्रमोट करें, so that we can have an ecosystem where a standardization, open source, and
the digitalization of the government services can be promoted at the equilibrium, so that like in an ecosystem where we see that security is used as a tool to stop things, to hinder things, to scare away, to use as a controlling knob where the things cannot be rolled out. That's one mindset. Another mindset is security is a contributor to the whole ecosystem, is one of the fundamental contributor into the ecosystem. So thank you. I don't think so I have to add much into what we are doing into KP, but we are trying to roll it out across Pakistan. Inshallah, our purpose and aim objective is to have a established cert at the national level soon, inshallah, and other provinces to help secure the national and international citizen data at various levels. So I'll be sharing my screen. Sure. Right. So today's discussion is about how secure is open source, and it's a very interesting and something. Okay. Yes. Now I show. Okay. जी, अभी हो गया? Is it done, जी? Can you see my screen? Bilkul, first class. Carry on. All right. Okay. So today's Gigi. Thank you very much. So today's discussion is about how secure is open source. I'll try to switch between English and Urdu where this is appropriate to take along my audience. जहाँ कोशिश होगी कि हम एम्फोसिस करें उन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसलेट करने की, ताकि हम ऐसी ऑडियंस को भी रीच आउट कर सकें across Pakistan, which really need to go beyond the jargons and really need to have a touch and feel of the of technology. So it's a very interesting phenomena that is open source so secure to be deployed at a various level for the critical applications, non-critical applications, and is it really secure to be used for every purpose and any purpose? So this is kind of a notion which we have to address today. So these are the major words which we can see across associated with the open source. It's free. We have an access to the code. It is used across the platforms as a culture. There is a community behind it. So these are the jargon of technologies, terminologies we see with the open source. And most of it is true that the power of open source is because of the huge community involvement, lesser cost of acquiring technologies and deployment, customization, community support. There's a huge broad base of the set of APIs जिसको हम customize कर सकते हैं अपनी उससे, अपनी will से और अपने requirement के हिसाब से. और जितने भी हमारे पास use cases हैं उसमें हमने देखा कि the versatility of applications and the platforms has empowered this whole notion of open source and engagement of open source technologies across the various sectors. So that's that. But is it really secure? So there are two sides of the argument. That is, open source is secure. It is all good. रफी भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप उर्दू में करें, बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमसे. जी मैं उसको उर्दू में कर लूंगा. जी शुक्रिया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. तो एक तो नोशन ये है कि ओपन सोर्स बिल्कुल सिक्योर है और हमें बिल्कुल उसके की परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी इवॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है और इसके सपोर्ट ज्यादा होती है, प्लेटफॉर्म से यूजर बहुत ज्यादा है, तो कंट्रीब्यूट करते हैं और प्लेटफॉर्म जो है वो बिल्कुल सिक्योर है. दूसरी तरफ ये है कि देयर इज नथिंग सिक्योर इन द वर्ल्ड, देयर इज नथिंग फ्री इन द वर्ल्ड रादर, और हर जो चीज है उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है और मोस्टली जो टूल्स यूज किए जाते हैं उसकी देयर हैज टू बी कॉस्ट, और कॉस्ट निकलती है डेटा हार्वेस्टिंग से. फॉर एग्जांपल, अगर ओपन सोर्स एक प्लेटफॉर्म है, वो कहीं ना कहीं से एपीआईज थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी यूज कर रहा होगा और उन APIs के साथ somehow data pull हो रहा होगा, और that's how the platform is balancing its ROI. And the people obviously who are contributing to the platform need a sustainable model as well. तो इस दोनों चीजों को हम साथ लेके चलेंगे कि इन दोनों चीजों में कितना इसमें तवाज़ुन है और ये कितनी ज्यादा आसानी से, मतलब हम देख सकते हैं कि एक आर्गुमेंट को भी कुछ चीजें फेवर कर रही होंगी और दूसरे आर्गुमेंट को भी फेवर कर रही होंगी. लेकिन इससे पहले कि हम इन आर्गुमेंट्स को फर्दर देखें, मैं बेसिकली एक और चीज की तरफ आपका ध्यान चाहूंगा. वो है पर्पस क्या है, कि हम ओपन सोर्स को यूज किस पर्पस के लिए करना चाह रहे हैं.
क्या हम ओपन सोर्स को सिंपल डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं, कुछ ERP डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, कुछ वेबसाइट्स करना चाह रहे हैं, और वेबसाइट्स मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस किस्म का डेटा होस्ट करेंगे। तो द कोर ऑफ द मैटर इज कि किस क्वालिटी और किस नेचर का डेटा ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म प्रोसेस करेगा, वो ज्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्लासिफिकेशन क्लासेस की तरफ देखें, तो हमारे पास अगर कुछ सिटीजन्स डेटा है, प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है, तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसकी बेस पे हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, चाहे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, या किसी भी स्टेट या फॉर्म में प्रोसेस हो रहा हो। तो उसकी जो क्लासिफिकेशन लेवल्स हैं, वो उसकी सेंसिटिविटी और क्रिटिकल नेचर है वो डिफाइन करते हैं। तो अगर हम क्या कहेंगे कि क्या हर क्लास के लिए ओपन सोर्स उतना ही रीजनेबल सिक्योर है, तो एक दैट्स जस्ट वन एरिया व्हिच नीड टू बी एड्रेस। और सेकेंडली, कि देयर इज नथिंग basically secure, there is something which is we call reasonably secure। तो वो reasonably secure किस पैरामीटर्स की बेस पे, और किन पैरामीटर्स की बेस पे होगा? तो अगर हम किसी भी डेटा को देखें, बेसिकली अगर एनालाइज करें कि जी हमने किस डेटा को प्रोसेस करना है किसी भी प्लेटफॉर्म से, और उस डेटा की क्लासिफिकेशन कैटेगरी क्या है, क्या उसमें से कुछ पार्टली जो है वो PII की कैटेगरी में आ रहा है, कुछ सेंसिटिव डेटा है, या कुछ से ज्यादा जो है वो पब्लिक डेटा है, रिस्ट्रिक्टेड डेटा है, इंटरनल डेटा है, और फिर उसके अगेंस्ट कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स, जो भी प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स हम यूज कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उस प्लेटफॉर्म ने क्या कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स डिप्लॉय किए हुए हैं, कोई नॉन वल्नरेबिलिटीज मौजूद हैं। देयर इज अ ह्यूज ओपन सोर्स कम्युनिटी वल्नरेबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, जहां पे हमारे पास जो IOCs हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस के वो आते हैं, बहुत सारे लोग जो वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और फिर देयर इज अ ह्यूज कम्युनिटी व्हिच इज बेसिकली वर्किंग टू हैव शेयर्ड पूल ऑफ वल्नरेबिलिटीज, जहां पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज, जैसे से गूगल की डेटाबेसेस हैं, इसके अलावा CVE की डेटाबेसेस हैं, जहां पे हमारे पास वल्नरेबिलिटीज पूल इन होती हैं, और हमारे पास एक ओपन सोर्स, मेरे ख्याल से जो साइबर सिक्योरिटी में जो टूल्स की अगर लिस्ट निकाली जाए, तो मेजॉरिटी ऑफ द टूल्स इन कंट्रास्ट टू अदर एरियाज जो हैं वो ज्यादा ओपन सोर्स हैं। फॉर एग्जांपल, OWASP जो टॉप 10 है, वो कम्युनिटी ड्राइव ही ज्यादा ओपन सोर्स टूल्स या फ्रेमवर्क्स की बेस पे होती है। सो इसमें भी अगेन मैं सिर्फ कंज्यूमर एंड की बात करूंगा, जो कि जिस तरह से हम इसको यूज करना चाहते हैं उसको जरा फोकस में लाऊंगा, एंड देन आई विल बी डिस्कसिंग द अदर पार्ट एज वेल। तो द फर्स्ट थिंग, द पर्पस वी हैव टू डिफाइन, कि रीजनेबली सिक्योर हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या मेरे डेटा के लिए जो मैं प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, क्या उसको वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। दैट्स वन एस्पेक्ट। द यूज ऑफ ओपन सोर्स टूल्स फॉर द रिस्ट्रिक्टेड पर्पसेस, तो क्या कोई मैं ऐसा कुछ सेंसिटिव डेटा तो प्रोसेस नहीं कर रहा जिसको शायद ओपन सोर्स में अगर मेरा फेथ जरा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इट्स IOCs, तो वो उसको अफेक्ट करेगा। सो इसका आंसर जो है वो मैंने पहले आपको बताया कि वो क्लासिफिकेशन में है। अगर हम क्लासिफाई करते हैं डेटा को बेस्ड ऑन इट्स पर्पस एंड यूज एंड एप्लीकेशन, एंड देन वी ट्राई टू सी कि जी वो जो डेटा हमने क्लासिफाई किया है उसके अगेंस्ट जो क्लासेस हमारे पास बनी है, क्या उन क्लासेस को जो भी हम प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं उनके बीच में कोई रफ्त बनता है, उसकी कोई हमारे पास IOCs एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। इसकी क्लासिक एग्जांपल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की के कॉन्टेक्स्ट में हम लेते हैं, प्रोप्राइटरी वर्सेस ओपन सोर्स। इसमें लिनक्स वर्सेस हमारे पास जो नॉन प्रोप्राइटरी OS है, देयर आर बोथ साइड ऑफ आर्गुमेंट्स कि जी ओपन सोर्स जो है OS इज सिक्योर वर्सेस माइक्रोसॉफ्ट। तो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स अपनी जगह मौजूद हैं कुछ UI के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर हम सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट से इसको एनालाइज करें तो देखें विंडोज एस्टैब्लिश को हमारे पास क्वांटिटेटिव नंबर्स उस तरह से मौजूद नहीं है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हैक होने वाली मशीन्स जो थी क्या वो विंडोज बेस्ड थी या लिनक्स बेस्ड थी। देयर इज कुछ वेग क्वांटिफिकेशन जरूर मौजूद है, लेकिन उसमें कोई इतनी वैलिडिटी नहीं थी, लिहाजा उसको मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया। लेकिन अगेन जो बेस है आर्गुमेंट का कि हमारे पास जितने भी फॉर एग्जांपल जो डेटा ब्रीचेस होती हैं, तो वो सर्वर्स के ऊपर जो मशीन्स यूज की जा रही होती हैं, तो उस पे भी कुछ ना कुछ इसी किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे होते हैं, जिसके तो क्या वो मेजर सोर्स है डेटा ब्रीच का,
is that the point of compromise we should be considering, and uski base pe kya hum conclude kar sakte hain ki class of operating system ko ya class of systems को हम discourage करें? I don't think so. That's a very constructive argument to support, because को valid उसको back करने के लिए कुछ हमारे पास data नहीं है, because जब भी कोई data breach हुआ है उसमें जब भी हमारे post incident कोई analysis reports आती हैं उसमें हम देखते हैं कि देखो there are variable factors. Sometimes it is OS based vulnerability, और कुछ बहुत सारी दफा ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ system या network based vulnerabilities की base पे या कोई डिजाइनर आर्किटेक्चर की बेस पे या फिर पुअर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बेस पे हमारे पास डेटा ब्रीचेस होती हैं। लेकिन जो फ्रेमवर्क बेस्ड डेवलपमेंट है उसमें हमने ये एक चीज कॉमन देखी है कि अगर हमारे पास कोई फ्रेमवर्क्स कंप्रोमाइज होते हैं, उसका एक वर्जन कंप्रोमाइज होता है, तो जो हमारे पास कम्युनिटी है ये एक पावर जरूर है। जिस तरह से ओपन सोर्स कम्युनिटी काफी काफी एक उनके बीच में रब्त है, उसमें उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन है। इसी तरह से एक हैकर्स की कम्युनिटी में भी उसी तरह से एक कोऑर्डिनेशन मौजूद है। सो दे शेयर दैट इंफॉर्मेशन कि अगर एक वल्नरेबिलिटी रिलीज होती है, फॉर एग्जांपल वर्जन 5 की फॉर प्लेटफॉर्म एक्स, तो दे शेयर दैट इंफॉर्मेशन कि ये वर्जन 5 ऑफ प्लेटफॉर्म एक्स जो है वो कहाँ पे चल रहा है, और ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट जो है वो वहां पे हमें एक हमें एक्सेस पॉइंट दे देगा या हमें एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करके दे देगा। तो दे शेयर दिस इंफॉर्मेशन। सो इसका ताल्लुक जो है अगेन प्रोप्राइटरी में हमारे पास, क्योंकि वो कंपनी उसको बैक कर रही होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी आती हैं। ओपन सोर्स वाली साइड पे यह है कि हमारे पास कम्युनिटी जरूर है, लॉट ऑफ शेयर इंफॉर्मेशन, लेकिन अगेन बिकॉज देयर इज नो लायबिलिटी ऑन द लीगल साइड फॉर व्हिच वी विल बी क्लेमिंग दैट लायबिलिटी। तो ये एक बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है इसको एनालाइज करने का। तो प्रोप्राइटरी वाले केस में हमारे पास इंसिडेंट ज्यादा रिपोर्ट भी होते हैं, बिकॉज हमने वो क्लेम करना होता है, हमने सपोर्ट लेनी होती है। लेकिन ओपन सोर्स वाले केस में वी जस्ट टेंड टू स्टे क्वाइट, टेंड टू बेसिकली engage the community based on its need to know या need to engagement basis पे। So that's another aspect. एक तो ये भी ओपन सोर्स में एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं ओपन सोर्स कम्युनिटी में, तो ये सिक्योर ही होगा। उसका एक नुकसान ये भी है कि फिर हर कोई ये समझ रहा होता है कि दूसरा कोई इसको सिक्योर कर रहा होगा, लिहाजा उसकी नजर से वो शायद उसकी नजर में इतनी वो बारीक बीनी से हम उसको देखते नहीं है। तो देयर बोथ साइड्स which has an effect on this। और हमें अगर अगेन डिस्कशन को जो हमने शुरू में बात की कि हमें ये इस बात पे लिंक करना पड़ेगा कि हमारा पर्पस क्या है। तो अगर हम पर्पस रखते हैं किसी क्लासिफाइड रिस्ट्रिक्टेड डेटा की या पर्सनल डेटा की बेस पे, तो फिर हमें शायद कंट्रोल्स जो हमें अपने ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के साथ कुछ एडिशनल लेयर ऑफ कंट्रोल्स डिप्लॉय करने की जरूरत होगी। वो शायद वो लाजमी नहीं है कि वो प्रोप्राइटरी ही कंट्रोल्स होंगे। देयर आर लॉट ऑफ ओपन सोर्स कंट्रोल्स या ओपन सोर्स टूल्स जो कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन आवर फ्रेमवर्क या अक्रॉस अराउंड आवर फ्रेमवर्क। So this is another discussion. Now we'll come to the second half of our discussion. I think मेरा time भी कुछ तकरीबन 5-7 मिनट रह गए हैं, तो I'll come to the second half कि how open source community is basically helping the cyber security or cyber security, the cyber security technologies and the skill set in fact। तो उसमें अगर हम देखें तो majority 80 to 90% of the tools की जो foundation है वो open source में मौजूद है। अगर आप अक्रॉस देखना चाहते हैं, साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जो कि अवेलेबल है, और दे आर कंट्रीब्यूटिंग उनकी जो एक्सेस है, उनकी विजिबिलिटी है, उनकी फंक्शनैलिटी है, दे आर पार विद द प्रोप्राइटरी टूल्स। ऑब्वियसली उसमें फर्क जरूर है क्योंकि वो कॉस्ट बेस होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें जो स्किल डेवलपमेंट में, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ओपन सोर्स में एग्जिस्ट करते हैं। दे आर हेल्पिंग विद वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, रिस्क प्रोफाइलिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो उस एंड पे भी हमारे पास बहुत सारे ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स भी मौजूद हैं, टूल्स भी मौजूद हैं। अब अगेन जो पहली हमने बात की थी कि are these tools are good enough to be used for the security and testing purposes? Well, यहाँ पे भी दोनों आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं कि बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमारे लिए टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, अगर हम उनको ट्रेस बैक करें तो ऑब्वियसली वो ओपन सोर्स जरूर है और कम्युनिटी भी है, बट
उसके पीछे जो आपको कोर टीम कहीं से नजर आएगी, तो वो नेशन, किसी एक नेशन के साथ उनकी एसोसिएशन होगी, और देयर आर एविडेंसेस के दोस टूल्स हैज बीन यूज्ड फॉर डेटा हार्वेस्टिंग के लोग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है, और इसी तरह से मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है। अब वो ओपन सोर्स में मौजूद है, यूज किया जाता है, लेकिन उसके एविडेंसेस एस्टैब्लिश मौजूद हैं कि जहां से कि जो भी एप्लीकेशन टेस्ट की जाती है उसके जो भी डिटेल्स हैं वो जो फ्रेमवर्क है वो एक एक्स सर्वर को भेजता है, राइट। तो अगर आप उसको प्लग ऑफ करने की कोशिश करें तो पार्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी ऑफ द फ्रेमवर्क इज नॉट अवेलेबल। सो इसकी भी हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं। तो ये पहले बात हो चुकी कि जी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में मींस दैट एवरीवन एंड एनीवन कैन इंस्पेक्ट द ओपन सोर्स, लेकिन उससे पहले उसका फिर डाउन साइड क्या होगी कि वो मैनी आइज का जो एडवांटेज भी है और वो डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि उसमें शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है। तो फिर देन हु इज एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर दैट। फॉर स्पेसिफिकली मैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, बिकॉज हु विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी इफ देयर इज अ डेटा ब्रीच? Will the community will take the the responsibility, या फिर जो डिप्लॉय कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? तो ऑब्वियसली बिकॉज जो डेटा कस्टोडियंस हैं वो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो फिर डेटा कस्टोडियंस बिकॉज बीइंग ऑन द कॉन्शियस साइड दे मेक द डिसीजन कि हमने वो टूल यूज करना है जो कि रीजनेबली सिक्योर होगा विद द गिवन एनवायरनमेंट, और उसके अराउंड हम एक्स्ट्रा टूल भी लगाएंगे, राइट। Do we have the time, Tahir sir? Hello? Hello? 5 minutes, 5 मिनट हैं जी। आपके पास 5 मिनट है रफी भाई। All right, okay. So, इसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे मौजूद हैं जिसमें हमारे पास बग्स मौजूद थी सिस्टम्स में, जिस तरह से ओपन एसएसएल है, ओपन एसएसएल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसएसएल प्लस टीएसएल यूज्ड फॉर द वेब सर्वर्स। लेकिन जब उसको हमने देखा, इंसिडेंट डेटा ब्रीच हुआ, जब हम देखा तो ये एक ओपन सोर्स की वल्नरेबिलिटी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे सर्वर्स, ये सिस्टम्स अफेक्ट हुए। और इसको अगर हम कंपेयर करें किसी प्रोप्राइटरी इंसिडेंट के साथ, तो ऑब्वियसली वो स्केल और उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफरेंट होगी, बट द इम्पैक्ट इज अगेन देयर। एंड इस तरह से एज इस बेसिस पे ये अगेन this whole argument is actually going back to the जो कि initially बात हुई थी कि what is the purpose, और purpose में अगेन जो डेटा कस्टोडियन है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो इस डिस्क्लेमर को कैसे ट्रीट करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के उसको मैं आपके डिस्कशन से रिलेट करूं, तो the software is provided as is without warranty of any kind, express or implied, included but not limited to the to the warranties and so on and so forth. अगर हम इसको कंडेंस करें एक दो अल्फाज में, तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर है कि वो ये खुद देखे कि उसका फिट फॉर द पर्पस है कि नहीं है। और शुरू में मैंने आपको बात वहीं पे आपके साथ डिस्कस की कि देखिए इट इज अगेन ऑन द पर्पस, और पर्पस डिफाइन करेगा इन कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के टर्म्स में डिफाइन करूं, तो वो बेसिकली डेटा ही डिफाइन करेगा, और डेटा की क्लासिफिकेशन से हमें पर्पस ज्यादा क्लियर होगा कि क्या उसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो वो वहां से हमें एक रीजनेबल जस्टिफाइबल ग्राउंड मिलेगा जिसकी बेस पे एक अच्छा डिसीजन हो सकेगा कि अगर मेरे पास डेटा है ये सारा पब्लिक नेचर का, उसको मैंने क्लासिफाई किया है, बड़े क्रिटिकली देखा है, और डेटा मेरा है ही पर्पस पब्लिक क्लास का, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड क्लास का नहीं है, कोई पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं शायद एक बेटर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ ओपन सोर्स पे ट्रस्ट कर पाऊंगा, और मैं ऑब्वियसली साथ कोई अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स भी डिप्लॉय करूंगा। लेकिन अगर मेरा डेटा जो है वो थोड़ी सी क्रिटिकल नेचर का है, तो फिर मुझे ज्यादा कंट्रोल्स लगाने की जरूरत है। मैं इसकी एग्जांपल ये देना चाहूंगा कि देखें हमारे पास जो सीम के टूल्स हैं जो कि सॉक एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, उनके पास अप्रोक्सीमेटली पूरे नेटवर्क की सिस्टम्स की एप्लीकेशंस की एक अवेयरनेस होती है, जिसको हम कहें कि इस मेजर चंक ऑफ साइबर सिचुएशनल अवेयरनेस टूल्स, राइट।
तो उसमें हमारे पास एक तरफ तो हमारे पास IBM या प्रोप्राइटरी जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके टूल्स हैं जिनके लाइसेंसेस जो हैं वो पर लॉग एंट्री आता है। अगर फॉर एग्जांपल 10 सेंट्स वो चार्ज कर रहा है पर लॉग एंट्री, या 5 सेंट्स या लेस देन इवन 10 सेंट्स पर 100 लॉग्स वो चार्ज कर रहा है, तो उनका जो लाइसेंसिंग फी है वो $40,000 to $50,000 ईयर तक चली जाती है, या उससे भी ज्यादा चली जाती है बहुत सारे केसेस में, बिकॉज जितने आपके एंड पॉइंट ज्यादा होंगे, जितने आपके लॉग्स एंट्री ज्यादा होंगी, उतना आपका वो आपको बिल करेंगे, राइट। तो पर इवेंट लॉग वो करते हैं। उसके मुकाबले अगर हम ओपन सोर्स को देखें तो वो इट इज कंप्लीटली फ्री, और वही तकरीबन पर्पस हमें बेसिक दे रहा है, लॉग कलेक्शन दे रहा है, उसके अंदर सर्चिंग भी है, उसके अंदर कोरिलेशन भी है, उसके अंदर इवेंट भी है, हमें अलर्ट्स भी जनरेट करके देता है, और फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री की हमें उसकी बेस पे हमें सॉक सर्विसेज भी मिल जाती हैं। तो उसमें हम इवेंट्स को कोरिलेट भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस देन? डिफरेंस जो है वो टेक्नोलॉजी की स्केलेबिलिटी का है, दैट्स नंबर वन। और दूसरा यह है, फॉर एग्जांपल ओपन सोर्स में मुझे शायद खुद कंट्रीब्यूट करने पड़े, इवेंट्स को खुद से स्क्रैच से कोरिलेट करना पड़े, लेकिन कुछ टूल्स ऐसे हैं जहां पे वो अच्छी विजिबिलिटी भी है। अगेन जो प्रोप्राइटरी बेस्ड सॉल्यूशंस है उसमें शायद पहले से ही कुछ 500-700,000 जो है इवेंट्स डिप्लॉय हुए या कोरिलेट हो चुके, मतलब इसके अंदर पहले से मौजूद हों। अगेन जो डेटा, बिकॉज उसके पास मेरे पूरे नेटवर्क की विजिबिलिटी है। अगर आप देखें इस वक्त फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टूल्स जो कि ओपन सोर्स कम्युनिटी में यूज किया जा रहा है, सिक्योरिटी यूनियन उसका नाम है, मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उसके अक्रॉस द वर्ल्ड, और उस टूल के पास उस नेटवर्क पे जहां डिप्लॉय किया जाता है उसकी बहुत सेकंड और थर्ड डिग्री की इनसाइड इंफॉर्मेशन होती है फॉर एनी नेटवर्क। सो आई मीन द पर्पस इज इस एग्जांपल का मकसद ये है कि देखिए, ये नहीं है कि हम इतने क्रिटिकल लेवल पे भी ओपन सोर्स नहीं यूज कर सकते, आप कर सकते हैं। अगेन वो डिफाइन करेगा कि आपकी एनवायरनमेंट क्या है। अगर आपकी एनवायरनमेंट है और आपने उसका डिजाइन ऐसा रखा हुआ है जहां पे आप अपने आप को रीजनेबली सिक्योर समझते हैं कि आपका जो क्रिटिकल डेटा है वो अगर ओपन सोर्स के पास जा रहा है और उसको आपने वेरीफाई किया है कि वो कहीं से डेटा लीक नहीं हो रहा है, या उसके अंदर कोई इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी नहीं है, या कोई ऐसा जीरो डे है जिसकी वजह से, बिकॉज अल्टीमेटली देखें अगर प्रॉपराइटरी लेंगे, अगर कोई इंसिडेंट होगा तो लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि लॉज जो कंपनीज को समहाउ किसी लेवल पे बाउंड करेंगे, उसकी कंसेंट मैनेजमेंट पे भी या कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पे भी। लेकिन ओपन सोर्स में it is the total responsibility of the data custodian ke he is choosing that platform, so he had to employ the due diligence in that purpose. So due diligence, again, it has to be based on some rationale. So again, अंग्रेजी का मुहावरा है कि there is nothing like a free lunch, so there is always a cost, और जो कॉस्ट मोस्टली जो कॉस्ट होती है वो अगेन डेटा ही होती है, और what is the cost of responsibility for choosing a tool जिसमें मैं किसी ऐसे नेटवर्क में इसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे ऐसे नेटवर्क बेस्ड टूल्स हैं जो कि हमें नेटवर्क मॉनिटरिंग प्रोवाइड करते हैं, और उन नेटवर्क टूल्स के पास बहुत अच्छे लेवल की हमारे पास विजिबिलिटी होती है हमारे नेटवर्क्स की, जो शायद हमारे पास एज अ यूजर या एडमिन ना हो। फॉर एग्जांपल मेरे नेटवर्क्स पे कितने यूजर्स इस वक्त लॉग इन है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका ट्रैफिक बिहेवियर क्या है, उनका ट्रैफिक पैटर्न क्या है, what sort of a protocol behavior they are generating। और फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक यूजर को प्रोफाइल करना चाहूँ तो मैं उसकी ट्रैफिक, तो शायद एज एडमिनिस्ट्रेटर मेरे पास वो इंफॉर्मेशन एज अ ह्यूमन ना हो जितनी उस टूल के पास होगी। अब वो टूल जो है क्या प्रोप्राइटरी है तो उसके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एक दैट्स वन एस्पेक्ट। और जो ओपन सोर्स टूल है और उसको मैं डिप्लॉय करता हूं तो क्या व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ मिसयूज ऑफ दैट डेटा अगेंस्ट माय यूजर्स। अब देखें जो भी डॉक्टर रफी, हमें खत्म करना पड़ेगा सेशन, वी आर क्लोज ऑफ टाइम। जी ओके जी, ओके, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग। थैंक यू वेरी मच। पुलिस साहब कोई क्वेश्चन है तो प्लीज जी एक क्वेश्चन ले लीजिए। डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? जी जी बताइए। क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? Have you implemented open VAS in KPID? Okay. जी जी देखें
ओपन बैस जो बाकी नेटवर्क के टूल्स हैं KPIT बोर्ड के अंदर तो शायद हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसको हम एक्सेसिवली मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अपने पास जो है वो सीम और सॉक टूल्स डिप्लॉयड हैं। हमने अपने जो लैब है वहाँ पे हमने सिक्योरिटी ओनियन को भी डिप्लॉय किया हुआ है। हमारे पास एलियन वॉल्ट की डिप्लॉयमेंट भी है ओपन सोर्स वाली एडिशन की। और हमारी जो लैब है उसके अंदर हमने 30-40 VMs तैयार की हुई थी। कोविड से पहले हमारे फिजिकल वहाँ पे ट्रेनिंग होती थी वेब की, मोबाइल की और नेटवर्क पेन टेस्टिंग की। उसमें जितने भी टूल हम पिछले 2 सालों से यूज कर रहे थे वो सारे ओपन सोर्स थे। और सिर्फ टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स को हमने यूज किया था जो कि शायद प्रॉपर्टी थे, बट मोस्ट ऑफ द टूल्स जो कि हम ट्रेनिंग में तकरीबन 100% ऑफ द टूल्स वर ओपन सोर्स टूल्स। और उसके अराउंड कंटेंट और करिकुलम भी हमने अपना ही बनाया हुआ था। उसके अंदर जो टेस्ट केसेस भी बनाए हुए थे वो भी सारे हमने ओपन सोर्स कम्युनिटी को, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म को ही यूज करके बनाया हुआ था, रादर हम एक प्रॉपर्टी टूल लें और उसके अराउंड एक कंटेंट बनाए। राइट, ठीक है डॉक्टर साहब। ये अपने एनवायरनमेंट में था, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमारे पास डेटा सेंटर या कोई इस तरह की एक वाइडर प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हमें नॉक को मॉनिटर करना पड़े, लिहाजा उस तरह के टूल हमने डिप्लॉय नहीं किए। वंडरफुल जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट सेशन। हमारे पास बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे साथ साथ लाइव लोगों के। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और लिटरली वी आर कन्विंस्ड दैट KP गवर्नमेंट हैज एम्प्लॉयड people like you, learned from the academia with the basic knowledge, with the brief detailed knowledge on the subject, mashallah. So I think we are in safe hands. Thank you very much. बहुत शुक्रिया। Thank you so much, sir. Thank you. It's always a pleasure. जी व्यूअर्स, आपने बहुत जबरदस्त टेक्निकल सेशन सुना और दिल खुश होता है कि गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो PhD हैं, जो अपने सब्जेक्ट के मास्टर हैं और वो डिप्लॉय भी कर रहे हैं अपने उस टॉपिक को। तो हम इसी रिदम में और इसी कंटिन्यूटी में आगे चलते हैं। हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं वो भी PhD हैं। आपको हैरत होगी कि KP का जो ओपन सोर्स फाउंडेशन है उस चैप्टर में 20 PhD हैं इस वक्त माशाल्लाह। हमारे पूरे पाकिस्तान के जो हैं ओपन सोर्स फाउंडेशन में उसमें 11 हैं अभी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि KPIT बोर्ड KP में ओपन सोर्स फाउंडेशन चैप्टर में 20 PhDs हैं। तो ये क्रेडिट सारा जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर काका खेल को जाता है कि उन्होंने बड़ी अच्छी सिलेक्शन की है और माशाल्लाह लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आवर नेक्स्ट स्पीकर इज डॉक्टर आकिफ खान, एन ICT प्रोफेशनल, project architect and information system expert with over 15 years of experience of working with the government. He specialized in strategizing, planning and implementing ICT projects in government sector and creating policies to introduce digital first culture in the government. He has led teams who have the credit of developing digital solutions like the Pakistan Citizen Portal and other e-governance and m-governance activities in Khyber Pakhtunkhwa. आपने सुना होगा कि थाने भी कंप्यूटराइज हो गए हैं, थाने भी थाना और डिजिटल थाने बन गए हैं। ये सारा क्रेडिट और हॉस्पिटल्स हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। डॉक्टर आकिफ holds a PhD degree from Peshawar University. He has several other certifications including COVID-5 Project Management Professional (PMP), Zen Certified PHP Engineer, Certified Ethical Hacker (CEH), and Microsoft Certified Solution Developer. Let me present you Dr. Akif Khan. He will speak on usage of open source technologies in government. Dr. Saab, over to you. बहुत शुक्रिया ताहिर साहब, आपने बड़ी ज़्यादा तारीफ की है। मेरी जो प्रेजेंटेशन होगी वो बेसिकली ज़रा फोकस होगी 3 एरियाज पे। एक जिस तरह आप एक कोलैबोरेशन के साथ पख्तूनख्वा ओपन सोर्स फाउंडेशन एस्टैब्लिश हुआ आपकी कोलैबोरेशन के साथ, तो फिर पहला जो पार्ट होगा वो उससे रिलेटेड होगा। दूसरा फिर गवर्नमेंट किस तरह सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या ई गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा किस तरह उसको एक लीगल फ्रेमवर्क उसने प्रोवाइड किया है इन तमाम ICT इंटरवेंशंस को। और फिर जो ई गवर्नेंस की कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हमने बनाई हैं, जिस तरह हम तो एज सिटीजन देखते हैं कि जी प्राइस कंट्रोल हो रही है, कोविड की जो स्प्रेड को कंटेन किया जा रहा है, बहुत से गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, तो उसमें ई गवर्नेंस किस तरह अपना रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन
वो सिटीजन को बैकएंड, चूंकि वो चीजें बैकएंड पे होती है, आपकी एप्स बैकएंड पे चल रही होती है, आपके बैक ऑफिस एप्लीकेशन, आपके जो डैशबोर्ड्स हैं, आपके जो सिस्टम्स हैं, तो वो बैक पे चल रहे होते हैं। वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे सेक्रेटरी साहिबान, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं। तो बहुत से, अगर आप देखेंगे, बहुत कम एप्लीकेशन आपको सिटीजन फेसिंग नजर आएगी, अदर दिन जो बाकी एप्लीकेशन हैं तो वो नॉर्मली बैकएंड पे ही चल रही होती है। तो मेरा पर्पस आज जो इस प्रेजेंटेशन का एक ये भी होगा कि मैं आपको कुछ फ्लेवर दे सकूं कि जो भी एप्लीकेशन बनी हुई है जिसमें हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में बनी हुई है, तो उनको मैं जरा हाईलाइट कर सकूं। तो बेसिकली मेरे उसका 3 पार्ट्स में ये प्रेजेंटेशन में ट्राई करूंगा कि अपने टाइम में कंप्लीट करूं। सर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। Sure. शेयर होने तक ऑन रखें। जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं, शेयर कर दीजिए। अभी नजर आ रही है आपको? नहीं। जी, भी अब ठीक है। ठीक है जी। जी। अच्छा जी, बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा का जो गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा का एक विजन है कि खैबर पख्तूनख्वा को बनाया जाए डिजिटल हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो इसकी बहुत सी रीजंस है। इसमें एक हमारा जो गवर्नमेंट की टॉप लेवल सपोर्ट है हमारे साथ, जो चीफ मिनिस्टर साहब से चीफ सेक्रेटरी साहब, सेक्रेटरी साहिबान, जो हमारे पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सपोर्ट है टेक्नोलॉजी के साथ, वो हमेशा ऑन द फ्रंट रही है। इस टाइम 3 हमारे जो इंस्टीट्यूशन, बेसिकली एक ही प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इन तमाम इंटरवेंशंस को लीड करता है। और उसके सपोर्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड एंड डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये वो तमाम एरियाज हैं जो कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी को या प्रमोशन को या जो कल्चर ऑफ आईटी न्यू अवेयरनेस को अनेबल करने के लिए ये अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बेसिकली मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा ओपन सोर्स फाउंडेशन का, जिनकी वजह से आज हम अनेबल हुए हैं, आज आप हमें सुन रहे हैं, पख्तूनख्वा से एक आवाज़ आपको आ रही है इसकी, और एक जो हम इस काबिल हुए कि एक कोलेब्रेशन हो सके। तो मैं एक्नॉलेज करूंगा उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया इन एस्टैब्लिशिंग द ओपन सोर्स फाउंडेशन। ये कुछ हमारे वो लेजेंड्स हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल के अरसे में खैबर पख्तूनख्वा ओपन सोर्स फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया, और इसमें कल लुत्फुल्लाह साहब जो कि लेजेंड है इसमें, जो उनका बैकग्राउंड बेसिकली केमिस्ट्री से है, लेकिन अगर अगर आप पख्तूनख्वा में अगर आप उनके वो देखें तो वो बेसिकली रहे हैं चेयरमैन रहे हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का, खैबर पख्तूनख्वा के फर्स्ट आईटी बोर्ड के वो चेयरमैन रहे हैं। इस तरह वो ओपन सोर्स गुरु हैं। वो आपको केमिस्ट्री के बंदे नजर नहीं आएंगे ज्यादा, वो आपको टेकी और वो एक ओपन सोर्स एडवोकेट आपको ही फील होगा उनके साथ। जो विजन है हमारा ओपन सोर्स का पख्तूनख्वा का, जो लिविंग नो वन बिहाइंड, हमारी जो फोकस पख्तूनख्वा फाउंडेशन की है, ओपन सोर्स फाउंडेशन की, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन, अवेयरनेस और एक रिस्पॉन्सिबल एनवायरनमेंट और कम्युनिटी इस्टेब्लिश की जाए कोलैबोरेशन के साथ, इंटीग्रेशन के साथ, और एक लॉन्ग टर्म विजन क्रिएट करें हम, और जो डाइवर्स स्टेक होल्डर हैं उनको हम इकट्ठा करें इनके साथ एक इंटीग्रिटी के बेसिस पर एक फाउंडेशन इस्टेब्लिश करें जिसकी अपनी कोर वैल्यूज हो, जिसमें ये हो कि जी जो भी टेक्नोलॉजी है दैट इज फ्री फॉर ऑल, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से फायदा उठाएं एंड सो ऑन, और एक अनेबलिंग एनवायरनमेंट, एक मार्केट क्रिएट करें जो कि बेसिकली जो पाकिस्तान की एक तकदीर बदल ले। अब आते हैं जी खैबर पख्तूनख्वा जो टेक्नोलॉजी का पार्ट, हम गवर्नमेंट किस लेवल पर उसको सीरियस ले लेता है। ये है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की गुड गवर्नेंस स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी के 5 पिलर है। इसमें पांचों जो 5th पिलर है दैट इज आइडिया, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि जो आइडियाज, इनोवेशन है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगी, ई गवर्नेंस होगी, डिजिटल गवर्नेंस होगी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगी, तो उसको गवर्नमेंट बहुत एक कंप्लीट पिलर उन्होंने दिया हुआ है कि जी इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि आप बाकी पिलर्स को अचीव कर सके। 1, तो ये बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एक
सपोर्ट है द गवर्नमेंट की कि जी, और ये बेसिकली एक वो भी है, एक कॉल है फॉर द एंटरप्रेन्योर्स, फॉर स्टार्टअप्स एंड फॉर द जनरल पब्लिक कि जी आप आए और आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वन एक दूसरा फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो कि आईटी बोर्ड ने एक डिजिटल पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी में अगर आप उसमें देखें तो अडॉप्शन ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बाय द गवर्नमेंट इज अ पॉलिसी आइटम है, और इसमें बहुत से हमने इसमें काफी काम किया हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट तमाम जो हमारी 60% एप्लीकेशन है वो ओपन सोर्स में बन रही है, हमारी जो डेटा बेसिस है वो हमारी ओपन सोर्स है, जो हमारा बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्वर साइड पे, डेटा सेंटर साइड पे, वो सारा ओपन सोर्स है। और इस तरह अब हम एक और जो अभी सेक्रेटरी साहब आए हैं, सेक्रेटरी नाइटी साहब, उन्हें पूरा एक फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तमाम गवर्नमेंट के जो सिस्टम्स होंगे तो वो तमाम ऑफिस की जगह ओपन ऑफिस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और जो विंडोज हैं तो उसको यूबंटू ओपन सोर्स पे शिफ्ट कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब देखते हैं गवर्नमेंट, आप देखते हैं कि जी कंप्लेंट्स आप करते हैं, कंप्लेंट्स हल होती है। आप देखते हैं कि स्कूलों में फर्नीचर पहले नहीं होती, अब फर्नीचर अवेलेबल है। आप देखते हैं कि जी अनहाइजीनिक चीजें बेची जा रही हैं, उसको कंट्रोल के लिए अब एक गवर्नमेंट ऑल द टाइम इन एक्शन होती है। मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, स्पोरियस ड्रग, इस तरह की जो मसाइल है हमारे माशरे में, ये गवर्नमेंट को डेफिनेटली रिपोर्ट होती हैं। आप इंक्रोचमेंट आप देखते हैं जो कि अनऑथराइज्ड जगहों पे लोगों ने जगह बनाई होती है, तो उसके पीछे भी एक सिस्टम अवेलेबल है। और फिर अब आप देखते हैं कि जी आपकी सिक्योरिटी के लिए और आपकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट किस तरह ऑपरेट करती है। अब ये बेसिकली ये जो गवर्नमेंट इन एक्शन वाला जो कुछ स्क्रीन मैंने आपको दिखाए हैं, तो इसके पीछे गवर्नमेंट का एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, बड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म अवेलेबल है। इसके पीछे बड़ी एक टेक्निकली ओपन सोर्स में एस्टैब्लिश सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, जिसमें रिपोर्टिंग से लेकर उसकी फाइनल डिसीजन मेकिंग तक, उसकी फॉलो अप तक, और उसकी जो फाइनल जब आप फॉर एग्जांपल में जो स्पोरियस ड्रग का है, इस तरह बहुत से केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं कि जी यह इस शॉप पे या स्पोरियस ड्रग्स अवेलेबल है, तो हमारे ये ऑटोमेटिकली डिप्टी कमिश्नर को फ्लैग हो जाती हैं, और डिप्टी कमिश्नर साहब उसको जो कंसर्न टीम है हेल्थ डिपार्टमेंट को उनको फॉरवर्ड करते हैं। ये सारा डैशबोर्ड बेस आपको नजर आ रहा होता है, और उनकी एक टेक्निकल फॉलोअप होती रहती है, और उस फॉलोअप के बेस पर जब वो उस बंदे को पकड़ लेते हैं, उसको जुर्माना करते हैं, इस पर द रूल जो इस पर द लॉ जो भी उसका मैकेनिज्म होता है, तो उसको कन्फिस्केट कर लेते हैं। तो इस तरह बहुत से 100 ऑफ एप्लीकेशंस हैं, 100 ऑफ सर्विसेज हैं जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होती है। ये कुछ मैं आपको एक इम्पैक्ट बताऊंगा कि जी ये जो डिफरेंट सिस्टम से हमारा डेटा आ रहा होता है, तो उसके मुताबिक एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे हम काम कर रहे होते हैं कि जी आपने कितनी इंस्पेक्शंस हेल्थ डिपार्टमेंट में की हैं, कितनी एजुकेशन इंस्पेक्शंस की हैं। फॉर एग्जांपल उसमें ये होता है कि जी वॉशरूम स्कूल में अवेलेबल है, बाउंड्री वाल है, टीचर अवेलेबल है कि नहीं है, कितनी परसेंट इंप्रूवमेंट आई है रेवेन्यू में, कितनी परसेंट ड्राइविंग लाइसेंस आपने इस दफा इस लास्ट क्वार्टर से ज्यादा बनाए हैं, इस तरह रेवेन्यू केसेस हैं, डोमिसाइल्स हैं, आपने कितने इलीगल बेल बोर्ड रिमूव किए हैं, स्टेट लैंड आपने कितनी रिकवर की है। सो दीज आर बेसिकली परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि बेसिकली इन सिस्टम्स के थ्रू हम जज कर रहे होते हैं, और ये वो डिसीजन पॉइंट्स होते हैं जिस पे हमारे जो टॉप मैनेजमेंट होती हैं वो डिसीजंस लेते हैं कि जी आगे हमने हेल्थ में क्या करना है, आज आगे हमने रेवेन्यू में क्या करना है। तो ये एक तासुर कि जी गवर्नमेंट के पास टेक्नोलॉजी का वो सपोर्ट नहीं है, ये गलत है। गवर्नमेंट तमाम एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग पे काम कर रही होती है, एक एविडेंस बेस्ड सिस्टम है हमारा, और उस एविडेंस बेस्ड सिस्टम जो है बेसिकली वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा होता है कि जी गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस तरह इवन पाइपलाइंस का है, आपका वाटर एंड सैनिटेशन का है, बर्थ सर्टिफिकेट का है, कितने रोड्स रिपेयर हुए हैं, कितने करप्शन के केसेस आए हैं, कितने हेरेसमेंट के केसेस आए हैं। तो ये बेसिकली सिर्फ सिटीजन पोर्टल नहीं है, डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि हमें ये डेटा कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। वो डेटा एक सेंट्रल रेपोजिटरी में आता है, फिर उस पर हमारे बिजनेस एनालिसिस होती है, बिजनेस इंटेलिजेंस होती है उसमें, और उस बिजनेस एनालिसिस के बेस पे ही उसके कुछ आउटकम नजर आते हैं कि जी क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और एग्जांपल इसमें दूंगा जिसमें कोविड की है। तो कोविड के लिए एक सिस्टम बना हुआ है ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी में जो कि स्प्रेड को कंटेन करने के लिए है। तो इसमें आपके पास डेली बेसिस पे केसेस आते हैं कि जी एक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट आज राइज कर रही है, तो आपने अपनी टीम डिप्लॉय करनी है हेल्थ डिपार्टमेंट की, आपने स्मार्ट लॉकडाउन करना है, और इसी सिस्टम के बेस पर ऑटोमेटिकली वो चीजें ट्रिगर होती है। अब एक गवर्नमेंट में एक मिसकंसेप्शन भी है कि जी अगर आप कंप्यूटर ले आए तो आप ई गवर्नेंस, बस आप कंप्यूटर दे दें मुझे,
तो इससे ई गवर्नेंस आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आईसीटी हमेशा एक एनेबलर रहा है। एक रिफॉर्म के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग होती है, इसमें लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, जो कि लकीली खैबर पख्तूनख्वा बहुत आगे है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज जिसमें हमने बनाई हुई है। तो उन एक रिफॉर्म में जो मल्टीपल चीजें, तो उसमें सिर्फ आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आईसीटी का सिर्फ कंपोनेंट डेट्स ई गवर्नेंस में बहुत छोटा कंपोनेंट होता है, लेकिन ये अनेबल करता है, इसके बगैर आप कर भी नहीं सकते। कुछ सिटीजन एंगेजमेंट इनिशिएटिव्स में पहला खैबर पख्तूनख्वा सिटीजन पोर्टल था जो कि 2015 में लॉन्च हुआ। उसमें आप कंप्लेंट कर सकते थे, अनाउंसमेंट्स थी, आप ई सिटीजन सर्विस आप ले सकते थे, डोमिसाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते थे। आपके पास ये अवेलेबल थी कि जी कौन सी सर्विस लेने का प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैंने बर्थ सर्टिफिकेट लेना है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, किधर जाना है, मैंने कितने पैसे देने हैं, ये तमाम चीज़ें अवेलेबल थी। फिर आपको आपके दलील नरखनामा आपके पास अवेलेबल था। अभी ये मॉडल 2015-16 में जब ये कामयाब हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये बेसिकली सिटीजन पोर्टल के शक्ल में खैबर पख्तूनख्वा की जो टीम है उसने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म यूनिट की जो टीम है, तो उन्होंने बेसिकली इसको रेप्लिकेट किया ओवर द 21 डेज। हमने ये पूरा पोर्टल जो है बेसिकली पाकिस्तान लेवल पर हमने रेप्लिकेट किया। ये एक बहुत चैलेंजिंग असाइनमेंट थी, काफ़ी क्योंकि 8,000 से ज़्यादा इसके यूजर्स हैं, डैशबोर्ड यूजर्स हैं, और अब तक अभी मैं इसमें आगे स्लाइड में इसकी स्टैटिस्टिक में आपको बताऊंगा। अब करंटली अभी हम पीएमडीयू के साथ इसमें कंटिन्यूसली इंगेज हैं। इसका जो सारा बैकएंड है वो सारा ओपन सोर्स पे है। पीएचपी लाराविल में ये स्टैब्लिश बना गया है। गिटहब पे इसकी वो अवेलेबल है, सोर्स अवेलेबल है, जो कि बेसिक कोलैबोरेटिवली हम कोड कर रहे होते हैं, केपी की टीम और इस्लामाबाद जो एनआईटीबी की टीम है। इसके अलावा जो उसका बैकएंड वो ओपन स्टैक पे है, जो आपका बैकएंड सर्वर्स हैं, उसका जो डेटा सेंटर बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया है वो भी ओपन स्टैक पे ही है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है बेसिकली। ये स्टैटिस्टिक मैं आपको इस वजह से बताना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐप, एक टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की ये इम्प्लीकेशन है, ये उसके रिजल्ट्स हैं। रिजल्ट ये है कि जी 30 लाख लोगों को ये आवाज़ अब इनके पास है कि वो आज अपनी मोबाइल उठाएं, आप कंप्लेंट करें, गवर्नमेंट को सुनेगी। और अब तक 2.8 मिलियन कंप्लेंट्स रिसीव हो चुकी हैं। अराउंड 92% हमारा रिजोल्यूशन है, अराउंड 52% हमारी सेटिस्फेक्शन रेशो है। और इस तरह बहुत से लोग कंप्लेंट हल हुए हैं। ऑब्वियसली हर एक कंप्लेंट हल होना पॉसिबल नहीं है। कुछ कंप्लेंट्स होती है जिसमें बेसिकली टोटल डिमांड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मेरे घर के सामने मोटरवे बना दे, इस तरह की कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो तो उसमें कुछ डिमांड्स होती हैं, कुछ कंप्लेंट्स होती हैं, जो जेन्युइन कंप्लेंट्स होती हैं, बहुत से इसमें हल होते हैं। पूरा एक मैकेनिज्म इसका एस्टैब्लिश है। ये कुछ इसकी रजिस्ट्रेशन है प्रोविंस वाइज। पंजाब की सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन है, फॉलोड बाय केपी एंड सिंध, लेकिन इसकी स्प्रेड अक्रॉस पाकिस्तान है। ये मशीनरी जो कि बैकएंड पे इसके काम करती है, ये बेसिकली वो डैशबोर्ड्स हैं जहां पर आपकी कंप्लेंट्स टर्मिनेट होती हैं, जहां पर आपकी कंप्लेंट हल होती है। अभी मैंने एक पर्टिकुलर एरिया मैंने वो किया, ये जियो टैग होती है तमाम कंप्लेंट्स, जिस तरह आपको पता होगा उसका, और उसमें जो रिजॉल्व होती हैं तो वो ग्रीन में, और जो अनरिजॉल्व होती हैं तो वो बेसिकली रेड कलर में आपको नजर आती है। और अकॉर्डिंगली फिर जो जिसका भी डैशबोर्ड होता है तो वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है अपनी टाइमलाइन में। इसमें अपना टाइमलाइन का एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है। इसके अलावा इन गवर्नमेंट जो इंटरनल एप्लीकेशन है, अभी ये ऐसी एप्लीकेशन है जो कि पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं गव 360, इसमें गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी साहिबान है, हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, तो उनकी एक ऐप है, और इस ऐप के बैकएंड पे एक पूरा सिस्टम है, बैक ऑफिस सिस्टम है, जिसमें उनको जितने टास्क चीफ सेक्रेटरी साहब टास्क असाइन करते हैं, या सेक्रेटरी साहब खुद टास्क असाइन करते हैं, उनकी फाइल ट्रैकिंग की क्या पोजीशन है, उनके टेबल पर कितनी फाइलें पड़ी हैं, कितने दिनों से पड़ी हैं, उनके कितने कंप्लेंट्स हैं, इनके पास कितने लिटिगेशन के केसेस हैं। इस तरह बहुत से सिस्टम उसमें है। रेवेन्यू के केसेस कितने टाइम से पेंडिंग है, कब उसने इसको रिजॉल्व करना है, और उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑटोमेटिकली उसको वो ब्लिंक कर रहा होता है। तो उसको अपने मोबाइल से ही उसको पता चल जाता है कि जी कौन सी चीजें किस किस जगह पे किस तरह जा रही है। इस तरह एक और जो मैकेनिज्म है, दैट इज द प्राइस कंट्रोल। आप देख रहे होंगे जी चीनी की प्राइस ज्यादा हुई है या टमाटर की प्राइस ज्यादा हुई है, तो ये बेसिकली इसके पीछे भी एक पूरा साइंटिफिक हमारा प्रोसेस है। उसमें फर्स्ट जो उसकी एप्स बनी है, ये तमाम जो एप्स हैं ये ओपन सोर्स में बनी है। अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कैलेंडर अवेलेबल है कि जी पुख्तनख्वा में किस मंथ में
कौन सी प्रोड्यूस आएंगी, फॉर एग्जांपल टमाटर स्वात में आएंगी, कालाम में आएंगी, कालाम से आएंगी, पिशावर आएंगी, किधर आएंगी, किस रूट से आएंगी, कितनी होंगी। वन, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि जी आपके पास टमाटर की स्टॉक कितनी अवेलेबल है डिस्ट्रिक्ट में, इन केस जिस तरह कोविड में हुआ था, जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी कि जी हमारे पास प्रोविंस में राइस कितना है, हमारे पास शुगर कितनी है, हमारे पास गाड़ियां कितनी है, ताकि अगर हम मूवमेंट कर सकें तो हम कर सकें। वन, दूसरा, हर सुबह हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान होते हैं वो प्राइस फिक्स करते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म है, वो ऐप पे जाकर मंडी जाते हैं और वो मंडी से वो तस्वीर लेते हैं, अपनी तस्वीर भी लेते हैं और उस नरकनामे की भी तस्वीर लेते हैं, ताकि क्योंकि जब एसी साहब खुद जाते हैं तो वो प्राइस में सिग्निफिकेंट डिक्रीज आती है, लेकिन अगर उनका कोई असिस्टेंट जाता है तो फिर उसमें इतनी डिक्रीज नहीं आती। तो वन, थर्ड, सिटीजन को एक सिटीजन रिपोर्ट कर सकता है कि जी कहाँ पर ओवर प्राइसिंग है पार्टिकुलर शॉप पे, ऑटोमेटिकली वो अलर्ट चला जाता है उसके डीसी को, एसीज को। और फिर एक इंस्पेक्शन मैनेजमेंट का एक पूरा सिस्टम है जिसमें जितने भी इंस्पेक्शंस होते हैं, चाहे वो प्राइस कंट्रोल के हो, चाहे एजुकेशन के हो, चाहे हेल्थ के हो, चाहे होर्डिंग पे रिलेटेड हो, चाहे जिस रिलेटेड हो, तो उन सब की फिर एक परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग से हम आपको एक प्राइस बता सकते हैं कि जी इस टाइम नरकनामे की, इस टाइम स्टॉकिंग की क्या सिचुएशन है, स्टेबल है, अबव है, ओवर है, क्या सिचुएशन है, गवर्नमेंट को ये आइडिया होता है। ये कुछ स्नैपशॉट है उसकी डैशबोर्ड, जो लाइव डैशबोर्ड है हमारे, और इसमें आपको ये नजर आ रहा होगा कि जी कौन सी कमोडिटी जो है कितनी उसमें अवेलेबल है, इसमें यूटिलिटी स्टोर की भी कवरेज अवेलेबल है। इस तरह फिर आपको मैप वाइज पता चल सकता है कि जी किस इलाके में टमाटो की प्राइस, क्या कमोडिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो कितनी परसेंट है और कितनी टाइम में वो खत्म होगी, ताकि फिर हम नेक्स्ट उसके लिए प्लान कर सकें। ये जो इंस्पेक्शन का मैं बता रहा था कि जी गवर्नमेंट के दो रेगुलेटरी फंक्शंस होते हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, एक प्राइस कंट्रोल करना और एक उसकी जो इंस्पेक्शन करना कि जी आपके मार्केट के जो पल्स है उसको आप डिटरमिन कर सकें और उस पर आप नजर रख सकें। अब ये जो ऐप है जो बेसिकली इट्स कॉल्ड केपी इंस्पेक्शन ऐप, जो कि एंड्रॉइड में बनी है, उसमें ये जो ऑफिसर जाते हैं तो वो पार्टिकुलर जिस तरह आप सिटीजन टैग करता है, इस तरह ये ऑफिसर भी टैग करते हैं कि मैंने आज ये शॉप मैंने एग्जामिन की, ये ओवर प्राइस कर रहा था, ओवर प्राइसिंग के उसमें मैंने इतना जुर्माना किया है और ये उसकी जुर्माने की रसीद है, या मैंने इसको FIR किया। ये तमाम चीजें हमारी लॉग होती है और ये बेसिकली एक परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है जो कि उनके ACR में, उन ऑफिसर के ACR में लिखा जाता है। ये हमें कुछ आइडिया देता है कि जी किस टाइप ऑफ वायलेशन पे आपकी जो टाइप ऑफ वायलेशन है, किस किस की वायलेशन में आपको कितना कितना आपने इंस्पेक्शंस किए। तो ये आपको फेयरली अच्छा आइडिया देता है कि जी फॉर एग्जांपल ये ओवर प्राइसिंग है तो सबसे ज्यादा आपके जो ओवर प्राइसिंग की रिलेटेड इंस्पेक्शन होती है वो ग्रोसरी शॉप्स में होती है। इस तरह क्लीनिनेस भी उसमें इशू है, तो उसका मतलब यह है कि आप ग्रोसरी शॉप को फोकस करें, डायरेक्शन दें, और तो ये को एक डिसीजन पॉइंट बेसिकली दे रहा होता है कि जी इस तरह सेकंड होटल से, तो ये आपको बेसिकली एक ट्रिगर्स आपको दे रहा होता है कि जी आपने क्या करना है। इस तरह जो मैं अभी आपको प्राइस वाला फिक्सेशन वाला वो बता रहा था कि मंडी में सुबह जाते हैं, बाद फिर ऐसा होता है कि जी आप अगर वो रिपोर्ट किसी और जगह से सबमिट करते हैं जो कि मंडी से बाहर है, तो सिस्टम आपको बता रहा होता है कि जी आपने ये जो रिपोर्ट सबमिट किए हैं ये मंडी से 2 किलोमीटर वो किए, तो इस वजह से ये आपने इन मंडी नहीं की। तो इसमें हमें पता चल जाता है कि जो बंदा ऑफिस जो मंडी नहीं जाता तो उसको फिर हम पकड़ सकते हैं, उस पर उसकी अपनी सजा है, वो एक्शन फिर गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट लेती है। एक और ऐप आपने देखी होगी अभी जो अभी ज़ैनब अलर्ट्स के नाम से एक सिस्टम बना इन कोलैबोरेशन विद द पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल, जो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की एक अचीवमेंट है। उसमें बेसिकली एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस मैकेनिज्म एस्टैब्लिश किया, ये अगेन इन ओपन सोर्स है, और इसका एक बड़ा जो खूबसूरत पार्ट है उसका वो ये है कि जब भी कोई बच्चा अलर्ट जनरेट होता है तो उसमें आप कुछ डिटेल लेते हैं कि बच्चा कौन है, कहाँ से है, या आप खुद जानते हैं, आप या किसी और का बच्चा है, तो आप उसकी कुछ डिटेल लेते हैं और सबमिट करते अगर उसकी पिक्चर अवेलेबल है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो हमारी पिक्चर की डेटाबेस है, तो ओपन CV के थ्रू जो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है फेशियल रिकग्निशन का, तो उसके थ्रू फिर ये जो वो कंपेयर करता है तमाम अपने डेटाबेसेस में जितनी भी पिक्चर्स हैं। तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा है वो चतराल से घूम गया है और लाहौर में किसी ईदी सेंटर के पास है, तो वो आप मैच कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो ये एक बड़ा इसका एनेबलिंग फीचर है। और इसमें अभी हमने ईदी सेंटर्स को, ईदी होम्स को
जो बाकी जो सेंटर्स हैं, फ्लाई सेंटर्स हैं, तो उनको हमने इसकी एक्सेस दी हुई है, पुलिस स्टेशन को इसकी एक्सेस दी हुई है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन इसमें फीड ऑन कर सके। तो वो जो टू वे, अगर आप बच्चा गुम जाए तो कम से कम फेशियल रिकग्निशन के थ्रू आप उसको पिक कर सकते हैं। ये उसके कुछ डैशबोर्ड है उसका कि कितने केसेस हैं, कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने पेंडिंग है, कितने कितने टाइम में इसने कंप्लीट करने हैं। और जब भी कोई बच्चा अलर्ट इनिशिएट होता है तो उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, जितने भी पुलिस के जो ऑथोराइज यूजर्स होते हैं, जो ईडी सेंटर्स हैं, तो उनको एक अलर्ट चला जाता है कि जी यहाँ पर एक बच्चा गुम गया है, किसको भी मिले तो इमीडिएटली हमें इस पर रिपोर्ट करें। इस तरह एक और जो इम्पोर्टेंट जो केस स्टडी थी, दैट इज द कोविड रिस्पांस में जो सिस्टम बना, इसे हम कहते थे एहतियात कोरोना पोर्टल। इसमें जितनी भी पेशेंट प्रोफाइलिंग है, उनकी जियो टैगिंग होती है। उसी जियो टैगिंग के बेस पर बेसिकली आपको आइडिया होता है कि किस एरिया में स्प्रेड कितनी है कोविड की। फिर उसके बाद फिर क्लिनिकल इंफॉर्मेशन उसकी आती है कि जी उसका सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, तो उसके बेस पर भी आपको आइडिया हो सकता है। फिर क्या आप करते हैं कि जी किधर एडमिटेड है, उस किस हॉस्पिटल में है, तो इसके बाद फिर आपको ये भी आइडिया हो सकता है कि जी इस हॉस्पिटल में आपके पास फैसिलिटीज़ कितनी है, क्या वो किस कंडीशन में है, स्टेबल है, क्रिटिकल कंडीशन में है। फिर उसकी जो लैब टेस्ट जाता है और लैब की जो रिपोर्टिंग आती है, ये सारा एक ऐप है। उस ऐप के थ्रू हम QR कोड बेस्ड स्कैनिंग होती है। हमारी पेशावर केपी में RRT टीम्स है जो कि बेसिकली आपके घर पे आपसे सैंपल लेती है और उसी ऐप में उसकी एंट्री होती है। और सेंट्रल जो कोविड पोर्टल है उसमें उनकी एंट्री एयर ऑन होती है और फिर वहाँ पर हमारी डिसीजन मेकिंग होती है कि जी पॉजिटिविटी रेशो क्या है। और इसके परफॉर्मेंस डैशबोर्ड डिफरेंट टेयर्स को अवेलेबल होता है, जिसमें अगर आप ये देखें टियर 1 कॉल सेंटर, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर उनकी इस सिस्टम की अवेलेबिलिटी उनको इंश्योर की गई है। सिटीजन के लिए हमने भी उसमें एक वो बनाया कि जी उसमें उसको अपनी लाइव रिपोर्टिंग कर सके, अपनी लैब रिपोर्ट जो है वो खुद ही डाउनलोड कर सके। एक इंटीग्रल पार्ट जो जिस तरह कोविड के साथ आए कि जी आप बार बार सुनते होंगे कि जी कोविड इतना ज़्यादा हो जाएगा कि फिर हमारे पास हॉस्पिटल में ये कैपेसिटी नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या है बेसिकली? तो इसके लिए एक सिस्टम बना है कि जी हमें रियल टाइम पता चलता है इस टाइम कि खैबर पख्तूनख्वा के कितने हॉस्पिटल्स में इस टाइम कितने लोग ICU में हैं, कितने HDU में हैं, कितने आइसोलेशन में, कितने वर्कर्स हमारे पास इस टाइम डिप्लॉयड है, कितने वेंटिलेटर्स हैं हमारे पास, कितने ऑक्सीजन की सप्लाईज हैं, कितने बेड्स हैं, कितने PPEs हैं। तो ये हमारे पास अपना थ्रेश होल्ड अवेलेबल है कि जी हम कितने 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 पेशेंट्स को की इनटेक को इंश्योर कर सकते हैं। और फिर उसके मुताबिक एक थ्रेश होल्ड के मुताबिक एक वैल्यू जाती है, एक अलर्ट नोटिफिकेशन इनिशिएट होता है। और उस अलर्ट नोटिफिकेशन के इनिशिएट होने के बाद फिर उसका एक हम वो करते हैं कि जी हमें और फैसिलिटीज चाहिए कि नहीं चाहिए। ये उसके कुछ डैशबोर्ड के पैरामीटर्स हैं, ये तमाम बैकएंड सिस्टम्स हैं। अच्छा, अब ये जो ओपन सोर्स इन एक्शन गवर्नमेंट में जो जो इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जिन जिन टूल्स एंड एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है, तो ये बेसिकली ये वो एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें गेट हब में तमाम जितनी भी कोडिंग है हमारी, जो लारावेल में बेसिकली मोस्टली लारावेल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं। अदर भी है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास ओरेकल के भी है, लेकिन मोस्टली हमारे जो PHP फ्रेमवर्क है तो उसमें हम वो करते हैं। MySQL हमारा डेटाबेस है जो कि सिटीजन पोर्टल में भी यूज हुआ है। ये दोनों रेडिस बेसिकली हमने यूज किया सिटीजन पोर्टल में फॉर कैशिंग के लिए। इस तरह कोटलिन है हमारे पास। कुबरनेटिस बड़ा एक अच्छा टूल है जिसकी वजह से हमने ये पूरा लोड जो सिटीजन लोड था एप्स पे, और उसको हमने मैनेज किया। टेंसरफ्लो हमने उसका यूज कर रहे हैं। इस तरह डेवऑप्स की जो टेक्निक्स हैं वो हम बेसिकली हमारा जो टियर 3 का डेटा सेंटर है ST&IT डिपार्टमेंट के अंडर, तो उसमें डेवऑप्स की जितनी भी प्रैक्टिसेस हैं उसके वो एनेबल्ड है। कोविड 5 की जो प्रोसेसेस हैं, ITIL की प्रोसेसेस हैं, वो सारे हमारे एनेबल्ड है। प्रॉपर सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू तमाम काम हो रहे होते हैं। एक और जो बेसिकली अब एक और इनिशिएटिव जो हम अभी इंशाल्लाह लॉन्च करेंगे, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने एक ओपन डेटा पोर्टल ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। सर मैं 2 मिनट बस और लूंगा। Sure. इसमें अब तक 1000 प्लस डेटा सेट्स जो है वो ओपनली अवेलेबल की जाएंगी विद 15 API, जिसमें सिटीजन पोर्टल की API भी होंगी। ये डेटा आपको पब्लिक के लिए अवेलेबल होगा इन CSV एक्सेल फॉर्मेट। तो आप अपनी एनालिसिस आप कर सकते हैं, जो कि एक लॉन्ग होता है कि जी गवर्नमेंट अपना डेटा ओपन नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसमें ST&IT डिपार्टमेंट, IT बोर्ड और डायरेक्टरेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कंबाइन वेंचर है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिफॉर्म यूनिट का ऑब्वियसली।
और इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम हम ये डेटा सेट्स जो है पब्लिक के लिए वो करेंगे, अवेलेबल करेंगे फॉर द जनरल पब्लिक, फॉर द डेटा साइंटिस्ट, ताकि वो अपनी एनालिसिस कर सकें, अपने इनसाइट्स निकाल सकें। करंटली वेयर वी आर, अनफॉर्चुनेटली अगर हम नंबर्स में देखें इंटरनेशनल नंबर पे तो हम बहुत पीछे हैं। 148 हमारा ई गवर्नमेंट इंडेक्स है आउट ऑफ 193, 115 ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स है, 83 आउट ऑफ द ओपन गवर्नमेंट इंडेक्स में हम है। लेकिन हम पुरज़म है कि हम खैबर पख्तूनख्वा को, पाकिस्तान को एक डिजिटल हब बनाए इन तमाम उसके लिए, और इसके लिए हमारी जो लीडर्स, हमारे जो एक और ये फाउंडेशन जो है बेसिकली, चाहे वो पाकिस्तान ओपन सोर्स फाउंडेशन है या पख्तूनख्वा ओपन सोर्स फाउंडेशन, वो कमिटेड है उसके लिए। और लास्टली स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट टुगेदर वी कैन एंड टुगेदर वी मस्ट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वाओ, वंडरफुल डॉक्टर साहब, कमाल कर दिया आपने। वो एक जुमला है जो कि अक्सर पॉलिटिकली कहा जाता है, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूँ कहने पे कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने केपी का जो अभी चेहरा हमें दिखाया है, ये मैं फिर वही अपनी बात रिपीट करूंगा जो पहले मैंने इंट्रोडक्शन में कही थी कि आप लोग बड़े मासूम हैं, बड़े भोले हैं। आप इतना कुछ करके बैठे हुए हैं और आप किसी को दिखा नहीं रहे, कोई बता नहीं रहे। इसके ऊपर तो टीवी प्रोग्राम होने चाहिए, इसके ऊपर तो टीवी टॉक शो होने चाहिए। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि गवर्नेंस होती क्या है, ई गवर्नेंस क्या होती है और एम गवर्नेंस क्या होती है। माशाल्लाह, ट्रेमेंडस, वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का, हमारे लिए इनकरेजमेंट है। इंशाल्लाह सर, अभी जो सेक्रेटरी ST90 है वो बड़े प्रोएक्टिव है इंशाल्लाह, तो उनकी उसमें हम सुपरविजन में इंशाल्लाह और भी इस तरह के इवेंट्स आपके साथ कोलैबोरेट जॉइंट वेंचर में करेंगे। और आज का इसी वजह से मैंने प्रेजेंटेशन बैक ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई थी, ताकि लोगों को आइडिया हो कि गवर्नमेंट बेसिकली कर क्या रही है। वो वंडरफुल, वंडरफुल। प्रोड्यूसर साहब, कोई क्वेश्चन अगर हैं तो दे दीजिए। वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था, माशाल्लाह माशाल्लाह। एप्रिसिएशन है आपके लिए। एक चरसी तिक्के की दावत आई है, हमारे दोस्त हैं तारिक उबैदुर रहमान, उन्होंने आपकी खिदमात के बदले में, ये तारिक साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरी तरफ से आपके एजाज में और काका खेल साहब के एजाज में एक बहुत बड़ा डिनर वहां पे अरेंज करेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारी तरफ से होगा सर। ये आप भी सर इसमें इनवाइटेड होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। चलें जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी आपका, वंडरफुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी जनाब, हमारा सफर बहुत जबरदस्त गुजर रहा है और सेशन आज का कल से भी ज्यादा मजे का है, और ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं, और ऑडियंस को एक्चुअली पता चल रहा है कि सॉफ्टवेयर की पावर क्या होती है, और उससे हम ई गवर्नेंस और एम गवर्नेंस के थ्रू गवर्नेंस को अचीव कैसे कर सकते हैं। और आप देखें कि कितनी जबरदस्त बातें डॉक्टर साहब ने कही हैं कि अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड है, कितने बेड, कितनी ऑक्सीजन, कितनी चीजें अवेलेबल हैं, कितने वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं रियल टाइम में जहां कोई चीज चेंज होती है। और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि एक ऑफिसर जो है वो अपनी जियो लोकेशन पे उन्होंने उसको फिक्स किया हुआ है कि वो सब्जी मंडी जाके चेक कर रहा है या अपने घर से बैठ के, दफ्तर से बैठ के चेक कर रहा है। ये भी उसको चेक कर लेते हैं और उसको वापस क्लेम करते हैं या उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। तो बेसिकली गवर्नेंस यही होती है जो लोगों ने अचीव की। मुगल बादशाहों ने या उनसे पहले भी बहुत सारे लोग जो आए थे, उन्होंने जो सिस्टम रखा हुआ था, अयूब खान के जमाने में जो सिस्टम था गुड गवर्नेंस का, जिसमें अवाम के लिए फायदा था, तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीजों को बेहतर करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी सारी एफर्ट के बावजूद अंडे जो हैं वो 200 रुपए दर्जन है, और प्याज जो है वो 90 रुपए किलो है, मैं दर्जन नहीं कहता, और आलू जो है वो भी 80 रुपए किलो है। तो इसके ऊपर भी कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा। ऑल्दो कि ये ई और एम से आगे की बातें हैं, ये आपको अपना बॉर्डर कंट्रोल करना पड़ेगा जहां से अफगानिस्तान को ये चीजें जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसके ऊपर भी थोड़ा सा काम करेगी, जो कि अपने अवाम का पेट काट के हम वहां नहीं डाल सकते कि 100 रुपए वाली चीज 200 रुपए में बिक रही है यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। हमारा नेक्स्ट सेशन बहुत ही टेक्निकल सेशन है। हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत ही वर्सटाइल हैं। खलील रशीद साहब, founder and CEO of AppTech Germany and Pakistan, embedded system consultant, embedded Linux and risc-v trainer, high performance computing architect.
More than 12 years in embedded system design, providing embedded design services as consultant in European Union market, trainer for embedded software development, embedded Linux, RTOS, Xilinx SOCS for Germany, Switzerland, and Eastern Union EU countries, high performance and financial computing expert, utilizing acceleration and offloading technologies. इनका टॉपिक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टू ओपन सोर्स हार्डवेयर, risc-v and OpenCL based runtime. Dr. Shah, you are welcome on board live, and thank you very much for sparing your time. Thank you very much, sir. Please go ahead. So please put my screen. Thank you. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं पता उर्दू में बेहतर है, इंग्लिश में या जर्मन में, लेकिन मैं कुछ मिक्स कर लेता हूँ। नहीं, मैं चाइनीज में कर ले। ठीक हो गया सर। तो हमारे लोग प्रेफर करेंगे कि आप उर्दू में बात करें, बिकॉज हमारा इस वक्त 4-5 हजार के करीब स्टूडेंट्स भी ऑन बोर्ड है, इस वक्त देख रहा है आपको, और उनके लिए और बाकी सब लोगों के लिए जो भी आप लैंग्वेज मिक्स कर लें, बेशक उर्दू इंग्लिश, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर। मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली जो प्रीवियस टॉक थी, मैंने उसको जो है एंड से थोड़ा सा देखा, मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो है एक चीज उसमें ऐड करता चलो कि उसी से अगर शुरू करें तो पाकिस्तान में अब जो है वो डाटा जनरेशन और डाटा मैनेजमेंट और डाटा जो है वो बहुत बड़ा डाटा क्रिएट किया जा रहा है, डिजिटल सिस्टम क्रिएट किए जा रहे हैं। तो बहुत जल्द हमें जो है ना उन डिजिटल सिस्टम्स के ऊपर एनालिटिक्स के लिए एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो कि दुनिया उसकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है। तो मैं उसको स्टार्ट करता हूँ बाय कनेक्टिंग विद द प्रीवियस टॉक। तो जैसे ही हम जो है अपने प्रोसेसेस डिजिटलाइज करेंगे, वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन। इस ह्यूज पॉपुलेशन का डाटा मेंटेन करना और उसके ऊपर डाटा एनालिटिक्स करना जो है नॉर्मल कंप्यूटिंग जो पावर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। तो हमें वो एक्सेलरेशन इंजन्स और जो हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की टेक्नोलॉजीज में जाना पड़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पाकिस्तानी मेरे जैसे और भी हैं जो ऑलरेडी हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा सा मैं ना इस चीज का टच देना चाहता हूँ। पहली चीज ये कि जो है थोड़ा सा मेरा जस्ट इंट्रोडक्शन। मैं एक कंपनी है पाकिस्तान में एपटेक और जर्मनी में, दोनों जगह पे इसको रन कर रहा हूँ उसके एज अ फाउंडर एंड सीईओ। उसके बाद जो है मैं पिछले को 5-7 साल से जो है वो जर्मनी, स्विट्जरलैंड और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जो है एम्बेडेड लिनक्स और ओपन सोर्स टूलिंग और ड्राइवर डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड है। और जो मेरा इंटरेस्ट है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में, और जो इसकी बेस पे मैंने दो बहुत बड़े जो है ना प्रोजेक्ट एज अ सिस्टम आर्किटेक्ट जो है वो किए हैं। एक करंटली अभी चल रहा है। तो जो है कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए यंग लोगों की, कि जब आप किसी एक फील्ड का जो है आपको इंटरेस्ट हो, शौक हो, तो आपको चाहिए कि आप अपनी इस फील्ड की जो है ना हाईएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश करें। मुझे एम्बेडेड सिस्टम का शौक था, तो मैं अभी जो है अपने बैचलर्स में था, तो बैचलर्स के दौरान ही मैंने एक एम्बेडेड सिस्टम की ट्रेनिंग कंपनी बनाई पाकिस्तान में एट दैट टाइम ड्यूरिंग माय इंजीनियरिंग। उसके बाद एक कंपनी बनाई 2011 में जो एम्बेडेड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का था। उसके बाद एक जो है 20 मिलियन यूरोस का एक स्टार्टअप था जो इन्वेस्टर ने मुझे एज अ जो है सिस्टम आर्किटेक्ट इंगेज किया उसमें। उसको मैंने बहुत अच्छा जो है वो चलाया। यहाँ से मेरा जो है ना हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग और एक्सेलरेशन का जो है वो एक दौड़ शुरू हुई। उसके बाद जो है 2020 में जो है ये सोचा कि यार जो भी स्किल सेट है, जो कुछ सीखा है, उससे जो है बाहर के बहुत सारे जो है कंपनीज और कंट्रीज को तो बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अपने मुल्क को नहीं हो रहा। तो बेसिक एम्बेडेड सिस्टम और ये एक्सेलरेशन की जो टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कंबाइन करके एक जो है एक स्टार्टअप शुरू किया पाकिस्तान में, जो कि अभी जो है ऑपरेशनल है और जो है सक्सेसफुली अपनी एक जो डिफाइंड डायरेक्शन है उसकी तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी दोबारा मौका मिला तो फिर बात करेंगे। तो जो है डायरेक्ट हम एजेंडे पे आते हैं। तो मेरा आज का जो है पर्पस ये है कि हमारी बहुत सारी ऑडियंस जिसमें स्टूडेंट्स हैं, इनको आइडिया है कि जो है एक बेसिक एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। अच्छा, मैं अगर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ना इस सिरे से पकड़ूं कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग क्या है और ये क्या करती है और हम इससे क्या अचीव करते हैं, तो जो है बहुत सारे लोगों को उसकी बेसलाइन समझ नहीं आएगी कि हमें इस चीज की जरूरत ही क्यों है, ये एक्सेलरेशन के टॉपिक को हम सोच ही क्यों रहे हैं,
यार मैं तो एक कोड लिखता हूँ और मेरा मेरा लैपटॉप जो है वो बिल्कुल जो है वो थका हुआ लैपटॉप इस कोड को चला देता है, तो मुझे जो है ये एक प्रोसेसर से 10 प्रोसेसर और 10 प्रोसेसर से 1000 प्रोसेसर के क्लस्टर पे जाने की जरूरत ही क्यों है। तो मैं बेसिकली शुरू करूंगा कि वेरी वेरी बेसिक एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल लेके उससे जो है आगे फिर हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को उसके साथ टच करें और फिर देखें कि इसकी इस सब की जो बैकबोन है वो एक ब्लैक बॉक्स है। और वो ब्लैक बॉक्स है क्या? डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट होते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से हम इस ब्लैक बॉक्स से ये प्रोसेसिंग अचीव करते हैं, ठीक है। और जो है उसके बाद हम देखेंगे कि ओपन सीएल और को प्रोसेसर कैसे चलते हैं, है क्या। बेसिकली ये जो टॉक है ये आप लोगों को दो डिफरेंट जो डायरेक्शंस हैं लाइफ की, स्पेशली वो लोग या स्टूडेंट या वो लोग जो अपना कैरियर में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हैं किसी एक नई फील्ड, किसी नई डायरेक्शन, और स्पेशली 2021 के लिए कोई गोल सेटिंग का प्लान करना चाहते हैं, तो ये टॉक उनको रियली हेल्प करेगी। वन पॉसिबिलिटी इज कि आप जो है लो लेवल जो है एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन जो है अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो आपको उसकी डिफरेंट डायमेंशंस की समझ आएगी। अगर आप हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग में जाना चाहते हैं जो कि वेरी हाईली पेड जो है वो वर्क फोर्स है दुनिया में और बहुत लिमिटेड है, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे कीवर्ड वो वाले मिलेंगे कि आप उनको जो है अपने 2021 के एजेंडा में शामिल करें और जो है उसको एक प्लान के साथ एग्जीक्यूट करें। All these technologies does not need more than 6 months to just get started, and you will start feeling into that. So let's get started. So जस्ट एग्जांपल के तौर पे अगर आपके पास लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम की डिवाइसेस हो, जैसे आपके पास घर में कोई अप्लायंसेस हैं, नेटवर्क है, स्विचेस हैं, मोबाइल फोन है, राउटर्स हैं, या आपके पास जो है हम आजकल बात करते हैं कि यार हमारे पास क्लाउड सर्विसेज हैं गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है, AWS की। तो ये जो है एक तरफ लो लेवल एम्बेडेड डिवाइसेस हैं जिनमें छोटे छोटे जो है ना वो प्रोसेसिंग एलिमेंट यूज हुए हैं, दूसरी तरफ जो है बड़े बड़े डाटा सेंटर्स हैं और उनमें बड़े हाई एंड सीपीयूज लगे हुए हैं, लेकिन वो सीपीयूज भी इनफ नहीं है, हमें उनको भी फर्दर जो है उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। तो एक एज जो है वो नीचे वाला है और दूसरी दूसरी लिमिट है। तो जो है मुझे लकीली मौका मिला कि मैंने बहुत लो लेवल एम्बेडेड सिस्टम से शुरू किया और मैंने जो है हाई एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग को जो है वो टच किया और उसमें अभी काम कर रहा हूँ। और अभी भी मेरे दो प्रोजेक्ट पैरेलल में चल रहे हैं। एक जो है वो ये आपको फाइनेंशियल कंप्यूटिंग की एक फोटो दिखा रहा हूँ, फाइनेंशियल कंप्यूटिंग से रिलेटेड है, जिसमें जो है हम ये जो मेन ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान कम्युनिकेशन होती है उसमें नैनो सेकंड की लेटेंसी जो है वो भी एक बहुत बड़ा लॉस फैक्टर है। तो हम उसके जो है कम्युनिकेशन मैकेनिज्म को 10G 40 गीगाबिट पर सेकंड 10 गीगाबिट पर सेकंड ईथरनेट लिंक को जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं कि उसकी नैनो सेकंड की लेटेंसी जो है जो आती है उसमें उसको भी प्रिडिक्टेबल किया जाए और उसको भी मिनिमाइज किया जा सके। तो ये मेरा एक करंट प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको एज मैं सिस्टम आर्किटेक्ट के तौर पे लीड कर रहा हूँ। दूसरा ये एक मैंने ऑटोनोमस कार का है। ऑटोनोमस कार में जो है कि फोटो में इसलिए यहाँ पे डाली है कि ये जो है ना दिस इज कनेक्टिंग एवरीथिंग, low level embedded system on one side connecting to the high and high performance computing, image processing, and all this coming together, and the first time the full autonomous vehicle will come to the market, all these technologies will be already there in that. So you take any point from this, you will realize that all this is useful and this is very near future. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये जो गाड़ी आपको नजर आ रही है तो इसमें मेरी एक छोटी सी जो है वो कंट्रीब्यूशन ऑटोनोमस व्हीकल और रोड सेफ्टी के लिहाज से, जो कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया था एज अ कंसल्टेंट कुछ साल पहले। अगर आप में से किसी को पता हो कि मर्सिडीज ने अपनी एक C क्लास गाड़ी लॉन्च की है जिसमें जो है ना वो हेडलाइट जो है रोड पे मैसेजेस और वीडियोस प्रिंट करती है। तो ये बेसिकली जो है ये हेडलाइट जो है ओसरम के साथ मिलके एज अ कंसल्टेंट जो है उसकी डिजाइनिंग में बहुत बड़ा एक रोल मेरा भी था, जिसमें जो है FPGA और माइक्रो कंट्रोलर्स की कम्युनिकेशन और डाटा प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग और उनको कंबाइन करना और फाइनल इमेज को जो है लाइक अ वीडियो थ्रू LEDs जो है वो रोड पे प्रोजेक्ट करना थ्रू हाई पावर LEDs. It was the first time that it was developed that these high power LEDs could project a video on the street. तो ये जो है एक आपको बहुत सारी वीडियोस इसकी मिलेंगी जो अभी बहुत ज्यादा मार्केट हो रही है। तो आज अभी हम जो है एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एम्बेडेड सिस्टम की। कोई भी एम्बेडेड सिस्टम हो उसमें कुछ इनपुट्स होती हैं,
जो है, जैसे ये आपको कैमरा नजर आ रहा है कि इनपुट है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, कोई PIR सेंसर है या कोई बटन है, इसी तरह कोई जो है वो कुछ आउटपुट्स होती हैं और साथ ही कोई कम्युनिकेशन इंटरफेसेस या मेमोरी होती है। ये सारी जो सारी की सारी दुनिया के हर जो रनिंग डिवाइस है, कंप्यूटर से लेके मोबाइल फोन से लेके इंडस्ट्रियल स्मॉल कंट्रोल यूनिट से लेके गाड़ी के अंदर ECU तक, और ECU के साथ जो एक डोर को ओपन करने का जो ऑटो स्विच है उस तक, ये सारे के सारी बैक एंड सेम कॉन्सेप्ट, सम इनपुट्स, सम आउटपुट, सम कम्युनिकेशन, और मिडल में जो है एक ब्लैक बॉक्स लगा हुआ। ये ब्लैक बॉक्स जो है वो सारा मैजिक करता है, ठीक है, इनपुट्स को रीड करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट पे जो है चीज को जिसको ऑपरेट करना होता है उसको ऑपरेट करता है, कहीं स्टोर करता है, लॉग करता है, कहीं कम्युनिकेट कर देता है। फिर जो है इस ब्लैक बॉक्स की, जो मैंने ऑलरेडी बोला कि जो है मैं क्विकली बताना चाहता हूँ कि इमेज या डाटा प्रोसेसिंग करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, कोई रियल टाइम प्रोसेसिंग करनी है। तो अगर मेरे पास इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, ये मैं एक एम्बेडेड सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह का भी एम्बेडेड सिस्टम एक, ये बहुत कोई हाई एंड डिवाइस नहीं है, लेकिन आज के दौर में अगर मैं इस चीज को भी इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो इसमें मुझे कम से कम जो है मोर देन 100 ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज और कुछ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके वो सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं इसको इंप्लीमेंट करता कैसे हूं। जो सबसे जो कि एक मोस्ट जो है डिस्कवर्ड और जो है जिसको हम कह सकते हैं कि प्रोफाउंड टेक्निक जो है ना, वो ये है कि इसको मॉड्यूलर बनाया जाए। मॉड्यूलर होगा, फेलियर के चांसेस कम होंगे। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ ऐसी क्रिटिकल किस्म की चीजें हैं कि मोटर कंट्रोल हो रही है, इमरजेंसी स्विच है, कभी भी इमरजेंसी स्विच प्रेस हो तो ये नहीं होना चाहिए कि मोटर जो है वो बंद ना हो, क्योंकि इमरजेंसी स्विच प्रेस ही उसी वक्त किया गया है क्योंकि मोटर से जो कोई ब्लेड या कोई बेल्ट रन हो रही है उससे कोई इंसानी जान खतरे में आ सकती है। तो हम इस तरह के काम को एक रियल टाइम प्रोसेसर से करते हैं। अगर हम एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट यूज कर लेंगे, इमेजिन करें कि वो जो है वो इथरनेट पे यूएसबी पे कम्युनिकेशन में बिजी है और उधर कोई वैसे ही कुछ हैंग हो गया या उसको कोई फीडबैक नहीं मिला, तो आपको जो है वो आपका बटन रीड नहीं होगा। तो हम, और इसकी और दूसरी रीजन ये होती हैं कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए। सर्टिफिकेशन जो लाइफ क्रिटिकल चीजें होती हैं किसी भी प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में, उसको हम हमेशा सर्टिफाइड करना होता है कि ये जो है ये डेंजरस नहीं है मेरे एनवायरनमेंट के लिए। तो उसके लिए भी जो है जरूरी है कि छोटा सा कोड लिखो जो बटन को रीड करे और मोटर को ऑपरेट करे, बस दैट्स इट। वो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट सेफ प्रोसेसर लगाओ। दूसरा जो है, एक और जो है इमेज प्रोसेसिंग करनी है। अगर आप एक ही प्रोसेसर के ऊपर जो है मोटर भी चला रहे हैं और इमेज प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, तो वही सेम प्रोसेसर जो है आपकी मोटर कंट्रोल में आपको लैग देगा, आपके टाइम क्रिटिकल इवेंट्स को जो है वो स्लो कर देगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मल्टीपल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर के कॉम्बिनेशन से एक सोल्यूशन बनाना और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जाना, ये बेसिक डिवाइसेस से ही शुरू हो जाता है। आप उनको जो है मॉड्यूलर डिजाइन करते हैं। इसी तरह यूएसबी, ईथरनेट, डिस्प्ले, स्टोरेज, ये एक अच्छी प्रोसेसिंग लेने वाले कंपोनेंट है। अगर आप किसी माइक्रो कंट्रोलर को कहें कि वो एक जो है वो HDMI डिस्प्ले आपके लिए जनरेट करे, तो वो आपको उसकी प्रोसेसिंग लिमिट आपको फील होगी, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए सेपरेट एक जो है वो प्रोसेसर यूज कर लेंगे जिससे आपका जो है वो इंडिपेंडेंट विदाउट एनी डिले आपके डिस्प्ले भी आ रहा है, यूएसबी कम्युनिकेशन भी हो रही है, इथरनेट भी हो रही है और आपकी स्टोरेज भी जो है वो करप्ट नहीं हो रही। और इसी तरह जो है पैरेलल में आपके पास एक FPGA कंपोनेंट है जिसमें आप जितना मर्जी फास्ट जो है वो इमेज प्रोसेसिंग कर लें। CPU जो है इमेज प्रोसेसिंग के लिए एक बहुत अच्छा एलिमेंट नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली होता है कि हम अगर एक सिस्टम को मल्टीपल सिस्टम में डिवाइड करते हैं तो हमें उनके दरमियान इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन करवानी पड़ती है। ये भी वेल डिफाइंड ओपन सोर्स टेक्निक्स अवेलेबल है, हम उन्हीं को यूज करते हैं। फिर जो है अगर हम एक ही सिस्टम के अंदर मल्टीपल मास्टर्स का मतलब है FPGA भी एक मास्टर है, कम्युनिकेशन ये एप्लीकेशन प्रोसेसर भी एक मास्टर है, हो सकता है मेरा कर्सर आपको देख सकें, रियल टाइम प्रोसेसर भी मास्टर है। तो अब इन सब को मैनेज करने के लिए एक मैनेजमेंट कंट्रोलर होना चाहिए कि यार मैंने किस जो है वो किस हार्डवेयर की एक्सेस देनी है, किसकी नहीं देनी है, और जो है उनकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को मैंने कैसे मेंटेन करना है।
तो यहां से मैं सिर्फ और सिर्फ समझाना इस स्लाइड से ये चाहता था कि ये जो एक्सेलरेशन या मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। एक ये कि एक ही प्रोसेसिंग एलिमेंट जो होता है उसके अंदर प्रोसेसिंग लिमिट होती है। दूसरा ये कि आप उसको पूरे के पूरे सिस्टम को ही पार्टीशन करना चाहते हैं कि एक सिस्टम दूसरे को डिस्टर्ब ना करे। पॉसिबल है कि अगर एक ही प्रोसेसर इमेज प्रोसेसिंग कर रहा है और साथ जो है वो मोटर को ऑपरेट कर रहा है तो इमेज प्रोसेसिंग की वजह से मोटर के ऑपरेशन में प्रॉब्लम आएगी। इसी वजह से जो है हमें इनको सेपरेट करना पड़ता है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मल्टी प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम या मल्टी प्रोसेसिंग एलिमेंट बेस्ड सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम इसी चीज को ले जाते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मैं इसी के सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ा सा अभी बात करूंगा, फिर हम इसी कॉन्सेप्ट को ले जाएंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की तरफ, ताकि सबको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो। फिर कोई अपने आप को जो है प्लेस करना चाहता है इस डोमेन में, ये जो स्लाइड आपके सामने है ये एक पूरी डोमेन है। अगर हम इस पे फोकस करें, ये बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी वैल्यू है दुनिया में ऐसे लोगों की जो सिर्फ और सिर्फ इस एक स्लाइड के टॉपिक्स पे काम कर सकते हो। उसके बाद जो है ये स्लाइड जो है इंक्लूड करती है ऑफ कोर्स बहुत सारे ओपन सोर्स कंपोनेंट्स को, जिसमें फर्स्ट स्टेज बूट लोडर ओपन सोर्स कंपोनेंट है। ये जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर एक बायोस होती है, बायोस के अंदर जाके सेटिंग करते हैं, वो फर्स्ट स्टेज बूट लोडर होता है। उसके बाद आपके पास यू बूट है, एक सेकंड स्टेज बूट लोडर है। जैसे आप में से किसी ने सुना हो ग्रब का, तो जो है अपने अपने कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर। उसके बाद लिनक्स कर्नल है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं, ये सारी ओपन सोर्स। दुनिया का इस वक्त का सबसे बड़ा जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो लिनक्स कर्नल इटसेल्फ है। तो मैं सारे के सारे पाकिस्तानियों को रिकमेंड करूंगा कि यार जो भी करें सबसे इजी एक्सेस है, रास्पबेरी पाई बोर्ड पकड़े, उसके ऊपर लिनक्स कर्नल डेवलपमेंट सीखें, ड्राइवर डेवलपमेंट सीखें, बेतहाशा कोड, सोर्स कोड्स और जो है वो एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं, आपने सिर्फ पकड़ के उसको खेलना शुरू करना है। लेकिन खेलना ऐसे है कि एप्लीकेशन से हमेशा जो है जाना है टुवर्ड्स हार्डवेयर। एप्लीकेशन से शुरू हो, ड्राइवर तक जाएं, ऑपरेटिंग सिस्टम तक जाएं, फिर ये समझें कि ऑपरेटिंग सिस्टम अल्टीमेटली एक हार्डवेयर को, एक पर्टिकुलर एक एलईडी को भी ब्लिंक कर रहा है तो वो उस तक पहुंचता कैसे है। फिर आपको जो है वो समझ आएगी कि ये जो है एम्बेडेड की दुनिया है क्या। तो हम यहाँ से जो है थोड़ा सा मैं आपको एक और स्लाइड से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो है 10 मिनट रह गए, मैं इंशाल्लाह थोड़ा सा स्पीड अप कर दूंगा। तो जो प्रोसेसर है, देखें हमारे पास 2.5 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर। हम सिंपली प्रोसेसिंग उसकी क्लॉक बढ़ाते जाए तो हमारी उसकी प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन लिमिट है कंपोनेंट्स की, ठीक है। वो मोरिस लॉ उसको डिफाइन करता है और उसके जो है वो बहुत सारी उसके पीछे थ्योरी है, हम उसके ऊपर नहीं जाते। फिर क्या किया हमने, कहा अच्छा यार एक कोर है ना, हम ऐसा करते हैं 10 कोर बना लेते हैं, हम 100 कोर बना लेते हैं। देयर इज वन आर्म प्रोसेसर व्हिच इज 68 कोर्स, ठीक है। वो 68 कोर्स भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती एक डाटा सेंटर की, एक डाटा सेंटर लेवल प्रोसेसिंग की। तो फिर डाटा सेंटर में जो है अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट या जो है गूगल क्या करती है, वो स्पेसिफिक लोड के लिए स्पेशल प्रोसेसिंग एलिमेंट यूज करते हैं, जिसको आप जो है वो एफपीजीएज या ए कैप या एक्सीलरेटर बोलते हैं। तो बेसिकली जो है ना, आप प्रोसेसिंग की वर्ड से निकल के स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स की तरफ चले जाते हैं अपने स्पेशलाइज्ड लोड के लिए। तो यहां से शुरू होती है दुनिया एक्सीलरेशन की। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया, आपको जो है मैं इसको सिंप्लीफाइड जो है वो कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मैं फाइनेंशियल कंप्यूटिंग का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो उसमें देखें कि हम फाइनेंशियल एनालिटिक्स के जहां वहां पे एनालिसिस करना कि कौन से जो है वो शेयर्स जो कंपनी या मामला जो है, फाइनेंशियल कंप्यूटिंग जो है वो एक बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन इंटेंसिव काम है, कभी भी प्रोसेसर जो है उसको अचीव नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करते हैं, जीपीयूज को यूज करते हैं। और जीपीयू क्या होते हैं, एज अ सैटेलाइट कंट्रोलर या कंप्यूटिंग इंजन्स के तौर पे मेन प्रोसेसर के साथ लगे होते हैं। मेन प्रोसेसर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ये फाइनेंशियल कंप्यूटिंग का जो सॉफ्टवेयर है, थ्रू दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, थ्रू मेन प्रोसेसर जो है, जो हाई कैलकुलेशन इंटेंसिव टास्क है वो जीपीयू को ऑफलोड कर देता है। सो देन जो है उसका, अब ये एक साइड कवर होगी, कैलकुलेशन होगी। फिर फाइनेंशियल सिस्टम्स में
हाई स्पीड कम्युनिकेशन भी होती है। अब ये देखें कि हम इंटरनेट यूज करते हैं, हमें कभी फील ही नहीं होता कि हम जो वेब ब्राउजर में एक जो है वो google.com लिखते हैं, वो कैसे हमारे एक्चुअली फिजिकल लाइन से या इथरनेट लाइन से आउट कैसे होती है, वो वहां पे कितने कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, पूरी का पूरा जो है एक नेटवर्क स्टैक का मॉडल है। इमेजिन करें कि फाइनेंशियल कंप्यूटिंग में ये नेटवर्क स्टैक का जो मॉडल है वही बॉटलनेक बन जाता है। उसको आपको ऑफलोड करना पड़ता है एफपीजीए के अंदर के जो मैं प्योर जो एक्चुअल डाटा है, पेलोड है, वो भेजूंगा। एफपीजीए जो है उसको जो है नेटवर्क पैकेट्स में कन्वर्ट करके एफपीजीए विल बिहेव एज अ नेटवर्क प्रोसेसर नाउ, तो उसको जो है वो आगे आउटपुट पे भेज देगा। तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ जी। अच्छा, फिर जो है इनमें एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट तो समझ आए थे, मसला ही कोई नहीं है यार। अच्छा, ऐसा करते हैं कि जो है एक प्रोसेसिंग एलिमेंट है, एक एफपीजीए है, इनको पकड़ते हैं, एक्सेलरेशन कर लेते हैं, लेकिन प्रोग्रामेबिलिटी नहीं रहती। आपके दुनिया के सारे प्रोसेस सॉफ्टवेयर कोड सब जो है प्रोसेसर के लिए बने हैं, आप एक नए एलिमेंट के लिए कैसे उसको अडॉप्ट करोगे? तो वो अडॉप्टेबिलिटी नहीं है, फिर नए आर्किटेक्चर की भी आप इजीली अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये टेक्निक जो है कि अभी हमारे पास पॉसिबिलिटीज है एक्सेलरेशन की दुनिया में कि हम उसको प्रोग्रामेबल भी रख सकते हैं, अडॉप्टेबल भी रख सकते हैं। और वो टेक्निक और लूप जो है वो कंप्लीट की है दुनिया के दो बड़े जायंट्स हैं इस वक्त, एक है इंटेल और एक है ज़ाइलिंक्स। इन्होंने जो है वो हाई लेवल एक्सेलरेशन को जो है वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में पेश कर दिया है। ठीक है, उन्होंने जो है मोस्टली सारे ओपन सोर्स कंपोनेंट पकड़े, टेंसरफ्लो, पाइथन, ओपनसीवी, ओपनसीएल, उनको कंबाइन किया और एक मेन प्रोसेसर से जो है ना दूसरे ऑफलोडिंग इंजन या सैटेलाइट प्रोसेसर्स को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन ये इनका मोस्टली सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है। असल मैजिक जो है इस वक्त दुनिया जो है ना, मैजिक ओपन सोर्स जो है उसकी इतनी वर्थ है कि लिनक्स जो है, लिनक्स के बगैर दुनिया का कोई सर्वर नहीं चल सकता इस वक्त। ठीक है, तो जो है इसलिए इन्होंने जो है, इसीलिए आप इमेजिन करें अगर सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो वो कितना ग्रो करेगा, कितना बड़ा सेटअप बन गया। अगर यही चीज सेम हो कि यार हमारा सॉफ्टवेयर भी हो ओपन सोर्स और हार्डवेयर भी ओपन सोर्स हो, तो यहाँ पे जो है हमें बेसिकली risc-v का एडवांटेज समझ आता है कि risc-v एक ऐसा प्रोसेसर है या एक ऐसा ओपन इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है कि हम जो है इससे अपना एक प्रोसेसर बना सकते हैं, हम अपनी इंस्ट्रक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हमारे पास ओपन सॉफ्टवेयर भी है, ओपन हार्डवेयर भी है। ठीक है, अब ओपन हार्डवेयर, ओपन सॉफ्टवेयर, ओपन हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन बनाए सेकंड स्टेप में ओपन सॉफ्टवेयर स्टैक के साथ, जिसमें लिनक्स, ओपनसीएल, ओपनसीवी, पाइथन और टेंसरफ्लो, जिसको सिर्फ और सिर्फ ये स्टैक समझ आ जाए ना, ठीक है, उसकी पूरी दुनिया में बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि इसी का ही फ्यूचर है। ये सॉफ्टवेयर की वर्ड, risc-v is a hardware word in parallel। और इसी तरह जो है कंप्यूट इंजन भी जो है आप risc-v को यूज करते हुए जो है जितने मर्जी मल्टीपल जनरेट कर लें दुनिया में। मेरे ख्याल से ये पहला होगा, कोई एक चिप होगी सिंगल जो कि 1100 कोर जो है एक सिंगल चिप के अंदर जो है वो डेवलप की गई। ठीक है, तो ये जो है ओवरऑल व्हेन यू हैव ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड ओपन सोर्स हार्डवेयर, देन यू हैव ह्यूज अपॉर्चुनिटीज, ह्यूज। And that's what which I am trying to promote. I want to bring my knowledge from the open source software on the proprietary hardware towards open source hardware। तो मैं open source software को अब open source hardware की तरफ लिंक कर रहा हूँ, और ये जो है एक बहुत बड़ा एक मॉडल है। इसको फ्यूचर में कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन risc-v के बारे में डिटेल्स जो है अभी नेक्स्ट टॉक में आप देखेंगे इंशाल्लाह। और जो है आखिरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज कि हमारा जो एपटेक एज एपटेक और मेरा जो विजन है पाकिस्तान के लिए वो ये है कि हम एम्बेडेड सिस्टम की वर्कफोर्स तैयार करना चाहते हैं पाकिस्तान में। इसकी तरफ पाकिस्तान का मिनिमम जो है वो हम अटेंशन दे रहे हैं। मैं आपको बड़ी जो है एक रफ से नंबर में कहता हूं कि अगर एक आईटी या वेब डेवलपर या डिजिटल मार्केटिंग का बंदा $10 पर आवर इंटरनेशनल मार्केट में काम करके लेता है एज अ फ्रीलांसर, आप वही $10 को मल्टीप्लाई बाय 6 कर सकते हैं अगर आपको एम्बेडेड की स्किल हो। आप $50 to $60 मिनिमम पर आवर पे आउटसोर्स होंगे, और इसलिए अपनी जो सॉफ्टवेयर की स्किल्स हैं उनको कोशिश करें मैप करने की एम्बेडेड के ऊपर। और यही हमारा विजन है और हमारा मिशन है।
और मैं जो है ये ट्रेनिंग जो है हम लोग एप्टा के प्लेटफॉर्म से भी करवाना चाहते हैं। हम ओवरऑल पाकिस्तान में इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं कि हम एम्बेडेड की तरफ आए और एम्बेडेड की स्किल को आउटसोर्स करें, और इसके ऊपर जो है अभी तक बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ और हमें वो काम करने की जरूरत है। और इसकी बेसलाइन जो है वो जस्ट जो है वो एक होती है ना सेल्फ फीलिंग नहीं है। दुनिया में आईओटी डिवाइसेस बढ़ रही हैं, एम्बेडेड इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ रही है। इस वक्त जर्मनी में रिपोर्ट के मुताबिक हालत ये है कि 900% बॉटलनेक रेशियो है। मतलब ये कि अगर जो है वो एक एम्बेडेड इंजीनियर अवेलेबल है तो उसके लिए 9 जॉब्स अवेलेबल है। ये एम्बेडेड की फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो अगर हम पाकिस्तान में एम्बेडेड की वर्कफोर्स प्रोड्यूस कर लें, हम उसको डायरेक्ट जो है पाकिस्तान में बैठे बैठे जो है दुनिया में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये है मेरी सोच और विजन इसके पीछे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। जी थैंक यू वेरी मच खलील साहब, बहुत मजा आया और बहुत ही जबरदस्त आपने हमें टेक्निकल अप्स एंड डाउन्स दिखाए दुनिया में और मर्सिडीज के और बाकी चीजों के। आई होप कि आपका जो जर्मनी ऑफिस है उसके साथ आपका जो पाकिस्तान के साथ लिंक है, हमारी एकेडेमिया और हमारे लोग जितने हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जो आपने ट्रेनिंग्स की बात की है, जो आपकी अभी नेक्स्ट टॉक है उसमें चीजें जो आएंगी वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होंगी और हम पाकिस्तान को एक नई डायमेंशन की तरफ, आपने जैसे फ्रीलांसिंग का कंपैरिजन दिया, यस दिस इज अ फैक्ट। फ्रीलांसिंग में ये चीजें जो हैं ये हमें पर आवर अपनी फी को बेहतर करने की जरूरत है, हमें अपनी इनकम के लेवल को बेहतर करने की जरूरत है। और जैसे आपने कहा कि 6 महीने सिर्फ चाहिए आपको किसी भी नई टेक्निक को सीखने के लिए, और अब वो रॉकेट साइंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, अब चीजें सीखने की आ गई हैं और हमारा इस पूरे कॉन्फ्रेंस का मिशन ही है सीखना सीखो। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया, बहुत शुक्रिया। मेरा एक क्वेश्चन है खलील भाई से। जी सर। खलील भाई फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप जर्मनी से लाइव होके आपने इतना इनसाइटफुल सेशन दिया जिसमें आपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को ओपन सोर्स में कवर किया। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप शुरू में बात कर रहे थे कि 6 महीने का ट्रैक है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए सीखने का, तो क्या आप कुछ सजेस्ट करेंगे कि इसकी कोई लाइब्रेरी हो नॉलेज की जहाँ से हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स इसको सीख सकें, या आप जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं क्या उसका फ्यूचर में कोई उर्दू वर्जन वीडियो की सूरत में हमारे पास अवेलेबल होगा ताकि हम ये स्किल्स सिखा सकें? सर मैं एम्बेडेड के लिए प्योरली जो है उसकी 100% मैं प्रिपरेशन में हूँ। मेरे पास ट्रेनिंग मटेरियल बना पड़ा है, सिर्फ और प्लानिंग में हूँ कि मैं उसको जो है वो उर्दू में इंग्लिश में दोनों में जो है वो उसको डेवलप करूँ, और वो इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। जो एक्सेलरेशन वाली साइड है वो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड है और मैं वो भी पुश करना चाहता हूँ, लेकिन वो जो है वो इजी पुश नहीं कर सकते। वो आपको पहले थोड़ी सी बेसलाइन क्रिएट करनी है कि लोग ना एम्बेडेड के कॉन्सेप्ट थोड़े समझ जाएं कि यार मैं जब मुझे जरूरत क्यों पड़ती है एक्सेलरेशन की, ये तो पहली चीज अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना। इसलिए मैं बेसिकली बजाय कि मैं एम्बेडेड सिस्टम से शुरू करता और सॉरी एक्सेलरेशन से शुरू करता, मैंने कहा यार पहले पता होना चाहिए कि असल में ये लिमिटेशन शुरू कहां से होती है। तो मैं बेसिकली पहले एम्बेडेड के हम लोग इंशाल्लाह ताला कल्चर डेवलप करेंगे और हम बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। हमने एक अच्छी टीम हायर की है, हमने उन बच्चों को ट्रेन किया है। वो बच्चे भी वो ऐसे ही होंगे जैसे मैं उनको ट्रेन कर रहा हूँ, वो फ्यूचर में आगे मजीद लोगों को ट्रेन करेंगे और हम इसको एक वीडियो सीरीज की शक्ल भी देंगे इंशाल्लाह। हम इंतजार करेंगे कि ये वीडियोस जल्दी जल्दी आए मार्केट में जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स को हमारे देखने वालों को ये सीखने को मिले। एम्बेडेड के लिए दोस्तों जो लोग देख रहे हैं उनको मैं सिर्फ इतना क्लियर कर दूं कि मेरे पीछे एक स्क्रीन लगी है, दैट इज आल्सो एम्बेडेड। जब ये पुराना टीवी था तो एम्बेडेड सिस्टम था, अभी ये एंड्रॉइड बेस्ड हो गया है। इसी तरह आपका फ्रिज, आपका एसी, आपकी और जो चीजें हैं जो लिमिटेड लेवल पे आप इस्तेमाल करते हैं वो सारी एम्बेडेड सिस्टम्स के बगैर नहीं चल सकती। सो एम्बेडेड सिस्टम इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ आवर लाइफ पिछले 40 साल से। अब चेंज ये आ रही है कि वो एम्बेडेड के बजाय माइक्रो प्रोसेसर लेवल पे अब वो चीजें जा रही हैं, पहले माइक्रो कंट्रोलर्स थे। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप ये स्किल जरूर सीखें। खलील भाई बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट
ये जो आपने बात की ना, बहुत अच्छी बात की कि प्रोसेसर बेस्ड आ रहा है, और प्रोसेसर बेस पे जिस मोमेंट पे जाएंगे आप भूल जाएं वो बेयर मेटल बेसिक सी का कोड को, आपको मिनिमम एम्बेडेड लिनक्स की स्किल पे आना पड़ेगा, मिनिमम आना पड़ेगा, कोई आना भी पड़ेगा। एक आईओटी डिवाइस एम्बेडेड लिनक्स के बगैर नहीं चल सकती है। और इस वक्त तकरीबन 40 बिलियन डिवाइसेस दुनिया से कनेक्टेड हैं जो Yes, sir. आईओटी के तौर पे इस वक्त इंटरनेट का हिस्सा हैं। सो Yes, sir. थैंक यू वेरी मच Thank you. खलील भाई, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया। ताहिर सलीम साहब कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वंडरफुल जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज का दिन तो कल से भी बेहतर जा रहा है और एक से एक टेक्निकल टॉक आ रही है और एक से एक नई टेक्नोलॉजी और नई चीजें और नए मुल्क और नए चैंपियंस माशाल्लाह। तो एक अंदाजा ये हो रहा है कि पाकिस्तान में बहुत कुछ है, हमें पता होना चाहिए और हमें थोड़ा सा उनको पब्लिक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। और ये चीजें हैं बेसिकली जिसके ऊपर हमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी एनर्जी एम्बेड करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि हम जो टीवी टॉक शोज में और उसमें जो बातें करते हैं और उससे जो टीम का और कॉम का मोरल डाउन होता है, उसकी बजाय हमें ये अच्छी चीजें शेयर करनी चाहिए। और हमने ये चीज शेयर की है, साल में कम से कम ये 7 दिन जो हैं, ये तो हम आपको अच्छी चीजें दिखाएंगे और अच्छी चीजें बताएंगे। अभी मैं जिन स्पीकर को इनवाइट करने जा रहा हूँ, वैसे तो सभी स्पीकर जो हैं वो मेरी जान है, मेरे दिल से करीब हैं, मेरे पाकिस्तानी हैं, बट दिस जेंटलमैन इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मुझे कॉल आई फैसलाबाद से कि जी हमें एक इवेंट कराना है जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में IEEE का और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। मैं स्पेशली यहाँ से गया बिकॉज आई बिलोंग्स टू फैसलाबाद, गोजरा का रहने वाला हूँ मैं, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि मैं फैसलाबाद के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मैं वहां गया और वहां जाके IEEE की टीम के साथ डिनर किया सरीना में और दिसंबर में लस्सी पी हमने, बड़ा मजा आया। अगले दिन मीटिंग थी, उस मीटिंग में इंडस्ट्री के लोग भी थे, चैम्बर के लोग भी थे और एकेडेमिया से भी थे और हमने बैठ के फैसलाबाद में पहली कांग्रेस का प्लान बनाया। IEEE की पहली कांग्रेस थी और वो कांग्रेस रीजन 10 में पाकिस्तान को मिली थी और पाकिस्तान में उसके साथ कंटेस्टेंट नस्ट भी था, उसमें GIK भी था, उसमें कॉमसेट्स भी था, उसमें UET भी था, उसमें लम्स भी था, लेकिन वो फैसलाबाद को मिली। तो ये जो IEEE की टीम थी, उस टीम ने इतनी जबरदस्त मेहनत की और इतने बॉन्डेड किस्म के स्ट्रक्चर के साथ अपने आप को डेवलप किया और उसके बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह एक फैसलाबाद जो है वो एक सब सेक्शन बन गया है IEEE का। और हमारी जो टीम थी उसमें आमिर जहूर साहब थे, असमा थी और हमारे और काफी सारे दोस्त थे जिन्होंने इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। और मैंने एक जुमला वहां कहा था जो आज बहुत पॉपुलर है कि फैसलाबाद ICT के रडार पे नहीं होता था, उस कांग्रेस ने फैसलाबाद को इस रडार के ऊपर ला के दिखा दिया। और इस वक्त IEEE की सबसे ज्यादा एक्टिविटीज जो हैं वो फैसलाबाद में होती हैं और फैसलाबाद ड्रिवन है। और माशाल्लाह जो फैसलाबाद के IEEE की टीम के चैंपियंस हैं वो रीजन 10 में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। और आमिर और मैविश और आसमा माशाल्लाह, मैविश तो ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग में रहती थी कोरोना से पहले, कभी इस कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं, कभी उस कॉन्फ्रेंस में जा रही हैं। तो पाकिस्तान का ये वाला जो चेहरा है, ये भी दिखाने की जरूरत है कि पाकिस्तानी कितनी मेहनत करते हैं और कितना जबरदस्त काम करते हैं। तो लेट मी प्रेजेंट यू मिस्टर आमिर जहूर। Amir Zahoor, IEEE member since 2007, assistant professor at Fast National University, Chinod Faisalabad campus, and co-founder EPTech Technologies Private Limited, embedded system जो अभी आप सुन रहे थे, ये भी उसमें आमिर ज़हूर साहब का भी कंट्रीब्यूशन है। टॉपिक आमिर साहब का है risc-v architecture, the global opportunities for open source community in Pakistan। मेरा ख्याल है कि इन टॉक्स के बाद हम पाकिस्तान की ICT अरीना को हम ओपन सोर्स फाउंडेशन के इस समिट के थ्रू एक नई दुनिया में ले जा रहे हैं इंशाल्लाह। और मुझे कोई शक नहीं है कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी, और पाकिस्तान एक नई बुलंदियों को छुएगा इंशाल्लाह। और इस वक्त जो हम इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज की बात कर रहे हैं, जो कि मेरा पोर्टफोलियो भी है,
इंशाल्लाह हम बहुत आगे लेके जाएंगे। आमिर ज़हूर साहब, वेलकम ऑन बोर्ड। Over to you. Sure. Very much. Thank you, sir. Thank you very much for a very brief introduction. I'm really honored and humble for your such nice words. Actually, I and my other colleagues from Faisalabad are your, really honored because we get your mentorship over the 5 to 6 years time. और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी चीज़ें डेवलपमेंट में शहर में हुई उसमें आपका एक बहुत बड़ा एक्टिव कंट्रीब्यूशन रहा है। तो थैंक्स टू यू एज वेल फॉर गिविंग your unconditional support to Faisalabad city, sir. Thank you very much. Okay, thank you, sir. So, dear fellows, really honored on Open Source Summit 2020. So my topic is risc-v architecture, the global opportunities for open source usage in Pakistan. As I mentioned, I'm a assistant professor at Fast National University, and we just established EPTech Technologies Private Limited in Pakistan. We are based in Germany and Pakistan. So we'll talk at the end of this talk. So risc-v International is risc is a huge risc-v is coming up. It is a huge bang because it's a free and open risc instruction set architecture. They have the vision. They have the stunning line technology, opportunity, and community. So they reshaping the technology, creating the opportunity for global people, and making them, shipping them into a single community. So we call it a free and open IS, bring unconstrained opportunity and engaged community, enabling processors, hardware, and software innovations through open collaborations. So before starting my topic towards risc-v introduction, so there's a very interesting question. Everybody talking about artificial intelligence today. Everybody talk about how things gonna revolutionize through AI. So my question is, can AI revolution can be happen with or without changing in hardware? ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको आसान ज़बान में अगर मैं कहना चाहूँ कि एक मर्सिडीज का इंजन अगर मेहरान गाड़ी के अंदर लगा दिया जाए and you are expecting कि वही परफॉर्मेंस देगा, it never be possible. तो हम ये चाहते हैं किस तरीके से जो AI है वो जिस स्पेस के साथ वो दुनिया में आ रही है, क्या हमारा करंट एग्जिस्टिंग हार्डवेयर इस AI रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर सकता है, या इसको और जुबान में अगर मैं इसको आसान जुबान में और कहूँ, क्या हमें हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा AI के लिए? तो देयर इज अ बिग यस, क्योंकि जो हमारा करंट एग्जिस्टिंग हार्डवेयर स्पेशली जो प्रोसेसर्स हैं, हमारा आर्किटेक्चर है IS का, वो डेकेड्स पुराना है और वो इतनी तेजी से आने वाली चेंजिंग जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी, कॉस्ट के चीजें और जितनी तेजी से एक लाइफ साइकिल प्रोडक्ट्स का चेंज हो रहा है, खत्म हो रहा है और नई चीजें आ रही हैं, उसमें ये बहुत चैलेंजिंग है। तो हमेशा हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की, लेकिन ओपन सोर्स हार्डवेयर भी उतना ही क्रिटिकल एंड इम्पोर्टेंट है। सो AI अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ी है। देयर इज अ 30 बिलियन जो कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट जिसको कहा गया 2030 के अंदर, in just 3 years time this is going to be $30 billion. It's a huge. So अगर आप इसके बॉटम पे ये देखें इस ग्राफ के अंदर जो आपको नजर आ रहा है, so this most of the data is taken from the TICON 2019 from Nabi Sherwani presentation. So I just acknowledge his contribution for making this data for the people. So you can see the huge growth in just coming years time, जो कि 2020 से लेके 2023 की जो विंडो हमें नजर आ रही है, उसमें $30 बिलियन की विंडो है, जिसमें ट्रेनिंग ऑफ डेटा है, डेटा सेंटर्स की इन्फ्रेंसेस हैं, एज इन्फ्रेंसेस हैं. So there's a huge growth for every country. So it's just you need to have in a right direction, just like in an open source foundation Pakistan, that they enabling the people. We believe that if we tapping this opportunity in the right time, so we would be the technology development leaders for the global market. So I'll give you the more insight in it. So right now, for the main players for AI development is NVIDIA, Intel, or more emerging players is Habana or Huawei. You can say the cloud providers, the Google Cloud, Amazon services, Alibaba Cloud,
or Microsoft Azure services. So these are the main players. But the AI chip ecosystem and landscape is really huge because the evolution is tremendous. Everything is connected and self decision making. How these things happen, So there's a huge ecosystem involved in all these things. There's a big tech giants like Google, Microsoft, Amazon, IBM, Huawei, Apple, Tesla, Microsoft. You can find the huge big tech companies or giants there. To support these companies, these are IC vendors or fabless. These are Intel, Samsung, Qualcomm, AMD, NXP, Xilinx, Broadcom. There's many companies. And to the next level is the IP and design services. There's a huge other, you can see the pillars. Startups in China. China has a huge market for AI. There's a huge growth because many companies are working in China, and they are coming up with a huge number of solutions for the people and world. Like pandemic में जितना बड़ा उन्होंने solutions ये इसको cater करने के लिए AI based solution develop किए. Startup जो worldwide हैं उसके ऊपर आप इसमें देख सकते हैं. ओके, और उसके साथ जो हमारे पास हैं कंपाइलर्स कौन से हैं, बेंचमार्क्स हैं. सो दिस ऑल AI chip ecosystem landscape is really huge and they are leading the world. So there's a fundamental challenge and that we believe initially कि हम ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसके अंदर हमारा एक क्लाउड सर्विसेज होगी और हम नेटवर्क के थ्रू एक एंड पॉइंट पे और जहाँ पे सेंसर्स लगे होंगे और ह्यूज नेटवर्क ऑफ सेंसर्स डेवलप किया जाएगा. उससे डेटा जो है वो क्लाउड पे आएगा और क्लाउड के ऊपर हम अपने डेटा को ट्रेन करके उसको यूज करेंगे. लेकिन देयर इज अ चैलेंज इस सारे में, यानी जो एंड नोड्स हैं वो हमारे डम सेंसर्स हैं और जो जितनी भी हमारी AI डिप्लॉय हुई है, जैसे डॉक्टर शाहिद कमर भी इस पे बात कर रहे हैं, डूइंग अ फैबुलस जॉब, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव है जिस पे हम काम कर रहे हैं इतना. तो डेटा सेंटर्स में आके हम करेंगे और फिर जाके वो वापस उसके अकॉर्डिंग टू एक एक्शन प्रोसीड होगा और सेंसर्स जो है एंड नोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग टू काम करेंगे. बट इज अ फंडामेंटल चैलेंजेस. फंडामेंटल चैलेंज ये है कि देयर इज अ लेटेंसी, कि एक एंड नोड से कोई इंफॉर्मेशन जाती है और फिर कितना ज्यादा स्ट्रेस है आपके नेटवर्क के ऊपर जो इंफॉर्मेशन को भेज रहा है. तो दिस फंडामेंटल डिजाइन कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में बिलीव किया शायद ऐसा नहीं था. अब हमें AI जो है वो डेटा सेंटर या क्लाउड से निकाल के कहाँ लेके जानी है, ऑल द वे बॉटम टू द सेंसर्स और एज नोड, जिसके ऊपर जाके जो मशीन है हमारी एंड पे जो खुद कर रही है, इट शुड बी इनेबल इनफ कि वो खुद से डिसाइड कर सके. सो देयर इज AI चैलेंजिंग एक्सपेंशंस. हम क्लाउड बेस्ड इंफ्रेंसेस की बात करते हैं जिसमें लेटेंसी है, थ्रूपुट के इश्यूज हैं, कॉस्ट बहुत बड़ी इन्वॉल्व है, सर्व यूजर रिक्वेस्ट फास्ट एंड प्रेडिक्टेबिलिटी के इश्यूज हैं, कीप कॉस्ट एंड यूजर पर यूजर जो है it should be questionable. Cloud-based training में performances and more performances की बात करें, value in data models justifies high cost and power, and state-of-the-art technology, advanced nodes and interconnections and cooling. There's a lot of challenges. But once we talk about emphasis at edge or the endpoints, the endpoints with on-device artificial intelligence. Once we developing AI-based edge nodes or the endpoints, then there's a lower power, low cost, and low latency. And similarly, trade performance for cost and compressed models for reduced system cost and power as well, and reduce energy usage as well as the stress on the network. Because if you are putting everything taking to the cloud, there's a huge stress on the network. So what's actually happening? AI moves from cloud to edge actually. This is actually the breaking point. This is the tipping point right now for the global industries. So processing close to the data improves latency, bandwidth, energy consumption, and reduces stress on the network. And now we have to go for such devices and end nodes that are intelligent. So we call it embedded intelligence. So right now, is almost 10 to 20% the AI attach rate. It means that our cameras, like we have the mobile phones and it has some AI for the facial recognition or some of the automatives and AV and जो XR जो हैं, PC tablets हैं, smart speakers हैं, they have some of artificial intelligence.
But imagine, so in coming 3 to 5 years time, our end nodes is completely AI. So that's a huge thing. Everything is on the edge and the end node where decision is actually happening. So the challenge for the world, for the hardware design companies, we have to design hardware and software together, like they can decide by themselves. Okay, so let's talk embedded AI. So there's a new field of discussion is pop up that's called embedded AI. So you actually designing IoT device with the AI actually. So you cannot think that these are the two different domains. IoT and AI is actually together. So embedded AI is in everywhere, in IoT devices, in AR, VR, in automotive, in mobile applications like facial identification, speech recognition, smart assistants. So we have so many applications we can right now witness right now, and it's going to be more functional in coming years. Industrial defect detection, object detection, context awareness, and smart surveillance for people tracking, queue monitoring, event detection, and vehicle detection. You can see such kind of applications right now in pandemic, especially the China, how they are dealing it is very impressive. So this things to be, going very rapid and revolutionized in just matter of the years. Like in next year, this has a huge growth. So real challenges in AI silicon is like the way with the pace, all the algorithms actually moving and training it. Our hardware is not so much supportive. Like once we have a CPU, then we convert into GPU, and then the technology come the domain specific architectures. So the complexity is actually a challenge. So how we can reduce that? Okay, and second is and the power actually. So we want to move on to making a system and machines that actually can go without power consumption over the longer period of time. Like we developed a recent device that called QBZX, is a self-time management gadget by the EPTech Technologies. We are actually trying to make the system sustainable and the low power consumption that it can sustain for next 3 to 5 years time. So single device can manage time. So these are the challenges there. So for such hardware challenges, AI is actually the solution for the world. And because it's an open source and there's not a monopoly of the 4 or 5 big companies, and this is if you say that is a 2.5 trillion, the risc-v based devices are coming up in next 3 to 5 years time. So can you imagine that only 4 or 5 companies or the 6 to 8 global cities can meet the world requirement? This is not possible right now because it has to be open-ended. The people can make and design their own chip in a less time and in less cost. So we'll talk about how risc-v is going to be help this. So why we need risc-v? Because of the legacy of ISR, because right now the instruction set architectures are decade old. Like we have the 30 to 40 years old architecture, we are using it. And the risc-v unlocks the architecture and enable innovations for the global community. So you can design and the companies can design their own, because every company have their own specific requirement and they need their own specific chips. And once it's so much open, it's enable people, they can design their own chips in a lesser time. Like there's a famous company that's playing the fundamental role in risc-v is Sci-Fi. So in Sci-Fi actually we have, so Sci-Fi is giving us a big template, and according to that template we can make the changes and we can get our need-based or required-based chip actually. So because there's a huge amazing development and Sci-Fi actually giving all the support for risc-v advancement, and there's a huge other companies as well. Benefits, because risc-v is stable, modular, designed for extendable specialization, clean state design, and simple. Oh, so these benefits are very critical and important. So here's the risc-v ecosystem momentum, and that is phenomenal.
So these are the global and giant companies that are right now providing services to the global companies. These are the few of them. Not the all companies are putting into it. Thanks to Sci-Fi who make these slides amazing. So there's a Siemens, a Samsung, Google, IBM, Qualcomm, Sci-Fi, Huawei. Every large company right now in the world are using risc-v right now. So you can imagine. So because it's unburdened, the legal hassles or complexities or customizations. So and it gives a lot of freedom for the hardware design companies. So that's why it's coming up. So in hardware products, see significant problems. Cost, because chip development is too costly. Might be for 7 nanometer chip, you could invest $500 million, or the time cycle is too long, might be 2 to 5 years time to get in a single chip that you require, and the expertise. So too many experts needed from the many other disciplines to develop a particular chip. So what happened actually, so under the umbrella of Sci-Fi, they have the particular actually node, that online platform where you can go and under given the template, like the core template or a block or chip template, you can make your own changes according to your IP and other things, and you can develop your own chips. So this is a great advancement in chip manufacturing. risc-v ecosystem is so powerful for the open source community, just like for Pakistan. risc-v free and open model will fuel the ecosystem and stimulate broader innovation for custom ICs and create product differences. risc-v open implementation model will improve security because of deeper transparency. And the risc-v open business model will encourage varied cores and IP development, helping IoT products to alleviate cost pressures. And similarly, cloud services provide and leading OEMs will leverage risc-v to add products and service value. And semiconductors vendors will capitalize on risc-v and streamline design resources to drive the chip innovation and market adoption. So risc-v ecosystem doing phenomenal. So this adoption spans industries and workloads in cloud and data centers. Providers like Amazon or Alibaba are designing their own chips. Automotive is transforming from autonomous vehicles to infotainment to safety, and whole vehicle relies on innovation electronics. Industrial IoTs incorporate artificial intelligence in manufacturing and industrial processes. Mobile and wireless continue rapid evolution with each generation of hardware and increased capability. Consumer IoT devices, memory was the largest semiconductor category by scale, 150 billion in 2018. That's a huge market. So now, right now at the moment, there's more than 750 risc-v members across the world, in across 50 countries. Among them is the 85 chips, system on chip, IP and FPGA, 4 systems, ODM and OEM based, 3 IOs, memory, network and storage for 12 industries, 11 services, 56 researchers. That's closely working with universities, labs, and other alliances. 35 softwares, development tools and firmwares for and operating systems. 500 plus individuals, risc-v developers and advocates across the world. Just like we are one of them, and our company EPTech is become the strategic partner of risc-v. The story starts from in February 2020, once there's a very famous event in Frankfurt, Germany, and our CEO visited them and met the risc-v and Sci-Fi team, and we started working with them. And in September, we are really honored that risc-v International declared us as a strategic partner, just like other Google and other big companies in the world. So dedicated community, individuals, advocates, software developers, press analytics chips, universities and research, industry inventors, everybody is developing and elevating the community. And the size of the community is growing because every field and walk of life related to technology is putting their inputs. We are a proud partner for risc-v, as I mentioned, and EPTech is a Pakistan and Germany-based company. We are designing embedded products, and at the same time,
we are giving end-to-end solutions. So I'm trying to finish in time. I love to ask your questions if you have. Ji, thank you very much, Amir. Over to Mashallah. Bombay. Wonderful talk, wonderful session. We have couple of questions. एक तो डॉक्टर अशरफ मसूद साहब ने लिखा है, well in Pakistan we are not bottom level in chip designing with zero manufacturing. How can we get into risc-v revolution and compete? कल हमारी जो रात को डिस्कशन हो रही थी, मेरा ख्याल आप जवाब दीजिए आमिर. Yes. पिछला क्वेश्चन डॉक्टर अशरफ साहब का दीजिए. हाँ, मेरे पास तो जवाब है, मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ. Sir, thank you very much. Sir, thank you very much. Dr. Ashraf is really inspirational for Gigi Palida. So thank you very much, Dr. Ashraf, for giving the time and listening to the talk. Sir, so we have to be the part of the global community first, and then we enabling our people. Actually, what we are doing in our company, we conducted 200 interviews for just embedded design products and services in Pakistan, and out of them only we hardly get the 8 people actually. So the connection, the part of the community is very necessary, and then you can enable people and bringing the investors into the Pakistan, because every place have the specialty. It's not the special country or the particular place can do these services. I think you can also contribute, but my understanding is once we the part of the community and we the money and the investor definitely come into the business. अगर मैं इसमें ऐड करूं तो मेरे ख्याल में हमें सिर्फ पाकिस्तान में असेंबलिंग प्लांट की बात करनी या मैन्युफैक्चरिंग करना एक अलग बात है, लेकिन उसका डिजाइन तो हम पूरी दुनिया में बैठ के, जिस तरह आज हम पूरी दुनिया में बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका डिजाइन पूरी दुनिया में बैठ के, जैसे हमारे जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने मर्सिडीज के लिए जो हेडलाइट्स हैं उसके अंदर जो सेंसर्स हैं उनको डिवाइस किया. तो डिजाइनिंग इटसेल्फ एक बहुत बड़ा आर्ट है और एक बहुत बड़ा फील्ड है, और उसके अंदर हमें अगर कंट्रीब्यूट कर सके तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं. जी, हेलो जी जी, प्रोड्यूसर साहब आवाज नहीं आ रही आमिर साहब की. मेरे ख्याल आपकी तरफ से कुछ मेरे ख्याल बैंडविड्थ का मसला हो गया है, आवाज आपकी बिल्कुल खत्म हो गई. Yes, there's a lot of gray area actually, but here in Pakistan, what we are working with embedded is just developing the capacity of the team, and what we are trying to do, we actually facilitating between the Germany and Pakistan office, and we try to make capable of our team that they can address directly to the German problems. Yeah, please go ahead. Okay ji, inshallah Ahmed sahab, with the help of you and your company and all the participants, all the team, thank you very much. इंशाल्लाह मुझे आज बहुत यकीन हुआ चाहता है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बहुत अच्छे हाथों में है, और टेक्नोलॉजी और लर्निंग हमारी इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव में काम कर रही है, और हम इंशाल्लाह इसमें प्रॉस्पर करेंगे. आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच. हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं जी डॉक्टर तुफैल खान, असिस्टेंट प्रोफेसर नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन यूईटी पेशावर, और इनका टॉपिक है ओपन सोर्स रोबोटिक्स. लेकिन मैं पहले इनको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं.
हमारे तुफैल खान साहब जी, Dr. Tufail Khan from UET Peshawar, he will be giving a talk on open source robotics. Dr. Tufail holds a BSc degree in computer science, computer system engineering from UET Peshawar, on MSc degree in mechatronics engineering from Asian Institute of Technology, Thailand, and a PhD in mechanical engineering with specialization in manufacturing and mechatronics from the University of British Columbia, Canada. He then worked as a postdoctoral research fellow at the Industrial Automation Laboratory at UBC in 2016. He has worked as a consultant and research associate on robotics and automation projects with the industry, including the Canadian oil giant Cenovus Energy. He has more than 10 years of research and teaching experience, including 3 years of teaching industrial robotics at both undergrad and graduate levels at University of British Columbia, Canada, 2014 to 2017. Since 2017, he is working as assistant professor at the Department of Mechanical Engineering, University of Engineering and Technology, Peshawar. He is also a co-director of the Advanced Robotics and Automation Laboratory at UET Peshawar and a co-principal investigator at the National Center of Robotics and Automation, Pakistan. In his talk, Dr. Tufail will provide some robotics use cases based on his vast experience in the field. Ideas and resources of doing open source robotics projects will also be shared. Dr. Saab, welcome and over to you. Assalamu alaikum and thank you very much, sir. Thank you for introducing me. I will, with your permission, I'll share my screen. Sure, please. डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है, 102 बुखार है इस वक्त, लेकिन आपकी मोहब्बत है कि आप इस कैफियत में भी हमारे साथ हैं और आपने इसको अबंडन नहीं किया. थैंक यू वेरी मच, अप्रिशिएट. हाँ जी, so can you see my slide now? जी बिल्कुल क्लियर, वंडरफुल, फर्स्ट क्लास. अच्छा. Over to you. हाँ जी. So the topic of my presentation is open source robotics. So alhamdulillah, it's been a pleasure to be part of this summit. बहुत कुछ सीखने को मिला. मैं तो बोलने से ज़्यादा excited था सुनने के लिए. इतने अच्छे माशाल्लाह speakers and they are bringing a variety of topics जो कि बहुत कम हमें सुनने को मिलती हैं एक जगह पे. मेरा ताल्लुक, I'm part of the National Center of Robotics and Automation, which was inaugurated in 2018. It has a secretariat at NUST, and we're having 11 labs from 13 universities from across Pakistan, which has LUMS, NUST, NED, UT Lahore, and UT Texila and UT Peshawar. Our mandate is to build national capacity to carry out R&D in the emerging field of robotics and automation. So our focus is on solving local problems through technology. This is the outline for my presentation. Okay, I'll be presenting some case studies based on our previous work that I did in Canada. Then I'll be sharing some open source tools that are good for robotics. आपने मेरे इंट्रोडक्शन में तो ये कह दिया, तो आई डोंट हैव टू गो थ्रू इट वंस मोर. ये स्लाइड इम्पॉर्टेंट है कि वे वी आर थोड़ा सा फ्यूचर को, उस फ्यूचर के लिए ख़ुद को बेस्ट प्रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है कि हम पास्ट के साथ ख़ुद को कनेक्ट कर लें. तो जो अभी हमें मिल रहा है देखने को, इट्स कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर्स ऑफ दिस आर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स. बहुत कुछ इस पे अभी काम हुआ है, लेकिन there is a lot to be done, and that's what I think one of the topics of this summit is also. In order to catch with my audience, मैं सबको on board लेने की कोशिश करूँगा. तो पहले I will define what is a robot. So anything that you see on the screen in these images, they can be defined as a robot. So they are the most important part of these machines is they are programmable, reprogrammable. Based on the interaction with the environment, they change their behavior.
कभी किसी सेंसर से कुछ सेंस करके इंटरेक्ट कर रहे हैं, कभी इंस्पेक्ट कर रहे हैं, कभी मॉनिटर कर रहे हैं, कभी मैनिपुलेट कर रहे हैं एक चीज़ को इन्वायरमेंट के साथ कंप्लीटली इन इंटरेक्शन है। ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं, फिक्स्ड बेस जिनको इंडस्ट्रियल रोबोट कहते हैं, ये मोबाइल भी हो सकते हैं, व्हील्ड, ये ट्रैक्ड भी हो सकते हैं, ये मुख्तलिफ शक्ल में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ लाइक अ स्नेक आर्म, जो कि तंग जगहों पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लाइंग भी हो सकते हैं, जिसको आमतौर पर लोग ड्रोन कहते हैं, यूएवी। इट कुड बी इन अ मरीन व्हीकल, जो कि समंदर के या पानी के नीचे इट कैन वर्क ऑटोनोमसली, and it could be in the form of a humanoid. So that's a very broad definition of what a robot is. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के लिहाज से देखा जाए तो ये कुछ मेजर मॉड्यूल्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल आर्म काइनेमेटिक्स मीन किस तरह आर्म की जियोमेट्री है और मुख्तलिफ जॉइंट्स पे हमारे पास मोशन, हाउ इट गिव्स अस मोशन एट द डिजायर्ड लेवल, एट द टूल लेवल. Then we have sometimes we simulate the robot also, ताकि अगर हमारे पास रियल रोबोट नहीं है और हम उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं तो वो सिमुलेटेड रोबोट हमें ये फैसिलिटी दे दे कि हम कम से कम उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें, और जैसे ही हमारे पास हार्डवेयर डेवलप हो जाए तो हम उसको सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर लें, एंड इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड एज इट वाज वर्किंग इन द सिमुलेशन. कंट्रोल पार्ट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंट्रोल के बगैर कोई भी मैकेनिकल सिस्टम या इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम ये काम नहीं करेगा. तो एंड देन द ट्रेजेक्टरी प्लानिंग, जो भी ट्रेजेक्टरी है, पाथ है द रोबोट ने, चाहे वो मोबाइल रोबोट है चाहे वो इंडस्ट्रियल रोबोट है, तो दिस इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ वन ऑफ द सॉफ्टवेयर. और ये आपस में एक मॉड्यूलर तरीके से हम डेवलप करते हैं ताकि मुख्तलिफ टीम्स मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ मॉड्यूल्स पे काम कर सकें, एंड व्हेन वी ब्रिंग देम टुगेदर तो ये सीमलेस तरीके से आपस में इंटीग्रेट हो सकें. एप्लीकेशंस रोबोटिक्स की क्या हैं वर्ल्ड वाइड? ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हैं. इनफैक्ट दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्री दैट सॉ द रोबोट्स इन एक्शन, स्पेशली जापान में इसकी बर्थ हुई. लेकिन उसके बाद इट हैज़ टेकन ओवर दीज इंडस्ट्रीज लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, पिक एंड प्लेस, स्पॉट वेल्डिंग, स्प्रेइंग, कटिंग, सीलिंग, सो पैलेटाइजिंग. सो ये तो इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशंस हो गई. इसके अलावा इसकी दूसरी जो एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं वो है 3D प्रिंटिंग में. बाकायदा 3D प्रिंटेड हाउसेस बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ जायंट रोबोट्स. प्रोस्थेसिस एंड ऑर्थोसिस हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि अपाहज लोगों के लिए, उनके लिए पाँव के लिए एड्स बनाना या मोबिलिटी एड्स बनाना. ये जो आपको राइट साइड पे स्क्रीन में नज़र आ रहा है, इट्स अ रास्पबेरी पाई कंट्रोल्ड प्रोस्थेटिक आर्म, जिसको हम एक सेंसर के थ्रू अपने मसल के सिग्नल्स दे रहे हैं, एंड इट इज़ फॉलोइंग अस द मोशन अकॉर्डिंगली इज़ जनरेटेड बाय द ब्रेन. इसके अलावा स्पेस में इनकी एप्लीकेशंस हैं. सर्विस इंडस्ट्री में आजकल बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी के सतह भी ये देखने को मिल रहे हैं. एजुकेशन के लिए है, एंड देयर आर लॉट मोर. हमने किस मकसद के लिए रोबोट को यूज़ किया? व्हेन आई वाज इन कनाडा, हमें सनोवस एनर्जी की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था कि भाई ये जिस एरिया में हमारा ऑयल रिग है वहाँ तक रसाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है. -30 -40 डिग्रीज पे काम करना पड़ता है, और ये ऑयल रिग जो है मेन चीज़ है जो अगर ख़राब हो जाए तो हमारी सारी ऑयल की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाती है. हमने उनके सिस्टम को बड़ा थॉरोली स्टडी किया, एंड हम ये होने चाहिए कि वो ओपन सोर्स डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके, क्योंकि हमें अगर एक कंप्यूटर से काम नहीं चलता तो हम दूसरा कंप्यूटर इसमें लगा सकें, एक सेंसर हमारे काम करनी है दूसरा सेंसर ला सकें, और सॉफ्टवेयर में भी हम मुख्तलिफ मॉड्यूल्स ऐड कर सकें. तो वी फाउंड इट वेरी हार्ड टू फाइंड सच अ प्लेटफॉर्म विच कैन मीट ऑल दीज रिक्वायरमेंट्स. और तब मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हाउ इम्पॉर्टेंट ओपन सोर्स डेवलपमेंट इज़. बहरहाल ये हमारी उनके लिए रिकमेंडेशन थी. एक टेली ऑपरेटेड आर्म जो कि इस ऑयल रिग को इंस्पेक्ट करेगा. इट कुड आल्सो बी इट्स एन आर्म माउंटेड ऑन UGV अनमैन्ड गाइडेड व्हीकल, और उस पर ये मुख्तलिफ किस्म के सेंसर इंस्टॉल है, जैसे RGB कैमरा है, थर्मल IR कैमरा है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर है, जो कि इसके अंदर लीक को डिटेक्ट करे, इसके अंदर जो है क्रैक्स को डिटेक्ट करें.
और कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी को डिटेक्ट करके रिपोर्ट करे रिमोट कंट्रोल रूम में। तो ये उसके लिए कम्युनिकेशन नेटवर्क हमने प्रपोज किया, लेकिन अल्टीमेटली हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इतने ज़्यादा सेंसर्स को सिस्टम्स को इंस्टॉल करके उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है दैट बिकम्स क्वाइट अ बिग चैलेंज। वो इस तरह से होना चाहिए कि वो फ्यूचर में उसको अपडेट भी किया जा सके, उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो, उसमें मल्टीपल टीम्स एट अ टाइम काम भी कर सकें, और अगर कोई सेंसर किसी वक्त में काम करना छोड़ दे या कोई एक्चुएटर काम करना छोड़ दे तो सॉफ्टवेयर में ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सके। तो उसके लिए जो हमने उस वक्त ऑपरेटिंग सिस्टम टूल चूज किया आफ्टर थॉरो सर्च, दैट्स कॉल्ड रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम. It's a operating system exclusively made for robots. So for example, ये एक और सिंपल केस स्टडी है जिसमें आपको मोबाइल रोबोट नज़र आ रहा है, इसमें एक्चुएटर्स हैं, मोटर्स हैं, सेंसर्स हैं, लेज़र सेंसर है जिसके थ्रू ये एनवायरनमेंट का मैप बना रहा है, और इसको फिलहाल कंट्रोलर इसका जो हार्डवेयर है वो है पीसी प्लस माइक्रो कंट्रोलर आर्डुइनो विच इज़ डूइंग पोजीशन एंड वेलोसिटी कंट्रोल. अगर आम तरीके से हम इसको बिल्ड करना चाहें तो a simple program would be one that is like a class for the chassis, and then there is running another one which is just doing the control part. So we are getting these time ticks from, let's say, a real-time clock, and they are asking us to rotate the robot at a certain interval, and then we're sending those commands, publishing those to the robot. At the same time, you want to see the robot in a simulated form, ताकि आपको robot hardware जो कर रहा है वो simulated form में भी आपको नजर आए. Simulation के environment में पहले बता चुका, importance में पहले बता चुका हूँ कि कम से कम अगर हमारे पास robot नहीं भी है तो हमारा control software किसी simulated robot से उसी तरह behave करे जो कि hardware से करेगा. लेकिन इसको एट अ टाइम मैनेज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सिंपल सिस्टम्स के लिए तो ये अगर एक रोबोट है और उसमें एक दो सेंसर है तो काम करेगा, लेकिन इसको अब स्केल नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब एक से ज़्यादा हमारे पास कंट्रोलर्स हों. तो दैट्स व्हाई वी नीडेड अ मिडलवेयर, and robot operating system is a middleware which solves these three challenges. For example, it's asynchronous. किसी सेंसर से हम 100 हर्ट्ज पे डेटा रीड कर रहे होते हैं, किसी से हम 200 हर्ट्ज पे कर रहे होते हैं. मतलब ये कि सेकंड में एक रीडिंग देते हैं, कोई सेकंड में 10 रीडिंग देते हैं, एक और सेंसर सेकंड में 100 रीडिंग्स देते हैं. तो आपको मल्टी प्रोसेसेस चलाने होंगे, मल्टी थ्रेड्स चलाने होंगे. फिर कम्प्लेक्स है, एनवायरनमेंट भी कम्प्लेक्स है, रोबोट बजाते खुद भी एक कॉम्प्लेक्स डिवाइस है. और इसके अलावा अगर आपने नीचे हार्डवेयर इंस्टॉल किया है तो हर हार्डवेयर के लिए आपने ख़ास ड्राइवर भी इंस्टॉल किया है. बट आप चाहते हैं कि अगर कल को मैं नीचे कोई कैमरा चेंज कर सकूं या कोई सेंसर चेंज कर सकूं और किसी और कंपनी का किसी और मॉडल का मैं लगाऊं, तो कम से कम सॉफ्टवेयर ऊपर से इफेक्ट ना हो. दिस इज़ कॉल्ड हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन इन टेक्निकल टर्म्स. तो सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम रोबोट को कहते हैं कि भाई फॉरवर्ड जाएं, फिर लेफ्ट जाएं, फिर हम इमेज एक्वायर करते हैं, फिर उसके ऊपर हम इमेज प्रोसेसिंग करके कुछ डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, एंड देन वी गो स्टेप बाय स्टेप. अब मसला कब आता है? जब हम व्हेन एन ऑब्स्टिकल अपीयर्स व्हाइल यू आर गोइंग फॉरवर्ड, व्हेन यू आर एट दिस पर्टिकुलर लाइन, आपके सामने एक ऑब्स्टिकल आया है जिसको आप तब डिटेक्ट करेंगे जब आप इमेज एक्वायर करेंगे और फिर उसके ऊपर इमेज प्रोसेसिंग रन करेंगे. दैट्स नॉट पॉसिबल विद सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग. व्हाट हैपेंस टू द एनकोडर डेटा व्हाइल यू आर टर्निंग, अगर आप टर्न कर रहे हैं तो उस वक्त आप एनकोडर से रीड नहीं कर रहे. व्हाट इफ सम अदर मॉड्यूल वांट्स द सेम डेटा, और अगर एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को किसी एक सेंसर का डेटा चाहिए तो फिर आप क्या करेंगे? तो इसके लिए नॉर्मल एम्बेडेड जो हमारे साथियों ने बातें की, दे नो अबाउट इट, इट्स कॉल्ड इंटरप्ट सर्विस रूटीन, या इनको कॉल बैक्स भी किया जा सकता है कि जैसे ही कोई सेंसर का डेटा आए हम करस्पॉन्डिंग कॉल बैक कॉल करके उसको एंटरटेन करें. तो दैट्स सॉर्ट ऑफ अ मल्टीटास्किंग. एंड हाउ टू डील विद द कॉम्प्लेक्सिटी, it helps, ROS helps us organize the code. So we have different nodes जो कि programs हैं जो कि corresponding hardware को represent करते हैं, and that just send on data no matter if someone is receiving or not. तो अगर बीच में से वो कैमरा डेटा सेंड करना बंद भी कर दे तो बाकी सॉफ्टवेयर जो कि उस पर डिपेंड नहीं करते वो फिर भी काम कर रहे होंगे. इसके अलावा डिवाइस स्पेसिफिक ड्राइवर से हमें निजात मिल गई.
अगर हम बीच में से ड्राइवर चेंज करते हैं, हार्डवेयर चेंज करते हैं, तो हमें हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी मिल रही है, एंड दीज ऑल व्हाट रॉस ऑफर्स एंड मेनी अदर थिंग्स. तो अगर मैं इसके आर्किटेक्चर पे आऊँ तो it's at the very low level there is the operating system sitting. रॉस के बारे में पहले कहा जाता था कि ये सिर्फ लिनक्स के ऊपर ही चलता है, तो आज रॉस 2 जो है वो विंडोज़ के ऊपर भी आप इंस्टॉल कर सकें. और दो आई हाईली रिकमेंड कि भाई आप लिनक्स में ही रहें, क्योंकि ओपन सोर्स शुरू ही लिनक्स से होता है. मिडलवेयर, इट ऑफर्स बोथ द टीसीपी कम्युनिकेशन एंड यूडीपी एट द नेटवर्क लेयर. रॉस 2 में तो कम्प्लीटली इट्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस DDS सपोर्टेड, जो कि इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए एक फर्मवेयर है, सॉरी एक फ्रेमवर्क है, जिसके होते हुए you can connect your robots with the industrial IoT. क्लाइंट लाइब्रेरी से इन एब्स्ट्रैक्शन है, और ऊपर आपके लिए एप्लीकेशन लेवल पे आप अपने जो है रोबोट की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं. अब आपको रॉस के यूज़ करने से फ़ायदा क्या हुआ, वो आप PR2 ये एक मशहूर रोबोट है, इसके लिए भी आपका कोड यूजेबल है. अगर आपने लेट्स से नेविगेशन के लिए कोड लिखा है, अगर आप उसी कोड में थोड़ी सी चेंजेस कर लें, रूम्बा पे ले जाएं, इट्स अ रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर, या के रोबोट 3 पे ले जाएं, तो यू कैन इजीली पोर्ट द कोड इज पोर्टेबल. there is a huge variety of robots that are supporting ROS. मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैंने लिंक दिया है robots.ros.org. इस पे आपको dozens of robots आपको मिल सकते हैं. इसमें even MIT had a urban challenge vehicle which was the most complex autonomous car की example लें तो it's the most complex robot I would say, and it was based on ROS. तो ये तो रॉस की बातें थी. इसके अलावा हमें एक और टूल चाहिए होता है अक्सर सिमुलेशन के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में मसला ये कि, बल्कि ओवरऑल दुनिया में मसला ये कि हमारे पास हार्डवेयर की थोड़ी सी कीमत ज़्यादा है, और उस वजह से रोबोटिक्स की तरफ लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे. हम इंडस्ट्री में उस तरह से कैप्चर नहीं कर रहे जितनी इसकी पोटेंशियल है. इंशाल्लाह ओवरऑल हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जब लर्नर्स को रिकमेंड करते हैं, बच्चों को रिकमेंड करते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से, बल्कि सिर्फ बच्चे नहीं, प्रोफेशनल भी, हम खुद भी ये करते रहते हैं, तो हमें ऐसे एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो रोबोट को सिमुलेट भी कर सके, सेंसर्स को भी सिमुलेट कर सके, और उसमें हम कंट्रोल अपना सॉफ्टवेयर लिख सकें. ये देखें, इस आपको यू कैन सी ऑन स्लाइड नंबर 36 कि the camera which is there mounted on the robot, this robot is called robot, which it is simulated and it works as in similar fashion which a real camera would do. इसके अलावा अगर कोई बच्चा स्टार्ट करना चाहता है तो आई हाईली रिकमेंड दिस YouTube channel from this Leopoldo Armesto. He's a lecturer at one of the Spanish universities. तो this is easily. ROS के बारे में मैंने नहीं बताया, क्योंकि ROS के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि they have just like any other open source tools, they offer a lot of tutorial which if you can follow, you can easily master it. चूँकि मेरे ऑडियंस में ज़्यादातर कंसिडरेबल चंक स्टूडेंट्स का होता है, वो अक्सर कहते हैं हम चीज़ सीखे कहाँ से, तो पेशावर में हमारा जो लैब है हमारी at UT Peshawar, it's part of the NCRA, National Center of Robotics and Automation. So we currently are building this robot for precision agriculture. This will be based on ROS इंशाल्लाह. इसके अलावा हमारे कुछ और चीज़ें हम प्रोडक्ट्स बना चुके हैं, कुछ अभी उस स्टेज में है R&D. UAV है, it's again for precision agriculture but it can be used for surveillance and security. इस पे भी Raspberry Pi हमने माउंट किया है, and Raspberry Pi के ऊपर ROS इंस्टॉल करके you can do miracles with this robot. इसके अलावा रोबोट ROS is not only for robots. ये गलत फहमी में दूर करना चाहूँगा. आपने देखे कि ये आपको हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन देता है, ये आपको कॉल बैक्स की फैसिलिटी देता है, मल्टीटास्किंग की. इट कैन रन साइमल्टेनियसली एट 2 or 3 कंप्यूटर्स इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर. तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स मशीन है, जैसे हमारा ये प्रिसिजन एग्रीकल्चर स्प्रेयर है जो कि विजन बेस्ड डिटेक्ट करके क्रॉप को उसके ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, इसके ऊपर हमने इसको रास्पबेरी पाई पे लेके जाना है. एंड द अदर आइटम दैट यू सी कंपोनेंट इट्स कॉल्ड VPU, विजन प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके थ्रू हम कम से कम रास्पबेरी पाई लेवल पे इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो वी आर रनिंग ROS ऑन दैट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट. इसके अलावा
कुछ और चीज़ें हैं कि भाई अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से हम स्टार्ट लें। तो जिस तरह मुझसे पहले स्पीकर ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बात ही की है कि भाई एम्बेडेड सिस्टम्स इज़ वेयर यू कैन एस्टैब्लिश योर करियर वेरी इजीली, बिकॉज ये ट्रेंडी है और इसका कम से कम अगले 5-10 साल तक तो हमें नज़र आ रहा है कि ये ट्रेंड चलेगा। DIY प्रोजेक्ट्स करें जी आप, कम से कम ऐसे प्रोजेक्ट which you can do it by yourselves, and there's a lot of code being shared on the ROS website, GitHub पे भी है, learn from them, use them in your project. ज़्यादातर open source licensing है तो you shouldn't worry too much, लेकिन उसको ज़्यादातर learning purpose के लिए भी use कर सकते हैं, and you can also integrate it in your projects. Locally relevant problem को target करें प्लीज़। हमारा तो फील्ड एग्रीकल्चर से है, इसके अलावा हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा हो जो कि सोसाइटी में किसी के काम आए। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, यस वी ऑफर, जितनी भी लैब्स हैं हमारी NCRA की, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर ऑल ऑफरिंग दीज अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा जी अपने अगर आपने प्रोजेक्ट किए तो ट्राई टू टेक देम टू लोकल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स। इंडस्ट्री में जाएं, प्रॉब्लम्स देखें, अगर रोबोटिक्स के नहीं है तो कंप्यूटर विजन के होंगे, कंप्यूटर विजन के नहीं है तो मशीन लर्निंग के होंगे, IoT के होंगे, एंड दैट्स वेयर यू कैन इंस्पायर फ्रॉम एंड यू कैन गेट इट सॉल्व फॉर देम। इसके अलावा ओपन सोर्स डेवलपमेंट टूल्स, जिस तरह के पैलेसिन की मैंने बात की, रॉस फॉर लर्निंग रोबोटिक्स एंड नॉलेज शेयरिंग, तो दिस इज जनरल एडवाइस। आखिर में मैं अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान रोबोटिक्स की, तो कनाडा में देयर वाज द डिपार्टमेंट जहाँ पे मैंने वुड क्राफ्टिंग देखी है, रोबोट बेस्ड। इट वाज अमेजिंग, जो काम वो कर रहे थे फर्नीचर के साथ, और जो उसकी डिज़ाइनिंग है, कटिंग है, उसके ऊपर जो क्राफ्टिंग है, आई विश आई वुड हैव अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग दैट टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारे नदरन एरियाज़ में फॉरेस्ट एक है, इस चीज़ की कंप्लीट मार्केट है। इसके अलावा बॉम्ब डिफ्यूजिंग रोबोट्स हैं, केपी में पर्टिकुलरली इस पे बहुत ज़्यादा है। हमारा एक स्टार्टअप भी है, वी कॉल इट स्टेमिट। हमने छोटे रोबोट्स बनाए हुए हैं ओपन सोर्स, जिसको एजुकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। बच्चा एक खिलौने के साथ खेल के सीख रहा होता है, एंड शुरू में हम ग्राफिकल प्रोग्रामिंग पे हमारा फोकस होता है ताकि बच्चा टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग पे ना जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वो ग्राफिकल प्रोग्राम बिल्ड कर रहा होता है, साथ साथ उसका सी लैंग्वेज उसको खुद ही कोड नज़र आ रहा होता है कि अच्छा इस ब्लॉक के लाती मुझे ये सी कोड ऐड किया है। एक टाइम आता है जब बच्चे उस कोड में खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। दैट्स वेयर वी ट्रांसलेट फ्रॉम द ग्राफिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू सी लैंग्वेज और इवन टू पाइथन। तो दैट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज और स्टार्टअप्स काम कर रही हैं। सर्वेलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू, डिज़ास्टर रिस्पांस, इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पुलिस के साथ काम किया जा सकता है। ड्रोन्स इस मामले में बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। प्रोस्थेटिक्स एंड मेडिकल रोबोटिक्स, हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है इधर, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक साइंसेज, POSF। We have a strong collaboration with them. Our team are busy, जहाँ पे हम अपने प्रोस्थेटिक्स की टेस्टिंग भी करते हैं और वहाँ से हमारी नीड भी अराइज होती है। सर्विस एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, आखिर में मैं इस पे ज़रूर जोर दूंगा कि इमेजिन देयर इज़ अ बोट इन द लैक, जैसे वो ताबाद लेके या जो भी है बहुत मशहूर है, एंड यू मेक इट ऑटोनमस। कम से कम उसके ऊपर जो एक ड्रोन है उसी को फॉलो करता रहे और आपकी वीडियो बनाए और images लें, and you can remote control it, it can go autonomously, तो I see a lot of opportunities there, और इस पे इतना खर्चा भी नहीं आएगा। इसके अलावा ड्रोन्स, UAVs फॉर ऑटोमेटेड सर्वेलेंस, डिजास्टर रिस्पांस मैं पहले कह चुका हूँ, एंड इंस्पेक्शन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। So that was from my side. I hope it was not too much technical. I try to keep it as simple as possible. If there are any question, I would like to answer. जी, thank you very much, Dr. Tufail. माशाल्लाह, it's a wonderful session. मेरी सबसे पहली फरमाइश तो ये होगी कि जब हम पेशावर जाएंगे कभी, तो आपने इसी ड्रोन से जो है ना वहाँ से यूनिवर्सिटी रोड से टिक्के मंगाने हैं और यूनिवर्सिटी में बैठ के हम खाएंगे। जरूर सर, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, जरूर जी। आपके लिए क्वेश्चंस हैं। उमर हमीद साहब क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्लेक्स रोबोटिक्स नेटवर्क रिक्वायर्स डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन सेंसर इनपुट्स।
Do you observe a challenge when decision is delayed from that robots? असल में मुझे लगता है इनका इशारा है कि अगर देयर इज़ अ कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, अगर सेंसर की तरफ से कोई डेटा नहीं आ रहा या एल्गोरिथम प्रोसेसिंग में कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो रॉस के अंदर भी ओवरऑल हम एक वॉच आउट टाइमर आप उसको कह लें या कुछ we have those conditions in place जिसके होते हुए अगर कोई unresponsive behavior है तो we can kill it, but it's quite modular, उससे बाकी प्रोग्राम पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, उमर हमीद साहब कह रहे हैं, व्हेन डू वी एक्सपेक्ट ROI फ्रॉम द रोबोटिक इंडस्ट्री? इनका इशारा पता नहीं पाकिस्तान के लिए है या इंटरनेशनल? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए होगा, क्योंकि बाहर के कॉन्टेक्स्ट में तो ये क्वेश्चन ज़्यादा वैलिड नहीं है। बाहर तो ऑलरेडी लोग इसका ROI देख चुके हैं। पाकिस्तान में भी NCRA हैज़ टेकन ओवर, इंशाल्लाह अभी तो हमें 1 साल ही हुए हैं, कुछ ऊपर 1.5 साल, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको रोबोट्स नज़र आएंगे। ऑलरेडी बहुत आपके जो टैंक हैं मैं कहूँगा उसकी वेल्डिंग तो रोबोट के बगैर आप कर ही नहीं सकते। तो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे रोबोट्स ऑलरेडी इन यूज़ हैं। जी, तीसरा सवाल हमारे पास है जी। उज़ैर खान, हमारा सैटेलाइट इमेजरी में तो हमारे दूसरे एक फ्रेंड हैं वो एक्टिव हैं, लेकिन हमें ओपन सैटेलाइट से डेटा मिल सकता है अगर आपको चाहिए हो। हम ड्रोन से वो डेटा जनरेट करते हैं। आजकल आपको पता है कि ड्रोन 15 मिनट की फ्लाइट में आपको इतना डेटा दे देता है कि डोंट नीड इमेजरी फ्रॉम द सैटेलाइट्स, लेकिन यस देयर आर ओपन सैटेलाइट सोर्सेज। जी, enable overview especially designed for startups as well experienced developer robotics as an enormous application. जी, thank you Salim साहब for the comment. Right जी, with this we are at the end of the session. अगर आप कोई concluding जुमला कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कंक्लूडिंग जुमला जी यही है कि मैंने ओपन सोर्स में अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि हमारे ज़्यादातर चूंकि लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से होता है तो वी जस्ट हैव फोकस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वो जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हार्डवेयर से हमने वी शाई अवे फ्रॉम हार्डवेयर। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओपन सोर्स हार्डवेयर भी हैं, ये रोबोट्स भी बन सकते हैं, इसमें भी अगर ये हमारा ओपन सोर्स फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से कुछ इंटरेक्शन हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्स। So that's my last comment. Thank you very much जी, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you for being with us and enlightened us, our students and faculty and industry. बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी viewers, what a great roller coaster drive we are having. Second day of 7th Open Source Summit, and now we are showing powerhouse marathon discussion. Next 1 hour, blast 1 hour discussion on role of open source technology in digital Pakistan. It's a panel discussion, and we have heavyweight champions of Pakistan of this industry and from academia. So let me share the participants, and then we will call the champion who will conduct this panel discussion. पहले मैं जो हमारे participants हैं उनके नाम ले लेता हूँ। ये 1 घंटे का सेशन होगा हमारा। मिस्टर नवीद शेरवानी, चेयर risc-v स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर risc-v, अभी उनका सेशन भी था, इंटरनेशनल एंड ओपन सोर्स हार्डवेयर फाउंडेशन। हमारे दूसरे मेहमान होंगे मिस्टर हमायूं खान, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खैबर पख्तूनख्वा। हमारे अगले मेहमान होंगे मिस्टर उस्मान नासिर, हमारे न्यूली अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। हमारे हरदिल अजीज डॉक्टर लुत्फुल्लाह काका खेल, फाउंडर मेंबर पख्तूनख्वा ओपन सोर्स फाउंडेशन। मैडम अस्मा कदीर, MNA एंड को फाउंडर ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर अशरफ मसूद, वाइस चेयरमैन ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान। Then we have
another bunch, Dr. Akif Khan, PMRU KP Government. We will have from USA, Dr. Shahid Qamar, Foundation, Takmeel Foundation, founder, Takmeel Foundation. बहुत बड़ा इनिशिएटिव है एजुकेशन सेक्टर में, स्कूल टीचिंग में. Then we have Mr. Shakil Ahmed, CIO, GMIT, Utility Stores Corporation of Pakistan, the true user of open source technology, OpenStack in Pakistan. Government sector में बहुत बड़ा इनिशिएटिव है नादरा टेक्नोलॉजीज के बाद. और Mr. Babar Zahoor, founder, Open Source Foundation, the champion behind the whole show. और हमारे मॉडरेटर हैं again another champion, Mr. Fawad Bajwa, co-founder Bionics Agriculture Republic and founding member Open Source Foundation. जी जनाब प्रोड्यूसर साहब हमारे मेहमानों को इन कर दीजिए. जी फवाद वेलकम. बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब. वालेकुम सलाम. नासिर साहब वेलकम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नवीद शेरवानी साहब वेलकम. डॉक्टर शाहिद कमर, प्रोफेसर वेलकम. जी फवाद भाई ओवर टू यू. जी थैंक यू जी साहिब भाई. It's a pleasure to be here on this second day round of the Open Source Software Foundation of Pakistan conference. सबसे पहले तो मैं अपनी तमाम जो गेस्ट हैं आप सबको वेलकम करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फवाद बाजवा, जिसका डायरेक्टर. हम लोग सैटेलाइट टॉपिक होगा कि जी ओपन सोर्स साउंड साउंड आप है फवाद भाई. अच्छा फवाद भाई आपकी आवाज बहुत कम है, डिस्टॉर्शन भी है. अच्छा मैं एक दफ़ा ब्राउज़र बंद करके दोबारा दूँ. श्योर. तो बहुत अच्छा हो जाएगा. जस्ट गिव मी, आई एम जस्ट कमिंग बैक इन लाइक जस्ट 10 सेकंड्स. श्योर. बाबर भाई आप मुझे सुन सकते हैं? कल प्रॉब्लम्स थी तो मैंने कहा कि कंसोल कर दो. बिल्कुल सुन सकता हूँ सर. सर सबका बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया इतने शॉर्ट नोटिस पे. उस्मान भाई आपका, नवीद भाई आपका, शाहिद भाई आपका, डॉक्टर अशरफ साहब आपका और डॉक्टर लुत्फुल्लाह. आज का हमारा टॉपिक है कि ओपन सोर्स का क्या रोल हो सकता है डिजिटल पाकिस्तान के लिए. डिजिटल पाकिस्तान के बारे में हम बहुत ज़्यादा बज़वर्ड आज की इस वक्त में सुन रहे हैं और हर शख्स बात करता है कि डिजिटल पाकिस्तान क्या है, कैसे होना चाहिए. हमें सबसे पहले तो ये क्लैरिटी अगर इस पैनल से हमारे सुनने वालों को ये मिले कि व्हाट इज़ डिजिटल पाकिस्तान, व्हाट इज़ डिजिटाइजेशन ऑफ नेशन, सबसे पहले ये. दूसरे नंबर पे सर कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल से हम कैसे आगे चल सकते हैं, क्या हम फ़ायदा उठा सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिजिटल पाकिस्तान इन योर पर्सपेक्टिव. मैं स्टार्ट करूँगा उस्मान भाई से, उस्मान नासिर साहब से जो कि एमडी हैं पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के. आपका शुक्रिया. पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड हमें पिछले 7 साल से सपोर्ट करता आ रहा है, हमारे जो समिट्स हैं स्पॉन्सर करता आ रहा है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम. पर्टिनेंट क्वेश्चन है, काफ़ी लोडेड क्वेश्चन है. Now, how do I see an open government or a digital government? There are a couple of models which are evolving in that domain. Two models which are very close to my own heart are the model in Estonia, and the other model is the model that Dr. Suhail Munir is helping to develop in Dubai. एस्टोनियन मॉडल जो है वो थोड़ा सा हमारे मॉडल से थोड़ा सा डिफ़र करता है. 1999 में जब हमने नादरा बनानी शुरू की, उस वक्त उन्होंने टाइम स्टैम्प हैश ग्राफ नाम की एक टेक्नोलॉजी बनाई थी. टाइम स्टैम्प हैश ग्राफ जो लोग समझते हैं वो उनको अंदाज़ा होगा कि टाइम स्टैम्प हैश ग्राफ इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और अनदर नेम फॉर अ ब्लॉकचेन.
Yes. They built it in 1999, well ahead of Satoshi Nakamoto's paper in 2008. Ever since then, उन्होंने जिस तरह से अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड रखा और डिस्ट्रीब्यूटेड रख के डेटा को इंटरेक्ट कराया ओवर ए सिंगल डिजिटल एक्सचेंज लेयर, वो बड़ा आइडियल सोल्यूशन है to keep the digital government nimble. So the idea is that the government के multiple इदारे, multiple levels of government, multiple streams of government can share data between each other and can make informed analysis based on that data, and can actually create a transactional a transaction based on that data. चूंकि हम ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज्ड के बजाय एक सेंट्रलाइज्ड मॉडल में जा चुके हैं नादरा के साथ, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि हमें ज़्यादा सूट करता है अब जो दुबई का मॉडल इवॉल्व हो रहा है, डॉक्टर सुहेल मुनीर जो दुबई का मॉडल इवॉल्व कर रहे हैं और वो स्मार्ट दुबई के अंदर, कि जहाँ पे उन्होंने दुबई की 40 गवर्निंग एंटिटीज़ को अलग अलग उन्होंने कहा कि जी आप कोई ये इन 3 में से कोई भी ब्लॉकचेन या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इन 3 में से कोई भी अपना लीजिए, और स्मार्ट दुबई के पास सिटीज़न डेटा है और सिटीज़न वॉलेट है, और उस सिटीज़न डेटा और सिटीज़न वॉलेट के साथ आप एक ऑल इनकम्पासिंग डेटा एक्सचेंज लेयर को यूज़ करके उन 40 ऑर्गेनाइजेशंस को आपस में इंटरेक्ट करा सकते हैं, rather than bringing the data into one place. तो ये मॉडल अब मुझे लगता है कि अब जब हम जब अपने डिवॉल्व्ड सिस्टम के अंदर अब हम इस मॉडल को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये मॉडल ज़्यादा वायबल है हमारे लिए, ज़्यादा पॉसिबल है इसको इस्तेमाल करना, इसी को यूज़ करना. So as in पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, हम अपनी जो इनपुट हमारी हो सकती है इन डिजिटल पाकिस्तान, एक तो हमारी एक इनपुट ये है एज फार एज गवर्नेंस इज कंसर्न. दूसरी जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जी जो रेमिट हमारा है कि किस तरह से पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए और किस तरह से कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट कम की जाए और मार्जिन्स बढ़ाए जाएँ, उसको एडवांटेजेस बनाया जाए. वन ऑफ द की एरिया दैट आई सी जहाँ पे हम 1996 से काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं, दैट इज़ डेटाबेसेस. एंड आई बिलीव going on the open source route to databases, moving to MySQLs and Postgreses and to that extent maybe the Auroras of the world would save us a lot of money, because we are a very ERP heavy country. As far as our exports are concerned, CRMs and ERP were the mainstay of our export products. हम प्रोडक्ट्स कम एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम जो करते हैं उनमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो अगर हम आहिस्ता आहिस्ता अपने डेटाबेस यूटिलाइजेशन को ओपन सोर्स डेटाबेस पे लेके जाने लगे, हमारे लिए एक थोड़ी सी आसानी यहाँ पे होगी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. दूसरा हमारा जो दूसरा यूज़ केस है वो क्लाउड माइग्रेशंस का है. हमारे मुल्क में अभी नहीं हो रहा है ये काम. तो अगर हम क्लाउड माइग्रेशंस के लिए ओपन सोर्स डेटाबेसेस को पे माइग्रेट करें फ्रॉम पेड डेटाबेसेस ऑन प्रेम डेटाबेसेस, मुझे लगता है ये काफ़ी एक वायबल सर्विस है जो हम पूरे रीजन को प्रोवाइड कर सकते हैं, इवेंचुअली पूरी वर्ल्ड को प्रोवाइड कर सकते हैं. तो as far as PSEB is concerned, this is our 2 inputs on that. लवली. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा नवीद भाई से. नवीद शेरवानी साहब हमें चाइना से उन्होंने ज्वाइन किया हुआ, पाकिस्तान से 3 घंटे आगे हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका. नवीद साहब माशाल्लाह साई-फाई के नाम से एक $multi-billion कंपनी है, उसके चेयरमैन हैं, उसके फाउंडर हैं, और risc-v इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के चेयर हैं इस वक्त इंटरनेशनल अफेयर्स पे. नवीद भाई आपके ख्याल में व्हाट इज डिजिटल पाकिस्तान? सबसे पहले तो ये सवाल आपके ख्याल में. देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा इसके अंदर एक आई एम हार्डवेयर, आई एक्चुअली नो नथिंग अबाउट सॉफ्टवेयर, सो आई स्टिक टू द टॉपिक्स आई नो. तो मेरी तो इनपुट ये है कि कोई भी आप डिजिटल सिस्टम बनाएंगे तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिजिटल सिस्टम इज दैट दिस डिजिटल सिस्टम हैज़ टू कनेक्ट विद द रियलिटी. somehow the
the digital system has to connect. It is going to be some sensors, it's going to be some input system. All that would mean some kind of chips, right? So what my suggestion would be very simply कि Pakistan and other countries as well, कि हम लोगों को अगर अपने आप को डिजिटाइज करना है और अपनी फ्यूचर को खुद कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले हमें जिस चीज़ पे फोकस करना चाहिए वो है कि हमारी जो चिप इंडस्ट्री है वो हमारे पास होनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि चिप इंडस्ट्री चाइना के पास नहीं थी, तो चाइना के साथ क्या हो रहा है? लिटरली दे हैव बीन ब्रॉट डाउन to where point where any company in China can be shut down by an executive order, right? So that is a lesson that if you do not want to be on the other side of this stick, you should control your own destiny. The only way to control your destiny is that your chip design should be in your own control. अगर देखें आपके चिप्स आप नहीं बना सकते तो आपका कोई जहाज फ्लाई नहीं कर सकता, आपकी कोई मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करेगा, आपकी एजुकेशन काम नहीं कर सकती, आपकी बैंकिंग काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट at the heart of everything is a chip that collects data, that works on some actuator, does something from a data center to the edge. सारे chips ही होते हैं, right? Everything is chip. Everything is a chip. So, and if you cannot make your chips, you are buying chips from somebody. You are getting chips from somebody. What kind of backdoors are in those chips? Both are the hardware layer as well as in the software you know, right? And as a result, your economy, your defense, everything depends on whoever is supplying your chips. So मेरा ये ख्याल है कि if we are thinking of independent, sovereign, digital Pakistan has a very important component that we should build our own chips. We should have our own capability of at least to all the critical infrastructure. We should be supplying our chips, or at least we should control to a point where we know how they are made, what is in those chips, who is controlling those chips, what data is coming out of those chips, how the data is being utilized. So मेरी तो हर आदमी से यही इल्तिजा है कि as quickly as we can, and I think there is an opportunity to work with China because China is very rapidly trying to move the entire chip industry into their own borders and trying to become capable of doing that. They need a lot of people. मैंने एक पब्लिश की थी एक स्टडी जिससे मुझे मेरा ख्याल है कि चाइना को अगले 4-5 साल में तकरीबन 5 लाख लोगों की जरूरत है चिप डिजाइन के अंदर। चाइना में अब वो लोग नहीं हैं, चाइना के पास वो कैपेबिलिटी भी नहीं है उन लोगों को प्रोड्यूस करने की, रिगार्डलेस हाउ बिग चाइना इज। वजह ये है कि चाइना के अंदर ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर में जाते हैं एंड दे डोंट। तो इसीलिए मेरा ये एक ओपिनियन है कि अगर हम पाकिस्तान में 1-1.5 लाख लोगों को ट्रेन कर सकें चिप डिज़ाइन के अंदर, work with China, work with Chinese companies, bring the expertise in Pakistan, बहुत उसका फ़ायदा ये होगा। एक तो चिप डिज़ाइन पाकिस्तान में आ जाएगा, and secondly, no matter what revolution you are thinking about in digitization of Pakistan, at the end of the day, you will have to literally digitize your industry, digitize every aspect of the economy where the data will come into the system, and all of that has to be done on the chips. So from that point of view, I think open source can play a very big role. risc-v is an open source architecture. It is free. You can download it. There are hundreds of chips already available. Architecture is open. Software that is being built out of that is also open. I think this gives a golden opportunity for Pakistan कि हम risc-v को use करके और अपना China connection use करके and the billions and billions of dollars that China is pouring into this, we can combine the two things together to bring up many youth in Pakistan. 1-1.5 लाख को अगर train किया जाए, I think that would be a huge resource for China, but more importantly, it would be a huge resource for Pakistan to build an open source based chip design industry in Pakistan for enabling the digital Pakistan. Lovely, lovely. मैं अब सेम क्वेश्चन करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ मसूद जो कि हमारे ओपन सोर्स फाउंडेशन के को फाउंडर हैं, हमारे वाइस चेयरमैन हैं ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के, और हार्डवेयर में माशाल्लाह एक अथॉरिटी हैं। सर अशरफ नस्ट के अंदर मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स है, उसके डीन और प्रिंसिपल रह चुके हैं और इनकी माशाल्लाह कंट्रीब्यूशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, स्पेशली फोर्सेस के अंदर। इन्होंने काफ़ी ऐसा काम किया कि मैं इनके साथ बहुत क्लोज हूँ, तो मैंने वो काम चीज़ें देखी हैं जो पब्लिकली शायद ये ना बता सके, लेकिन माशाल्लाह इनका इस तरह के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। तो सर आपसे मेरा ये सवाल है कि हाउ यू सी डिजिटल पाकिस्तान
द फर्स्ट क्वेश्चन मैं ये सबसे करूंगा, फिर फवाद साहब को हैंड ओवर करूंगा ये सारा कंट्रोल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके देखें जी, क्वेश्चन ये है कि मैं इस डिजिटल पाकिस्तान को दो पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक पर्सपेक्टिव तो मतलब ये है कि जो मेरा इनर R&D प्रोफेशनल के तौर पे जो जिक्र है, वो शेरवानी साहब ने जो बात की है, मुझे वो मेरे दिल को लगी है। वो तो एक एस्पेक्ट है जो कि मैं जिसको बड़ा, अगर बात करना शुरू करें तो फिर शायद हम सारा टाइम उसी में लगा देंगे। लेकिन मैं उसको जरा हायर लेवल पे जाके बात करना चाहूंगा। बात ये है कि जब हम डिजिटल पाकिस्तान या कंट्री की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। सो डिजिटाइजेशन ऑफ द सोसाइटी जो है, उसमें जनरली लोग उसको गवर्नेंस समझते हैं कि एक गवर्नेंस में डिजिटाइजेशन लेके आई जाए। उससे क्या होता है, आपके पास बेसिकली ट्रांसपेरेंसी आती है, ऑटोमेशन आती है। ये दो बुनियादी चीजें हैं जो बेसिकली आईटी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है गवर्नेंस के अंदर, और जिसकी वजह से ये जो ट्रांसपेरेंसी और ये है, ये दोनों चीजें एक्चुअली सोसाइटी के बहुत से मैनेज को इन अ वे हैंडल करती हैं। हम इस वक्त अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो दो तीन बुनियादी चीजें अगर हम देखें तो वो हर आदमी पिछले कई सालों से हम उसके लूप के अंदर हैं। एक बुनियादी चीज ये है कि हम करप्शन का शोर मचा रहे हैं। जो अभी मैं सियासी बात नहीं करना चाहता, मेरा पॉइंट ये है कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन को करप्शन कहती है, और जब वो अपोजिशन हुकूमत में थी तो वो इनको करप्शन की बात करे। तो मतलब हम सारे एक दूसरे के साथ करप्शन की बात करेंगे। ये जो करप्शन है ये प्रॉब्लम कर रही है। तो बेसिकली इट्स ए फाइनेंशियल irregularities and embezzlement and this and that. It's a all combination of that, and underlying what you look at it is basically the non-transparency in the financial matters. Basically that is what it is, and then of course everything brings from there. The second part अगर आप देखें हम अपने मुल्क के एंगल से, तो हम ये देख रहे हैं कि सब लोग शोर मचा रहे हैं जी, इलेक्शन में बड़ी धांधली हो गई है। पिछली हुकूमत, जो अभी हुकूमत है वो पिछली हुकूमत को कहती थी, और पिछली हुकूमत जो अभी अपोजिशन में वो इसको कह रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम समझ रहे हैं, और पूरी सोसाइटी उसमें इन्वॉल्व है। मैं किसी पार्टी या पर्सन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग इन जनरल। सो ये आप अगर देखें तो ये हमारे बुनियादी प्रॉब्लम है जो इस वक्त हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के इश्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, जो अभी बात की थी उस्मान साहब ने, तो बात यह है कि टेक्नोलॉजी इज देयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी इज देयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे इनकॉर्पोरेट करें, इनकॉर्पोरेट करके उसको यूज करें, और यूज करके बुनियादी तौर पे दो ही चीजों की मैं अगेन बात करूंगा कि ट्रांसपेरेंसी और ऑटोमेशन। अभी अगर आप इसमें देखें तो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को अगर आप इलेक्शंस में यूज करें, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को आप फाइनेंशियल सेक्टर में यूज करें, तो आपके काफी सारे मसाइल जो हैं वो इधर हैंडल हो जाते हैं। ऊपर से आप ये देखें, जब हमारे यहाँ लोग कहा जाता है कि जी ये दीवानी मुकदमात हैं, पूरी कौम जो है वो 40-40 साल बल्कि कई नस्ल दर नस्ल दीवानी मुकदमात में लगी हुई है, जमीनों के रिकॉर्ड्स उनके प्लस माइनस हर चीज, मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड वेयर द प्रॉब्लम इज, बट द पॉइंट इज कि ये सारी चीजें इस डिजिटाइजेशन के थ्रू हल की जा सकती हैं। हमारी आधी कौम के जितने मुकदमात हैं वो सारे इस किस्म के इश्यूज हैं जहां पे रिकॉर्ड कीपिंग हैज बीन मैनिपुलेटेड वन वे और द अदर, और उन रिकॉर्ड्स की मैनिपुलेशन चाहे पटवारी ने की है, चाहे किसी और ने की है, चाहे किसी ऑफिशियल ने की है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ब्रिंगिंग प्रॉब्लम इनटू द सोसाइटी, एंड वी गॉट टू रिजॉल्व दिस। और ये जो आईटी हमारी है सेक्टर है, ये बेसिकली जब उसके अंदर आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इन प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन हो सकती है अगर इसको इंटेलिजेंटली और तरीके से किया जाए। अब बात ये है कि हम कोई नया काम तो नहीं करने जा रहे, सारी दुनिया ऑलरेडी ये काम कर चुकी है, मतलब हम तो फॉलो कर रहे हैं। अभी आप जैसे किसी ने डिजिटल दुबई की बात की, एस्टोनिया की बात की, पूरी दुनिया में ऑलरेडी लोग डिजिटल सिटीजनशिप ये वो और इस तरह की चीजें सारी ऑलरेडी आ चुकी हैं। हमें बेसिकली उनको फॉलो करना है।
हमें देखना है उसमें से अच्छी चीजें कौन सी हैं जो हमारी सोसाइटी में अप्लाई होती हैं और हम अपनी सोसाइटी के अंदर उन चीजों को ला के अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मतलब ये तो एक पार्ट है जो मेरा ख्याल में हमें टॉप लेवल पे देखने की बात है। और जब हम उसके अंदर बात करते हैं तो जितनी भी हम ये टेक्नोलॉजी बात करें, चाहे वो हम ब्लॉकचेन की बात करें, हम किसी दूसरी तीसरी चीज की बात कर रहे हैं, तो बात क्या हो रही है कि आपके पास ओपन सोर्स सोल्यूशन हर चीज का मौजूद है। यानी कि अभी हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, हमें कई चीजों का पता है कि मतलब यू टॉक ऑफ ए थिंग एंड यू हैव एन ओपन सोर्स सोल्यूशन अवेलेबल फॉर एवरीथिंग। द ओनली थिंग इज हमने उसको सीखना है, उसको अडॉप्ट करना है, उसको जो है इस्तेमाल करना है, अपने लेके आना है और बाकी चीजें उसके साथ में करनी है। द ओनली थिंग इज इट हैज टू बी सिस्टमाइज्ड। हमें इस सारे को किसी तरीके से किसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लेके आना है और उसको करना है। बेसिकली अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का कंपोनेंट जब तक इसके अंदर डिसीजन मेकर्स जो हैं, गवर्नमेंट लेवल के डिसीजन मेकर, रेगुलेटरी बॉडीज के ऑफिशियल्स और दूसरे सारे लोग जो हैं, वो जब इसके अंदर आएंगे, अपने माइंडसेट को सही करेंगे और इन चीजों को सॉल्व करने की बात करेंगे, देन द थिंग्स ऑफ कोर्स कम्स इनटू द पॉजिटिव साइड। एंड यही वो जगह है जहां हमें अपने डिसीजन मेकर्स को लेके आना है, अपनी ब्यूरोक्रेसी को लेके आना है। वो मैं आपको यकीन से बताता हूँ, जो भी लोग हम में से गवर्नमेंट के सिस्टम में रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस जो है वो ट्रांसपेरेंसी नहीं लेके आना चाहता, और ऑब्वियस रीजन वी अंडरस्टैंड, ठीक है। और वो ही प्रॉब्लम एरिया है, मतलब विल टू सॉल्व द प्रॉब्लम पहले लेके आनी है, सोल्यूशन उसके बाद में आ जाएगा। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज का इतना बड़ा सोर्स गिटहब के ऊपर मेरा ख्याल में जितना डेटा पड़ा है, जितने सॉल्यूशंस पड़े हैं, जितनी चीजें पड़ी हैं, हमें शायद देखने की तौफीक भी ना हो सके हम सारी चीजों को, हमारे पास इतनी गुंजाइश ही नहीं है। तो बट द पॉइंट इज के ये सब चीजों को किसी एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके इसमें लेके आने की बात है। अल्टीमेटली हमें अपनी सोसाइटी के एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसके अंदर में लेके आना। नाउ नेक्स्ट कम्स ऑन टू दिस थिंग कि हमने आगे कैसे जाना है। Now this is what is the solving the current problem. Now we are talking the next problem. Next problem क्या है कि सारी दुनिया हर चीज को डिजिटाइज कर रही है, इकोनॉमी को डिजिटाइज कर रही है। अभी अगेन उस इकोनॉमी के डिजिटाइजेशन में फिर वही ब्लॉकचेन वाली बात आ रही कि आपकी करेंसी डिजिटाइज कर दें, हर चीज रिकॉर्ड कीपिंग में आ जाएगी, एक एक पैसे की ट्रांजैक्शन जो है वो आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी, ये करप्शन का मसला ऑटोमेटिकली हल हो जाएगा। मैं ऑटोमेटिकली तो खैर जरा ज्यादा मेरा पॉइंट ये है कि इट विल हेल्प इट आउट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट देन वी नीड टू हैव ए विल टू डू दैट थिंग। अपनी इकोनॉमी को डिजिटाइज करना, अपनी तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ये बिटकॉइन वाली चीज जो है इसको हम नेगेटिवली लेते हैं, नाम इसका लेके समझते हैं कि ये कोई गलत काम है, कोई चोरी है, कोई हेरा फेरी है, कोई चक्कर। ऐसी बात नहीं है, सारी दुनिया इसको अडॉप्ट कर चुकी है, लोगों के हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्व्ड इनटू दिस वन, ठीक है। और इसके पीछे अगेन वही बात है कि रानी साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा कि पीछे उसके क्या हो रहा है, देयर आर मशीन्स एसिक्स व्हिच आर बीइंग बिल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सर आप जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी थोड़ी सी सर डिस्ट्रक्शन आ रही है आपकी तरफ से, तो अच्छा बीच में डिस्ट्रक्शन आ रही है। सर थैंक यू वेरी मच, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं अब डॉक्टर शाहिद कंवर से ये रिक्वेस्ट करूंगा। डॉक्टर साहब माशाल्लाह इस वक्त यूएस में हैं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और एज अ प्रोफेशन बायोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को एज अ प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में। इन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है कि ये उर्दू में ट्रेनिंग्स बना के पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मेरा आपसे सेम सवाल है, आपके ख्याल में डिजिटल पाकिस्तान क्या है? मैं चाहूंगा अगर हम थोड़ा थोड़ा टाइम लें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएं। शुक्रिया बाबर भाई, अल्लाह खैर। पहले तो ये है कि आपने मुझे इतने हैवी वेट्स के दरमियान बैठा दिया है, मुझे पहले कुछ नहीं पता था, अब तो ये एहसास हो गया कि बाकी मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने 2 सेंट्स देने की। लंबी बात हो जाएगी अगर मैंने सबको कवर किया, लेकिन जो क्रक्स है वो ये है कि जो डॉक्टर अशरफ मसूद साहब ने बात की है वो असल में डिजिटल पाकिस्तान है। मैं आपको चूँकि मैं इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको बता देता हूँ कि मार्च से या अप्रैल से हम लॉकडाउन हैं, ठीक है, और मैं पाकिस्तान कह रहा हूँ, मैं अपने शहर से बाहर नहीं निकला। मैं चंद दफ़ा
गया हूँ बाहर, वो सिर्फ जुमे की नमाज के लिए, ठीक है। उसके अलावा सारा मेरा डिजिटल पाकिस्तान यहीं पे बना हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरी सैलरी जो है ना वो मेरे बैंक में आ रही है, मेरे बिल जो है ना वो मेरे कंप्यूटर पे हो रहे हैं, मेरी जो ट्रेनिंग हो रही है वो ऑनलाइन हो रही है। जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो ट्रम्प गवर्नमेंट ने जो $1200 दिया कि भाई हम आपको $1200 देंगे एक इस पेंडेमिक में, तो उनको ये रोला नहीं पड़ा जी कि शाहिद कमर ने ये टैक्स पेयर है या नहीं है। मैंने टैक्स उनके सिस्टम में था, वो चेक मेरे अकाउंट में डायरेक्ट आया, ठीक है। फिर हमारी लोकल गवर्नमेंट है, उसने कहा अच्छा जी कि तुम्हारी वाइफ एक रेस्टोरेंट रन कर रही है तो तुम अप्लाई करो। मैंने ऑनलाइन जाके अप्लाई किया, ठीक है। उन्होंने सारा सिस्टम वहीं पे चेक किया, अच्छा यार इनका रेस्टोरेंट है, ये पेड है, इनके पेरोल है, ये है वो है, वो सारी चीज़ें जब जब कर दी, उन्होंने उसको अप्रूव करना था या डिसअप्रूव करना था वो कर लिया। फिर स्मॉल बिजनेस आ गया, स्मॉल बिजनेस ने कहा जी अच्छा जी आपको अगर हार्डशिप में आप जा रहे हैं तो आप बताएं व्हाट वी कैन डू फॉर यू, ये हम आपको फैसिलिटीज दे सकते हैं। आप ऑनलाइन गए, आपने सारा जाके देखा, उन्होंने आपकी हिस्ट्री सारी चेक की और उन्होंने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए या नहीं डाले। ये है डिजिटल पाकिस्तान, ठीक है। अब इस डिजिटल पाकिस्तान में जो डॉक्टर मसूद ने बात की कि वो सारे के सारे ओपन सोर्सेज आपके पास मौजूद हैं, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। एक चीज़ ने जो बहुत बड़ा सेक्टर में भूल गया वो एकेडेमिया क्या है, कि जब एकेडेमिया ने जिस तरह अपने आप को एकदम से अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशन थे जो कि रेडी नहीं थे पेंडेमिक में, लेकिन सिस्टम में वो आके एकदम से पाँव पे खड़ा हो गए, वो ऑनलाइन ट्रेनिंग पे चले गए, कोर्स पे चले गए, ये चले गए, उन्होंने सारा का सारा कर लिया। अच्छा, अब ये डिजिटल पाकिस्तान है, इसकी कोई, मैं एक लेमैन की तरह की बात है, मैं एज ए यूजर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं डेवलपर की तरफ से बात नहीं कर रहा। आप तो डेवलप करने वाले हैं, मैं यूजर पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान ऐसा हो कि मेरी वो बेटी जो घर में बैठी हुई है, वो काम नहीं कर सकती, वो ऑनलाइन उसके पास इतनी फैसिलिटीज वो काम करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी वो अम्मी, वो मामी, वो चाचा, वो मामा जो बुजुर्ग हैं, उनको लाइन में ना लगना पड़े, बैंक में जाके, वो घर में ही बैठ के किसी तरीके से उनके बिल पे हो जाए। मैं ये चाहता हूँ कि जो एहसास प्रोग्राम है वो इन लोगों को ना जाना पड़े, इनके अकाउंट में ये पैसे आ जाए। मैं ये चाहता हूँ वो पेंशन लेने वाले लोग जो कि इतने इतने बुजुर्ग हैं और उनको बैंकों में धक्के खाने पड़ते हैं, उनके घरों में आ जाए, ये इनकी पेंशन के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाए। वन लास्ट थिंग कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द कंट्री, उन 4-5-10 मुल्क जिनका डेटाबेस बना हुआ है नादरा। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग, आई एम टेलिंग यू। आपको इस चीज का एहसास नहीं है कि नादरा जो है ये एक ब्लेसिंग है। ये पाकिस्तान चंद मुल्कों में से है जिसका इतना बड़ा डेटाबेस बना हुआ है नादरा का। अगर इस डेटाबेस को हम इस्तेमाल कर ले, आई कैन गारंटी यू कि पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान, वो दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री उनके साथ compete कर सकता है अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। बहुत सी ऐसी डेवलप्ड कंट्री है जिनका इतना डेटाबेस नहीं बना हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम के आपके गली के मोहल्ले में वो जो बंदा रेडी लगा के जो छल्ली बेच रहा है, उसको टैक्स नेट में वहां से स्टार्ट करके, और जो प्रोफेसर बैठा हुआ है उसको टैक्स नेट में लेकर आना है। हर बंदू, ये सिर्फ आप जो है ना वो डेटाबेस इस्तेमाल करके कर सकते हैं, ओपन सोर्स इस्तेमाल करके कर सकते हैं, लेकिन करने वाले हों। और मैं आई एम सरप्राइज्ड, आई स्वेयर टू गॉड आई एम सरप्राइज्ड कि ये जो बातें भी मैंने सुनी है, इतना टैलेंट पाकिस्तान के मौजूद है, इतनी विजन मौजूद है और इतने रिसोर्सेज हैं, स्टिल वी हैव टू हायर तानिया अदरस। व्हाई वी हैव टू डू दैट? क्यों हमें ये करना पड़ा? हमारे पास ये लोग नहीं है, ये कर नहीं सकते हैं। और ये सवाल साहब इस बहस में नहीं पढ़ते सर, छोड़ दें। उन्होंने भी कहा जी कि गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, ये भी बात ठीक है, गवर्नमेंट नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट कहीं भी नहीं करना चाहती। आप देखें माशाल्लाह उस्मान भाई जैसे लोग, आप देखें शायद भाई, आप देखें माशाल्लाह उस्मान भाई जैसे लोग जो कि पाकिस्तान में हैं, जिन्होंने काम किया है इंडस्ट्री में भी, वो दे आर कमिंग बैक। सो डोंट वरी, लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। डॉक्टर आकिब की आपने टॉक सुनी, व्हाट ही हैज डन इन केपी गवर्नमेंट। इसी तरह सर माशाल्लाह काम हो रहा है। मैं सर विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं चाहूँगा कि थोड़ा टाइम को भी सेव करें। मैं सर डॉक्टर लुत्फुल्लाह काका खेल के पास जाऊँगा। सर लुत्फुल्लाह काका खेल ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान के बोर्ड के मेंबर भी हैं और केपी ओपन सोर्स फाउंडेशन के फाउंडर हैं। सर आपके ख्याल में
what is Digital Pakistan? सर ये मैं सुन तो रहा हूँ काफी दिनों से ये नाम जो है ना, और कई प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा एक होलिस्टिक व्यू देना चाहूँगा कि डिजिटल पाकिस्तान के बारे में जो आप लोग कह रहे हैं। तो जैसे हम लोग ओपन सोर्स में कोई सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करना चाहें तो उसकी डिपेंडेंसीज होती हैं। आपको तो पता होगा बाबर साहब के बगैर डिपेंडेंसीज के हम लोग सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल कर सकते। तो डिजिटल पाकिस्तान की भी कुछ डिपेंडेंसीज हैं, और उनमें दो जो डिपेंडेंसीज हैं उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि हमारी डिजिटल डिवाइड कम ना हो, यानी हमारे जो पूरे मुल्क में जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, ना हमारा फाइबर हर जगह तक पहुंचा है, ना हमारे वायरलेस नेटवर्क हर जगह तक पहुंचे हुए हैं, और किसी किस्म की कनेक्टिविटी, बाज़ इलाके तो बिल्कुल ही डिसकनेक्टेड है। तो जब तक पूरा पाकिस्तान हमारा रोड मैप हमारा ऐसा न हो जिसके ऊपर आप जो है ना कोई ट्रांजैक्शंस कर सके। अभी वो नवीद शिनवारी साहब चिप्स की बात कर रहे थे और डेटा जनरेशंस की बात कर रहे थे। तो चिप्स और डेटा तो आपको कहीं ले जाना होगा। अगर आपके पास सड़क ना हो और आप जो है ना गाड़ी आपके पास हो तो आप ले जा तो नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी दे दें कि कनेक्टिविटी हर जगह पहुंचाएं, ताकि जो है ना वहाँ पे डिजिटल पाकिस्तान की इश्यूज पहुँच सके। दूसरा ये है कि आप दूसरा जो कंपोनेंट है डिपेंडेंसी का, वो लिटरेसी है। आप कुछ भी करें, जब तक आपका लिटरेसी रेट बढ़े नहीं तो आप बेशक हर किस्म के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, हर किस्म के हार्डवेयर इंस्टॉल करें, आप का यूज़र जो है अगर वो इलिटरेट है और उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोगों की ये एक बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि हम बैठ करके ड्राइंग रूम में बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं और हर किस्म के एक कमरे में अमेरिका बना देते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। और उसके चलने की यही रीजंस होते हैं कि हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे नहीं जाते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ ये है कि आपका जो है ना नेटवर्क आपका बिल्कुल वो नहीं है। अभी कोविड-19 ने इसको एक्सपोज कर दिया कि हमारे स्टूडेंट्स जो थे मुख्तलिफ इलाकों से वो क्लासरूम तक जो है ना नहीं आ सकते थे। और अपने अगरचे यूनिवर्सिटियों ने बड़ी कोशिश की, स्कूलों ने भी बड़ी कोशिश की। हमारा घर भी आजकल जो है ना एक पूरा कंप्यूटर सेंटर लगता है। मेरे जितने भी पोतियाँ हैं वो सब जो है ना मशीनों पे बैठे होते हैं और पूरा दिन लगे रहते हैं। आजकल सेकंड वेव में तो यही हो रहा है। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकलूं तो वहाँ पे जो है ना 2 कदम के फासले पे वहाँ पे डेरान के ऊपर बच्चे जो है ना स्कैवेंजर्स लगे रहते हैं और उनको बिल्कुल जो है ना किसी किस्म की पढ़ाई की कोई वो ही नहीं है, मतलब कि फैसिलिटी ही नहीं है। तो ये एक हकीकत है और इसको जब तक हम लोग महसूस ना करें तो ये सारी बातें जो है ना एक हद तक तो ठीक है, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन फैसिलिटी अगर आप किसी को देना चाहते हैं और उसको बिल्कुल सिरे से ये पता ना हो कि मैं ये फैसिलिटी कैसे इस्तेमाल करूँ, तो कहीं पे भी जो है ना इसका डिजिटल पाकिस्तान यानी मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ और पूरे प्रोसेस की एज ए होल बात कर रहा हूँ। ये ठीक है कि कुछ कंपोनेंट्स जो है ना अगर हम लोग इस किस्म की वो करें, अटेम्प्ट्स करें, जैसे अभी आज ही मैंने पढ़ा है कि केपी में जो डिजिटल सिटी का प्रोजेक्ट है वो फेडरल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया हुआ है ऐसे जोन और उसके लिए PSDP 21 में गुंजाइश रखी है और अच्छा खासा उसका जो है ना एक न्यूज़ फ्लोट कर रहा था आज उसके ऊपर फेसबुक पे भी आया है। तो वो एक सिटी है अहमदाबाद में और उसको अगर बेशक आप जैसे उस्मान साहब ने बताया कि दुबई का वो है एग्जांपल है, दुबई तो कराची से भी एक छोटी जगह है। आप अपने पाकिस्तान को जरा देखें कि पूरे पाकिस्तान को आप अगर डिजिटल पाकिस्तान में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पे या पूरा चलेगा या नहीं चलेगा, वो उसकी पता नहीं कितनी उसका स्कोप है, कितना उसका वो है। लेकिन बहरहाल कोई ना कोई मॉडल तो सामने रखना पड़ेगा। ओपन सोर्स तो उसमें तो हर चीज़ अवेलेबल है,
ये कोई भी मतलब है कि इसके लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है। आपको पेपरलेस ऑफिस चाहिए, पेपरलेस ऑफिस के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आपको जो है ना इंटरप्राइज वो चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स के लिए रिपोजिटरीज चाहिए, आपको किसी किस्म की भी जितनी भी आपको ऐसी वो है आपके पास ऑफिस वर्क के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए हर किस्म के ओपन सोर्स के वो मौजूद हैं। आप हॉस्पिटल्स मैनेज करना चाहते हैं, हॉस्पिटल्स के सारे जो है ना हेल्थ को मैनेज करना चाहते हैं, हेल्थ के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। तो ओपन सोर्स तो भरा हुआ है, उसमें तो ऐसे कोई टूल नहीं है जो एजुकेशन के मैनेजमेंट के लिए है। आपको जैसे पिछले दिनों डॉक्टर अशरफ साहब ने बताया कि मूडल पे वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चला रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के वो कर रहे हैं। ओपन सोर्स में आपको मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जो है ना फर्ज करें आपने लगा भी दिया, एक सर्वर लगा दिया उसके ऊपर जो है ना कॉलेज में या स्कूल में या उसमें, कॉलेज और स्कूलों की तो हम बात ही नहीं कर सकते इसलिए कि स्कूलों में सिरे से कनेक्टिविटी है ही नहीं। आपके गवर्नमेंट के स्कूलों में मुझे नहीं पता कि किसी के पास DSL की फैसिलिटी है कि नहीं है। थाउजेंड ऑफ स्कूल्स है पूरे पाकिस्तान में। हमारी यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क मौजूद है जो कि पॉइंट कहलाता है, बहुत अच्छा नेटवर्क है। पॉइंट को चाहिए कि वो एक्सटेंड कर दें इसको कॉलेजेस में भी और स्कूलों में भी। तो जब तक हम इन बातों पे तवज्जो ना दें तो डिजिटल पाकिस्तान का बिल्कुल जो एक होलिस्टिक पिक्चर है वो इमेजिन करना जो है ना बड़ा मुझे एक इशू ऐसा लगता है जिसको हम मेरा ख्याल है कि हल्का समझ रहे हैं और हल्का है नहीं। ऐसे तजुर्बे बहुत होते रहते हैं हमारे। हल्का नहीं है, बिल्कुल हल्का नहीं है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसके जो लवाजमात है पहले वो तो पूरे करें। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो तो कनेक्टिविटी है। अगर आपकी कनेक्टिविटी गांव देहातों में नहीं पहुंची है और लोगों के पास नहीं पहुंची है तो आप डिजिटल पाकिस्तान की सोच नहीं सकते हैं। मैं ये मेरा अपना ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन बहरहाल अभी डिस्कशन में बातें आएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक वास्ट तजर्बा है। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। फवाद बाजवा साहब, आपसे सेम सवाल है और फिर ओवर टू यू, आप इसको पैनल को मैनेज करें काइंडली। सही है, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? अब तो आ रही है जी। चलो जी, गुड हो गया। अच्छा जी, वंस अगेन ये एक इतना क्रिटिकल इशू है कि हम लोग किस तरह की नेशन की स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना, एज फार एज डिजिटल पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। और मज़ेदार बात है कि हमने चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में भी रखना, तो आप लोगों ने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट में लेके हैं। अब जैसे मैं भी अपनी थोड़ी सी जिसे कहते हैं ना वो एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता हूँ और सबके पर्सपेक्टिव्स को भी बीच में थोड़ा सा लेके आता हूँ। अब जहाँ पे हमने बात शुरू की थी हार्डवेयर से, एक इतना क्रिटिकल फैक्टर नवीद साहब ने बताया, ठीक है, कि जी इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंपोर्ट बिल है वो कुछ $60 बिलियन है। इसमें से $20 बिलियन, मतलब 60 में से जो $20 बिलियन है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर चिप्स हैं। इतना बोझ पड़ता है उनकी, मतलब हम उस सब देखते हैं ना कि भाई उन्होंने कितनी तरक्की की, उनका जो बोझ है ना, जहाँ जिस तरक्की को लेके चल रहे हैं उसके ऊपर जो हार्डवेयर की कॉस्ट है वो ये यार। अब चाइना का जिक्र हुआ, सर ने कहा कि जी चाइना इज गोइंग टू बी हायरिंग अ लॉट एंड ही इज ऑन द स्पॉट। पूछें क्यों? क्योंकि चाइना खुद से सिर्फ 16% सेमीकंडक्टर बना सका है अभी तक अपनी खुद से, अपनी टोटल डिमांड का। और उस एंगल से अगर आप देखें तो अगर उसने 70% तक जाना है अपनी लोकल सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन तक, ठीक है, जो उसने एजेंडा सेट किया हुआ है 20-25 तक, तो समझो आधे पाकिस्तान या पूरे पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री उसको चाहिए। 70% तक जाने के लिए उसके पास खुद कैपेबिलिटी नहीं है। इट विल हैव टू डिराइव द कैपेबिलिटी फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, जस्ट लाइक डॉक्टर साहब सेड। तो एसेंशियली चैलेंज किस चीज़ का है? अब चैलेंज देखना है ना, तो चैलेंज आता है क्रिटिकल फैक्टर्स के ऊपर, जिससे आपका पूरा डिजिटल पाकिस्तान की अगर आप स्ट्रेटजी बिल्ड करने बैठेंगे ना, उसमें एक बड़ी एसेंशियल चीज़ है कि आपकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है वो क्या है, आपकी आईटी टेक्नोलॉजी, मतलब आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, आपकी हार्डवेयर कैपेबिलिटी जो है वो कितनी एफिशिएंट है।
किस तरह आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप एक डिमांड सेट करते हो, भाई मैं 1000 बंदा पाकिस्तान में लाऊंगा, मैं 10,000 बंदा पाकिस्तान में लाऊंगा, मैं 30,000 लगाऊंगा। क्या आप सर्विसेज को, हार्डवेयर सर्विसेज कंसोलिडेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं मुल्क के लेवल पे? क्या आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इंटरफेस कर सकें? इंटरफेस से मुराद ये है कि आप कहते हैं जी मैं पेमेंट सिस्टम लेके आता हूँ पाकिस्तान में। क्या हमारी निचले लेवल से लेके ऊपर लेवल तक वो जो मिडिल इंटरफेस है वो क्या डेवलप हुआ? क्या हम लोग जब टारगेट करते हैं कि भाई हम लोग इतना बड़ा अपने आप को करेंगे, इस टारगेट के ऊपर जाएंगे, तो क्या हमारे पास वो कैपेबिलिटी है कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो लगा हुआ है इस वक्त, जिसको हम ICI कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर एक साइड पे ICT चल रही है, एक साइड पे IT चल रही है, ये क्या कैपेबल है उस टेक्नोलॉजी स्केल को अडेप्ट करने का? मजेदार बात यह है कि क्या कोई, हम लोग कल एक बात कर रहे थे, सॉरी वो एक और पैनल था, पाशा का पैनल था, उसमें वो SDGs के ऊपर बात कर रहे थे, तो वहां पे कहीं बात चल निकली कि जी IBM ने कभी यहाँ पे बंदे लेके आने थे पाकिस्तान के अंदर, वो जनाब अली चला गया सारा कुछ इंडिया के पास। अब मेरे लिए एक बड़ा मजे का क्वेश्चन था यार, वो गए क्यों, उधर क्यों जाना पड़ गया? उन्होंने कहा पाकिस्तान के पास इंटरफेस ही नहीं था। और हमने आज तक कभी इंटरफेस की बात ही नहीं की पाकिस्तान में, चाहे जो मर्जी पॉलिसी बना लो, कि डू वी हैव द कैपेबिलिटी टू इंटरफेस? आज से कोई क्या कह लो आप, 40 साल पहले IIT का एक कॉन्सेप्ट इंडिया में रखा गया था, तो गालिबन मेरे रिस्पेक्टेबल बड़े जितने भी हैं उन सबको आइडिया होगा कि कितने IIT एग्जिस्ट करते हैं, IIM एग्जिस्ट करते हैं अक्रॉस इंडिया। एक पूरी कैपेसिटी बिल्ड की गई ताकि इंटरफेस कराया जा सके अवाम को इंटरनेशनली। अगर आप फंक्शनल कैपेबिलिटी डेवलप करने की बात कर रहे हैं, जो हम ओपन सोर्स में कर रहे हैं, जिसमें हम सहारा ढूंढ रहे हैं ओपन सोर्स का, जो हम लोग सारे इसको गैदर हुए हैं, वो फंक्शनल कैपेबिलिटी के ना कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, और सबसे बड़ा एलिमेंट एनवायरनमेंट का। और वो जैसे डॉक्टर अशरफ भी अभी अशरफ बता रहे थे कि जी आपकी एनवायरमेंटल कैपेबिलिटी के ऊपर काम करने वाला है। जैसे उस्मान भाई भी काम कर रहे हैं, उस्मान भाई ने कहा कि जी टेक्नोलॉजी से इंटरफेस करने के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, कंपनीज को बचाना पड़ेगा, हमें अपने आप से हमें बचाना पड़ेगा सबसे पहले, ताकि हम लोग ग्लोबल स्केल के ऊपर इंटरफेस कर पाए। अब ये एक ग्रिम सिचुएशन नहीं है, ये सिर्फ ये असेस करने के लिए है कि व्हाट इज आवर डिग्री या आवर कैपेबिलिटी, द डिग्री ऑफ आवर कैपेबिलिटी टू क्रिएट पार्टनरशिप विद सोसाइटी, विद इकोनॉमी, विद पॉलिटिक्स। और जब मैं पॉलिटिक्स की बात करता हूँ, आगे मैं गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ कि आपने गवर्नमेंट और ई गवर्नमेंट डिलीवर करनी है, वो जो इंटरफेस है वो हमने कैसे बिल्ड करना है। This is a systematic interface, this is a technology interface, and these are many questions about capability that we're talking about. और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है यार कि at least we have the OSFP, and now we can go towards this discussion कि how do we build this interface, this capability. तो अब सबसे मजेदार सवाल, अब हम लोग above जो कॉल ऑफ ड्यूटी है ना उसको राइज करते हैं सारे, और अब जो क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा बारी, आप लोग बारी बारी उसको आंसर करते जाएं कि स्ट्रेटेजिकली हमने ओपन सोर्स को कैसे यूज करना है, और ओपन सोर्स इन इट्स होल होलिस्टिक कैपेबिलिटी, द इकोसिस्टम दैट ऑल ऑफ अस आर हेल्पिंग बिल्ड। हम सब कैपेबल लोग हैं, सब एक दूसरे को काफी हद तक जानते हैं, और सब जानते हैं कि हम लोग ही अगले 5-10 साल के मूवर शेकर्स हैं पाकिस्तान के। हम अपनी ओपन सोर्स कैपेबिलिटी को कैसे यूज कर सकते हैं to take the vision into creating the digital Pakistan that we are all talking about, जो हम लोग सारी बात कर रहे हैं ना, सारी आवाम हमें सुन रही है, हम कैसे बनाएंगे डिजिटल पाकिस्तान। तो स्टार्टिंग विद, मतलब ये वो नहीं है कि मैं गवर्नमेंट को जानबूझ के पहले पूछने लगूं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें देखी हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर उस्मान भाई को करते हुए। तो उस्मान भाई बताएं जी, वो इंटरफेस आप कैसे बिल्ड करें गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि हम वो ट्रांजिशन कर सकें, प्लीज। Usman bhai, wo switch on voice. There you go. Sorry, can you hear me now? Yeah, okay. फौद भाई देखिए, हम जहाँ पे खड़े हैं, जो मेरा स्टांस हमेशा होता है ना, वो काफ़ी एग्रेसिव होता है।
अनफॉर्चुनेटली हम चीज़ों को अटैक करना चाहते हैं वन बाय वन, पार्ट बाय पार्ट, और ये स्टांस हमेशा हमारा अब तक कामयाब नहीं हुआ। तो मेरा अपना जो व्यू होता है चीज़ों को चेंज करने का, वो ये होता है कि यू गो अग्रेसिव, यू गो ऑल आउट। Even if you fail at 50% of your effort, you probably end up achieving 50%. तो मेरा जिन चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों को हम देख रहे हैं, और जो हमारी बातें अब तक जो बाकी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से चल रही हैं, अब आपने देखा होगा SECP ने 3-4 स्टेप्स बड़े ज़बरदस्त लिए हैं। और सॉरी, मैं ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा राउंड एंड सर्कल लेके जाऊंगा, जस्ट टू गिव यू अ प्रीएम्बल। SECP में अब्दुल रहीम साहब, मैं नाम लेना चाहूँगा, काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अब्दुल रहीम ने 3-4 चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई हैं SECP के अंदर। पहला उनका काम है जी क्राउड फंडिंग के ऊपर। अब आप थोड़ी देर के लिए क्राउड फंडिंग के कॉन्सेप्ट को सोचें, SECP जैसी ऑर्गेनाइजेशन को सोचें, बैंकिंग इंडस्ट्री को सोचें थोड़ी देर के लिए, आपको ये दोनों चीज़ें मिसमैच लगेंगी और रियलाइज नहीं होगा आपको कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव ये कैसे हो रहा है, कहाँ से आ गया, किसने सोचा है। बट this has happened. So now there's a white paper out, there's a request for comments out, and people are now working on it, and then they have a timeline towards having it implemented. Similarly, जो दूसरा काम उन्होंने किया, वो उन्होंने white paper issue किया है digital assets के ऊपर. Now the entire Indian community is actually lauding Pakistan's digital asset white paper, और उसके ऊपर request for commenting हो रही है. So the kind of stance that organizations like SECPs is taking, that we must sit back and we must laud it, and we must say कि यार ये अच्छा काम है करने वाला. Similarly, साहबजादा अली जो विजन लेके आए हैं KPIT बोर्ड के अंदर, उनका जो विजन है, आप उसको देखें तो आपको लगेगा नहीं कि वो किसी पाकिस्तानी एंटिटी का या किसी पाकिस्तानी IT बोर्ड जो है वो इतना एग्रेसिव और इतना प्रोग्रेसिव सोच ला रहा है और हम काम कर रहे हैं। सिमिलरली जो मेरा स्टांस है, मेरा स्टांस भी उतना ही एग्रेसिव है कि अगर हम वाकई कुछ डिजिटल गवर्नेंस में करने जा रहे हैं और हम वाकई जैसे अपने आप को हम कह रहे हैं मूवर्स एंड शेकर्स एंड प्रोबेबली फॉर द नेक्स्ट 5-6 years, then I think we should go all out and we should go aggressive and we must try and break things on the way. इसमें ये कोई हाफ हार्टेड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मेरा अपना स्टांस ये है कि then we start talking about कि जी let's start creating a data exchange layer. डेटा एक्सचेंज लेयर इम्प्लीमेंट करें, डेटा एक्सचेंज लेयर इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इस डेटा एक्सचेंज लेयर को इनेबल करें। इनेबल कराने के बाद आप इसके अंदर लोगों से ओपन डेटा इंटरफेसिंग की बात करें, APIs की बात करें, दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलें, इम्प्लीमेंटेशन करें। आपके देखिए आपकी सोशल एंटरप्रेन्योर, आपकी सोशल एप्लीकेशंस बहुत ढेर सारी हैं, ओपन मैप्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं टू लेट्स से आइडेंटिफाई द गोस्ट स्कूल्स इन योर कंट्री, एंड यू कैन टैग देम वेयर दे आर एंड वेयर दे आर नॉन फंक्शनिंग. यू कैन क्रिएट यूजिंग ओपन सोर्स, और ये काम हमने 2013-14 में हमने काफ़ी किया. Using open source, you can create e-learning platforms. Using open source, you can create the digital voting platform. जो चीजें जहां हो सकती हैं, let's start defining a Pakistan stack for that matter. And based on that Pakistan stack, हम बड़ी तेजी से चीजों को कि भाई हम एक बेसिक स्टैक डिफाइन कर दें. बेसिक स्टैक डिफाइन करके हम लोगों को, हम ऑर्गेनाइजेशंस को ये इनपुट दें कि जी आपने इस स्टैक के अराउंड काम करना है, एंड वी विल मेक इट वर्क. We will make it interface. We will make the data talk with each other. As far as the stack is working, as far as the data exchange layer is working, things will eventually start working. So
हम पैरेलल भी काम करें, बहुत से डोमेन्स, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन साथ पैरेलल भी काम करती रहें, और हम एक बेसिक डेटा गवर्निंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो हम एक दूसरे को कन्विंस कर लें, तो प्रॉब्ली वी कैन डू दिस वेरी क्विकली। मेरा अपना स्टांस ये है कि वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग ब्लॉकचेन, वी हैव टू स्टार्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, वरना जिस तरह से हम अब तक हर चीज को, जो नई चीज आती है उसको पहले हम हराम करार देते हैं, फिर उससे नफरत करने लगते हैं, फिर हमें रियलाइज होता है कि जी उसका हाइप साइकिल गुजर चुका है, और हम जो है वो मैक्सिमम रेवेन्यूज के बजाय अब हम टेल एंड की को जो है वो पीट रहे हैं, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। आई थिंक दिस हाइप साइकिल दैट वी नाउ हैव, this hype cycle is very critical for us to become Pakistan, or for the true version of Pakistan, or for us to always then stay behind. इसमें आप ये देखें कि what we are having on cloud platforms, we are having open source platforms like Kubernetes, we are having open source platform like virtualization of services in terms of telco, virtualization of your entire security layer. हम अगर इन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें आहिस्ता आहिस्ता, हम we have a policy where we start adopting these things. हम एक तो दूसरा, हम PC1 बना के महंगा इक्विपमेंट खरीद के महंगा सॉफ्टवेयर खरीदने की जो प्रैक्टिस है उससे बाहर निकल आए, थोड़ी देर के लिए सोचें कि यार ये पाकिस्तान क्लाउड कहाँ पे है, मुझे ये बताएं। आपने मेरे बटन दबा दिया हुआ है, कोई 10 सेंटेंस पहले ना इंटरफेस के ऊपर मेरा बटन दबा दिया। पाकिस्तान क्लाउड का है, मतलब व्हाई आर वी स्टिल डिपेंडेंट? अच्छा देखो, पाकिस्तान क्लाउड जो है ना, 2 ऑर्गेनाइजेशंस का रेमिट है। एक होना चाहिए NTC का जो गवर्नमेंट को संभाले, दूसरी होना चाहिए NITB का, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को के लिए माशाल्लाह से ये काम बनता है। इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमें ये कंप्लीट इजाज़त देनी चाहिए, हमको इनकी कंप्लीट हेल्प करनी चाहिए। ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस अपने दरमियान में मिलके पाकिस्तान क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन भी करें, पाकिस्तान क्लाउड के लिए तैयारी भी करें, इंटरफेसिंग भी तैयार करें। तो अगर हम यहाँ से शुरू कर लें, मतलब जो जिसका काम है उसे करने दें और उस्मान नासिर उस काम में ना कूदें, तो वो बहुत बेहतर है। मैं मशवरा दे सकता हूँ खाली, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये काम उन ऑर्गेनाइजेशंस के और IT बोर्ड्स के करने वाले हैं, और माशाल्लाह से ये हमें उनको कैपेबल करना है, खाली हमें उनका साथ देना है। ये दोनों बॉयज हैं उस्मान साहब, मैं फवाद कता कलामी की माफी। उस्मान साहब, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में आके एज MD आप कौन से 3 काम जो है उनको प्रायोरिटी पे करना चाहिए? इसमें हमने जब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को देखा ना, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि हम क्या कर रहे हैं कि अब तक जो हम अपना काम कर रहे हैं, हमने ये समझा हुआ है कि हम लोगों को शायद नॉर्वे ले जाएंगे, हम लोगों को थाईलैंड ले जाएंगे, हम वहाँ एग्जीबिशन में खड़े हो जाएंगे, हम कहेंगे देखिए जी हमारा सॉफ्टवेयर है, हम खुदा के वास्ते हमसे ले लीजिए। तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एनी फर्दर। जो 3 काम मैं करना चाह रहा हूँ जो मेरे लिए बड़े क्रिटिकल हैं। पहला काम ये है कि वी गेट आउट ऑफ कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद फैक्टर, द KLI फैक्टर, एंड आई कॉल इट द किल फैक्टर एक्चुअली फॉर इन आवर केस। हमने जो जुल्म किया है अपने साथ, वो हमने जुल्म ये किया अपने साथ कि हमने हैदराबाद को फ्लरिश नहीं होने दिया, यही हरकत करके हमने पेशावर को फ्लरिश नहीं होने दिया, हमने कोयटा को फ्लरिश नहीं होने दिया, हमने भावलपुर की तरफ नहीं देखा। तो मेरा एक जो सबसे पहला काम है वो ये कि जी पूरे पाकिस्तान के 27 शहरों में 40 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स डेवलप करना, छोटे हों, 3000 स्क्वायर फीट, 4000 स्क्वायर फीट, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग, कोई ज़रूरत नहीं है बड़े बड़े जो है ना वो पूरी 10-10 मंजिला इमारतें खड़ी कर देने की। 4000 स्क्वायर फीट से शुरू करें, 5000 स्क्वायर फीट से शुरू करें, सखर के अंदर 5000 स्क्वायर फीट से आप बना दीजिए। देखिए होगा क्या, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। इसका इम्पैक्ट सबसे बड़ा ये होगा कि जहाँ जहाँ IT यूनिवर्सिटी है, जहाँ से बच्चा निकल रहा है, वो बच्चे को आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद नहीं बुलाना पड़ेगा। 35,000 रुपये उसका लिविंग एक्सपेंस होता है, 18,000 रुपये आप उसको सैलरी देते हैं और आप समझते हैं कि आप उसके ऊपर एहसान करें। लेट्स स्टॉप डूइंग दिस, नंबर 1। नंबर 2, जो इसका दूसरा इम्पैक्ट आएगा
हमारी पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो इस वक्त मुल्तान के अंदर अपना 3rd ऑफिस बनाने को सोच रही है। हम उसमें उसको ढूंढने में उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, द राइट लोकेशन। कराची के अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कराची के अंदर शारा फैसल पे अगर आप किराए पे जो है जगह लेने जाएं तो 280 रुपए पर स्क्वायर फीट इस वक्त किराया है। 10,000 स्क्वायर फीट का मतलब है 28 लाख रुपए आपका किराए में चला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप तकरीबन कोई 1.5 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का बना रहे हैं तो शायद आप ब्रेक इवन कर पाए 28 लाख रुपए के किराए की मद में। ये जुल्म हमने अपने पर खुद किया है। हैड वी बीन डूइंग दिस, क्या होता अगर हैड वी बीन डूइंग दिस इन हैदराबाद एट रफली 80 रुपीज पर स्क्वायर फीट की जगह के ऊपर। सो दिस इज क्रिटिकल, दिस इज द वन थिंग दैट वी वांट टू डू इन इट इमीडिएटली, और उसमें हम काफी काम कर रहे हैं, काफी काम हो चुका है। 4 हमारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क छोटे शहरों में इस वक्त जो है वो किसी मराइल में है, जो अगले 1 महीने में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। गिलगित के अंदर हमने पहला बना दिया है, वो उसको तकरीबन 1.5 महीना हो गया उसका इफ्तिताह हुए हुए। गिलगित जैसे शहर के अंदर हमें 18 आईटी कंपनीज मिली। 2 कंपनीज ऐसी हैं जिनके 150 एम्प्लॉइज हैं। एक कंपनी ऐसी है जिसने ये जो मोहल्ले की कमेटी होती है, उसने कमेटी को डिजिटाइज कर दिया। उसने पूरे गिलगित शहर से 6 कमेटियां ली। आज वो 86 मिलियन रुपए पर मंथ की कमेटीज मैनेज करते हैं ऑन एन एप्लीकेशन, और वो टीडीआर इशू कर रहे हैं उसके ऊपर। तो नंबर 1 ये हमारा पहला काम ये होगा। नंबर 2 दूसरा काम हमारा है जी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा इसलिए जमा करना, और डेटा हमारे काम के लिए नहीं, उनके काम के लिए। उस डेटा को हम एक विकी पेज के ऊपर, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक विकी पेज बना दें, डेटा को रेजिमेंट कर दें। डेटा को रेजिमेंट करने के साथ हम इस तरह से बना दें कि आप एक सॉफ्टवेयर हाउस और दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस के दरमियान में कंपैरिजन कर सकें। हम जो इनपुट वहां पे मांग रहे हैं वही इनपुट दूसरे विकी पेज पे मांगे, ताकि जर्मनी में बैठा हुआ हमारा ट्रेड काउंसलर जब एक मीटिंग के अंदर जाता है, जब वो जो आगे से जर्मन सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑर्गेनाइजेशन जब उससे कहती है कि जी हमें 150 लोग चाहिए आर लैंग्वेज के अंदर, तो ही कैन क्विकली, और या हमें 15 कंपनीज चाहिए जो आर लैंग्वेज पे काम कर सके, हमारा एक मेजर प्रोजेक्ट आ रहा है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहा है, तो he can quickly go onto one platform and he can search for all the companies in Pakistan who are working on our platform. He can search for freelancers who are working on our platform. और उसके बाद वो उनको पूरी लिस्ट उसी वक्त ही जो है वो एक क्लिक ऑफ अ बटन से उसको उनको ईमेल कर सके कि देखें ये 15 कंपनीज हैं और ये 12,000 लोग हैं जो हमारे यहाँ आर के ऊपर रिकग्नाइज्ड काम कर चुके हैं, ये उनके प्रोजेक्ट्स हैं, ये उनका रेवेन्यू एंड सो ऑन सो फॉर, सो द मीटिंग कैन गो टुवर्ड्स अ कंक्लूजन। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट काम है जो मैं समझता हूँ वो हमें करना चाहिए। तीसरा काम है वो हमारी है जी एक्सेस टू कैपिटल। एक्सेस टू कैपिटल में इस वक्त हम ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एमओयू के मराइल के अंदर हैं, जिसमें हम 75 आईटी कंपनीज को, एसएमई कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम बोर्ड के ऊपर लेके जा रहे हैं। देखिए उस्मान नासिर और पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड कितने ही ब्रोशर्स बना ले, कितने ही यूट्यूब पे ऐड लगा दे, जो बाहर से एक प्राइवेट इक्विटी फंड का मैनेजर है वो उस्मान नासिर के लगाए हुए ऐड को, पीएसईबी के लगाए हुए ऐड को नहीं देखेगा। He would immediately log on to the page or the web page of Pakistan Stock Exchange and he'll try and find कि कितनी आईटी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं आपकी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, जो बातें आप कह रहे हैं वो रियलिटी में कहाँ हैं। सो जब वो अभी जाके देखता है तो उसको 6 आईटी कंपनीज मिलती हैं सर, 6 आईटी कंपनीज मिलती हैं उसको और 4 टेलीकॉम कंपनीज मिलती हैं, तो वो कहता है कि आई थिंक दीज गाइज आर जोकिंग। तो जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट काम है वो ये है कि जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर तकरीबन अगले 3 साल में 75 आईटी कंपनीज को लिस्ट कराना, और लिस्ट कराने में उनके लिए जो उनकी कॉस्ट है फॉर कंसल्टिंग वो पीएसईबी थ्रू अ पीएसडीपी फंडेड प्रोजेक्ट दे। और ये ऑलरेडी इसका जो कॉन्सेप्ट पेपर है वो पीएसडीपी को फ्लोट किया प्लानिंग कमीशन को फ्लोट किया जा चुका है। इंशाल्लाह ताला जनवरी में आई होप कि दिस विल बी इवैल्यूएटेड एंड दिस विल बी अवॉर्डेड टू अस, वी कैन स्टार्ट द प्रोग्राम इन मे। तो ये 3 काम है सर जो आपने मुझसे पूछे, हम पहले 3 काम क्या करना चाहिए। जी बाबर कुछ कहना चाहते हैं?
जी मेरा क्वेश्चन नवीद भाई ने जाना भी है थोड़ी देर में, उनके लिए काफी लेट है। बाबर भाई मुझे ऐड करने दें जरा, क्योंकि मैं नवीद साहब के लिए एक पॉइंट ऐड करना है। नवीद साहब, अब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है? मुझे नहीं पता कि आपने इतना बड़ा डिसीजन कैसे किया। आप कई सालों से पाकिस्तान के अंदर आप उनको लेके आ रहे हैं, रिस्क वालों को पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। आप अपनी कंपनी भी आपने यहाँ पे लाहौर में एक्सटेंड की हुई है। आप एक्सटेंसिवली ऑफर कर रहे हैं क्रिएट द मैन पावर ऑफ द फ्यूचर फॉर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। आप एक विजन दे रहे हैं पाकिस्तान में कि जी जैसे हम लोग यहाँ पे मोबाइल फोन्स बना रहे हैं, तो ये उस वक्त तक कामयाब ये भी इंडस्ट्री नहीं होगी जब तक पाकिस्तान अपना ट्रांजेक्शन नहीं बनाएगा। अब ये आपने ये इतना होलिस्टिक प्लान ऑब्जेक्टिवली और फिर सब्जेक्टिवली आपने कैसे इस नतीजे पे पहुंचे कि ये 5-10 साल ये मुल्क आपको वो इंटरफेस दे देगा कि आप अपना ये विजन कामयाब कर सकेंगे? What are the factors? How are you doing this? मतलब आपने ROI कैसे डिसाइड किया है कि यहाँ इस जमीन से आपको ROI इंशाल्लाह मिलेगा? इसके ऊपर से मुझे बताएं प्लीज। जी हम लोग जो है ना एंटरप्रेन्योर हैं, हम लोग गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं करते, हम किसी और पे डिपेंड नहीं करते, हम किसी की कोऑपरेशन पे डिपेंड नहीं करते, हम सब खुद कुछ करते हैं। ये आई ग्रू अप इन पाकिस्तान. I started my first business when I was like 14-15 years old. I came to America. I started all the businesses here. मैंने कभी किसी कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट से या यूएस की गवर्नमेंट से कोई ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि वो मेरे लिए कुछ कभी करेंगे, राइट? ना ही मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट लिए कुछ करेगी। वो करें, अच्छी बात है, लेकिन हमें एज एंटरप्रेन्योर अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। और हम जो भी बिजनेस प्लान बनाते हैं ना, वो इस बेसिस के ऊपर होता है कि हम लोग पैसे कमा सकते हैं। और हम इसलिए कि खैराती काम नहीं कर रहे हैं हम ये काम कर रहे हैं कि इसके अंदर पैसा बने, बेनिफिट हो एंटरप्रेन्योर का भी और मुल्क का भी, एंड इट इज एंटायरली पॉसिबल। इट इज एग्जैक्टली व्हाट वी कैन डू। पाकिस्तान करंटली अकॉर्डिंग टू, मैं आपको नंबर्स देता हूँ, मेरी कंपनी के इस वक्त ऑपरेशंस हैं इन अबाउट 19 कंट्रीज, राइट? आई हैव अबाउट 7 कंपनीज। सो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हमारा जो हेडकाउंट कॉस्ट है, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 19,000 per person dollars per year, including the tools. इंडिया के अंदर हमारा कॉस्ट है 33,000 person. चाइना के अंदर we are in the range of 66 to 80,000. यूनाइटेड स्टेट्स में 200,000. This is a historic moment for me. If I can bring up this headcount in Pakistan, I need a lot of people. I would save a ton of money if I could do that. Wonderful. With the help of open source, because risc-v is a grand opportunity. I don't have to write a $60 million license agreement with ARM. I can do that. I could not do that before, right? Secondly, design tools इतने महंगे होते थे, I could not do that before. Design tools open source में जा रहे हैं, risc-v आ गया है। अगर इन दोनों चीज़ों को देखा जाए, as an entrepreneur मुझे ये लगता है कि हम पाकिस्तान के अंदर 5, 6, 10, 20 हज़ार लोग अगर ट्रेन कर लें, it would be at 1/3 to 1/10 the cost compared to the equivalent headcount elsewhere in the world. Now, why would I not do that? Now, इसमें great फायदा ये है कि in doing so, पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। in doing so, पाकिस्तान के अंदर चिप इंडस्ट्री आ जाती है। in doing so, पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि चिप इंडस्ट्री जो ना एक इशू है सॉवरेनिटी का। अगर आपका चिप इंडस्ट्री नहीं है, यू आर नॉट अ सॉवरेन नेशन। जिस तरह आपके पास डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है या आपके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आप सॉवरेन नेशन नहीं है। और ये बात मैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कहता, ये मैं चाइना के लिए भी कहता हूँ, ये मैं ब्राजील के लिए भी कहता हूँ, ये इंडिया के लिए भी ट्रू है, ये इजराइल के लिए भी ट्रू है, ये इजिप्ट के लिए भी ट्रू है, ये टर्की के लिए भी ट्रू है, सबके लिए ट्रू है ये, राइट? एनी लार्ज नेशन which does not have a chip industry is not a sovereign nation 5, 10, 15 years from now, because whoever is giving you chips will control your foreign policy, will control your internal policy, will control your monetary policy, will control your social policy, will control all your policies. या तो आप खड़े होकर भीख मांगते रहें और subject to whatever somebody is telling you, or you stand on your feet. But the good news is we can do so and make money while doing so. So मेरा ये ख्याल है, this is the only reason. अब मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ और जाहिर सी बात है मैं पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ, तो मुझे अल्लाह ने एक ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया, दोनों काम हो सकते हैं इकट्ठे। Why would we not do that? Wow, wonderful, wonderful. जी बाबर भाई। अच्छा, नवीद भाई, उस्मान भाई,
डॉक्टर शाहिद भाई, आप सबसे मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं। हम ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में ओपन सोर्स इनोवेशन फंड कायम करना चाहते हैं। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद बिल्कुल सिंपल है, कनेक्टिविटी करना, ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, और ये जो इंटरनेशनली मार्केट के अंदर हमारे लोग नहीं फिट हो रहे या थोड़े लोग फिट होते हैं, इनको उस लेवल पे तैयार करना, और स्पेशली प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर हमने ये काम करना है। तो हाउ वी कैन वर्क टुगेदर टू अचीव दैट गोल। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम कोई पैसा लेके अपने पास रखना चाहते हैं, इस पैसे के साथ साथ को रेक्टिफाई करना सारे लोगों को, दैट इज आवर मेन गोल। और जिस तरह नवीद भाई आपने कहा, शायद मेरे भी थॉट ऐसे ही है कि हम सारी चीजें गवर्नमेंट पे ना डालें। गवर्नमेंट के और बहुत से चैलेंजेस हैं, उनके वो अपना काम कर रहे हैं, अपनी पेस पे कर रहे हैं, उनको अपना काम जारी रखना चाहिए जिस तरह कर रहे हैं। जिस तरह उस्मान भाई माशाल्लाह ने ज्वाइन किया, हमारे वो KPIT बोर्ड से हैं, अली महमूद उन्होंने ज्वाइन किया, ये लोग काम कर रहे हैं और ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। हाउ वी कैन वर्क टुगेदर एज अ एंटरप्रेन्योर्स, एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, दिस इज माय क्वेश्चन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। नवीद भाई आप अगर पहले स्टार्ट करें, फिर उस्मान भाई की तरफ जाते हैं, फिर बाकी मैं वो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हम लोग लाहौर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर है, so far we have trained 150 people in chip design. हमने ये कैलकुलेट की कि हमारा चिप डिजाइन कॉस्ट जो आती है ना ट्रेनिंग के ऊपर, इंक्लूडिंग टूल्स एंड टीचर्स एंड एवरीथिंग, इज अराउंड $12,000 फॉर 1 year ट्रेनिंग। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल खर्चा है, सब जो हम कर रहे हैं इस वक्त, दिस इज व्हाट आई एम स्पेंडिंग। सो वी वेंट एंड टॉक टू फवाद चौधरी साहब, मिनिस्टर ऑफ IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी rather, and so he basically said, look, here's what I can do for you. What I can do is there is a program in Pakistan where we can pay up to $3,500 per person if that person wants to get a training. So if you are willing to provide the training, we will give you that money. So now your cost is little bit less. अब हमारे 12,000 खर्च नहीं हो रहे, वो 3,500 कम हो गए। अगर ये गवर्नमेंट कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कर दें तो हम लोग देखे ना, हम जब पाकिस्तान में भिखारी हुआ करते थे ना, वो पता है क्या बोलते थे, जो दे उसका भी भला, जो दे ना दे उसका भी भला। उसका भी तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ना जी, वो ऐसे सोचते हैं। हम तो ऐसे सोचते हैं, वो अगर फवाद चौधरी साहब दें उनका भी भला, ना दें चले उनका भी भला। तो मैं, बड़े अच्छे आदमी है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं एक्चुअली, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही एक्चुअली स्टेड विद अस in March when unfortunately got stuck in COVID in US. And I mean, sincerely, I think everybody is trying to do something for Pakistan. I wish everybody the best. But my point is, look, it's simple. We are trying training. They are trying to help. Great. मैंने बाकी अपने अमेरिका में बहुत सारे लोगों से बात की, लोगों ने मुझे पता है क्या कहा, नहीं भाई अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, we will help you. What can I do? Okay, I'll pay $3,000 or $5,000 per student you are training. Just मैं अल्लाह वास्ते देता हूँ आपको। मैं कहा चलो यार। But again, I don't depend on them. My business plan should be viable without any donation, without any government subsidy. And mashallah it is. अगर मैं 12,000 में बंदा ट्रेन कर लूँ ना, मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ, because it is still cheaper than China, still cheaper than India, still cheaper than Malaysia, right? With that number. Now with subsidy, it makes, मेरा पता है क्या, मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं पाकिस्तान में 4-5 हज़ार लोगों का एक डिजाइन सेंटर बनाऊं और लोग मुझे कॉपी करना शुरू कर दें। बाकी और सब लोग देखें ये सक्सेसफुल है, वो कॉपी करना शुरू कर दें, एंड many डिजाइन सेंटर्स आर क्रिएटेड, एंड दैट वुड बी द सक्सेस। सक्सेस इज नॉट कि मैं वाहिद हूँ, सक्सेस ये है कि हम इतने सक्सेसफुल हों कि कॉपी कैट्स आना शुरू हो जाए, एंड पीपल स्टार्ट कॉपिंग अस, एंड देन मेनी सच डिजाइन सेंटर्स आर क्रिएटेड, एंड आई थिंक दैट वुड वाज सक्सेसफुल लुक लाइक टू मी। सो दैट्स व्हाट आई देखें, एक तो छोटा सा काम हम लोग OSFP से कर देते हैं ना, ओपन सोर्स फाउंडेशन से। आप हमें एक इंट्रोडक्टरी या एक बेसिक इंटीग्रेशन मॉड्यूल हमारे साथ बना लें अपनी ट्रेनिंग्स का। हम बंदा आपको, जो बंदा इस काबिल होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान से, आप उसको अपने प्रोग्राम में ले लें और फिर उस पर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। मतलब वो बेसिक लेवल जो है ना, यहाँ पे ये जो ग्रुप बैठा हुआ है सारा माशाल्लाह, they have the institutional capability to do this inshallah taala. So this is one thing. Now I take this to Dr. Ashraf. आपके सामने ये सारी जो डेवलपमेंट है आपने अपने हाथों से की है डॉक्टर साहब, ठीक है। अब आप इस कॉम्बिनेशन को आप देखें, ये जो सब पूरा कॉम्बिनेशन है आपके सामने, आप इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं? आपकी सजेशन क्या है डॉक्टर साहब? अनम्यूट कर लें सर।
जी ठीक है। व्हाट्सएप आपने बड़ी खूबसूरत बात की है और इसको मेरा ख्याल है देयर इज ए नीड टू लाइक रैप अप इन अ फॉर्म के नवीद साहब के जो बेसिकली कॉन्सेप्ट हैं वो बड़े क्लियर और बड़े वाज़ेह हैं। उन्होंने बड़े सही तरीके से उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है और उस सही तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है और मेरा ख्याल है जो बातें उन्होंने की हैं मैं अभी रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मोर और लेस मतलब वी हैव बीन फॉलोइंग द सेम राउट इन द पास्ट आई वुड से अबाउट 30 इयर्स। ठीक है, लेकिन जो कुछ कर रहे थे मतलब वो कुछ डिस्कशन यहाँ पे नहीं हो सकती, बट द पॉइंट इज के बात ऐसे ही है। नाउ द पॉइंट इज के आपको एक राइट इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिसके अंदर आपका एक प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स, आपके प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, आपका प्रॉपर ट्रेनिंग मैकेनिज्म, आपका प्रॉपर ये सारी चीजें जो हैं ये एक सीक्वेंस में और एक तरीके के साथ में एक दूसरे को जिसको कहते हैं हम सिनर्जाइज कर रही हूँ और एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई हुई है। ठीक है, हमें वो फ्रेमवर्क तैयार करने की जरूरत है और ये कोई इतनी बड़ी जिसको अगेन वही बात है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स ओनली ए विल टू डू दैट थिंग। हम सब लोग समझते हैं इंडिविजुअली डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर हर आदमी ने हम में से जितने भी हैं किसी न किसी फॉर्म में किसी न किसी शक्ल में उस पर काम किया है और उसको डीप रूटेड अंडरस्टैंडिंग उसकी मौजूद है। माइक्रो लेवल तक की मैनेजमेंट में भी किसी स्टेज तक करते रहे हो। उन सब चीजों को आपस में इंटीग्रेट करके इस पूरे फ्रेमवर्क को तैयार करने की जरूरत है जो हम किसी साइड लाइन पे अभी शायद वक्त इतना ना हो जिस पे ये डिस्कशन की जा सकती है, बट द पॉइंट इज के ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें राइट टाइम आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि इसको हम यूज करें और इसको सही तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं तो इस वक्त यही कहूंगा कि बस हम दुआ कर सकते हैं और विश कर सकते हैं कि सब मिलके इस मामले को किसी एक पॉजिटिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने के काबिल हो सके। थैंक यू। बेहतरीन। प्रोफेसर लुत्फुल्लाह साहब प्लीज। मैं असल में सोच रहा हूँ कि जिस तरह के सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड है हमारा और काफी माशाल्लाह ठीक ठाक जो है ना कई सालों से अपना काम कर रहा है, तो अगर इस तरह कोई हार्डवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड या हार्डवेयर डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान में क्रिएट किया जाए तो गवर्नमेंट विल एक्चुअली इंटरफेयर। गवर्नमेंट जो है ना बगैर इसके नहीं चलेगी कि आप उसको कोई इदारा बनाएं और वो इदारा फिर आप सबको संभालेगा। सब लोग सुनो, अभी उस्मान भाई अपनी जुबान से खुद खुशखबरी देने लगे। बताएं जी। डॉक्टर साहब, हम एक कोशिश कर रहे हैं कि इसको पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बोर्ड या पाकिस्तान आईसीटी एक्सपोर्ट बोर्ड के तौर पे इसको रिवाइव करें एज एन इस ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस डेवलपमेंट करें रादर देन जस्ट बिजनेस फैसिलिटेशन। आपकी बात मैंने इसलिए तालियां बजाई कि बस आप ऐसा लगा है कि जैसे आपने मेरे दिल की बात ऐलान जो है ना पब्लिक हो गया। डॉक्टर अगर इसके अंदर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, एनीथिंग आई कैन डू टू हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस और गेटिंग सम इंटरनेशनल पीपल ऑन इट और हेल्प अरेंज सम फंडिंग और व्हाटएवर, आई डोंट नो व्हाट इट टेक्स टू डू समथिंग लाइक दैट, आप लोग जानते हैं, बट मैं इसे भी ऑफर करना चाहूंगा। एनीथिंग आई कैन डू, आई वुड लव टू डू दैट। सर आप एक प्रपोजल बना के भेजे गवर्नमेंट को और आपने खुद कहा कि फवाद साहब आपके दोस्त हैं तो ही विल मूव इट एंड द बोर्ड विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। मिनटों में बन जाएगा। आई विल एक्चुअली आपको एजेंडा पॉइंट मिल गया जी, आपको एजेंडा पॉइंट मिल गया, यही मौका है। उस्मान भाई के लिए एक और क्वेश्चन है। हमारे बहुत से फ्रीलांसर्स सब देख रहे हैं हमें और फ्रीलांसर्स के बहुत चैलेंजेस हैं उस्मान भाई, तो आपने कुछ ऐसा प्लान रखा है उनके लिए कि ये पेमेंट के इश्यूज, ये और बहुत से इश्यूज, 18 साल का जो हमारा फ्रीलांसर है वो रजिस्टर हो जाए पीएससीबी के साथ, उसको एक एंटिटी के तौर पे, एनी प्लान्स फॉर देम प्लीज? जी, हमने एक हफ्ते पहले ही पॉलिसी का फ्रीलांसर्स की पॉलिसी बनाई है। उसका मतलब हमने बनाई कंप्लीट नहीं है, अभी ड्राफ्ट की है हमने। फर्स्ट ड्राफ्ट हमने शेयर किया है काफ़ी इंडस्ट्री से और मैं इस ग्रुप के साथ भी शेयर करने को फौरन कर लेता हूँ कि उसका फर्स्ट ड्राफ्ट फॉर रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स हमने शेयर किया है और उसमें हमने इनकी एज अ सिंगल मेंबर कंपनी इनकॉर्पोरेशन की बात की है
नंबर 1, नंबर 2 बैंक अकाउंट्स खुलवाने में आसानी की बात की है, बैंक लोन्स के लिए बात की है, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बात की है। हेल्थ इंश्योरेंस मेरे नज़दीक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बच्चों के लिए। उसके बाद हमने जो इनको जो सस्ते क्लाउड सॉल्यूशंस इनको सब्सिडाइज्ड करके देने की बात की है। ये तमाम सारी चीज़ें उस पॉलिसी के अंदर है। मैं वो डॉक्यूमेंट फवाद साहब से शेयर कर लेता हूँ। फवाद साहब आप बाकी लोगों से सबसे शेयर कर लेंगे, काइंडली आप लोगों के कमेंट्स बड़े क्रिटिकल हैं। मैं शाहिद भाई की तरफ आऊंगा। जी जी मैं ना शाहिद भाई से ये बोलना चाहता हूँ कि देखें, शाहिद भाई अक्सर औकात मेंशन करते होते हैं कि यार मेरी तरफ से छोटी सी कंट्रीब्यूशन है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह वो ना हैवी टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ। शाहिद भाई आप प्लीज बताएं हमें कि ये जितनी बातें हुई हैं पिछली, आपने इतनी देर से बैठ सुनी है, आपको क्या नजर आ रहा है, आगे रास्ता क्या है हमारा, और आपकी एडवाइस क्या है इसके? शुक्रिया फवाद भाई। मैंने क्या यार, आप लोगों को एडवाइस देनी है, माशाल्लाह इतने टैलेंटेड बैठा हुआ है। मैं यही कर सकता हूँ कि जो मेरा 25 साल का यूएस का तजर्बा है उसको मैं किसी तरीके से ट्रांसफर कर दूं और वो मैं किसी तरीके से पाकिस्तान की मैं हेल्प कर सकूं। ठीक है, आई एम डन। जो मुझे करना था जिंदगी के अंदर वो मैंने कर लिया, आई एम डन। मेरे दो ख्वाहिशात हैं जो मैं पाकिस्तान के लिए करना चाहता हूँ। एक मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरा जो 2.5 करोड़ बच्चा आउट ऑफ स्कूल है उसको हम किसी तरीके से हम एजुकेशन दे दें। ठीक है, तो ये सुमान भाई ने ये जिक्र किया है, ये ई लर्निंग का और गो स्कूल का, ये सारी चीजें मेरे हाथ में, हमारे हाथ में है। टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है, विजन हमारे हाथ में है, हमें सिर्फ बैठ के उन डॉट्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि मैं 2030 तक यानी 25 तक 5 साल में अगर मैं 10 लाख बंदा न्यू टेक्नोलॉजी पे हम ट्रेन कर सके, हम सब मिलके जो न्यू स्किल्स हैं, एआई है, ब्लॉकचेन, उसको ट्रेन कर सके। अब आप लोग कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं? देखें, हमने प्रॉब्लम सॉल्व करना है पाकिस्तान की इंडस्ट्री का, हमने बैंक का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, स्कूल का मसला हल करना है, गवर्नमेंट का मसला, हमने वो मसाइल हल करने हैं। हमारे पास ट्रेनर मौजूद हैं। अगर ओपन सोर्स के साथ बैठ के हम ये एक प्रपोजल बनाते हैं और एकेडमिया को, इंडस्ट्री को, एजुकेशन को, जो भी है उनको, भाई ये हमने आपके मसले हल करने हैं और हमारे पास ये ट्रेनर हैं और ये हमारे पास स्टूडेंट, आप इसको फंड कर दें और हम ट्रेन करते हैं पाकिस्तान का, हम ये मसला हल कर लेंगे। दुनिया में इसी तरह ही होता है। मैं फिर बोलूंगा, F16 गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, गूगल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, फेसबुक गवर्नमेंट ने, ये प्राइवेट सेक्टर ने बनाया। हम ये जितने भी आप लोग बैठे हुए हैं, इन सब के दिमाग उतने अल्हम्दुलिल्लाह इतने टैलेंटेड है कि पाकिस्तान को हम एक पुश दे सकते हैं, 21st सेंचुरी में हम लेके जा सकते हैं। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना जहन है, सिर्फ डॉट्स को हमने कनेक्ट करना है। और मैं फिर यही कहूँगा, अगर मैं अमेरिका में बैठकर डॉक्टर काका खेल की एडवाइस लेकर अगर मैं 25 स्कूल चला सकता हूँ रिमोट एरिया के अंदर, अगर हम मिलके 25 स्कूल रिमोट एरिया के अंदर चला सकते हैं, ना जहाँ ना पे इलेक्ट्रिसिटी है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है, ना स्कूल है, तो अगर यहाँ पे बैठ के हम कर सकते हैं तो पाकिस्तान में बैठ के हम 2.5 करोड़ बच्चों को भी तालीम दे सकते हैं, यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके। और आप लोगों के साथ मिलकर पाकिस्तान में अगले 5 साल में हम 10 लाख बच्चा भी ट्रेन कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप ही के साथ मिलके। ये डूएबल है। इंडिया ने किया है, चाइना ने किया है, साउथ अमेरिका ने किया है, मुख्तलिफ डेवलपिंग कंट्रीज ने किया है। और आज भी मेरी IBM से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये मसाइल हैं, और वो काम वो इंडिया में करें। इंडिया और हमारे एक ही उम्र है, हम कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को मिल के बैठ के अपनी जात से निकल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अब सिर्फ हमने चेंज ये करना है कि पहले हम पाकिस्तान में काम करते थे, अब हमने पाकिस्तान के लिए काम करना है। इफ वी डू दिस, इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम आगे लेके जा सकते हैं। Sir, wonderful. On this note to you guys. चलिए मैं एक आपको बता देता हूँ कि I've already written a short message to Mr. Fawad Chaudhry, encapsulating the idea and telling him that we will discuss with him tomorrow at 1 o'clock. So I sent a paragraph just capturing this discussion, and I've already sent to him. Wow. सर ओपन सोर्स इनोवेशन फंड को हमने लाजमी याद रखना है सर, इंशाल्लाह। शिवानी साहब से मेरा एक रिक्वेस्ट और भी है कि काइंडली ये इनपुट जो है वो अगर उनकी तरफ से मिनिस्टर फॉर IT को भी चला जाए,
अमीनुल हक साहब को, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। हम उनकी सरबराही के अंदर हम बड़ा जो है ना हम बड़े रिवाइटलाइज्ड हो गए। जितनी सर मेहनत माशाल्लाह वो ये कर रहे बड़ी हैं। प्रोग्रेसिव टीम है उधर। ठीक है, मैं इंशाल्लाह उनसे कल मैं अपने एजेंडे में लिख लिया है। I will talk to him about tomorrow because tomorrow the topic of discussion is how can we take the training, the hardware training to the next step. So very relevant to that. Inshallah, I'll talk to him tomorrow about it. सर जबरदस्त हो गया, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी डिस्कशन हुई। फवाद भाई आपके पास कुछ है तो काइंडली ओवर टू यू। हम 45 मिनट ऊपर जा चुके हैं, लेकिन आई थिंक इट्स वर्थ इट कि मैंने जिया खान साहब से माजरत कर ली है, वो लाइन पे अभी होल्ड पे हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे और मोहब्बत करते हैं हमें, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो एक एक जुमला अगर सब लोग कह दें कि हम और इसके अलावा क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं और फिर अगले 3 हमारे जो स्पीकर हैं उनको लेते हैं। जी उस्मान भाई आपसे शुरू कर लेते हैं। जी, मेरी तरफ से एक जुमला ये है कि इसको नशस्तन बर्खास्तन के बजाय हम अगर एक ये रिक्वेस्ट मेरी ये है कि हम पाकिस्तान स्टैक पे काम करना शुरू कर दें किसी भी तरह से। उसमें जो PSEB की तरफ से जो कुछ हो सकता है हम हाजिर हैं। मिनिस्ट्री ऑफ IT विंग की तरफ से जो हो सकता है मैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। सो बट लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग लाइक दैट। अच्छा, वाह, लवली लवली। जी डॉक्टर अशरफ साहब अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जो एकेडेमिया है वो हमारा रूट सोर्स है इस सारी एक्टिविटी को सामने लाने के लिए। वहाँ पे हमें इस ओपन सोर्स जो मैं इसको मूवमेंट कहूँगा, इसको हमें वहाँ पे एक्टिवेट करने की जरूरत है। वहाँ पे जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनको अवेयर करने की जरूरत है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। और वो लोग हैं जो आई होप कैन स्पीयरहेड दिस होल एक्टिविटी इन फ्यूचर। हमने अपना काम जो करना था कर लिया है, बट आई थिंक दोज आर द पीपल whom we should be looking forward to do all these things. Thank you. Wonderful जी। डॉक्टर शाहिद कमर साहब। ताहिर भाई सिर्फ 2 मिनट 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। इस वक्त मेरी स्क्रीन पे 8 लोग नजर आ रहे हैं। अगर 8 लोगों का मैं मिनिमम भी 10 साल का तजर्बा डालूं तो मेरे पास 80 साल का तजर्बा है। हमारा 80 साल का तजर्बा है। हमारा अपना एक छोटा छोटा बेबी है जिसको हमने पाला हुआ है पिछले 10 साल से। अगर हम अपनी विजन, अपने रिसोर्सेज, जो उस्मान भाई ने कहा, अगर एक जगह पे बैठ के शेयर कर ले और देखें कि हम किस तरह ये नेटवर्क बना के पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि हमें कोई रोक नहीं सकता। हमने सिर्फ अपनी जात से निकल के ये करना है एंड वी कैन डू इट। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। डॉक्टर काबिल खेल साहब। सर मैं तो ऑलरेडी एक काम में मसरूफ हूँ जो कि शाहिद साहब को भी पता है गालिबन। मैं अपने रास्पबेरी पाई के थ्रू रिमोट एरियाज में सोलर पावर्ड एजुकेशनल सर्विसेज पहुंचाना चाहता हूं। अबाउट 30 स्कूल्स तक तो पहुंचा हूं दीर में। और वो जो है ना अब मैं इसको खास तौर से उन एरियाज में ले जाना चाहता हूं जहां पे जो मर्ज्ड एरियाज हैं हमारे उसके अभी रिसेंटली जो अर्स्टवाइल फाटा था वहाँ से अब वो हमारे पास मर्ज हुए हैं KP में। तो उन एरियाज में भी मैं चाहता हूँ कि किसी तरह से कनेक्टिविटी पहुँचे और एजुकेशन इज़ माय टारगेट, मेरी फील्ड भी है। तो शायद साहब आपके साथ इंशाल्लाह जो है ना मेरा इस पे कोलैबोरेशन का सिलसिला रहेगा। वंडरफुल सर। नवीद भाई मुझे अभी ये फवाद चौधरी साहब ने रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया ये, आप मुझे इसकी ज़रा थोड़ी एक आउटलाइन कल एक्सप्लेन करें और फिर एक आप प्रपोजल दें। तो आई जस्ट रिसीव फ्रॉम हिम। तो मैं ये कहता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनरी सिटीजन को रिस्पॉन्ड कर सकता है विदिन 2-3 मिनट्स, उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। वी कैन नॉट गो, आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, आई एम अ वेरी स्मॉल लिटिल कॉकरोच। अगर एक कॉकरोच को एक फेडरल मिनिस्टर रिस्पॉन्ड कर सकता है विदिन 2 मिनट्स, I don't think there should any limit to our thinking what we can do in that country. I mean, this is digital Pakistan. Digital पे ये बात होती है ना कि connecting from top to bottom. This is what digital Pakistan is all about. Yes. It is digitization, isn't it?
तो मैं तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि आई एम वेरी हैप्पी दैट बाबर भाई आपने मुझे इनवाइट किया. This was one of the most interesting. I attend a lot of panels in a year. This was one of the most interesting one. I hope we all form a little group, maybe WhatsApp पे या जो भी आप convenient है. Let's stay connected. Let's keep on working on it. I think we generated in 1 hour 2 or 3 great ideas. I think we can generate more. But let's convert them into something concrete. I will do my best to convert one idea that I got starting tomorrow to convert into. I will need all of your help. But I'm just a small cockroach. I will do my contribution, but we can together, we can inshallah do a lot together. इंशाल्लाह. फवाद भाई आपको भी मैं एज ए गेस्ट ले रहा हूँ, आप प्लीज एक लाइन अपनी भी ऐड कीजिए. देखो भाई, साथ वाले पड़ोसी मुल्क की मैं पॉलिसी लेके आया था, ठीक है. तो पाकिस्तान की मुझे अक्सर लोग कहते हैं जी आपने कभी यहाँ पब्लिक पॉलिसी क्यों नहीं प्रपोज की आईटी की. मैं उनको कहता होता हूँ कि जिस दिन तुम लोग एजाइल पॉलिसी बनाओगे, यकीन करो मेरे हाथ की लिखी होगी. हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लॉक्ड पॉलिसीज बनाते हैं, पॉलिसीज विच आर लॉक्ड, विच कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड एज पर आवर डेली नीड्स. और अगर हम टेक्नोलॉजी की ऐसी पॉलिसी बना पाए जो कि फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज को इंकरेज कर सके, जो ये डिजिटल पाकिस्तान की जो बात हो रही है, जैसे नवीद साहब कह रहे हैं, जैसे उस्मान भाई कह रहे हैं, जैसे हम लोग सब कमिट कर रहे हैं, दिस इज एन एजाइल पॉलिसी इंशाल्लाह ताला. चाहे हम लोग एक वर्किंग पॉलिसी डेवलप करते हैं ओपन सोर्स फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो वर्किंग लाइव डॉक्यूमेंट होगा. इस मुल्क में कोई भी पॉलिसी का फ्रेमवर्क चाहता हो किसी भी स्टेज पे टेक्नोलॉजी का, इंशाल्लाह हमारे पास वो वर्किंग डॉक्यूमेंट हमारी वेबसाइट पे होगा. मुल्क उसको यूज कर सकते हैं, बंदे यूज कर सकते हैं. इंशाल्लाह ताला मैं वो कंट्रीब्यूट करूंगा. वन फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला, वन फॉर एवरीवन, वन फॉर अस, वन फॉर आवर चिल्ड्रन. Inshallah ta'ala, let's make this happen, right? Let's move from just, rhetoric to actually action, inshallah ta'ala. That is my side. Wonderful. बाबर साहब, last sentence. सर मैं एक रिक्वेस्ट चाहूँगा कि ये मैं नवीद भाई से करूँ और उस्मान भाई से करूँ. उस्मान भाई, जब आसिम साहब MDPS भी थे तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके अंदर पाकिस्तान के ये जो आपके जो ये बनते हैं, जैसा इस्लामाबाद में आपका सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, NIC नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क. मैंने उस वक्त भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तानी कंपनियों को एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वो चैलेंज क्या है कि हम जब क्लाउड की सर्विसेज के लिए जाते हैं तो हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बाहर भेजते हैं, चाहे वो अमेजोन के पास जाए, चाहे वो गूगल क्लाउड के पास जाए, चाहे वो किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर के पास, और एक अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से इंफॉर्मेशन है कि इट्स अराउंड $30 मिलियन. हालांकि अभी हमारी सैस की प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं बनी हुई. तो मेरा सिर्फ ये आपसे रिक्वेस्ट है, पॉलिसी के अंदर किसी जगह इसको एम्बेड करें कि पाकिस्तान में वो सेफ प्लेसेस हम दे सकें जहां पे डेटा सेंटर्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए जा सकें. नवीद भाई, आपसे रिक्वेस्ट ये है, क्योंकि आप risc-v की बात कर रहे हैं और माशाल्लाह इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या हम risc-v को इस्तेमाल करते हुए कुछ सॉफ्टवेयर कोई सर्वर टाइप की चीजें पाकिस्तान में को डेटा सेंटर के लिए लगा सकते हैं? उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट वी हैव लॉट ऑफ ओपन सोर्स टूल्स. ओपन स्टैक इज द बेस्ट सोल्यूशन फॉर पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड. हमारा अल्हम्दुलिल्लाह उस पे अच्छा एक्सपोजर है. तो मेरा ख्याल है कि ये अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के तौर पे हो जाए, प्रैक्टिकल स्टेप, कि यहाँ का ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि कंपनियां, स्टार्टअप्स, फ्रीलांसर्स, इनके पास ये सहूलत नहीं है पाकिस्तान में. तो ये पैसा भी पाकिस्तान में रहेगा और यहाँ से हम सर्विसेज भी देंगे. ये एक मेरी 1 मिनट मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों से. सर ये इसका मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वो बाकी लोगों का टाइम ज़ाया होगा, तो काइंडली सब बोल दें. अगर टाइम बचा तो मैं इसका जवाब भी बताता हूँ. जी आप दीजिए, आपका टाइम है, और नवीद भाई का 1 मिनट. जी अच्छा, इसमें हमने एक काम ये शुरू किया. पाकिस्तान में ना 1965 से लेके 70 तक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी नई इंडस्ट्रीज़ लगी. उसके बाद हुआ ये कि वो इंडस्ट्री का जो आपको एक साइकिल पता है कि इंडस्ट्री तकरीबन 45 साल 40 साल के दरमियान में इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, उसका प्लांट जो है वो डेप्रिशिएट कर जाता है अमूमन. तो यही हुआ 2000 के मिड से आपने देखना शुरू किया था कि हमारी एकदम से हमारी एक्सपोर्ट्स गिरना शुरू हुई. उसकी वजह ये थी कि हमारी वो जो डेप्रिशिएटेड प्लांट्स थे वो अचानक वो धीरे धीरे बंद होना शुरू हो गए. तो अब इस वक्त नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान से लेके साउथ ऑफ पाकिस्तान तक बड़ी आप जाके देखेंगे तो सड़क के किनारे आपको जो है ना वो इंडस्ट्रियल यूनिट्स खाली नजर आएंगे. यस.
वेयर हाउसेस की हमने एक सूरत में। कॉन्सेप्ट ये शुरू किया है क्योंकि ये हाई इकोनॉमिक वर्थ ज़मीन थी, इकोनॉमिक वैल्यू वर्थ ज़मीन थी, तो हमने इसका काम ये शुरू किया है कि हमने इनको कन्वर्ट करना शुरू किया इनटू एसटीपीज एंड आइडियल लोकेशंस फॉर डेटा सेंटर्स। पहला हमने कर दिया है फजल इंडस्ट्रीज इन इस्लामाबाद H9। वाओ। और अब हम जा रहे हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास इंडिविजुअल सिटीज़ के, और उनसे ये कह रहे हैं कि जी आप ऐसी फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई करें, ऐसी जगह आइडेंटिफाई करें, उसको आइदर या तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स खुद फंड कर दे और उसके साथ एक पी फंड बना ले। दूसरा ये हो सकता है कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर उसको पार्शली गवर्नमेंट उसको फंड कर दे और उसको कन्वर्ट करे इनटू एन एसटीपी एंड स्लैश और ए डेटा सेंटर और लोकेशन फॉर डेटा सेंटर, और उसको इस्तेमाल करें। और जो इंटरनेशनल डेटा सेंटर कंपनीज हैं लाइक नेक्स्ट डीसी, इक्विनेक्स, इवन AWS एंड अलीबाबा देमसेल्व्स, उनको दिखाएं कि जी हमारे पास ये जगह तैयार मौजूद है, इसके ऊपर हमने ये प्लांट का हॉल था, ये पूरे प्लांट का हॉल वी कैन कन्वर्ट दैट इनटू ए डेटा सेंटर फ्लोर। सेफ डेटा सेंटर। तो जी, तो इस चीज़ पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। और इसमें एक फजल इंडस्ट्री, अगर आप YouTube पे लिखें फजल इंडस्ट्रीज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इस्लामाबाद, तो you will find that video. Lovely, lovely. Usman bhai, thank you very much. Let me ask you one question. So अभी मुझे फवाद साहब चौधरी साहब ने एक क्वेश्चन भेजा है, वो कह रहे हैं is this entity should be created under the board of investment, is that the right place? Sir, it should be MOITT actually. Ministry of IT में बनेगा। जी। बाबर, आप मुझे अगर इनसे कनेक्ट कर देते हैं ना टीम से, let me take these questions. I think we have a chance. मैं अभी थोड़ी देर में एक ग्रुप बना लेता हूँ, हम सारे इसमें आ जाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं एक आइडिया आप लोगों को एक सजेस्ट करना चाहता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, अगेन यू गाइस नो पाकिस्तान इंडस्ट्री लॉट मोर देन मी। इस वक्त चाइना के अंदर रोबोटाइजेशन हो रही है इंडस्ट्री की, वो लोग अपनी फैक्ट्रियां निकाल के उसके अंदर रोबोट्स लगा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो उस पिछली इंडस्ट्री का क्या कर रहे हैं, वो उसको लिटरली जंक कर रहे हैं, इसलिए कि उनके प्रॉफिट मार्जिन ऐसे नहीं है, उनकी लेबर बहुत महंगी होती जा रही है। तो एक हमारे पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरा कल टॉपिक है फवाद चौधरी साहब के साथ, वाई डोंट वी गो टू चाइना। मैं ऑन माई ओन तो मैं करूँगा एक दो फैक्ट्रीज के लिए, कि लिटरली वी से कि जब आप एक फैक्ट्री को निकाल के उसके जगह रोबोट फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम वो आपसे फैक्ट्री ले लेते हैं, इसलिए उनको तो जंग करनी पड़ेगी ना, वो हम उनसे लिटरली एक पुरानी फैक्ट्री ले लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं। इट विल स्टिल वर्क फॉर अस फॉर अनदर 10-15 years एंड इट इज फ्री एंड फॉर देम इट इज जंक। बिकॉज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दुनिया के जो सबसे लार्जेस्ट माइक्रोवेव मेकर है उसका नाम है गलांस, वो एक जगह है चाइना में, ग्वांगडोंग में, शुंडे के पास, वो हमारा सबसे बड़ा कस्टमर है। हम उसको तकरीबन $40 मिलियन के चिप बेचते हैं सालाना। उसके पास 26 फैक्ट्रीज हैं, 26 फैक्ट्रीज, ओके, शुंडे में। तो मैंने एक देखा, एक दिन मैं वहाँ गया, आज से तकरीबन 9 महीने पहले की बात है, कि वो एक पूरी फैक्ट्री के सारे फ्लोर में से सारी मशीनें निकाल रहे हैं, माइक्रोवेव बनाने की लाइन है। मैंने वो क्यों कर रहे हो तुम? उसने मुझे कहा कि मैं आपको इधर ले जाता हूँ, और वहाँ पे उसने मुझे एक नई फैक्ट्री दिखाई जिसमें कोई ह्यूमन काम ही नहीं करता, नॉट अ सिंगल ह्यूमन वर्क्स इन देयर न्यू फैक्ट्री। दे विल रिप्लेस ऑल 26 ऑफ दोज बाय द रोबोटिक फैक्ट्रीज, ठीक है ना। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है ना कि हमारी जो जॉब्स जो वो चाइनीज चोरी करके ले गए, उसको ये नहीं पता कि चाइना जो है ना वो एक्चुअली अपनी जॉब्स को रोबोट्स में कन्वर्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल एनी मोर to do those kind of low-land jobs by humans, right? But for us, I think the opportunity is we should take those machines, those things, and then wholesome move. Actually, मैं गलान से मूव बात ये कर रहा हूँ कि तुम एक माइक्रोवेव की पूरी फैक्ट्री मुझे दे दो, मैं अपने 10-15 मिलियन डॉलर लगा के जो है वो पाकिस्तान में लगाता हूँ, और लेकिन मुझे गलांसी का नाम यूज करने दो, मैं तुम्हें लोकली करूंगा, तुम बेचो तुम ही, मैं इसलिए कि मुझे आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सेलिंग माइक्रोवेव्स, राइट। तो आई थिंक इन अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट it is a great opportunity, because it is not 1, 2 and 10 factories we are talking about. We are talking about millions of units that China over the next 5 years will junk, because they have to roboticize them. And it is again one of those once in a lifetime opportunity, because China has to do it, China will do it.
and we could be the recipient of those factories if we do something for it. But again, we can do it privately with people we know. We can do it at the government level. We can do it at many levels. जी नवीद भाई, इसके ऊपर हमें थोड़ी डिस्कशन करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा डिस्कशनेबल पॉइंट है आपका। अभी हम इस पे नहीं जाते, अभी हम इस पे नहीं जाते। मैं इसको जो वाइंड अप करता हूँ इस सेशन को, क्योंकि हम बहुत लेट हो गए, बट सेशन इतना अच्छा है कि हमें 1 घंटा और भी मिल जाता तो हम उसको। Very nice talking to all of you guys. I am very energized talking to all you two. मैं चाहूंगा कि सिर्फ जाने से पहले हम एक दफा क्लैपिंग करें सबके लिए जो बाबर। एक सेकंड मेरी तकरीर अभी बाकी है। उस्मान साहब, अब मैं अपनी डिजिटलाइजेशन शेयर करने लगा हूँ। ठीक है। पीटीसीएल के 28 के करीब शहरों की शहर के ऊपर सेंटर बने हुए हैं पीटीसीएल के। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड में उसके ऊपर काफी डिस्कशन और बल्कि इम्प्लीमेंटेशन तक चली गई थी बात। जी हाँ। आई डोंट नो कि आपने उसको छेड़ा या नहीं छेड़ा, और वो ऐसी जगह पे है जहां कम से कम डेटा सेंटर बना सकते हैं। दूसरे नंबर पे एनटीसी और एचईसी के पास डेटा सेंटर हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हैं, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये चीजें भी हमें बेहतर करनी है। इस पैनल के थ्रू मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। और जो हमारी एचईसी के थ्रू यूनिवर्सिटीज हैं, वो जिस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, वो जैसे डॉक्टर शाहिद ने और डॉक्टर अशरफ साहब ने, काका खेल साहब ने कहा कि हमें एकेडेमिया को भी ऑन बोर्ड करना है, तो हमें चीजों को प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल में लेके आना पड़ेगा, तब हम इसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। जी उस्मान साहब कुछ कहेंगे पीटीसीएल के पॉइंट पर? अच्छा देखिए, पीटीसीएल वाला पॉइंट है वो हमने काफ़ी दफ़ा कोशिश की वो, लेकिन हमसे किसी तरह से वो कंक्लूड नहीं हो सका। मैं तो बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ कि अगर ये मामला दोबारा से किसी तरह से एक्टिव हो जाए, वी बी रियली विलिंग टू मूव टुवर्ड्स दैट। आसिम साहब ने बहुत काम किया था अपने टाइम में इसके ऊपर। आसिम साहब ने काफ़ी मैच्योर कर दिया था, लेकिन जब वो गए तो फिर उसके बाद हम मेरे ख्याल से उसको कंक्लूड नहीं कर सके। आसिम साहब के जो शूज़ हैं ना, वो इतने बड़े हैं कि मैं अभी भी जब उनके प्रोजेक्ट्स और उनकी चीज़ें देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मैं पता नहीं कैसे आधा भी काम कर सकूंगा जितना वो काम माशाल्लाह से करके चले गए मैं। तो मेरी बस अगर ये मामला दोबारा चल सके, मैं इंटरनली भी देख लूंगा कि इसको किस तरह से चला सकते हैं। आप में से कोई भाई अगर मेरी मदद कर सके टुवर्ड्स दैट, आई एम ऑल गेम फॉर दैट कि जी इस पे काम करें। ये वो काम है कि जिससे हम कल इसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। ये शारक है बिल्कुल। आप नेटवर्क पॉइंट के ऊपर हैं। अभी जैसे F8 में ये आप जैसे फजल इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, F8 की एक्सचेंज जहाँ पे है, मैरियट के पीछे की एक्सचेंज जहाँ पे है, पिंडी सदर में एक्सचेंज जहाँ पे है, कराची चौधरीगढ़ रोड पे जहाँ पे है, उसके बाद तो हमें कुछ करने की जरूरत है। और जगह खाली पड़ी है, उनके हॉल खाली पड़े हैं, सिर्फ हमने उसके अंदर अपना काम शुरू करना है बस। मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, दिखाओ ये सारी, मैं इनका कुछ करूँ सारी चीजें। आप जिस शहर में हैं वहां की दिखा देते हैं, आपको लाहौर की दिखा देते हैं, फैसलाबाद की दिखा देते हैं। वो भी मैं नोट करनी है, इस्लामाबाद की देखना है। आई बी विलिंग टू डू दैट। सर लोकल और शायद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस आखिर उनसे मैं एक और बात जो है ना उसी तरह की करना चाहता हूँ। क्लाउड के लिए जो ज्यादातर मुनासिब जगह होती है तो वो होती है जहाँ पे आपको टेम्परेचर के मसाइल जरा कम हो, इसलिए कि वहाँ पे टेम्परेचर के मसाइल जो है ना क्लाउड उसमें जब आप लगाते हैं तो ज्यादा मेरी नजर में एक बिल्डिंग है जो कि मैं अभी पब्लिकली कहूँगा तो हो सकता है कि हिट हो जाऊं। नतिया गली में एक गवर्नर हाउस है जो अनयूटिलाइज्ड होता है। सर जी आपने ना अगर इसके बाद ही हमारे आज के प्रोग्राम ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत का वक्त खत्म होता है। सियासत के इस दौरानिए से हमें इजाजत दीजिए। बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल वेल सूटेड है उसके लिए, एब्सोल्युटली मेंटेन्ड है। और अगर आपने ये बात जो है ना हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बता दी तो वो शायद जो है ना 2 मिनटों में आपको दे भी दे। नवीद साहब आपने कल उनसे फवाद पदरी साहब से ये बात भी करनी है, ठीक है जी? बन गया। उस्मान भाई मुझे वो लतीफा याद आ रहा है कि चौधरी जी फिर मैं इंतजार करूंगा। भाई मैं एक शेर कहना चाहूंगा इस आखिरी बात पे। वो शेर ये है, हम चुप रहे हम हंस दिए, मंजूर था पर्दा अपना।
बाबर भाई थैंक यू वेरी मच जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब आखिरी कमेंट बिफोर वी लीव। एक तो बाबर भाई आप ये ग्रुप बना दें इंशाल्लाह ताला ताकि हम इसको प्रैक्टिकल में चले जाएं। दूसरा, मुझे इस डिस्कशन से आई थिंक आई सी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई कैन वर्क विद उस्मान भाई, जो कि हम पाकिस्तान के कुछ मेजर 2-4 इश्यूज को हम आइडेंटिफाई करके हम उसको आगे लेके जा सकते हैं। तीसरा, आई वुड बी ऑनेस्ट विद यू कि ये जिंदगी में 25 साल की जो मैंने यूएस की मेरी लाइफ है उसके अंदर पहली दफा आज मुझे एहसास हुआ। पहले मैं हमेशा ये देखता था कि यार जो दूसरी नेशंस हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, उनमें इतना टैलेंट है, वो कितना आगे बढ़े। आज मुझे ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा एक्सपर्ट माइंडसेट बैठा हुआ है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। फॉर गॉड से इस मुल्क को हाथ से ना जाने दें। पकड़ने इस मुल्क, ये आपके हाथ से निकल रहा है। आई स्वेयर टू गॉड, ये मुल्क आपके हाथ से निकल रहा है। इसको पकड़ लें, इसको हाथ, ये रेत की तरह निकल रहा है। आप इसको कर सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप ये गुफ्तन शनीदन नहीं होनी चाहिए। आज पकड़ लें इसको हाथ में, 2 नफल पढ़ लें कि इस मीटिंग को हमने जाया नहीं जाने देना। हमने ये नेटवर्क बना के पाकिस्तान को धक्का देना, अगले स्टेप पे लेके जाना है। अगर आप ये आज 2 नफल पढ़ के कर लेंगे इंशाल्लाह वी कैन डू इट। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू जी, माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अभी ग्रुप बना रहा हूँ सबका इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मैं मतलब दिल की गहराइयों से आप सबका मशकूर हूँ कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी पैनल डिस्कशन हमारे 7 साल के समिट में कभी नहीं हुई। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अल्लाह की तरफ से कि इसमें से इंशाल्लाह चीजें निकलेंगी और हम ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये पाए तकमील तक पहुंचेंगी। अल्लाह ताला इसमें हमें साबित कदम रखे और हमारी मदद और नुसरत फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी प्रोड्यूसर साहब, अच्छा अब हमारे पास 3 गेस्ट स्पीकर्स हैं और मुझे तीनों से माजरत करनी है क्योंकि मैं तीनों को बहुत आगे ले जा चुका हूं। और जी 2 गेस्ट स्पीकर है हमारे पास। सिद्रा का सेशन हम नेक्स्ट किसी और दिन रखेंगे। होगी बात? जी होगी ये बात। चले, जिया साहब इंतजार में हैं, आसिफ साहब इंतजार में। जिया साहब को ले लें, जिया साहब को ले लें, कनेक्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम जिया भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपके ताहिर भाई? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आई डोंट नो कि आपने पता नहीं सेशन अभी देखा नहीं होगा या वॉच किया आपने? नहीं मैंने देखा है, मैंने देखा है। अच्छा, तो आप मेरा ख्याल हमें माफ कर देंगे कि हमने आपको इंतजार करवाया। नहीं, कोई मसला नहीं है। ये करते हैं कि ताकि अगले वाले का भी सेशन है तो हम अपना सेशन को कट शॉर्ट कर देते हैं जी, ताकि नहीं हम आपको पूरा सुनना चाह रहे हैं, हम आपको पूरा सुनना चाह रहे हैं। या हम ये कर लेते हैं कि हम जिया भाई को सलाम करना चाह रहा हूँ। जिया भाई अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़हूर है। बाबर भाई अस्सलाम वालेकुम। तो ये करते हैं कि अच्छा अभी फ्लोर में जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि अगला सेशन शायद फिर लंबा हो जाए, बहुत देर में हो जाएगी, तो मैं ये कोशिश करता हूँ, ज्यादा लंबी बात नहीं है, छोटी बात करता हूँ और 15-20 मिनट हम लेके इसको आगे चलते हैं। सही है ताहिर भाई? ओके। तो असल में देखिए मसला कहाँ है, मैं पिछला सेशन भी सुन रहा था अभी। सब कुछ आखिर में इंसान है। बिल्कुल सही। अच्छा, जब मैं 99 में पाकिस्तान आया तो यहाँ की जब आप बाहर होते हैं ना पाकिस्तान से, तो आपके जहन में एक अपना जहन है, आपने खुद ही अपना खाका बना लिया होता है। मिसाल के तौर पे आप अमेरिका में गाड़ी चला रहे हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में गाड़ी कैसे चलाई जाएगी। जब मैं 12 साल बाद पाकिस्तान पहुंचा तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं लेफ्ट चलूं, राइट चलूं, बीच में चलूं, कहाँ चलता हूं। तो वो एक दिन बाद मुझे एक समझ में आ गई, गो विद द फ्लो। जिस तरह पानी बहता है ना सड़क पे जी, आप ऐसे गाड़ी चलाएं, ये भूल जाए लेफ्ट राइट सब कुछ भूल जाए वरना आपको कोई मारेगा। अच्छा, तो इसी तरह जब मैं सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में, मेरा आइडिया ये था कि मैं पाकिस्तान आके सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा। मैं बे एरिया से आ रहा था और क्या कहते हैं, और मैं पाकिस्तान में आके सॉफ्टवेयर कंपनी बनाऊंगा। अच्छा, नॉर्मल हालत में क्या होता है, अमेरिका में क्या सूरत हाल है और दुनिया भर में बाकी मुल्कों में भी होगी, मुझे तो अमेरिका का एक्सपीरियंस है। बाकी जगह क्या होता है, यूनिवर्सिटियां रॉ मटेरियल जो कि इंसान है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर सबसे बड़ा नई कंपनी बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज है। वो उनमें से कुछ लोगों को उसका कुछ आइडिया होता है, उनमें से कुछ लोगों को हायर करता है
और वो काम करता है। अच्छा, हायर करने के लिए उसको पैसे चाहिए होते हैं एंटरप्रेन्योर को। अच्छा, वो इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करते हैं उस काम के लिए, वहां एंजल इन्वेस्टर भी हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट भी हैं एंड सो ऑन। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये कुछ भी नहीं है। सही। आप यहाँ पे जो लड़का आमतौर पे प्रोड्यूस हो रहा है, मैं टॉप 2% की बात नहीं कर रहा, हर यूनिवर्सिटी में 1-2% होते हैं जो खुद पढ़ते हैं। जो बाकी यूनिवर्सिटी की सूरत हाल है उसमें डिबेट करने की जरूरत नहीं है। सबको सब हमारे जो ऑडियंस भी है वो ज्यादातर यूनिवर्सिटी में होंगे या पढ़ा होगा या कुछ भी किया होगा, उनको पता है। तो वो लड़के प्रोड्यूस नहीं हो रहे। अब अभी मैं आईबीएम के सेशन में था 7 बजे, तो वो आसिफ भाई जो कि यहाँ के कंट्री मैनेजर हैं, ये सेल्स मैनेजर हैं, वो कह रहे थे कि कम से कम 1 साल लगता है, और मुझे भी एक्सपीरियंस है कि साल भर लगता है। अब साल भर के लिए कौन तनख्वाह देगा सही किसी बंदे की ट्रेनिंग करने के लिए? प्राइवेट कंपनी तो बैंकरप्ट हो जाएगी। अच्छा, तो आप क्या करें? अच्छा, फिर दूसरा एक और मसला, अब ना हमारे पास मैन पावर है। अच्छा, वेंचर कैपिटल का एक खुला था वेंचर कैपिटल पाकिस्तान में, वो भी बंद हो गया 5। उसकी वजह क्या है कि लोगों ने उससे पैसे तो लिए, और उसमें से 5 में से उन्होंने 5 कंपनियां बनाई थी, वो 2 बंद चल भी गई। मैं उनके हॉर्सेस माउथ से डायरेक्ट बता रहा हूं, वो कहने लगे यार मेरे पास बेईमानी का तो कोई इलाज नहीं है। जो फाउंडर थे वो कंपनी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लेके भाग गए। तो ये हमारे टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब एंटरप्रेन्योर जो है ना पाकिस्तान में, जो फंडर है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ठीक मुनासिब नहीं लगता, मगर सब समझ रहे होंगे कि किसने पहली वेंचर कैपिटल कंपनी खोली और किसके साथ ये हुआ। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि वीसी भी नहीं है, मगर ये थी 99 की सूरत हाल। अब थोड़ी सी बेहतर सूरत हाल हुई है, थोड़ी सी लोगों को रियलाइजेशन हुई है। अच्छा, अब मसला ये है कि नॉर्मली आप चलते हैं यूनिवर्सिटी से, पढ़ाई की हम बात कर रहे हैं ना जी, यूनिवर्सिटी से शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी का मसला ये है कि 2 किस्म की यूनिवर्सिटी हैं। मुझे ये बताया गया, आईटी मिनिस्टर ने एक दफा मीटिंग में उन्होंने जिक्र किया था कि 100 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रही हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे प्रोपोर्शन नहीं बताया कि इसमें से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कितनी है। ताहिर भाई आपको ज्यादा पता होगा। 45-55। 45-55। अच्छा, तो 45 प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट। अच्छा जी, तो वो मतलब 50-50 कर लें, जहन में एक रफली 50-50 है। अच्छा, अब सबसे पहले हम चलते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को, जहां पे इस वक्त मैं मरहूम कलाम साहब का जिक्र करना चाहूंगा, डॉक्टर कलाम का। एनईडी की तबाही थी, माशाल्लाह अल्लाह में ने कोई बंदा भेजा, नेक आदमी, उन्होंने एनईडी को खड़ा कर दिया अपने पांव पे। अच्छा, इस वक्त वो वाली सूरत हाल उतनी अच्छी तो नहीं है जो कलाम साहब के जमाने में थी, मगर वो तो अल्लाह मियां को प्यारा हो गया, मगर अल्लाह मियां जरूर जन्नत नसीब करेगा, क्योंकि उन्होंने वाकई ईमानदारी से अपने 10-15 साल लगा के एनईडी को अपने पांवों पे खड़ा कर दिया। मगर ज्यादातर यूनिवर्सिटियों को कलाम साहब नहीं मिले हुए, सही। तो वहां तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। अच्छा, फिर वो पढ़ाई भी, अगर आप इससे अंदाजा करें, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर मैं एक जगह मुझे बुलाया गया जहां पे यूनिवर्सिटी के सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठे हुए थे, हम सिलेबस पे गौर कर रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई ये सिलेबस तो माशाल्लाह सही है, कोई देखें, मैं भी सिलेबस इंटरनेट से देखता हूँ, सब लोग सिलेबस इंटरनेट से देखते हैं, थोड़े आगे पीछे बहस हो सकती है, मगर सिलेबस में कोई मेजर बहस नहीं है। सब कहेंगे डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाना चाहिए, कौन कहेगा नहीं पढ़ाया जाए। ज्यादातर ये होगा कि ये बहस हो जाएगी कि C++ से पढ़ाया जाए या पाइथन से पढ़ाया जाए, मगर इट डजंट मेक अ डिफरेंस। लैंग्वेज से क्या फर्क पड़ता है, वो अगर जिसको आ गई एक लैंग्वेज दूसरी भी सीख ही लेगा। तो अच्छा, अब क्या है कि वहां पे प्रोफेसर ने कहा, ये मैं प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां थी जो कराची की टॉप यूनिवर्सिटियां हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा कि ज़िया भाई आप जो बातें कर रहे हैं ना, वो हमें नौकरी से निकलवाने की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों भाई, मैंने क्या कर दिया है, ऐसी कोई बात, मैं तो सिर्फ ये कह रहे हैं, देखें, कहने लगे आप कह रहे हैं कि टेस्ट लो सख्त, कह रहे हैं स्टूडेंट खुश नहीं होंगे, स्टूडेंट के माँ बाप खुश नहीं होंगे, जब वो बच्चे फेल होंगे तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन खुश नहीं होगी। तो 3 लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका ताल्लुक है, स्टूडेंट पे कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सही, वो तो कतई खुश नहीं होगा, वो चाहता है कि मुझे डिग्री मिल जाए, वो इतना बेवकूफ है हमारा कस्टमर। अच्छा, अमेरिका में या दूसरी जगह ऐसा बेवकूफ कस्टमर नहीं है,
हमारे यहाँ कोई स्पेशल ब्रीड है कस्टमर की जो ये कहता है कि लस्सी की दुकान पे जाओ तो वो कहता है कि मुझे लस्सी नहीं दो भाई, मुझसे पैसे ले लो, कागज पे लिख के दे दो कि लस्सी आपको मैंने दे दी है। तो भाई ऐसी दुकान मुझे क्या बुरी लगती है? मैं तो ऐसी दुकान खोलूंगा जहाँ लस्सियां बेच के लोगों को कागज पे लिख के दे दिया करूंगा कि ये लस्सी है भाई, मगर लस्सी नहीं दूंगा, उनको चाहिए ही नहीं, वो कह रहे हैं लस्सी चाहिए ही नहीं मुझे। अच्छा बच्चा पढ़ना नहीं जा रहा। अच्छा ये मुझे प्रोफेसर ने बताया, ये मेरी एनालिसिस नहीं है, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा वरना मैं जिस मीटिंग में था कराची की 2 टॉप यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर थे, वो मिलकर एक ज्वाइंट मीटिंग कर रहे थे। अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि अब तीनों खफा, तो छुट्टी किसकी होगी? एचओडी की होगी। अच्छा छुट्टी उस बेचारे की होगी। अच्छा फिर एक और भी मसला है, अब मैं बड़ा ये क्योंकि ज्यादातर मेरे से ज्यादा काबिल लोग हैं, उन्होंने भी अपने साथ ना क्या कहते हैं एक वो किया है, ज्यादती की है। ज्यादातर जो प्रोफेसर लोग हैं ना वो एजुकेशन में आ गए तो उनका अपना कॉन्फिडेंस भी खराब हो गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट काबिल तो वो बहुत हैं, इसमें तो कुछ शुबा नहीं है, ज्यादातर पीएचडी हैं माशाल्लाह अब तो, मगर उनका अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है कि वो इंडस्ट्री में जाके कुछ कर सकते हैं। वरना तो मुझे बताइए ना 2-3 लाख पे नौकरी कौन करेगा यूनिवर्सिटी की? अच्छा तो क्या नतीजा निकला है कि वो अपनी टॉप मैनेजमेंट से घबराते हैं ये कि अच्छा यहाँ टेन्योर टाइप की भी कोई चीज नहीं है। अच्छा तो अब यूनिवर्सिटियों का तो ये हाल हो गया, आपको बेचारा। अच्छा मैं फिर रिपीट करूंगा, लोग खराब नहीं है। अगर जैसे पाकिस्तान में पुलिस में ताहिर भाई, मैं आप मेरे इतने साल हो गए आपके साथ, पिछले 2-3 साल से मैं आपके देख रहा हूं, आपको भी पुलिस में अगर भर्ती कर दिया जाए तो आपको भी सही करना बहुत मुश्किल है। मतलब मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे पता है आप बड़े टेक्निक से करते हैं और चेंज मैनेजमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, आपको भी मुश्किल होगी बहुत। इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर आवे का आवाई बिगड़ गया है कि अच्छा बंदे को भी, यानी सिस्टम खराब है, बंदे अच्छे हैं उसमें से 10-20-30%, मगर वो बेचारे करें क्या? उनकी सुन कौन रहा है? अच्छा अब हमारे पास यूनिवर्सिटी की ये सूरत हाल हो गई। अब हम चलते हैं, अब क्या किया जाए? हमने एआई भी पढ़ानी है, हमने क्लाउड भी पढ़ानी है, बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं। अच्छा मगर बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना चाह रहे, वहां कह रहे हैं मुझे ग्रेड दे दो और एक कागज पे लिख के दे दो कि मैंने बीएस की हुई है। उसकी अपनी वजूहत है, हम उस डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ज्यादा समझते होंगे, आप भी उतने इंटरेक्ट करते हैं जितना मैं करता हूँ। तो ये लॉजिक कहां से पैदा हुई है? अच्छा अब प्राइवेट सेक्टर में एक और फोकस है। मैं एक सबसे अच्छी कराची की 2nd या 3rd है बड़ी यूनिवर्सिटी, अच्छी तो नहीं कहूंगा, बड़ी यूनिवर्सिटी के पास गया, उन्होंने कहा, मुझे प्रोफेसरों ने कहा कि सर हमें 6-6 सेक्शन पढ़ाने को दे देते हैं, उसमें 100-100 बंदा बैठा हुआ है, 600 बंदे के टेस्ट पेपर चेक करना, असाइनमेंट चेक करना, तो हम कुछ पढ़ सकते ही नहीं है, ना रिसर्च कर सकते, ना कुछ कर सकते, हमारी पहले से जान छुड़वाएं, फिर आपकी तकरीर सुनेंगे हम। अब मैं क्या बोलूं? प्राइवेट सेक्टर में वो कह रहा है एक बंदा 6 क्लास पढ़ा, उसको क्या क्लास पढ़ानी? वो समझ रहा है ये मैट्रिक की क्लास है, वो जाके खड़े होकर बोर्ड पे लिखना है, उनको पता ही नहीं है तैयारी कितनी। अच्छा तो प्रोफेसर जारी बात है तैयारी भी नहीं करता, क्या करे वो बेचारा? वो पेपर चेक करे, 6 क्लासों को पढ़ाए, आप खुद सोचिए ना, आपके 600 स्टूडेंट हो तो कैसे करे? अच्छा अब ये तो यूनिवर्सिटी का तो आप, अच्छा मैं आया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने बिजनेस एवेन्यू पे, टीपीएस एक कंपनी है जो अब बहुत बड़ी हो गई है, छोटी सी कंपनी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे जावा के बंदे ट्रेन कर दूं, उनकी सीढ़ियों पे मैंने पढ़ाना शुरू किया फ्री। अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमें इसी अप्रोच से करना पड़ेगा। हमें देखें, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो हुकूमत में, मैं खुद भी हूं, मुझे आप प्राइम मिनिस्टर बना दें तो मैं एक ही तरीका है, रेवोल्यूशन तरीका है कि सबकी छुट्टी कर दो पहले, क्योंकि जो हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो, उनको भी काम करने की आदत खत्म हो गई। अब कैसे करें? उनको तो आदत ही नहीं है काम करने की। अच्छा जिसको ये आदत लग जाए, जब मुझे भी लग जाती है ना, 2-3 महीने कोविड में मुझे पिछले 3 महीने लग गई थी, तो मुसीबत हो गई थी काम करना, किसी और को छोड़ू, मैं अपने आप अपनी बता रहा हूं बात। अच्छा अब हमने पढ़ाना है लेटेस्ट 4 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। अच्छा पहला प्रॉब्लम तो ये है कि ज्यादातर बच्चों की अंग्रेजी ही कमजोर है, एक टॉप टियर है 5-10% जिनकी अंग्रेजी मेरे से बहुत बेहतर है, मगर तो 5% से अच्छा, तो अब हम ये करें कि उस पर ज्यादा फोकस करें ना, क्योंकि हम अगर अंग्रेजी पढ़ानी शुरू करें तो फिर तो हमने पूरा एजुकेशन सिस्टम को रीइन्वेंट करना पड़ेगा ना। अच्छा तो अब क्या, मैंने सोल्यूशन निकाला। अच्छा अब क्या किया जाए कि हम ये कहें कि हम यूनिवर्सिटियों की एक्स्ट्रा स्पेस लेके हमने ये शुरू किया कि लोगों को पढ़ाना शुरू किया।
और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। ज्यादातर केस में कोई फीस नहीं, मगर जब यूनिवर्सिटी वाले तो उसकी तैयार नहीं होते थे, तो जहां थी 2,500 रुपए या 800 रुपए पर महीना या 2,500 रुपए क्वार्टर या सेमेस्टर की फीस लेके वहां पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, सिलेबस कोई इतना बड़ा कमाल नहीं है। PIAIC के भी, प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव के भी सारे सिलेबस मैं पब्लिक ओपन सोर्स में किए हैं। मगर कोई आदमी अगर फॉलो कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट को तो वो समझ जाएगा बहुत अच्छा ही, मतलब कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, आप टीचर कहां से आएंगे? अच्छा, एक तरीका ये है कि टीचर आप ले आए हैं बाहर से। अच्छा, गोरा तो क्यों आएगा भाई? उसका दिमाग तो नहीं खराब हुआ ना? क्योंकि हमारी अब तो मामला फिर भी थोड़ा सा बेहतर हो गया। आज से साल भर पहले तक तो 2 साल पहले तक तो वो इतने इश्यूज थे टेररिज्म के कि वो तो नाम सुनकर डर जाता था। जापान ने तो यही किया था कि वर्ल्ड के टॉप प्रोफेसरों को जापान में बहुत ही हाई सैलरीज पे बुला लिया गया था। अच्छा, मैं अताउर रहमान साहब से भी मेरी गुफ्तगू रही है मुख्तलिफ जगहों पे, बाद जगह जहां मुझे इन्वाइट किया जाता है तो उनको भी इन्वाइट किया जाता है। तो अताउर रहमान साहब कह रहे थे कि वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान में टर्की की तरह निज़ामों के जो प्रोफेसर सेलेक्ट हों किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो एक सेंट्रल एग्जाम के थ्रू जाएं। अच्छा, मैंने उस पे उनसे कहा कि सर ये तो जैमफ आइडिया है, मगर मैंने जो उनको नहीं कहा, क्योंकि वो मेरे बुजुर्ग हैं और मेरे से बड़े हैं और मेरे से काबिल भी हैं, और उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं तो मैंने उतनी किताबें पढ़ी भी नहीं है। मैंने उनको कहा नहीं कि भाई तो आप जब हुकूमत में थे तो आपने ये क्यों नहीं कर लिया? अच्छा, तो अब चक्कर क्या है कि हमारे पास प्रोफेसरों की क्वालिटी भी वीक, बच्चे पढ़ना नहीं चाह रहे, अब क्या किया जाए? तो मैंने तो उसका सिस्टम निकाला, मैंने सारे सिस्टम को ही बाईपास कर दिया। मैंने कहा इनसे मत्था लड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्या कहते हैं, अपने दिमाग को खराब ही करना है, और जो मेरे छोटे से बाल रह गए हैं 10-20 वो भी खराब हो जाएंगे, तो उनसे मत्था लड़ाई नहीं। आप उनसे कहें अच्छा आप जो भी काम कर रहे हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर ये मत कहें, पब्लिक के सामने नहीं कहें, क्योंकि ये भी मिस रिप्रेजेंटेशन होगी और अल्लाह मियां के मुझे पकड़ हो जाएगी कि आपने अगर ये गलत चीज देखी थी तो कम से कम बोल नहीं सकते तो चुप तो रहते। तो या तो मैं चुप रहता हूँ या अभी जिस तरह मैं बोल रहा हूँ आपके सामने सच बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो बोलता हूँ। अच्छा, मगर सबको पता है सच, ऐसी बात नहीं है कोई किसी को डग्गी चुपी है। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, ज्यादातर हमारी यूनिवर्सिटियां स्कैम्स हैं। अच्छा, अब ये सूरत हाल है। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जॉब हो रही है, मुझे हर रोज बंदा एक आता है, वो कहता है कि यार या भाई 3 बंदे इसके देते हैं, 5 बंदे इसके देते हैं, 10 जैसे मेरे पास। अच्छा, मुझे हंसी आती है। हंसी क्यों आती है कि भाई अगर मेरे पास 10 बंदे होते, मैं खुद इंटरनेशनल मार्केट में वो करता हूँ, बिडिंग करता हूँ, तो मैं खुद पैसे नहीं कमा लूं, मैं तुम्हें क्यों कमा के दे दूंगा भाई? अच्छा, और तुम उसको अब्यूज भी करोगे, होपफुली मैं नहीं करूंगा, ये भी दुआ है मेरी अल्लाह से, क्योंकि लालच तो किसी को भी आया था। अच्छा, अब हम कैसे पढ़ाएं? अच्छा, मैं आपको ना टेक्निकल स्ट्रक्चर जरा सा पेश करता हूँ। देखें, अमेरिका में बड़ी कंपनी होती है, छोटी कंपनी आती है, 10-20-50 डेवलपर होते हैं। अमेरिका में मैं खुद, मुझे बड़ी बे एरिया में बहुत बाद में जाके पता लगा था कि 50-100 वाली कंपनियां जो होती हैं वो छोटी कंपनियां होती हैं। अच्छा, मुझे काफी दिनों बाद 50-100 वाली बड़ी कंपनी होती है। अच्छा, वहां पे क्या होता है कि आपने 2 AI के बंदे रख लिए, 4 मेन एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बंदे हैं। अच्छा, अब जैसे हम AI की बात करते हैं, AI में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक तो डेवलपर तो है ही, डेटा साइंटिस्ट तो है ही, मगर वो कहां से आएगा? डेटा कहां से आएगा AI की मॉडल ट्रेनिंग के लिए? अच्छा, पाकिस्तान में तो डेटा नामी कोई चीज ही नहीं है। अच्छा, जिसके पास है, जैसे बैंकों के पास डेटा है, वो आपको कभी देंगे नहीं। क्यों दें? हाँ, क्यों देंगे? अच्छा, नहीं, वो समझ में भी आता है कि उनका प्राइवेसी के इश्यूज नहीं है, पर उसको प्राइवेसी के इश्यूज को तो वर्क अराउंड किया जा सकता है कि नाम हम उसको कर दिया जाए, मगर वो नहीं देंगे। हाँ, क्यों कहेंगे? anonymize कर दिया। हम क्यों करेंगे? वो कहेंगे आप मोनेटाइज कर लेंगे, तो डेटा तो देंगे नहीं आपको। अब डेटा कहां से आए? तो AI हम क्या करें? हम एक तो हमारे पास डेटा साइंटिस्ट नहीं, ऊपर से हमारे पास डेटा भी नहीं। अच्छा, फिर तीसरी बात, हमारे पास मैनेजर भी नहीं। अच्छा, सबसे बड़ा जो मैं मैनेजर का लफ्ज ना जेनेरिक टर्म में ताहिर भाई इस्तेमाल कर रहा हूं, इसमें एंटरप्रेन्योर्स बहुत बड़ा चंक है की बात कर रहा हूं, स्टार्टअप मैनेजर्स की। जैसे ताहिर भाई आप जैसे लोग हैं ना, मैं जिंदगी में, मैं अभी, मुझे कितने साल हो गए यहाँ? 20 साल हो गए। 1999 में आया था, 20 साल हो गए मुझे पाकिस्तान में काम करते हैं। टेक्निकली मैनेजर्स मैं अगर हायर करूं ना, तो टेक्निकल मैनेजर जो कि CEO लेवल के मैनेजर हो सकते हैं ना, मैं सिर्फ 2 लोगों को जानता हूं।
मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। एक यहाँ पे कराची में थे, अभी छोड़ा उन्होंने इंक्यूबेशन सेंटर, एकदम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और एक आप, अल्लाह, मुझे आप बता दीजिए, मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको 10 लाख 20 लाख रुपए का बजट देता हूं, जो लीड कर सके अच्छा अब और है मैनेजर्स, पॉइंट ये कि आप सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, वो एक मार्केट प्लेस हो जहां पे मैनेजर्स आपस में, मैनेजर्स का मतलब है एंटरप्रेन्योर आपस में लड़ाई करें। लड़ाई से मतलब कंपटीशन, कोई हाथापाई की लड़ाई नहीं हो रही, कंपटीशन करें जैसे बे एरिया में, और उसमें से सिस्टम से खुद उभर के आएंगे अच्छे लोग। भाई किसी ने बनाई तो है ना, पाकिस्तान में कंपनियां पिछली जो 5-6 तो आई है ना अच्छी कंपनियां पिछले दिनों में, तो किसी ने तो बनाई है ना। तो पॉइंट ये है कि मगर आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं बता सकते कि अच्छा अब क्या किया जाए। अमेरिका में मैं आपको बता रहा था, अमेरिका में तो ये है ना कि कंपनी बड़ी है, 100 डेवलपर है, उसमें से 5 इसके, 10 ब्लॉकचेन के, 10 एआई के। असली बात जो 30 जो होंगे वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के होंगे, जिससे डेटा भी कलेक्ट होगा एंड सो ऑन। आप बच्चे पाकिस्तान में ये समझते नहीं, वो कहते हैं, अभी भी हमें जो आईबीएम में सेशन था, बच्चे कह रहे थे कि मुझे एआई की नौकरी दिला दो। बात का लेवल अब ये था। अच्छा, अब जो बात मसला है वो एआई की नौकरी कैसे दिला दो। एआई में डेटा नहीं है उसके पास, जो एंटरप्रेन्योर है वो बात नहीं समझता, मगर हमें पहले से सूरत-हाल बहुत बेहतर है। देखें, हमें एक काम करना चाहिए, ये पहली बात नज़ीम कर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में इट इज नॉट द गवर्नमेंट विल डू समथिंग। जैसे अभी आपके पिछले सेशन में कहा, एंटरप्रेन्योर ने कहा ना मैं करूंगा, वो जेन्युइन, मैंने उसने एक जुमला बोला, मैं समझ गया ये एंटरप्रेन्योर है भाई। जो ये कहता है ना जो ये कहता है ना कि गवर्नमेंट करेगी, इसका मतलब है उस बेचारा कोई नियत पे शुबा नहीं है, इसका मतलब इनकार है। नहीं, उसको पता ही नहीं है। ये उसना की बात है कि आप ये कल कहें कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को तो आप कोविड ना समझा सके, मतलब कोई प्रेसिडेंट मजाक बात तो नहीं होता था अमेरिका का, उसको कोविड समझ में नहीं आया, उसने ऐसे खुद कुछ हमला किया अपने आप पे। और वजह क्या थी कि उसकी नॉलेज नहीं थी, उसने खुद कुछ हमला किया, वो जीता था इलेक्शन, मगर उसने अपने आप पे खुद कुछ हमला कर दिया, कोविड के वायरस से लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा तो मैं ये कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान में क्या करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मर के भी जिंदा हो जाए और फिर दोबारा बोलते हैं 7 जिंदगियां भी आए, फिर भी कुछ नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है कि उनके पास वो मैन पावर ही नहीं है। अच्छा, आप सोचेंगे टेक्नोलॉजी की मैन पावर की बात कर रहा हूं, सैलानी है ना, मैं सैलानी के साथ में काम करता हूं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहें कि 10,000 आदमियों का खाना बना के सर्व करना है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पूरी गवर्नमेंट मिल जाए ना, अगर गवर्नमेंट मिल जाए पूरी, जो कि अच्छी खासी है, बहुत बड़ी सी है, जो कि हर एक अपनी बीवियां भी ले आए खाना पकाने में, तो ये तो कर सकते हैं ना कि अपनी बीवी को ले आएंगे यार खाना पका दो, वो भी नहीं, क्योंकि वहां पे इतनी वो दिगम चौन बचेगी कि कौन सी बीवी वो बनेगी मैनेजर, तो वो कभी बनेगा ही नहीं। अच्छा तो अब हम क्या करें। अच्छा मैं ये कह रहा हूं इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल तो नहीं है, एक ट्राई कर सकते हैं, हजारों और भी सोल्यूशन हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैंने पेश। हम क्या करें कि मैसिव लेवल पे पाकिस्तान में ही टीचर पैदा करें। अच्छा वो कौन होंगे, जो बेस्ट पिछले सेमेस्टरों के स्टूडेंट है ना, वो अगले सेमेस्टरों में एज ए टीचर इस्तेमाल हो, उनके सख्त इम्तहानात हों। कोई ताहिर भाई, मैंने और आपने आज तक किसी की भी सिफारिश की है आईटी में, क्योंकि जो भी करेगा वो आखिर में जलील होगा, नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल, आप कर ही रेपुटेशन है। हाँ नहीं, अगर आपने अपने चचाए भतीजे के, अच्छा तो कोई इकरा पर ही नहीं, आप 100-200 आदमियों की टीम सेलेक्ट करें, और वो कैसे हो, शुरू में 5 से शुरू करें, 5 लोगों को ट्रेन करें, उसमें से एक काम करने का लाएगा, फिर अगले 20, फिर अगले 50, जैसे अभी हार्डवेयर वाले भी कह रहे थे ना, जो हमारे जो एंटरप्रेन्योर साहब आए थे पिछले वाले में, नवीद शेरवानी साहब, अच्छा नवीद शेरवानी साहब, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। अच्छा आप अगर क्या कहते हैं बाहर से बुलाएंगे वो भी पॉसिबल है, मगर मेरे रिश्तेदार थे कजन, उनको बाहर से बुलाया था, सबसे अच्छी कंपनी है आपकी लाहौर की, डी से नाम शुरू होता है उनका, वो उन्होंने उनको 40 लाख रुपए महीने में बुलाया था,
और क्या कहते हैं, उनका पूरा घर वर भी अमेरिका से शिफ्ट किया था, सब कुछ। थोड़ा सा तो इफेक्ट हुआ, बेहतर हुई सूरत हाल, मगर वो हुआ ये कि आखिर में ना सबकी लड़ाई हो गई, FIR काट रहे थे सब एक दूसरे के। वाइबल लिए ना 40 लाख महीना 1 साल के लिए। 1 साल के लिए नहीं था भाई, अच्छा पर मंथ की बात कर रहा हूं मैं। नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि नहीं वो मतलब 1 साल की मिनिमम कैलकुलेशन कर लें। नहीं, वो कंपनी के पास पैसे बहुत हैं, मगर मसला क्या है, वो उस कंपनी में कुछ लोगों ने प्राइवेट में साइट्स से कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू कर दिए। खैर अभी मैं उसमें नहीं जा रहा। चलो अच्छा, हम अपने पॉजिटिव वाले अपने काम पे करते हैं ना। अच्छा, हम इस तरह मैन पावर ट्रेन करें, जैसे इस्लामाबाद है। ताहिर भाई हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमने मेन, आप मौजूद हैं सर, आप भी, बाबर भाई आप भी शायद मेरे ख्याल से इस्लामाबाद में ही होंगे। मैं इस्लामाबाद में हूँ। इस्लामाबाद में बाबर भाई, तो हम इस्लामाबाद में, अच्छा सिलेबस बड़ा सिंपल सा है, हमने हफ्ते में बंदे को 6 घंटे पढ़ाना है। 6 घंटे में 3 घंटे वो पढ़ेगा जो उसका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा। स्पेशलाइज सब्जेक्ट में 4 किस्म के सब्जेक्ट हो सकते हैं, AI, क्लाउड नेटिव, IoT और क्या कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन की जगह आप इसको फिनटेक कह लें तो वो भी ठीक चलेगा, DeFi कह लें वो भी चलेगा। मतलब मैं एक रफ बता रहा हूँ एक फाइनेंशियल सेक्टर का। अच्छा, तो ये 4 आपके पास स्पेशलाइज एरिया, 3 घंटे की क्लास स्पेशलाइज एरिया की होगी और 3 घंटे की क्लास जनरल एरिया में होगी। और ये संडे को आराम से हो सकती है, बीच में 1 घंटा ब्रेक देके, क्योंकि 6 घंटा वैसे तो कोई नहीं पढ़ सकता। एक सुबह एक क्लास हो, एक शाम को क्लास हो, या सैटरडे को एक क्लास हो, या संडे को क्लास हो। तो हमने की है ये जो हम करते रहे। जी 6 घंटे। अच्छा, और इसकी जो कॉस्ट है, अगर हम बड़े स्केल पे दें, और रेपुटेशन जैसे ताहिर भाई आपकी भी है, बाबर भाई आपकी भी होगी, तो वो पता होगा कि यार ये काम बंद कर देगा मगर किसी के साथ गड़बड़ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें उम्र लगती है ये रेपुटेशन क्रिएट करने में। तो जब आपने रेपुटेशन ये क्रिएट कर ली तो बच्चों की कोई कमी नहीं है, और आप बस उतने पैसे लें कि जितना आपका टीचरों को पेमेंट करने के लिए हो जाए और यूनिवर्सिटी को पे कर सकें उसकी जगह। अच्छा, अब आपने जब ये काम कर लिया, अच्छा तो 6 घंटे की ट्रेनिंग है, जो बच्चा नौकरी भी कर रहा है। अच्छा, मैं आपको इस्लामाबाद की बात बताऊं, हमेशा दूल के ढोल सुहाने होते हैं। मैं इस्लामाबाद में प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए क्लास पढ़ाने आया, ये कोविड से पहले की बात है। तो मैं क्लास में पहुंचा, 6 क्लासें थी हमारी 500-500 की। पहली क्लास में मैं पहुंचा, मैं सिर्फ उसका वाकया बता दूं आपको कि जो सूरत हाल थी, तो मैंने जाके क्लास में खड़ा हुआ, मैंने कहा कि बच्चों 500 में आप में से कंप्यूटर साइंस कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? तो 70% ने हाथ खड़ा कर दिया। अच्छा, मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा आप में से बैचलर कितने लोगों ने की हुई है कंप्यूटर साइंस में? तो उन्होंने कहा कि आधे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया, 30, 40, 50% ने। अब मैं गिना तो सही नहीं था, 500 में से हाँ 250 बंदा या 200 बंदा बैचलर किए हुए था। मैंने कहा आप में से मास्टर्स कितने ने किए हुए? तो वो भी 10, 15, 20 ने खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप में से PhD भी कोई बैठा हुआ है? तो 2 ने PhD ने भी खड़ा कर दिया। वाओ। अच्छा, ये मैं इस्लामाबाद की आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। I can imagine. अच्छा, जिसमें ये वो वाली क्लास है ताहिर भाई जिसमें आपका बेटा भी था? जी, अच्छा, जी। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा मेरी तो हंसी छूट गई। मैंने कहा माशाल्लाह यहाँ से इतने काबिल लोग हैं कि आप लोगों को तो मुझे पढ़ाना चाहिए। और मैं कसिल नस्ती से काम नहीं कर रहा था, मैं ईमानदारी से बता रहा था। अच्छा, तो तुमने हंसना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा ये हंसने की बात है मेरे भाई, ये तो रोने की बात है। तो उसमें से एक लड़के से मैंने कहा इसको माइक दें, मेरा से पूछें, समझदार सा लग रहा था। तो मैंने कहा आप बताइए क्या मसला है? कहने लगा मैंने सर कहा है कि बैचलर किया है, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ाई की है। आप अगर हाथ खड़ा कर दिए, मुझसे सवाल ना पूछ ले कोई। अच्छा, तो वो, अच्छा तो मैंने उससे कहा कि मैंने कहा भाई अगर आप मुझसे कहेंगे मैं स्टैटिस्टिक्स का मास्टर्स हूं या बैचलर हूं, तो मैं ये तो पूछूंगा ना कि रिग्रेशन आती है नहीं आती? तो कह रहे हैं सर रिग्रेशन नहीं आती। नहीं आती, मैंने पढ़ा में आती नहीं है, आती नहीं है मुझे। अच्छा, तो हमने, जबकि इस्लामाबाद में मैं अभी काफी दफा आया हूँ ताहिर भाई, आपके साथ ही हम घूमे कई दफा। इस्लामाबाद में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, बहुत अच्छी जगह हैं। अच्छा, उसमें आर्मी की भी यूनिवर्सिटियां हैं जहां पे डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है। मतलब
जो आर्मी, देखें जनरल तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं, हम पाकिस्तानी ना बहुत सारे आर्मी वालों पे गुस्सा खाते हैं, मेरे वाले साहब भी आर्मी में थे, कि गुस्सा खाते हैं कि ये हर जगह अपना मैनेजर लगा देते हैं। तो भाई आप लोगों से कोई काम नहीं होता तो कोई ना कोई तो करेगा ना भाई, तो बुरा मानने की क्या बात, बुरा मानने की क्या बात है यार। फौजी फाउंडेशन आपसे फर्टिलाइजर नहीं बन रहा, तो फौजी फाउंडेशन आपसे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं बना आज तक। मुझे बता दीजिए फौजी कॉन्फ्लिक्ट के अलावा पाकिस्तान में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, जबकि वो अच्छा नहीं होता, मगर है तो सही, ना होने से तो बेहतर है ना। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब इस तरह हम पढ़ें। अब प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां बनाने के लिए ना एक तो आसान वाला तरीका है, वो सर्विसेज है। अब मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं फ्रीलांसिंग के, तो आपने क्या किया, एआई, अच्छा जो जनरलाइज है ना स्ट्रैक, उसमें आपने वेब डेवलपमेंट सिखाई, एंड टू एंड क्लाउड सर्वरलेस में, जो लोग समझते हैं ना टेक्निकली, मैं उनके लिए कह रहा हूं, क्योंकि नए वाले आदमी को समझ में नहीं आएगा। आप इस तरह समझे, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने की, सर्वरलेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बनाने की, एप्लीकेशन बनाने के लिए, और उसमें एआई का कंपोनेंट जाएगा कि स्मार्ट एप्लीकेशन, या डी ऐप जाएगा जो ब्लॉकचेन का है कि वो चीज, या आईओटी का एप्लीकेशन होगा, मगर बेसिकली क्लाउड होगा और बेसिकली वो होगा। तो मैंने आपको बताया 6 घंटे की क्लास है, 3 घंटे जनरलाइज्ड, जनरलाइज से मेरा मतलब है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और 3 घंटे स्पेशलाइज्ड। 1000 रुपए फीस में मैक्सिमम 1500 रुपए महीने की फीस में काम चल जाएगा, एनीबडी कैन अफोर्ड। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि अब अगला नौकरी कैसे पैदा की जाए। हमारे साथ खुशकिस्मती है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आ गए। पहले तो जब मैं आया ना 99 में, अब मेरा बच्चा ग्रेजुएट होता था, मुझे कहता था अच्छा यहाँ पे सेठ की कंपनी में काम करने का मतलब है अपने आप को बेच दिया। वो 9 बजे आपको बुलाते हैं, सेठ साहब खुद तो 2 बजे आते हैं, और रात के 10 बजे तक आपको बिठाते हैं, और 50,000 रुपए सैलरी देते हैं। अच्छा, जबकि आपको पता है वर्ल्ड मार्केट में उसी डेवलपर की कीमत जो है कम से कम $30 एन आवर है। तो अच्छा, $30 एन आवर का हिसाब लगाइए फ्रीलांसिंग में। अभी आप जाएं अपवर्क पे, अपवर्क पे जाइए, ये जो बच्चा ट्रेन होके निकलेगा उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको एक लैपटॉप चाहिए, जिससे मैं भी बोल रहा हूं, और उसके पास होगा ही जब उसने 1 साल पढ़ लिया। इस वक्त आपको पता है ताहिर भाई, मेरा जो सबसे काबिल बच्चा है ना, मैं बूट कैंप पढ़ा रहा हूँ, इंटरनेट पे फ्री होते, सैटरडे को और वेडनेसडे और को क्लासें होती है, 2 क्लासें होती हैं, फ्री होती है, इंटरनेट पे होता है, जिसमें हम अभी हैं। वो एक बच्चा है मतीन, इंटर का 2nd ईयर है। वो सुबह फजर की नमाज पढ़ के शुरू होता है और इशा पढ़ के रात के 2 बजे सोता है। अल्लाह। अच्छा, मैं मतीन भाई, हो सकता है ये देख ही रहा हूं, तो मतीन भाई को मैं आपसे मिलवा दूंगा, आप खुद चेक कर लीजिए उसकी काबिलियत का क्या हाल है। सियालकोट का बच्चा है, मैं तो कभी मिला भी नहीं उससे, फेसबुक पे बात हुई है, वैसे तो मैं मिला भी नहीं हूं। उसने बड़े बड़े पीएचडीज को, अच्छा मगर सिर्फ जरूरी नहीं है कि पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नंबर 2 पर लड़का है, एक वारिस है, वारिस न्यूजीलैंड से अभी मास्टर्स करके आया है, कैनेडी का मैकेनिकल का बंदा था। सारी बात है, उसका बैकग्राउंड मतीन से थोड़ा बेहतर है, मगर मेहनत में वो मतीन से कंपटीशन नहीं कर सकता। तो पॉइंट मेरे कहने का ये कि हमारे यहाँ इस लड़कों को, अच्छा अब गवर्नमेंट से अगर समझाया जाए ना, वो कहा जाए कि मतीन को फंड करो कि इसको कंपनी बनाने दो, मगर वो होगा नहीं कभी, क्योंकि वो मिनिस्टर का रिश्तेदार तो है नहीं है, तो ये उम्मीद ही करना। अच्छा, अब आप अंदाजा करें, ज्यादातर केसेस में मेरे, अब पाकिस्तान में मसाइल सुनिए जरा, फ्रीलांसिंग ना कोई खर्चा नहीं है ना, वो मिलियंस ऑफ डॉलर इस वक्त लेके आ रहे हैं पाकिस्तान में। भाई मैंने AWS के अकाउंट खोलने के लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए बच्चों को, मैं अपने अकाउंट पे कितने लोगों को दे सकता हूं, मतलब पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं 10,000 बच्चों को तो अपना क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं दे सकता, या अपना अकाउंट भी नहीं दे सकता, मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा। तो बैंक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि वो AWS का, जिसकी मैं फ्री क्लासें पढ़ा रहा हूं, मेरे प्रोफाइल पे आ जाए, facebook.com/ज़िया खान पे फ्री क्लासें दें, संडे की रात को 10 बजे, वेडनेसडे की रात को 10 बजे, और ट्यूसडे की रात को 10 बजे। तो कहने का मकसद है उर्दू अंग्रेजी दोनों में अलग अलग सेक्शन, मगर अब वो बेचारे के पास क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। अब मैं जब कहां से बनाए वो, मैं अब इन वजीरों से मैं अपना सर पकड़ में कह रहा, पेपैल तो छोड़ दो भाई, और बहुत कुछ है।
अभी वीजा क्रेडिट कार्ड तो दिला दो बच्चे को। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ डेबिट कार्ड दिला दो ये भाई, अभी क्रेडिट कार्ड को भी छोड़ो कि आपको लगता है कि पैसे लेके भाग जाएगा, डेबिट कार्ड दिला दो, बैंक अकाउंट नहीं खोलते। अब आप मुझे बताएं ना, एक आदमी जो क्लाउड का, अच्छा दूसरी बात, हमें ये, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा अनपॉपुलर बात कर रहा हूँ, मगर इंसान को बात, मैंने कोई इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, तो लोग मुझे कितना अच्छा कहें या बुरा कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात है अल्लाह को जवाब देना, और कोरोना में तो अल्लाह जी ज्यादा भी याद आते हैं, ज्यादा करीब है। हाँ ज्यादा करीब है, किसी वक्त भी जाना हो सकता है, हाजिरी हो सकती है। तो अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि आप मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट क्रेडिट कार्ड तो दिला नहीं सकती, बच्चे को डेबिट कार्ड नहीं दिला सकती। अच्छा तो हम क्या कर सकते, हमने ये करना है कि इन स्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, अच्छा जब तस्वीर, अगर जैसे मतीन है ना, जब ट्रेन हो जाएगा इंशाल्लाह, ये अगला बिल गेट्स बन जाएगा, तो उसके साथ तस्वीर खिंचवाने जो भी वजीर हैं आईटी के वो आ जाएंगे। तो देखिए ये बात समझना चाहिए हमें कि पॉलिटिक्स में पाकिस्तान के आम तौर पे वो लोग आते हैं जिनको लोगों को अपना नाम तस्वीरें खिंचाने का बड़ा शौक होता है। एक तो पाकिस्तानियों को वैसे ही है बेचारे, मैं पॉलिटिशियन को बुरा गलत भी कह रहा हूँ, यहाँ पे कौन नहीं है जिसको तस्वीर खिंचाने का शौक ना हो, तो तस्वीर खिंचाने का शौक हो। अभी वो किसी साहब ने 17 करोड़ रुपए दिए हैं अर्तुगरुल को पाकिस्तान आने के, उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, तो 17 करोड़ के वो देने को तैयार थे। अभी मैंने उनका वीडियो देखा, मैंने मिलियन डॉलर तो तस्वीर खिंचवाने का, तो अगर कोई आदमी $1 मिलियन दे सकता है तस्वीर खिंचाने के, तो वो क्या किया जाए। अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि किसी और से उम्मीद करना छोड़ दें। मैं ये सारे बच्चों को जो आपके ओपन सोर्स के हैं ना, हमारे पास क्लाइंट साइड पे रिएक्ट है, मैं टेक्नोलॉजी के नाम दे रहा हूँ, ओपन सोर्स की मौजू है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, गोरा कस्ट डेवलपर हो या पाकिस्तानी डेवलपर हो, हमसे कुछ हाइड नहीं है, सब कुछ ओपन है। हमें कोई, वरना तो आईबीएम, आपको पता है पहले आईबीएम का जरा सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो पता लगता, ऑरिकल 40,000 एक जमाने में मुझे किसी ने कहा कि ऑरिकल का यार डेटाबेस ले लेते हैं, मैंने कहा यार ले लेते हैं, तो अच्छा मुझे तो पता लगा कि पाकिस्तान में $40,000 में मिल रहा है। तो क्या कहते हैं, ये पुरानी बात बता रहा हूँ आपको पता नहीं कितने का होगा। तो पॉइंट मेरे कहने का, ओपन सोर्स में रिएक्ट क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे कुबरनेटिस, ये आपके पिछले पैनल में भी जिक्र हुआ था इसी का, हमें माइक्रो सर्विसेज पीछे सर्वर की तरफ जाना चाहिए, क्लाइंट साइड पे रिएक्ट है। अच्छा डेटाबेस मंगोडीबी है, वो भी ओपन सोर्स। पॉइंट ये कि ओपन सोर्स का पूरा स्टैक है, पूरा स्टैक है, पूरा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज चाहिए, विल, जो अभी पिछले आपके मीटिंग में भी बात हो रही थी। अब मसला ये है कि विल कहां से आए, बच्चों को हमने, ताहिर भाई ये मैंने आपके तो बच्चे देखे थे, काफी वेल बिहेव्ड लग रहे थे, मगर मैं जितने अपने दोस्तों के बच्चे पे जाता हूँ ना, इस वक्त जो नई जनरेशन है, शायद आपकी वो एज ब्रैकेट में नहीं है आप, जो अभी 30-35 साल वाले बच्चे, लोगों के बच्चे हैं ना, वो तो ऐसे मम्मी डैडी हैं कि वो तो कुछ करने को तैयार ही नहीं है, वो तो कहते हैं अमेरिका जाके पढ़ूंगा, मैं पाकिस्तान पढ़ना ही नहीं है भाई। अच्छा ये मेरे जमाने में भी था, ये बात नहीं है कि ये अभी हुआ है, और वो बच्चे फोकस करने को तैयार ही नहीं है, वो नेटफ्लिक्स है, वो उनको चाहिए बिंज व्यूइंग, उनको तो आदत है 16 घंटे टीवी देखने की। अब लेट के, हाँ लेट के अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि मेरा भी 16 घंटे टीवी देखने के लिए चाहता है, मगर समझाना ये है कि बेटा खाना कैसे खाएंगे, खाली टीवी से कुछ निकलेगा वो नहीं, वो तो नहीं, वो तो अब्बू खिला रहे हैं ना, हमारे कल्चर में ये तो बड़ा अच्छा है कि फैमिली सपोर्ट है, मगर ये मैं कल डॉक्टर जीशान उस्मानी की फेसबुक पे देख रहा था कि उन्होंने अपने सब बच्चों को काम पे लगाया हुआ है, जबकि माशाल्लाह ये अर्निंग वेरी मच, बड़े पैसे वाले आदमी हैं, मगर उन्होंने ये भाई अपने बच्चों को तबाह थोड़ी करना है, अगली जनरेशन का क्या होगा, वो तो हमारा उससे ही बुरा हाल हो जाएगा। अच्छा तो पॉइंट मेरा कहने का ये, इस पे मैं बात खत्म कर रहा हूँ ताकि अगले स्पीकर ने भी आना है। नहीं आप लास्ट हैं, आप लास्ट है जिया भाई, हमारे पास टाइम है। अच्छा तो अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ, अब चले गए एआई के अंदर, मैंने अभी आपको 3 दिया है, रिएक्ट क्लाइंट साइड पे, मिडिल टीयर पे कुबरनेटिस, और पीछे डेटाबेस मंगोडीबी, क्लाउड बना लें पाकिस्तान में। अच्छा अब आप कहेंगे एआई का क्या करेंगे भाई, अच्छा यही कुबरनेटिस आप आईबीएम से खरीदेंगे तो शायद अभी किसी बैंक ने लिया $1 मिलियन देके, फॉर्च्यून है पूरा, $1 मिलियन है और अगर ओपन सोर्स में खुद इंटीग्रेशन करेंगे
तो अच्छा, फिर आप कहेंगे एआई का क्या होगा? अच्छा ज़िया भाई, मैंने वेबसाइट का लिंक शेयर किया है, जी, आपको जी। यहाँ कट कर रहा हूँ। मैं खुद ट्रेनर हूँ इस चीज़ का। हमने हाँ। कुबरनेटिस की, ओपन स्टैक की, ये हाँ। सारी ट्रेनिंग्स उर्दू में बना के इस पोर्टल पे हमने रखी हुई है। तो आप ये सबसे शेयर कर दें प्लीज़, ताकि मैंने ना शेयर ये किया है। ज़बरदस्त, यानी देखा, आप देखें है ना टैलेंट। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान का इंडिविजुअल से दुनिया में कोई कम्पीट नहीं कर सकता। हम इंडिया से बेहतर हैं इंडिविजुअल लेवल पे। यस। मगर जहीं मैं, बाबर और ताहिर भाई मिले, तबाही हो गई। क्यों? सही कह रहे हो। क्योंकि तबाही इसलिए हुई कि हमारी, पता नहीं, बचपन में हमारी अम्माएं शायद हमारी तारीफ नहीं करती। हमें कुछ किस्म का वो है, दूसरों के साथ ना चलने के लिए ना। देखिए आपने एक बात नोट की होगी, पॉलिटिशियन, अभी कल ही मैं देख रहा था टीवी पे, वो पॉलिटिशियन किसी को कह रहा था वो तो मेरा भाई है, मगर उसने मेरा भाई का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ताहिर भाई, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ताहिर भाई मेरे भाई हैं। अच्छा, लोग बताओ क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे फौरन, ये नोट किया करेंगे, फौरन कहेंगे ताहिर भाई मेरे छोटे भाई हैं। अच्छा या मैं बाबर भाई को कहूंगा बाबर भाई मेरे भाई हैं, तो कभी ये मानूंगा नहीं कि मेरे बड़े भाई हैं। मेरी ईगो इतनी कमजोर है और मैं इतना कमजोर आदमी हूं छोटा बना लूंगा कि मैं छोटा तो बना लूंगा आपको ताहिर भाई। जबकि किसी को इज्जत देनी हो तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि तू मेरा छोटा भाई है यार, आप उससे कहें कि आप मेरे बड़े भाई हैं सर। कहने में क्या है, आप मुझे हमेशा यही कहते हैं। हाँ तो अच्छा, मगर उम्र की वजह से नहीं कह रहा, उम्र में तो आप क्योंकि यहाँ पे ये भी मसला है कि मगर खवातीन में हम नहीं है, तो उम्र की बात हो सकती है। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है, अच्छा अब हमने ये देखा कि जो सर ने भी जिक्र किया, अब आपके पास आ गया ना ओपन सोर्स education.net है, आपने सारे वीडियो बना के डाले हुए, तो फिर बात ही क्या रहेगी। अच्छा, अब एआई की तरफ आए। एआई में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर इस वक्त सॉफ्टवेयर है वो टेंसरफ्लो है। यस। अच्छा, वो भी ओपन सोर्स, गूगल का बना हुआ। ओपन सोर्स। आप में तब पड़ा है तो उसके मेन उस पे जाके चेंज कर लें। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर चाहिए होगा नीचे के लेयर पे, क्लाउड पे, तो ये जरूरत नहीं पड़ती, मगर अगर नीचे के लेयर पे चाहिए तो कुबरनेटिस, सॉरी लिनक्स भी ओपन सोर्स। अच्छा, फिर उसकी एक टेक्नोलॉजी है डॉकर, डॉकर भी ओपन सोर्स। तो भाई नया मॉडल तो है ही सारा ओपन सोर्स का। अच्छा, इसमें ना कंपनी को, अच्छा हार्डवेयर में ये है कि जैसे मेरी कंपनी है, हम शुरू में कंप्यूटर रखते थे अपने पास, खरीदते थे जब नया डेवलपर आता था। अब तो जरूरत ही नहीं है, सबके पास लैपटॉप है। क्लास में भी हम पहले लैपटॉप्स रखते थे, मगर जरूरत ही नहीं है, 70-80 के पास लैपटॉप्स हैं। तो क्या कहते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने वैसे तो कोई अच्छा काम नहीं किया, मगर ये अच्छा काम किया, जो जिसकी अच्छी बात है ना वो माननी चाहिए। और उसको कोविड में इस चीज का अंदाजा हुआ कि अगर वो लैपटॉप ना दिए हुए होते तो आज बहुत सारे बच्चे ई एजुकेशन नहीं ले सकते थे। जी जी, तो ये उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा बहुत कमीशन कमा लिया होगा मगर कोई बात नहीं। तो क्या कहते हैं, ये भी मेरी तरफ से शायद हो सकता है खामखा का शक हो, क्योंकि पाकिस्तान में ये मसले हैं। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अब हमने बच्चे के पास कंप्यूटर अपना, अच्छा मैं बच्चा कह रहा हूं तो मैं आपको और अपने आप को भी और बाबर भाई को भी उसमें शामिल कर रहा हूं कि मतलब जो कि इल्म सीखने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, सीखने के लिए तैयार हो, इल्म का तलबगार, ये कह लें आप उसको, इल्म का तलबगार। तो इल्म का तलबगार बच्चा है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास कंप्यूटर है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ गवर्नमेंट का है। थोड़े दिनों में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी भी इन्होंने काफी, इस गवर्नमेंट ने भी और पिछले ने भी, इनको इंटरनेट कहते ही नहीं भाता, इनको चाहिए पीटीवी। यहाँ के पॉलिटिशियंस को ना चाहिए पीटीवी, और शायद स्टैब्लिशमेंट को भी। अच्छा, पीटीवी चाहिए जहां पे ये टोटल कंट्रोल कर सके, मगर उसका इलाज अभी होने जा रहा है। स्टारलिंक जो इंटरनेट है वो इस वक्त अमेरिका में तो लॉन्च हो चुका है, बेटा टेस्टिंग हो रही है, साल भर और लगेगा, पाकिस्तान में भी आ जाएगा। $500 डाउन कि आप इक्विपमेंट खरीदें, वो भी इक्विपमेंट थोड़े दिनों में सस्ता हो जाएगा, और इंटरनेट आपको 150-140 मेगाबिट्स पर सेकंड में $100 महीने में मिल जाएगा, जिसपे कोई बैठा हुआ हर वक्त, उनको ये नहीं कि फेसबुक पे कुछ पोस्ट कर दिया, ये कर दिया, कोई कानून बनाना, मैं तो सबको बाईपास कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान में अगर तरक्की करनी है तो एंटरप्रेन्योर को, गवर्नमेंट को बाईपास करना पड़ेगा। एक चीज अब मैं आपके बहुत सारे ताहिर भाई दोस्त भी हैं, मगर अब मैं क्या करूं, HEC को आप सीधा नहीं कर सकते। सही, मुझे भी आप HEC का प्रेसिडेंट बना रहे हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली
उमर बिन अब्दुल अजीज की तरह कोई उनमें से मुझे जहर दे देगा। उनकी तो बेगम ने उनको दे दिया था, क्योंकि जब उनके क्योंकि आपको पता है खुलफा राशिदीन में तो वो फिफ्थ तो वही थे, तो कितने नेक आदमी होंगे। तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को नहीं छोड़ा तो मुझे कैसे छोड़ देंगे। तो क्या कहते हैं, तो पॉइंट मेरा कहने का यह है कि ये इनको सीधा नहीं कह सकता, सिस्टम बदलना पड़ेगा पूरा। और सिस्टम प्राइवेट सेक्टर ने ये करना है, जो भी ताहिर भाई मैंने करना है, आपने करना है, बाबर भाई आपने करना है, और कोई नहीं करने वाला। मैं आपसे सेकंड करता हूँ, सिलिकॉन वैली भी प्राइवेट लोगों ने बनाई थी। सिलिकॉन वैली का स्टार्ट जब तो मैंने आपको मिसाल दिया कि ट्रंप कोविड को तो संभाल नहीं सका। अभी देखिए गवर्नमेंट का एक काम था कोविड को संभालना, तबाही मचा दी अमेरिका में। इस वक्त 3000 आदमी मर रहा है हर रोज, मर रहा है। हाँ, हमारे यहाँ तो वैसे बाय द वे हमारे यहाँ नहीं मरे, उसकी वजह यूं मैं उंगली कर रहा हूँ, अल्लाह ताला बिल्कुल, अल्लाह मुसलमानों के नाम पे बढ़ाया। मगर अभी भी अल्लाह मियाँ को गुस्सा आ गया है इस बात में अल्लाह को कि ये भाई मैंने आपको पहली दफा बचाया, अब आप दूसरी दफा भी कोई एहतियात नहीं करे तो फिर क्या होगा। अच्छा खैर, मगर मैं आपसे ये कह रहा हूँ, तो अच्छा टेंसर फ्लो मैंने आपको बताया। अच्छा अब आ जाते हैं ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन पे जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इथेरियम। हाँ, वैसे तो बिटकॉइन है, मगर बिटकॉइन पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बना सकते, सिर्फ जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है ना वही है। हाँ, इथेरियम बहुत पावरफुल है। इथेरियम बहुत पावरफुल है। अच्छा वो भी ओपन सोर्स। अगर आपने तो पढ़ा है तो अभी उसका कोड डाउनलोड करें और चेंज करना शुरू कर दें। मुझे उसका गिटहब से कोड डाउनलोड करके चलाने में सिर्फ 5 मिनट लगे। ये मतलब इतना इजी है। वो मैं कह रहा हूँ, कुछ मसला नहीं है, करने वाला होना चाहिए ना। अच्छा अब आईओटी में भी ऐसे ही है। आईओटी में आप थोड़ा सा रास्पबेरी पाए, हमारे डॉक्टर साहब आपने मिलाया था, डॉक्टर लुत्फुल्लाह, हाँ लुत्फुल्लाह साहब ने, वो रास्पबेरी पाई के बहुत प्रोपोनेंट है, और वो बिल्कुल चैंपियन भी है और प्रोपोनेंट भी है, तो वो बिल्कुल सही बात कहते हैं। अच्छा मेरी उनसे जब भी बात हुई है ना तो उनको ये बड़ा गिला होता है कि मैंने पीआईएसी में स्टैंडर्डाइज नहीं किया। असल में बहुत सारी वजूहत थी, हमें उनसे टेक्निकल डिटेल में जाने की इस वक्त टाइम नहीं है। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि रास्पबेरी पाई क्लाउड से कनेक्ट होगा, रास्पबेरी पाई के आगे सेंसर्स और ये सारे लगे होंगे, तो सारी टेक्नोलॉजी हाथ में, किसी यूनिवर्सिटी को किसी पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं जरूरत। जिया भाई रास्पबेरी पाई 64 बिट आ गया है पाई 4 के अंदर, बिल्कुल, और 64 बिट होने से क्या हुआ कि हम इतनी सी डिवाइस को अगर गैजेट इकट्ठा करें 6-7 का तो हम क्लाउड सेटअप कर सकते हैं। मैंने खुद टेस्ट किया वो सारा, मैं खुद काम करता रहा हूँ। बड़ा जबरदस्त। मेरे अभी बिस्तर के जो सामने है ना, मेरा डबल बेड है, तो मैं मैरिड तो नहीं हूं, तो जो मेरा साथ वाला बिस्तर है ना उस पर सारा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है सामने ही। तो आप अगर देख लें तो मैं अभी दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि रिकॉर्ड पे आ गई बात तो सारी उम्र की, मेरे स्टूडेंट जो है ना मेरे दोस्त होते हैं तो सारी उम्र का रिकॉर्ड हो जाएगा, वरना मैं घुमा के आपको दिखाता कि उस पे रास्पबेरी पाई का स्टैक रखा हुआ है, स्टैक नहीं क्लस्टर रखा हुआ है। क्लस्टर रखा हुआ है। लवली, अच्छा तो पॉइंट ये है कि अच्छा मैं दिखा नहीं रहा कि उसमें अभी इतना मशीनें जब फैली भी होती हैं, तारें खुली भी होती हैं, तो क्या कहते हैं लोग रास्पबेरी पाई को मेरे कहेंगे कि शायद इन्होंने शादी कर ली है रास्पबेरी पाई से। अच्छा तो खैर अच्छा तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अच्छा तो मैंने आपको अभी नक्शा खींचा, कोई पैसों की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत रास्पबेरी पाई कितने में आ जाएगा सर? अभी 7,000 रुपए का पाकिस्तानी, 7,000 का हो गया। अच्छा 4 में तो आपने जो 64 बिट में कहा वो तो आपका कंप्यूटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो जाएगा, क्या कहते हैं उसके। अच्छा मैंने आपको अभी पूरा नक्शे से सॉफ्टवेयर ओपन, मगर अब सवाल एक है, जो ताहिर भाई मैं आपसे अल्फाज, मैं लोगों की चोरी तो करता हूं मगर चोरी करने का तरीका ये होता है कि रेफरेंस से बात करनी चाहिए हमेशा, कि फला आदमी ये कह रहा था। नियत कहां से आए, प्रॉब्लम नियत का है। आप इससे अंदाजा करें, मैं आईटी मिनिस्टर्स जो पिछले वाले थे उनके साथ बैठा हुआ था, वो हमारे ऑफिस आए थे, बड़ी मेहरबानी की थी उन्होंने मुझे बताया, और फिर अगली एक कॉन्फ्रेंस भी हो रही थी उसमें भी उन्होंने आके स्टेज पे भी यही बात बताई। पाकिस्तान में हर साल 25,000 ग्रेजुएट निकलते हैं आईटी के, 100 यूनिवर्सिटी आईटी पढ़ा रही हैं कंप्यूटर साइंस।
उनका फिगर ये था, जो कि कुरान बच गया, क्योंकि उस वक्त 3-4 वाइस चांसलर भी बैठे हुए थे उसी स्टेज पे, जिसपे मैं भी बैठा हुआ था, मिनिस्टर साहब भी बैठे थे, 3-4 वाइस चांसलर भी थे जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी में। उस 25,000 में से सिर्फ 2-3 हजार एम्प्लॉयबल हैं, और 2-3 हजार ये उन्होंने फिगर दिया। मेरे पास तो कोई डेटा जमा करने का तरीका नहीं है। मेरे पास तो डेटा जमा करने का, मैंने आपको बता दिया, ये तरीका है इनफॉर्मल तरीका, के 500 की क्लास में क्या सूरत हाल थी, आपको मैंने बता दिया इस्लामाबाद की। तो जो वहां पे एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बैठे हुए थे या डायरेक्टर थे, वो कहने लगे कि भाई ये गलत फिगर है। तो उनसे पूछा गया कि भाई सही फिगर क्या है, तो वो उनको जवाब नहीं दे पाए, घबरा गए। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हम लोगों ने बेवकूफ बनाने की फैक्ट्री बनाई हुई है, पता नहीं अपने ही लोगों को। पॉलिटिशियंस को बहुत सारी सूरत हाल में पता नहीं है, माँ बाप को भी बहुत सारी सूरत हाल में। मैं नियत की शुबा कम करता हूँ, आखिरी जब तक प्रूव ना हो जाए ना किसी आदमी की नियत पे, तो उस पर शक करना नहीं चाहिए। इंफॉर्मेशन की कमी है, इंफॉर्मेशन नहीं है माँ बाप को भी, बेचारे, वरना माँ बाप क्यों। मगर फिर एक और भी मसला है ना, मुझे फोन करते हैं माँ बाप, सर वो बच्चा है, मैं कहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दूं। अब मैं चुप। देखें, एक और बात भी है तारे भाई, मेरा एक जनरल अपना भी तरीका है, अगर आप कोई आदमी भी ना हर चीज की बुराई करे ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो खुद बुरा है। तो इसलिए मैं अपने आप पे भी सबसे पहले ये कदगन लगाता हूं कि कहीं ये मुझे खामखा अच्छी चीज भी तो खुदा ना खास्ता बुरी नजर नहीं आ रही किसी अना के प्रॉब्लम में। मगर मसला ये है कि ईमान, क्योंकि अपने आप पे ना सबसे ज्यादा इंसान को अपने आप पे चेक लगाना चाहिए, दूसरों पे तो चेक लगा नहीं सकता, अपने आप पे लगाना चाहिए। मगर मसला क्या है कि आप इस्लामाबाद में आए ना, तो मैं माशाल्लाह ऐसा खुश हुआ यूनिवर्सिटियों में घूम घूम के, सारी यूनिवर्सिटियों में घूम रहा था मैं, और कैसी, आपको पता ही है कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कराची के मुकाबले में तो बहुत अच्छी बिल्डिंग है इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटियों की। मगर फिर मैं एक दफा गया नवाब शाह, मैं नवाब शाह में मुझे बुलाया प्रेजेंटेशन देने की, ताहिर भाई आप तो हर जगह जाते रहते हैं, आपको क्या बताने की जरूरत है। मगर मैं गया, मैं तो एक ही 2 दफा गया हूँ, वैसे तो मैं हैदराबाद बहुत जाता रहता, नवाब शाह में पहली दफा गया किसी यूनिवर्सिटी में, नाम नहीं लेना चाह रहा। तो मैंने अपना लैपटॉप और अपना मल्टीमीडिया ले गया कि यार मैं प्रेजेंटेशन दूंगा। सर वहां पे सिनेमा जैसा हॉल था, वहां पे मल्टीमीडिया मेरा तो 2200 लूमेंस का था, उनका 10,000 लूमेंस का मल्टीमीडिया था, बिल्कुल नया। अच्छा, और उनका ऑडिटोरियम अच्छे ऑडिटोरियम जैसे एनईडी जैसा ऑडिटोरियम था, एनईडी का तो बहुत अच्छा ऑडिटोरियम है, एनईडी जैसा ऑडिटोरियम था। मगर जब बच्चों से बात हुई तो जीरो बटा। अच्छा, पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अच्छा उन बच्चों का भी कसूर नहीं है, कोई डायरेक्शन देने वाले नहीं। अच्छा, अता रहमान ने जो उनके, जैसे मैंने पिछली गवर्नमेंट का बताया कि लैपटॉप दिए, तो ये बहुत अच्छी बात थी। अता रहमान ने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे लोगों को यूनिवर्सिटी पीएचडी करने भेजा, ये उनकी वजह से हुआ, वरना मुशर्रफ साहब को क्या पता कि पीएचडी क्या होता है और किसको भेजना चाहिए। मुशर्रफ साहब ने उनको ट्रस्ट किया और उन्होंने फंडिंग करके बहुत से लोगों को। मगर इसमें खराबी क्या हुई, जो कि शायद मैं होता तो मुझसे भी हो जाती, मैं उनको इल्जाम नहीं दे रहा, हाथ काम करने में कोई मास्टर प्लान था नहीं, हर किस्म का पीएचडी लोग करने चले गए। अच्छा, और ये भी नहीं था कि कोई यूनिवर्सिटियां सिलेक्ट की। अच्छा, इस वक्त देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटी, मैं आपको आसान तरीका बताऊं, मैं तो क्या करता हूं, कहीं भी यूनिवर्सिटी में जाता हूं, आप कहते हैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर है, आप उससे पूछें ये पीएचडी तो है, तो जारी बात है मैं अज्यूम करता हूं मुझसे 1000 गुना ज्यादा उसको आता होगा। मगर एक सवाल पूछ लीजिएगा उससे कि कहां से। ज्यादातर पाकिस्तान में, क्योंकि ये गवर्नमेंट पैसे दे रही थी, ये यूरोप से, थाईलैंड से, चाइना से और इन जगहों से जहां पे स्कॉलरशिप्स थी या जो भी था, ये करके आए, उनको खुद कुछ नहीं पता। बाबर भाई आपका मेरे ख्याल से माइक म्यूट हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ज़िया भाई। अच्छा, तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि अब जो अता रहमान से, मगर अता रहमान बेचारे को, मैं भी क्योंकि मैं उनका कोई चमचा नहीं हूं, मगर मैं समझ सकता हूं कि यार यहाँ ना हर चीज को ना उसको, जिस तरह ओ लेवल है, ए लेवल है, असूलन तो बहुत अच्छी जाहिर, हमने उसको भी सत्यानाश मार दिया, क्योंकि हम क्रैमिंग फॉर द पेपर एग्जाम कर लेते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा और वही हम शुरू कर देते हैं, जो हमने पाकिस्तान में किया था। तो मैंने कहने का मकसद है, बहुत ही अच्छी चीज को भी कोई आदमी खराब करने आने पे आ जाए और उसकी नीयत ठीक ना हो, तो लोग, ये मैंने जिक्र सुना है, पढ़ाया किताबों में, कि लोगों ने वो
जब ये इख्तिलाफ राय है ना कि हाथ बांध के पड़ी जाए या खुली पड़ी जाए, तो एक जमाने में शराब की बोतल आस्तीन में रख के नमाज पढ़ रहे थे, तो इस तरह आपको कर सकती है। तो एकदम जब हाथ खोला, अब ये मुझे नहीं पता कि कितना सच है, मगर मैंने 2-3 जगह पढ़ा था। तो पॉइंट ये कि अगर आप नमाज को भी बुरी चीज बना सकते हैं, खुदा ना खास्ता, कि अगर नीयत आपकी ठीक ना हो, तो पॉइंट मेरा कहने का ये कि असली मसला बताऊं क्या है। मिनिस्टर बेचारे को पहली बात तो खुद पता नहीं है, वो पॉलिटिकल अपॉइंटी है, मगर इसमें कोई मसला नहीं है, विल होगी तो। दूसरी बात, मिनिस्टर जो आईटी का मिनिस्टर आता है, अब जैसे फवाद चौधरी है, वो जरा बोल्ड आदमी है, ये मानना पड़ेगा। पसंद करें आप उनको, नापसंद करें, बोल्ड आदमी है। मगर मसला क्या है कि अब डायरेक्शन कौन देगा? अब आप ये सोचिए कि वो आपके नौकरशाही देगी जो बेचारे को खुद कुछ नहीं, आईटी का क्या पता उसको। अच्छा, तो पॉइंट मेरे कहने का ये कि ये जो सारी सूरत हाल है, मगर ये बुरी सूरत हाल नहीं है। देखें, अमेरिका में भी यही सूरत हाल है। मैं आपको बता दिया ना अमेरिका की गवर्नमेंट कोविड का क्या हाल किया है, अभी आपके सामने है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने ब्लैक्स के साथ क्या किया है। गवर्नमेंट जिस चीज में भी हाथ डालेगी उसको तबाह करेगी। अमेरिका की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अमेरिका की फैमिली सिस्टम उनका डिस्ट्रॉय हो गया ब्लैक्स का। गवर्नमेंट पैसे देती है, डेमोक्रेट उनको आते हैं, पैसे देते हैं, वो और काम नहीं करते। रिपब्लिकन आ जाते हैं तो उनको पैसे उनके बंद कर देते हैं, तो फिर भी वो काम नहीं करते। बात ये है कि ये इंडिविजुअल पे फर्क पड़ता है। हमें और आपको, जितने भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा और सबसे बड़ा झूठ होगा कि हम उनको ये कहें कि गवर्नमेंट आपके लिए कुछ कर लेगी या आपकी यूनिवर्सिटी कुछ कर लेगी। मगर एक अच्छी बात है इसमें खबर, वो कुछ नहीं करेगी, ना आपकी यूनिवर्सिटी कुछ करेगी। भाई, उन्होंने अगर प्राइवेट सेक्टर है तो पैसे कमाना है, गवर्नमेंट सेक्टर है तो प्रोफेसर ने सैलरी लेनी है, उसको क्या पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। अच्छा, दूसरी बात, वो बेचारे का गवर्नमेंट सेक्टर वाले का एक और मसला है कि अगर वो आप पे ज्यादा जोर देता है तो आप पिस्तौल निकाल लेते हैं। वो बीवी बच्चों वाला आदमी है, वो अपनी जान क्यों खेल के आपको पढ़ाए। मैं तो सिंगल आदमी हूं तो मैं कहूंगा यार गोली मार दो, कोई बात नहीं, मैं भी 2 मारूंगा। मगर वो बेचारा शादीशुदा आदमी है जिसके 3 बच्चे घर पे बैठे हुए, उससे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते ना वो पिस्तौल निकालेगा तो उसको फेल कर देगा वो। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये मैंने आपको सब कुछ ओपन सोर्स है। ये जो आपने इदारा बनाया है ना, ये ओपन सोर्स वाला आप लोगों ने मिलकर सबने, यही वक्त की जरूरत है। सब कुछ ओपन सोर्स है। अब बंदे का वो चाहिए। अच्छा, और टेक्निकल लोग हैं, जो आदमी कुबरनेटिस समझ रहा है, जो ओपन शिफ्ट समझ रहा है, तो वो कोई आप लोग बच्चे तो हैं नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो क्या पता ही नहीं है कुछ। अच्छा, सब कुछ मौजूद है। अब सिर्फ एक चीज चाहिए, बच्चों की विल। देखिए, आपके पास आपने वीडियो बना के डाल दिया, मैं भी डाल रहा हूं, और हमारे और आपके अलावा तो हजारों और डालने वाले मौजूद हैं यार, मतलब हमसे बहुत अच्छे हैं। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि हमें और सब बच्चों को ये समझाना है। बच्चों से मेरा मतलब है जो भी इल्म का तालिब-इल्म है। अच्छा, वरना नतीजा क्या होगा अगर आप नहीं करेंगे ये। तो मैं आखिरी खत्म करते हुए, हमारे पास सवाल है क्या भाई? हमारे पास कुछ सवाल है अभी, आप अपनी बात खत्म कर लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास, मैं बच्चों को एक बात कहता हूं, देखो, अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे और अपनी डायरेक्शन खुद सेट नहीं करेंगे, देखें, अल्लाह ने खाने का तो वायदा किया है, खाना तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही, मिलता है पाकिस्तान में अभी तक। अफ्रीका में बहुत सारे मुल्क हैं जहां खाना भी नहीं मिलता वैसे, और इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां खाना भी नहीं मिलता। मगर ज्यादातर पाकिस्तान में जगह, अगर बलूचिस्तान के छोटे इलाकों को छोड़ दें और सिंध के इंटीरियर को छोड़ दें, बहुत छोटी जगहों को, ज्यादातर जगह खाना मिल जाता है। मगर पाकिस्तान में गवर्नमेंट सर्विस, फर्ज करें आपके चचा ने लगवा दिया आपको, फिर आखिरत भी बर्बाद, दुनिया तो है ही बर्बाद। आपने प्राइवेट सेक्टर में जो यहाँ सेट मेंटेलिटी है, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग एंटरप्रेन्योरशिप में आते ही नहीं है। मेरी अपनी वालदा जब हयात थी, अगर मैं उनको बचपन में कहता ना कि अम्मी मैंने अपनी कंपनी खोलनी है, तो वो कहती नहीं नहीं बेटा, नौकरी कर लो। पक्की नौकरी कहीं कर लो, अच्छी सी नौकरी कर लो, क्योंकि सोच यही है ना जनरल एक कल्चर में मिडिल क्लास की। भाई, इसीलिए तो आपकी शादी नहीं हुई ना। आपने पक्की नौकरी की होती तो आपको लड़की नहीं मिलती, आपको किसी ने लड़की नहीं दी। नहीं, वो तो कोई लेफ्टी नहीं करा रही थी, तो मैं क्या करता। तो क्या कहते हैं। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि बच्चों को ये समझने की बात है, आपने सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी आपको लिंक दिया था ना सर आपने, एक दफा फिर दिखा दें वो लिंक।
आपके पास कुबरनेटिस देखना है, पढ़े तो पढ़े भाई। अच्छा, कुबरनेटिस पढ़े हैं, AWS पढ़े हैं, डॉकर पढ़े हुए हैं, इसके ऊपर लिनक्स पढ़ा हुआ है, और क्या इसके रह ऊपर एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पड़ी हुई है। हाँ, फिर क्या रह गया? अच्छा, मैं वही कह रहा हूँ ना, माशाल्लाह बाबर भाई, तो बच्चा है, थोड़ा सा रिएक्ट वगैरह क्लाइंट साइड है, वो तो जो आदमी इतना कर लेगा तो वो भी कर लेगा, और इंटरनेट में तो बहुत सारे हैं। पॉइंट मेरा कहने की, अच्छा पॉइंट ये है कि आपको कोई, मगर मसला एक है ना, असली जो बच्चों को मैं कहता हूँ, तो जिसके मैंने कहा बच्चा आप 4 साल तक आते हैं, आप ये सोचते हैं, मुझे एक बात ने पूछा, मेरा एक बहुत अच्छा टीचर भी है, तो वो एक दिन बैठा था, कहने लगा सर मैं समझ में नहीं आता, ये लोग 4-5 लाख रुपए देते हैं, 10 लाख भी हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के, और उनके पढ़ना नहीं चाहते बच्चे, तो ये चक्कर क्या है? तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सस्ता है। अच्छा, वो कहने लगे सस्ता है, क्या मतलब सर, क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा भाई क्लब में अगर आप DHA क्लब में जाएं, गोल्फ क्लब में, तो उसकी तो मेंबरशिप 20 लाख की है, और यहाँ पे लोग करते हैं, ये बेसिकली सोशल क्लब है यूनिवर्सिटी। अच्छा, जब भी तो आपने देखा है बच्चे जो है ना यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वाले तो वहां तो जबरदस्ती टीचर डंडा चलाते हैं ना आमतौर पे, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे यूनिवर्सिटी बंद होने से खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनका सोशल क्लब खराब हो रहा है। कल ही मुझे अपने मेरे दोस्त का बच्चा था, वो अभी A लेवल में आया है, वो कह रहा है सर मजा नहीं आ रहा, कह रहा है सर वो जूम पे ना गप्पे नहीं होती, हर चीज रिकॉर्डेड है। वही तो कह रहा है। अच्छा, बच्चों ने कुछ और भी करना शुरू कर दिया, वो बता रहा था जब पूरी टेक्निक, वो मैं अभी लंबी कहानी में नहीं, मतलब ये कि प्री रिकॉर्डेड करके उसमें लगा दो, तो क्या कहते हैं, टीचर को पता ही नहीं है कि वो बैठा हुआ है या वो प्री रिकॉर्डेड आ रहा है। अच्छा खैर, वो एक बच्चे तो फिर हर जगह ही निकालते हैं अपना। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि तो मैं उनसे कहता था कि बेटा आज से जब 20 साल बाद, मैं शायद दुनिया में भी ना हूं, आप जब सुबह 9 बजे आए ना और आपका सेठ ये कहेगा कि अबे बाप की कंपनी है, आप 9:10 पे आए, तो मेरी ये शक्ल याद कर लीजिएगा, मैं एक बहुत ही हंसी वाली शक्ल बनाता हूँ कि बेटा और नहीं पढ़ो, और नहीं मेहनत करो, अब भुगतो। सही बात, कुछ किया होता तो खुद कुछ कर लेते। सही बात। अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि मगर बच्चे, जाहिर बात है, मगर हमारे फिर आखिरी, हमारे एक दोस्त बड़ी अच्छी बात मुझे कहते हैं कि यार जया, जब तुम डीजे में पढ़ रहे थे तो तुम क्लास में, वो तो मुझे जानते हैं ना, तुम क्लास में बंक मारते थे या नहीं मारते थे? मैंने कहा मारता था। तो कहने लगा तुम्हें कोई समझा सका था उस वक्त? मैंने कहा नहीं। कहने लगा आपको कैसे समझ में आया? कहने जूते खा के। तो कहने लगा इन लोगों को भी जूते खा के ही समझ में आएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हमने, मेरा और आपका ताहिर भाई काम है, बाबर भाई का, कि हम लोग लोगों तक मैसेज पहुंचा दें, फिर करना ना करना किसी से जबरदस्ती तो कोई कराई नहीं जा सकती चीज। ये आसिम भाई भी लाइन पे हैं इस वक्त हमारे साथ। आसिम भाई हमारे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स फाउंडेशन के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, और ये पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आजकल ये एक फाइनेंशियल मिनिस्ट्री में कंसल्टेंट हैं, और इंशाल्लाह कुछ दिनों तक अच्छी खबर सुनाने वाले हैं एक और जगह पे। तो आसिम भाई आप कुछ कहना चाहते? हाँ जी, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एंड यू आर राइट कि इसमें जो हमारी यूनिवर्सिटीज प्रोड्यूस कर रही हैं, only 20 to 25% graduates get hired, and the reason is the disconnect between industry and academia. Okay, we need better linkages between industry and academia, so because industry is the customer of academia, so academia should equip the students in the skills which are needed by the industry. That is when the industry will hire them. और इसी पे कल एक हमारा सेशन 9 बजे है, ओपन सोर्स इन एकेडेमिया, कि आप अपने ग्रेजुएट्स को वो स्किल सेट दें, जिस तरह हम आज बातें कर रहे थे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, जिनकी लोकली भी डिमांड है, ग्लोबली भी डिमांड है, so that when the students have that skill set, they are more employable, they are more likely to get a job not only within Pakistan but abroad also. तो ये हमें एक जिस तरह इदारे हैं PSAB और KIT बोर्ड और even OSFP, we should do surveys with the industry, okay, what are the skill sets needed by our IT firms, our software houses, etc., startups, ताकि हम अपने graduates को उन skills में train करें which are needed
by the industry. We need better collaboration between our industry and academia. Thank you. और पाकिस्तान में startups are actually emerging in Pakistan. In fact, आपने शायद ये एक मैं story ये link post करता हूँ कि एक article आया था कि why Pakistani startups are the next big thing. ये last year 2019 में ये article आया था और पाकिस्तानी startups में over the last couple of years they have raised around $200 million through investments from local investors as well as foreign investors. और आपकी बात ठीक है कि शुरू में ज़्यादा VCs नहीं थे पाकिस्तान में, अभी कोई 5-6 VC funds established हो चुके हैं और SECP और PSEB are I think they have formed some new regulations for setting up VC funds और आगे Ignite भी जाके इन चीज़ों में involve होगा. So things are improving in Pakistan, but we need better collaboration between industry and academia. इंशाल्लाह. So बाबर साहब, आप कोई concluding remarks देना चाहें? ये शाहिद भाई ने काफी देर से एक सवाल किया हुआ है. ज़िया साहब, how can you help us using your expertise? ज़िया साहब इस वक्त शाहिद साहब हैं अमेरिका में, PhD हैं, बायोलॉजिस्ट हैं बेसिकली, लेकिन ये डेटा साइंस पाइथन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा साइंसेस के अपने प्रोसेस के अंदर और ये माशाल्लाह पढ़ा रहे हैं अभी बच्चों को ऑनलाइन. इनकी भी वीडियो ट्रेनिंग्स हैं उर्दू में, डीप लर्निंग टेक नाम से चैनल है इनका. तो ये कह रहे थे कि जो आपका एक अपना नेटवर्क है उसमें किस तरह फायदा हो सकता है इनको भी आपको भी, क्योंकि जारी बात है एक बंदा सारी चीजें नहीं पढ़ा सकता. जी जी, असल में देखें मामला बताऊं क्या है. मामला ये है कि हमने पिछले जो 1.5 साल से मामला चल रहा है, 2 साल से, मैं तो 20 साल से कर रहा हूँ ये, मगर जो ज्यादा लोगों की नजर में पिछले 2-3 साल में आया, तो असली प्रॉब्लम अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी में फॉरेन जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते तो हमें उससे एतराज करना चाहिए. मिसाल के तौर पे पिछले सेशन में एग्रीमेंट ये हो रहा था डिस्कशन हार्डवेयर का. अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करता हूँ. देखें, शुरू में हमें ये करना पड़ेगा कि वो चीजें जो लो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है. चेंज आया है, जो सर ने अभी बताया ना कि चेंज आया है, मगर जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमें CPU बनाना है, इस वक्त CPU आप अंदाजा करें एप्पल तक सिर्फ डिजाइन कर रहा है, बना वो कहीं और रहे चाइना से जी. तो क्या कहते हैं, एप्पल का की बात हो रही है और इंटेल को अभी जितनी मार पड़ी है, तो उसमें ये नहीं कि हम कर नहीं सकते, मगर जो स्केल चाहिए ना वो पॉसिबल नहीं है. अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले छोटी सी एक ग्रुप को लेके ना 5-10 लोगों को लेके उनको ट्रेन करके किसी एक एरिया में, फिर उनको पैसे कमाने पे लगाना चाहिए, ताकि वो जब पैसे कमाएंगे ना तो हमारा भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हम यार इन लोगों को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते. जैसे मेरे पास पाइथन के बहुत सारे लोग हैं, मगर वो जाहिर बात है ये बायोलॉजी वगैरह के, हमने एक जमाने में सोचा था कि जेनोमिक्स में ये कोरोना से पहले, मगर इस वक्त मैंने उसको साइड पे कर दिया था, क्योंकि एक तो मैं खुद भी उसका एक्सपर्ट नहीं था और उसमें जितनी जान लगती इस वक्त कोरोना के जमाने में शायद वो पॉसिबल नहीं था. तो हमने जो पाइथन के बंदे मौजूद हैं, अच्छा अगर उनके लिए जॉब्स हो सके लड़कों के लिए, अच्छा हम उल्टी तरफ से आए. मैं हमेशा ये करता हूँ, जिसमें मैं खुद पैसे नहीं कमा सकूं ना, मैं वो चीज पढ़ाता ही नहीं. तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि अच्छा मिसाल के तौर पे लोग कहते हैं यार R&D नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए. अच्छा, ये जुमला शायद पहले सही भी होता जब तक ओपन सोर्स नहीं था. अब मुझे बताइए कि 20 साल से ये सवाल हो रहा है. हाँ, अच्छा लोग हमेशा मुझसे ही मिलते हैं ना तो एक सवाल पूछते हैं, क्या हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए. अच्छा बिल्कुल, अगर मेरा कोई बहुत ही करीबी दोस्तों को मैं कहूँगा अपनी शक्ल देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने व्हाट डज इट टेक, तो आपको पता है कि व्हाट डज इट टेक. लिनक्स दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लिनक्स. जी जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसका सिर्फ कोड समझ के उसमें सिर्फ कंट्रीब्यूट ही कर लें तो बहुत बड़ी बात है. सर एक ड्राइवर लिख के डाल दे, बड़ी बात है. हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ी बात है. तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो लिखना भूल. अच्छा, इसी तरह हार्डवेयर में भी है.
इस वक्त एक फैब बनती है $15 बिलियन की, और दुनिया में बड़ी सी बड़ी कंपनियां अफोर्ड नहीं कर पा रही। तो हमें चाहिए, जैसे बहुत सारे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आजकल ये एक नया निकाल दिया है शोभा कि मोबाइल फोन की कंपनियां आने वाली हैं पाकिस्तान में। भाई चाइना की मोबाइल कंपनियों भी सारा प्रोसेसर आप ये कहते हैं असेंबल करने आती हैं। पीसी तो मैं भी असेंबल कर दूं आपको, अभी मैं करके दे दूं। मोबाइल का तो मुझे प्रैक्टिस नहीं है, मगर आप मुझसे पीसी बनवाना चाहे ना तो मैं आपको अपने हाथ से बना के दे दूं। मतलब ये थोड़ी कि मैंने बना दिया है, असेंबल किया है भाई। कार्डबोर्ड लगाए, तारे जोड़ी हैं। तो अच्छा, तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि ये हम जो कर सकते हैं ना, मैंने तो ये इसको रिफाइन कर लिया प्रोसेस को। नंबर 1, एक बहुत ही सिलेक्ट ग्रुप 10-20 लोगों का पढ़ाया जाए उनको। अगर पहला सवाल ये होता है उनको पढ़ाने के लिए एक बंदा चाहिए जो सिलेबस बनाए, जो एग्जाम बनाए, जो पढ़ाने के काबिल हो और पढ़ाना चाहता भी हो। ये सब बातें होनी चाहिए, एक आदमी तो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने उनको ना मल्टीप्लाई किया 20 आदमियों की क्लास की, 20 आदमियों में से अजम्पशन ये है कि 2-3 अच्छे निकल आएंगे। उनको अच्छी जॉब दिलाई और उनसे कहा कि बेटा आप जरा थोड़ा सा पढ़ा भी दो। तो इस साइकिल से हम शुरू करते हैं, कहते हैं स्मॉल शुरू करें। क्योंकि एकदम फर्स्ट करें, मुझे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहे कि यार ये 500 करोड़ रुपए लो और पढ़ाओ, तो मेरा 20 साल मैंने लगा चुका हूं, तो शायद मैं 100 करोड़ में से 1-2 करोड़ इस्तेमाल करूं, मगर मैं लूंगा नहीं। मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे पता है कि आगे जाके जो मुझे जितना वो तंग करेंगे। तो पॉइंट में ये ना, ये पैसे का इशू है। एक बंदा चाहिए जो लीड करे किसी भी एफर्ट को। सर आपने ये जो बनाया होगा बाबर भाई, कुबरनेटिस आपने खुद पढ़ा होगा, तो क्या किसी ने आपके दोस्त ने पढ़ा होगा, आपके बहुत ही करीबी आदमी ने पढ़ा होगा, तो वीडियो बने होंगे। हाँ, ये बड़ा हमें टाइम लगा है, बड़ा टाइम लगा। वही तो, ऐसा थोड़ी है कि लोग ये समझते हैं कि वो मार्केट से हायर कर लेंगे, वो 4 क्लासें पढ़ा के भाग जाएगा। पॉसिबल नहीं, आपको खुद करना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि हम ये कर सकते हैं, जैसे ये इस एरिया में बता रहे हैं ना, जैसे पाइथन के लड़के तो मेरे पास हैं। पाइथन में बायोलॉजी की ट्रेनिंग दें, मेरे ख्याल से 6-8 महीने शायद, मगर मुझे पता नहीं है इस एरिया का। बायोलॉजी की मैं बात नहीं कर रहा एक्चुअली। उन्होंने ना एज अ बायोलॉजिस्ट, उनकी प्रोफेशन कुछ और है, उन्होंने पाइथन को, डाटा साइंसेस को इस्तेमाल किया है और वो अपने मसलों का डेली हल निकालते हैं। यानी वो उनके जो अपने जो भी डीएनए के टेस्ट और जो चीजें हैं उसको ऐसे में जेनोमिक आज नहीं, वो समझ रहा मैं, क्योंकि हमने ये अभी से 9 महीने पहले जेनोमिक्स का कोर्स शुरू करना चाह रहा था मैं। तो क्या कहते हैं, क्योंकि हम पाइथन वगैरह, एआई वगैरह तो हम कर चुके थे, डेटा साइंस भी कर चुके थे, हमारे पास ट्रेन लड़के हैं इसके, और जो जॉब भी करने को तैयार हैं और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। अच्छा, मगर इसमें दिया भाई मैं एक और चीज ऐड करूंगा, मैं आखिरी पॉइंट के तौर पे, इनके पास माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी चीज है कि इनके पास डेटा सेट भी है डॉक्टर शाहिद के पास, और प्रॉब्लम्स हैं मुख्तलिफ किस्म की। जो ये अभी इन्होंने 500 लोगों का एक, सॉरी 500 नहीं, 5000 लोगों का एक बैच पढ़ाया है डीप लर्निंग टेक के ऊपर, और उसमें बहुत से लोगों को सिखाया है। 5-6 महीने लगे। मैं ज़िया साहब, मेरा ख्याल है कि शाहिद साहब को मैं ले लूं इस कॉल पे ना। शाहिद भाई आप स्ट्रीम दोबारा ज्वाइन करें, आपको मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। वो बात कर लेंगे आपसे, तो क्लियर हो जाएगा सारा प्रोसेस। जी। शाहिद साहब अमेरिका में बैठ के यहाँ पाकिस्तान में 25 स्कूल पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन बच्चों को। ऐसे ही लोग तो हैं, ऐसे ही लोग तो हैं जो कहते हैं ना कि एक आदमी भी नहीं को पूरे मुल्क में तो जी। शाहिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी स्क्रीन गायब हो गई है, कहाँ पे है? एक सेकंड सर, आपको नजर हमें नजर आ रहे हैं आप हैं? अच्छा, नजर आ रहा हूँ सर, बहुत अच्छा। नहीं यार, वो मेरी स्क्रीन कहाँ गई? एक सेकंड जरा, मेरा ख्याल है मैंने फ्लिप कर दिए। हाँ, ये ठीक है। नहीं, जैसा मैं, जज़ाकल्लाह खैर, आपको मैं काफ़ी देर से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जो आपने इनिशिएटिव लिया है, और एक आपने क्या उसको बोलते हैं, जंप स्टार्ट आपने दे दिया हुआ है, उसको हम रिफाइन कर सकते हैं। मैं यही इन ब्रदर से ये बात कर रहा था कि जो आपने स्टार्ट किया, हम इसको स्केल अप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब स्केल अप करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी होगी। ये मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर मैंने उस दिन बाबर से भी बात की थी, बाबर भी हंस पड़े थे
कि हम यूजुअली, और आपकी बात को मैं टॉक करता हूँ कि यूजुअली हम ये कर देते हैं, हम कब्र बना देते हैं, फिर मुर्दे ढूंढते हैं। ठीक है, अब आप कब्र बना लिए, मुर्दा कहाँ से ढूंढे भाई इसमें डालने के लिए? तो हम बच्चों को ट्रेन तो कर देंगे, अब आगे करना क्या है उनका? ठीक है ना, वो कब्रें हैं ना, अगर ट्रेंड है, अगर उसकी यूटिलिटी, वो कब्र है मेरे लिए, वो मेरे लिए मसला बन जाएगा ना वो बाद में। अच्छा, आपने ज़िया साहब को एक नया टोटका दे दिया है, वो अपनी तकरीर में शामिल कर दिया। मैं तकरीर में शामिल करूंगा, शाहिद भाई का हमेशा नाम साथ लूंगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, सबसे पहले ये है कि हमने पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं ना, तो हम इस इंडस्ट्री के साथ बैठ के बात करें कि यार बैंकिंग का तुम्हारा ये मसला हम करेंगे, एकेडेमिया तुम्हारा ये मसला हल करेंगे, ये करेंगे, और हम इन बच्चों को फिर ट्रेन करेंगे और वहां पे इंटर्नशिप कराएं या उनको जॉब बाद में दिलवाएंगे। इसी तरह दुनिया के मसाइल चलते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुझे कहते हैं जी कि आपके पास पाइथन के बंदे हैं, अगर उन पाइथन के बंदों को हम ट्रेन करके हम 20, 25, 30 एक मास्टर ट्रेनर अगर हम बना देते हैं, ठीक है, और उन मास्टर ट्रेनर को फिर हम बोलते हैं कि आपने हर इंस्टीट्यूट या यानी कि पाकिस्तान के हर शहर जहाँ कहीं भी है वहां पर जाकर आपने बच्चों को ट्रेन आपने करना शुरू करना है। पैरेलल हमने क्या करना है, पैरेलल हमने इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना है, एकेडेमिया को इन्वॉल्व करना है। एक तो ओपन सोर्स पे फंडिंग करवानी है कि यार आप इस पे फंड करें, जब आप फंड करेंगे तो यहाँ से उन ट्रेनर को पैसे देंगे जो उन बच्चों को ट्रेन करेंगे। ठीक है, अब इंडस्ट्री को क्या मिल रहा है, वो बच्चा ट्रेन होके इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ठीक है ना, तो ये साइकिल इस तरह हमारा चलेगा। ठीक है, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। अगर हम एक वाकई मैं आपको फॉलो करता हूँ, बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, अगर ये प्रेसिडेंट का ही एक इनिशिएटिव है तो भाईजान फिर प्रेसिडेंट के साथ बैठ जाते हैं ना, उसको बताते कि भाई ये मसला है, हम तुम्हारा मसला ये हल कर सकते हैं, ये तरीकाकार होगा। फिर हम पैकेजेस को पकड़ते हैं, फिर हम पेप्सी वाले को पकड़ते हैं, फिर हम वो सारे जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को पकड़ते हैं, उनके साथ बैठते हैं कि अमेरिका से हम कनेक्टिविटी करते हैं। हाँ, मतलब है कि देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ठीक है ना, बहुत सारी ऑप्शन जो हम कर सकते हैं, लेकिन ये बातों से सारा जो हम वो नहीं, अब एक्शन वाला जो टाइम है, मेरे दिमाग में एक विजन है, एक मॉडल है, टेस्टेड मॉडल है। ऐसा मॉडल नहीं है जो कि हमने टेस्ट नहीं किया। मैं बाय ट्रेनिंग फिजिसिस्ट हूँ, ठीक है, मेरी पीएचडी फिजिक्स के अंदर है, लेकिन मेरी आदत ऐसी है कि हम छोटा छोटा स्टेप करके तो आगे चलते हैं। अब छोटा स्टेप करके हमने प्रूव कर दिया है कि दिस इज डूएबल, वी कैन डू इट, उसको हमने स्केल अप करना है। और आप जैसे बंदे बैठे हुए हैं जो कि दिन रात एक उन्होंने किया है इस काम के लिए, और प्रेसिडेंट इनिशिएटिव को आप लीड कर रहे हैं, आई डोंट सी अ रीजन कि हम कर क्यों नहीं सकते हैं। हम मैं आपको अभी कबाहतें बताता हूँ। देखिए, हमारे पास एक बात आपने कहा ना, मास्टर ट्रेनर, मेरे पास जीनोमिक्स वगैरह की या तो मास्टर ट्रेनर नहीं है, मगर मेरे पास एआई के, डेटा साइंस के मास्टर ट्रेनर हैं। जीनोमिक्स के ये बाबर, मेरी पीएचडी फिजिक्स के अंदर है, मेरा बायोलॉजी कोई तलक नहीं है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से हमने गलत समझे। पॉइंट हमारे पास डेटा साइंस, मैं परेशान हो गया था, मैं क्या पता नहीं मैनू सुनना सही नहीं होता, तो वो बाबर ने तो टेक्नोलॉजी बदल दी थी। अच्छा, पॉइंट मेरे कहने का ये, फिर तो आसान काम है, हमारे पास मास्टर ट्रेनर मौजूद है और क्या कहते हैं, नौकरियां भी कर रहे हैं माशाल्लाह, और अच्छे लड़के हैं और भी ऊपर से आ रहे हैं। अच्छा, तो पहली बात तो ये कि मास्टर ट्रेनर का प्रॉब्लम नहीं है, पहले था, एक जमाने में था, एज ऑफ नाउ नहीं है। ठीक है, पिछले 6 महीने में ना ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, कभी हमेशा की तरह तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, मगर ये चलता रहेगा। ये तो आपको पता है, कंटिन्यू जंग है, लोग ट्रेन करना है। ठीक है, अब जहां तक प्रेसिडेंट साहब का सवाल है, प्रेसिडेंट साहब टेक्नोलॉजी को समझते हैं। प्रेसिडेंट साहब क्या कहते हैं मगर उनकी एक कबाहत है, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर कोई नहीं है, इसका मतलब है बजट कोई नहीं है। ये पीआईआईसी भी सारा प्राइवेटली फंडेड है, तो वो सिर्फ अपना नाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप दे सकते हैं, बहुत हेल्प कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, मगर बजट नहीं है। बजट है फवाद चौधरी के पास। ठीक है, जिसका जिक्र हो रहा था पिछली हमें मीटिंग में। उनसे बजट नहीं चाहिए सर। प्रेसिडेंट आपके साथ खड़े हो जाते हैं और इंडस्ट्री में चले जाते हैं, इंडस्ट्री को कहते हैं जी कि हमने आपका मसला हल करना, हमें आप फंड कर दें और ये हमारे पास सोर्स है, तो प्रेसिडेंट के साथ आप जाएंगे तो लोग आपकी बात सुनेंगे। मैं अकेला जाऊंगा, मेरी बात नहीं सुनेंगे। आप उस चैनल को उस तरह आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री उठाए ना, कुछ जो बड़े बिग जाइंट्स उसकी उठाएं, उनके मसाइल हल करने हैं, वो फंड करेंगे, ओपन सोर्स पे बेशक वो फंड करें, ये एक चैनल बन सकता है सर।
देखिए मैं इमरान खान नहीं हूँ, आप इसका इमरान ताहिर खान भाई नहीं हो। ज्यादा अच्छी ताहिर भाई ज्यादा अच्छा इस पे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री से इतना कनेक्टेड नहीं हूँ जितना ताहिर भाई हैं। सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ, आप कहें तो मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी भेज देता हूँ। जिया साहब की बात को सेकंड करते हुए, आईसेस्को एक मुस्लिम उम्मा के 57 कंट्रीज की एक एसोसिएशन है, मैंने उनको खत लिखा, डॉक्टर मुख्तार साहब से उसको एंडोर्स करवाया, डॉक्टर नबील वहां पे होते हैं, नस में होते थे, वो उनको असिस्ट कर रहे थे जब डॉक्टर साहब वहां से छोड़ के आ रहे थे। आईसेस्को ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया है कि जनाब आप यही प्रोग्राम जो PIIC वाला है ये आप हमारे 57 मुस्लिम कंट्रीज में मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार्ट करें। और बैक एंड पे मैं उसको पूरी कनेक्टिविटी के साथ फॉलो अप कर रहा था। उन्होंने 2 मुल्क सेलेक्ट कर लिए थे, एक नाइजीरिया और एक यमन, कि जी यहाँ से आप स्टार्ट कर लें, यहाँ हमारे पास स्टूडेंट भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, विलिंगनेस गवर्नमेंट की है, दे विल एक्सेप्ट इट, आप बताएं कैसे करना है इसको स्टार्ट। वो साल हो गया, 6 महीने हो गए, 9 महीने हो गए, अच्छा, मैं इसमें उसके ऊपर अभी तक जवाब नहीं आया प्रेसिडेंसी का। असली मसला ये था कि एक और भी प्रॉब्लम था, क्योंकि ये कोरोना हो गया था ना, तो सब तहस नहस हो गया। मगर असली जो पॉइंट है ना फंडिंग का, देखें अभी तो मैं फंडिंग एक ही तरीका है, मेरे जो ताहिर भाई हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं पता, जैसे ये मुझे नहीं पता कि ओपन सोर्स में किसने फंड किया या नहीं किया, मगर मैं आपको पाकिस्तान के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये मोस्ट प्रॉब्ली बाबर भाई, आसिम भाई सब ने मिला के कुछ किया होगा। हो सकता है कुछ आपको स्पॉन्सर भी मिल गए हो, मगर उस मिलने में जितनी मेहनत लगेगी उससे अच्छा अपनी जेब से निकाल के आदमी दे दे अगर है। अच्छा, मगर जब ये नेशनल लेवल पे काम होता है तो उतने पैसे जमा करना काफी मुश्किल होता है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, मेरी ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये नहीं हो सकता। सर आईसेस्को तो हमें पैसे दे रहा था, हम पैसे ले तो नहीं रहे थे आईसेस्को से, वो 1 लाख बंदा हमने उनका ट्रेन करना था, उसके पैसे वही मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने ये तजुर्बा सीखा है कि पाकिस्तान में ये किसी मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा शायद भाई मिसाल दी थी कि आपके अगर 10 बहन भाई हैं और आपकी वालदा बीमार है, जो कि पाकिस्तान बीमार है इस वक्त और पिछले 40-70 साल से बीमार है, तो एक तरीका तो ये है कि आप सब बाकी 11 बहन भाइयों को बुरा भला कहें कि अबे तुम्हारी माँ है, इसका ख्याल रखो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अमेरिका जाके बैठ गए हो। अमेरिका, मेरे एक दोस्त थे वो सुना रहे थे, वो अमेरिका में ही थे, तो अपने आप पे रख के सुना रहे थे मुझे। तो वो कहने लगे कि एक तो तरीका ये है कि आप उन 11 बहन भाइयों को कहें कि बुरा भला कहें कि यार ये कुछ नहीं करते, एक ये सोचेंगे कोई बहन भाई है ही नहीं, मैं ही हूं, और जो मैंने माँ की खिदमत करनी है भाई मैंने करनी है। क्योंकि यहां पे मसला ये है कि हम अभी किसी के मगर पॉइंट ये है कि मैं यहाँ सैलानी के साथ काम कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट NGOs है। यहाँ पे दूसरा इंडस है, मेरी बहन वहां काम करती है हॉस्पिटल में। पाकिस्तान में मैं अभी आपको कल से, अगर मैं ताहिर भाई दाढ़ी रख लूं और मजहब के नाम पे फंड मिलता है, कोई भी फंडिंग करने को तैयार है अगर आप उसको जन्नत साथ दे रहा हूं। फंडिंग प्राइवेट सेक्टर से मिलना, देखें गवर्नमेंट तो जब देगी जब उनका कमीशन जाएगा। शायद भाई जो है ना वो आप दाढ़ी रख के फंड लेने की बात कर रहे हैं, शायद भाई मूंछें रख के फंड लेने की बात कर रहे हैं। पॉइंट मेरा क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है पॉलिटिकल, आप दोनों को तो फंडिंग नहीं मिलेगी। नहीं, मैं बाबर और आसिम आप दोनों को फंडिंग नहीं मिलेगी। मैं आपको तजुर्बा अपना शेयर कर देता हूँ कि यूजुअली ये होता है कि जब आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, आपके प्रोडक्ट में जान होती है ना, तो फिर फंडिंग करने वाले भी आ जाते हैं। हमारे पास अगर एक सॉलिड प्रोजेक्ट हुआ ना कि यार हम पाकिस्तान का इतने हजार या इतने लाख बच्चा हम ट्रेन करेंगे और आपका ये मसला वो हल करेगा विद डॉक्यूमेंटेड प्रूफ, तो फिर आप देखिएगा कि पैसे देने वाले भी लोग आपके पास आ जाएंगे। बट वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव, ठीक है। अभी तक हमने कोई वो देखें, अभी कल मैंने एक टॉक दी थी, वो एक पंजाब गवर्नमेंट भी किसी के साथ कर रही है, वो पैसे लेके बच्चों से करे। अब वो कह रही थी हमारे पास पता नहीं 10,000 बच्चा है जो कि वो ट्रेनिंग ले रहा है, पता नहीं 2500 रुपया वो देता है सालाना या कितने देता है, ठीक है। वो बच्चे हैं वहां पे, ऐसा नहीं है कि वो लोग पढ़ने वाले नहीं है, लोग पैसे देने वाले भी हैं। हमें ये ज्वाइंट वेंचर करना होगा और फंडिंग जो है ना वो थर्ड एलिमेंट होता है। आपकी जो पहले जो आपने बात की थी मेरे आने से पहले, उस पर मैं 110% एग्री करता हूँ कि पहले होती है नीयत।
अगर आपकी नीयत है ना तो आप आगे चल सकते हैं। उसके बाद आपने एफर्ट्स करनी है, नीयत भी आपके पास सर है, एफर्ट्स भी आप लगा रहे हैं, मॉडल भी आपके पास है, सिर्फ हमने उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है और इन लोगों से हमने बात करनी है। लेकिन आपकी बात ठीक है, अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर चौधरी साहब बैठे, चौधरी इसलिए तो ये चौधरी हैं उनके कॉन्टेक्ट है असल में मैं मुझे ना 20 साल हो गए एग्जैक्टली। मोस्ट प्रॉब्ली अगर मैं ब्रैगिंग नहीं कर रहा तो जितना हाई प्रोफाइल उसकी वजह है कि हमारे स्टेडियम्स में टेस्ट हुए हैं, तो और एक स्टेडियम में नहीं 10 स्टेडियमों में। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि उसके बावजूद भी अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, बिल्कुल ईमानदारी से, कि आज तक फंडिंग बगैर मतलब के की है तो मुझे सैलानी ने की है, जगह बना के दी, उनके डोनर थे, जारी बात है, मगर यहाँ तो डोनर से लेके अपनी जेब में हड़प कर लेते हैं, वो कहें किसी और के लिए क्लास क्यों बनाओ, मेरे लैब्स अभी बना के दिए हैं दोनों जगह सैलानी ने। सैलानी के अलावा यूनिवर्सिटी में अभी आसान तरीका, मैं मौजूद हूं ना इस वक्त, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्री पढ़ाने को तैयार हूं। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं इस वक्त, ये मैं गारंटी नहीं कर रहा, 20 साल का तजर्बा बता रहा हूं आपको। अभी मैं कहता हूं ना, मिसाल के तौर पे मैं नस से कहता हूं, मैं तो नाम लेके कह रहा हूं, नस से कहता हूं मैं आपको फ्री में पढ़ाता हूं, फ्री में, आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। मैं बताऊंगा, वो तैयार नहीं होंगे। सही। अच्छा, मैंने नस बेचारे का खामखा नाम ले दिया क्योंकि नस से मेरा कोई इंटरेक्शन हुआ नहीं है। मैं कराची से, मैं नाम बचना चाह रहा था, कराची में यूनिवर्सिटियों से मैंने 10 यूनिवर्सिटियों में बात की। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मैं मिसाल दे रहा हूं, एक यूनिवर्सिटी है जो आर्मी का एक शोबा चलाता है, बहुत ईमानदार लोग हैं ऊपर टॉप पे, जो उनका एचओडी है वो मेरा स्टूडेंट है पुराना। मैंने कहा यार मैं फ्री में पढ़ाता हूं, आप क्या हंस रहे हैं? मैंने कहा इसमें हंसी की क्या बात है भाई? वो कह रहे हैं वो मेरे सारे प्रोफेसर हैं, वो कह रहे हैं कि ये अगर फ्री में पढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा। अच्छा, मैं देखें चक्कर क्या है पाकिस्तान में, हमें ये समझना चाहिए कि हम सबसे पहले, मैं खुद, हम सब बहुत छोटे लोग हैं अपने डोमेन से बाहर। वो जो जुमला है ना कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, अगर आपने वो कोई ऐसा विन विन सिचुएशन निकालनी है कि जो ये सोचें कि दूसरे के भी पैसे बनेंगे, तो मैंने जब यूनिवर्सिटियों के साथ काम शुरू किया ना, मैं कहता था 60% आपको दूंगा, 40 मैं रखूंगा और मैं 40 टीचरों को पे करूंगा। इस टाइप का कोई फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, और इसमें मेरे पास इन्वेस्टर भी बहुत आए। आजकल मेरा फोकस नहीं है, इस वक्त ये कोरोना का मामला है, वरना ताहिर भाई की इतनी जान पे जान है कि ये 20 यूनिवर्सिटियों में तो यही शुरू करा दें, है? मगर आपको यूनिवर्सिटी तो करना की है, मैं शुरू करा देना। अच्छा, वही तो मैं कह रहा हूं ना, 20 में तो यही करा दें, मगर मसला क्या है, आपको विन विन करना पड़ेगा। 2 लोग इन्वॉल्व हैं, एक तो टीचर इन्वॉल्व है और दूसरे यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, इन दोनों को फाइनेंशियली बेनिफिट देना पड़ेगा। अच्छा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो ताहिर भाई नहीं समझते, ताहिर भाई भी ऐसे ही करेंगे, और क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल होना चाहिए। अगर वो, मैं बता रहा हूं, सिर्फ एक नॉन बिजनेस मॉडल मेरा चला है, या तो मैं खुद जब करता हूं तो मैं फ्री पढ़ाता हूं, मुझे किसी को जवाब नहीं है, मेरा ना मेरी बीवी है, वरना एक बच्चा है, किसी और को छोड़ दें। मैंने कल शादी की हुई होती है तो मेरी बीवी मुझे नहीं छोड़ती, कभी सारे पैसे उड़ा दिए, हम भूखे मर गए, तो क्या कहते हैं, सारे सभी नाज का 8,000 का जोड़ा चाहिए मुझे, तो मैं तो ये इसलिए कर पा रहा हूं कि मेरा कोई खर्चा नहीं है, मगर जो सबके साथ तो ऐसा नहीं है ना। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि हमें ऐसा कोई मॉडल बिल्ड करना चाहिए जो कि अच्छा, और ये सेल्फ सस्टेनिंग भी हो सकता है। देखिए, मैं भी सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हूं ना, मुझे तो गवर्नमेंट ने आज तक 1 रुपए भी नहीं दिया, कभी आज तक एक टिकट भी नहीं दिया है अमेरिका। मैं इस्लामाबाद भी जाता हूं, अपने टिकट से जाता हूं। तो पॉइंट ये कि हम लोग, ये पॉसिबल है शायद भाई आप जैसे लोगों का, सबसे पहले मेरे ख्याल से छोटे छोटे काम करते हैं। मेरे जहन में ये बात थी, यहाँ का पढ़ाने का एंड है, मगर अभी इस वक्त कोरोना का मामला है, हम क्लास तो कहीं कर नहीं सकते क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेने को तैयार नहीं हूँ, क्या कहते हैं, और गवर्नमेंट मना भी कर रही है, ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑनलाइन ही हो सकती है इस वक्त। तो दूसरी बात यह है कि हमें आगे चल के जब ये कोरोना खत्म होता है, ये वहां तो अमेरिका में ये 6 महीने में खत्म कर देंगे, इनके वैक्सीन तो आ गया है, हमें पहला काम ये करना चाहिए। मैं तो हमेशा उल्टी तरफ से, देखें लोग मुझसे पढ़ने को तैयार भी क्यों हैं, मोस्ट प्रॉब्ली मैं बाकी लोगों से बहुत नालायक हूँ, मगर मैं अमेरिका से आया था ना तो इसलिए पढ़ने को तैयार है। मेरे पास चार मास्टर डिग्री, मैं सच्ची बात करनी चाहिए ना, 4 मास्टर्स डिग्री हैं, उसमें से 3 अमेरिका की हैं, तो इसलिए पढ़ने को तैयार है। अच्छा, तो हमें, मैं अगला स्टेप पे ये सोच रहा था
कि हम बेरिया जाके और अमेरिका जाके, पहले मेरे साथ रिस्ट्रिक्शन थी कि मैं पाकिस्तान से मूव नहीं कर सकता था जरा भी। ताहिर भाई मसला ये था कि मैं कराची से जाऊं या लाहौर से जाऊं तो पीछे पढ़ाएगा कौन। अब ये हो गया ताहिर भाई, मैं और आप कहीं भी बैठे हो क्या फर्क पड़ता है। अब तो जैसे हम बात कर रहे हैं, अमेरिका से कि मैं पाकिस्तान से, कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कहां से बैठे हैं। तो हम इंटरनेशनल लेवल पे उल्टी तरफ से आए। हम अमेरिका वगैरह में ऑफिसेस खोल के हमने जो पहला स्टेज है ना वो अबूल कर लिया है कि आईआईसी में इस वक्त भी 2-4 हजार 5 हजार एम्प्लॉयबल लोग हैं। अच्छा चलो 5 हजार नहीं होंगे, 500 तो हैं जो वर्ल्ड लेवल के हैं। अच्छा वर्ल्ड लेवल के आप कहेंगे कि ज़िया भाई आपको कैसे पता कि वर्ल्ड लेवल के। मैंने उनसे कहा है कि भाई कुबरनेटिस का इम्तिहान दो, CKAD बाबर भाई समझते होंगे, इम्तिहान दो। तो उन्होंने बहुत सारे CKD का इम्तिहान दिया है, बहुत सारे पाइथन के इम्तिहान दिए हैं। अच्छा वो पेपर मैंने तो नहीं बनाए जो मैं कहूँ कि अच्छा, और हमारे अपने भी इंटरनल बल्कि CKD से ज्यादा ही टेस्ट मुश्किल पेपर होते हैं, ज्यादा तो नहीं मुश्किल मगर उन जैसे ही होते हैं। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास लोग हैं, सब कुछ है। हम क्या करें, जैसे आप बैठे हुए शायद भाई अमेरिका में, हमारे पास मैनेजर्स मौजूद हैं ताहिर भाई। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा हम कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ने की कोशिश करें, अच्छा मगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा जब तक आपका ट्रैक रिकॉर्ड ना हो। कोई क्यों मतलब ब्रेन सर्जरी में मेरे पास खुदा ना खास्ता मुझे ब्रेन सर्जरी की जरूरत हो तो मैं पहला सवाल क्या पूछूंगा कि यार कितनी सर्जरियां की हैं तुमने अभी तक, वरना तो मैं मुफ्त में। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, लड़के मौजूद हैं, मेरी कंपनी भी मौजूद है, ताहिर भाई की कंपनी भी है, ताहिर भाई बाबर भाई शायद आपकी भी हो, कंपनियां भी मौजूद हैं, क्या कहते हैं आसिम भाई की भी होंगी। पैसे भी आ जाएंगे, पैसे भी आ जाएंगे। आज तक तो मैंने जब कोई काम करना सोचा, ताहिर भाई आपने भी पैदा किया ही ना आज तक, ताहिर भाई आपने जब ये वीडियो बनाने हो कहीं से तो आए होंगे ना, अल्लाह मियां भेजता है, पैसे भी आ जाएंगे। असली मसला क्या है, कस्टमर लाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। कस्टमर लाना सबसे मुश्किल काम है। हम तो यहाँ उसको शॉर्ट सर्किट किया हुआ है कि हम फ्रीलांसिंग के थ्रू चले जाते हैं, वहां पे कस्टमर लाना कंपैरेटिवली आसान है। जय भाई आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि मार्केटिंग कस्टमर लाना सबसे मुश्किल काम है। हम थोड़ा सा दूसरा राउट जरा देख रहे हैं ना, मैं फिर वापस आती और ओरिजिनल डिस्कशन पे, हम अपना लोकल प्रॉब्लम क्यों नहीं पहले सॉल्व करते। कस्टमर हमारा पाकिस्तान में मौजूद है ना सर। एक प्रॉब्लम डॉक्टर साहब, एक प्रॉब्लम पकड़ लें और उस पे आ जाए। मिसाल के तौर पे शायद भाई एक प्रॉब्लम लेट मी फिनिश। मैं फिर वो एग्जांपल दूंगा कि हमने यहाँ पे लोकल प्रॉब्लम पकड़ा था अपना, बिल्कुल हमारी सिटी का। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ट्रेनिंग भी शुरू की और प्रॉब्लम भी सॉल्व किया और इकॉनमी को भी बेहतर किया। और यही हमें पाकिस्तान के अंदर करना है। लेट्स से कि मैं सिर्फ चलें कराची की बात करता हूँ या लाहौर की बात करता हूँ, कोई एक उसका प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं कि यार लाहौर का, मैंने लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि लाहौर के अंदर 500 रेस्टोरेंट हैं, ठीक है, जो कि अप टू द मार्क नहीं चल रहे, ठीक है ना, जिन पे 1000 किस्म के प्रॉब्लम है जो कि हैं। मैंने उनको किसी तरीके से उस रेस्टोरेंट सिस्टम को मैंने ठीक करना है यूजिंग डेटा एनालिटिक्स एंड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। प्रॉब्लम मेरे पास है, सोल्यूशन की तरफ मैं जाता हूं, मैं फिर उनके पास जाऊंगा कि भाई तुम्हारा कस्टमर सर्विस हम बेहतर करेंगे, तुम्हारी क्वालिटी ऑफ फूड बेहतर करेंगे, तुम्हारा रेवेन्यू हम बढ़ाएंगे, ये करेंगे, तुमने सिर्फ हमारे साथ कोलैबोरेट करना है और डेटा प्रोवाइड करना है, बाकी हम करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा पैसे सर नहीं चाहिए, मुझे 4-5 किड्स लेने हैं, उनको मुझे ट्रेन करना है, उनको मॉडल बनाने, उनके मसाइल मुझे हल करने हैं और उसका रोजगार आ जाएगा। इसी तरह मैं चला जाता हूँ किसी और इंडस्ट्री के अंदर, मैं होटल मैनेजमेंट में चला जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ एकेडमिया के अंदर, मैं चला जाता हूँ बैंकिंग के अंदर। देखें मुझे उसने एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात समझाई, कहता है ये पेन है ना, अगर ये पेन तुम बंदे के पास ले गए ना, कहेगा अच्छा यार ये पेन मेरा खरीद लो, वो कभी भी तुम्हारा पेन नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर तुम ये बताओ ना कि यार ये पेन है, इसके अंदर ये खसूसियत है कि इसको खोलो तो इसके अंदर ब्लैक इंक भी डाल सकती है, ब्लू भी है, व्हाइट भी है, और इसको तुम स्प्लिट भी कर सकते हो, फिर के अंदर इसके अंदर रिजर्व भी है, इसको ये करोगे तो ये। कहता है जब उसको तुम उसकी क्वालिटीज बताओगे ना कि किस तरह तुम उसका बिजनेस इंप्रूव कर सकते हो, तो वो तुमसे बंदा खरीदेगा। हमने उनके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उनको सोल्यूशन भी देने हैं कि तुम्हारे ये सोल्यूशन है, इस तरह तुम्हारी इकॉनमी हम बेहतर कर सकते हैं, तुम्हारा रेवेन्यू बेहतर कर सकते हैं,
उसको जब हम लेके चलेंगे तो फिर हम ट्रेनिंग भी करेंगे, फिर हम इकॉनमी भी बेहतर करेंगे और पाकिस्तान के लोकल मसाइल भी हम हल करेंगे। ये तरीका हमने यहाँ पे किया है, दुनिया के अंदर यही तरीका होता है। ये बहुत ज़्यादा देर से आप सुन रहे हैं, इस कॉन्फ्रेंस पहले भी सुन रहे हैं कि इंडस्ट्री एकेडेमिया का जो लिंक है वो नहीं है। वो सर इसलिए नहीं है ना कि एकेडेमिया वो बच्चा प्रोड्यूस नहीं करी जो इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हल करे। इंडस्ट्री जो है उसको वो एकेडेमिया से वो बच्चा ही नहीं मिल रहा कि जो उसका प्रॉब्लम हल करे। तो इसको हमने इसी तरह नेटवर्किंग इनकी करनी है और हमने इनको एजुकेट करना है। अच्छा, गुड थिंग अबाउट दिस एआई ये है कि चले भाड़ में गई एकेडेमिया, वो जो कुछ भी कर रही है, आई डोंट केयर। मैं फिर भी बच्चे को साल 1.5 साल की मैं ट्रेनिंग दे के मैं पाकिस्तान के मसाइल हल करवा सकता हूँ। उसने वो जो F=ma+b² जो पढ़ा हुआ है ना, उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। इसके बावजूद उसको, आपने टेंसर फ्लो की बात की, यार मैं 10 मिनट के अंदर उसको टेंसर फ्लो सिखा सकता हूँ कि भाई इसके अंदर बेटा वेक्टर है, स्केलर है और टेंसर्स हैं और उसने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करनी है और ये वाला सारा डेटा आता है, उसको मल्टीप्लाई करना है, उसकी प्रोडिक्शन करनी है। मैं 10 मिनट के अंदर उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं बच्चे को मैं सिखा सकता हूँ। उसकी मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने टेस्ट रन किया है। जुलाई के अंदर हमने इसी तरह डिस्कशन की थी कि यार ये करना। अगस्त के अंदर हमने एक ट्रेनिंग शुरू कर दी। मेरे पास बच्चे आए, उनमें से 30 बच्चे ऐसे रेडी हो गए जो जिनका बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं था। मैंने अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उनके 4 महीने मैंने उनकी ट्रेनिंग की। फाउंडेशन ऑफ एआई से कोई मैथमेटिक्स, कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं है। उसके बाद मैंने उनको ले गया हैंड्स ऑन के ऊपर। उसके बाद मैंने उनको प्रोजेक्ट दे दिया। मैंने ऐसा एक डेटा सेट उठा के उनको दिया जो कि मुझे भी नहीं पता था कि इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने भाई ये डेटा सेट है, इसका तुमने ये चीजें करके देनी है। उन 30 बच्चों ने 4 महीने मेरे साथ स्टिक इन रहे थे। 5 ग्रुप मैंने उनके बनाए, 5-5, 6-6 लोगों के। उन्होंने आके प्रेजेंटेशन दी। ये वो लोग थे जिनके पास कोई नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था एआई का, कोई डेटा साइंस का बैकग्राउंड था, कोई पाइथन का बैकग्राउंड था। और कई बच्चों ने स्ट्रगल किया था मैथ के साथ भी। वो मैट्रिक से लेके एमए या पीएचडी तक के लोग थे। सर मैंने मॉडल टेस्ट किया है, ठीक है। आई गिव ए डैम कि यूनिवर्सिटी मेरी क्या प्रोड्यूस कर रही है, बट आई डू अंडरस्टैंड अगर उनको मेंटर ठीक मिल गया ना, अगर मेंटर ने उसको बता दिया कि यू कैन डू इट, दे कैन डू, एंड वी हैव डन इट। अब मैं सिर्फ ये कह रहा है कि मुझे एक प्लेटफॉर्म दे दें, एलएमएस सिस्टम दे दें जहां पर मैं 2, 4, 5, 10, 15, 20 हज़ार बच्चा जो है ना आ जाए। मुझे पैसों की भी जरूरत नहीं है। हमने उर्दू के अंदर कंटेंट बनाना है, मजीद उसको रिफाइन करके हम उसको चढ़ा देंगे। मुझे एक सिर्फ थोड़ा सा इशू आएगा कि वो बच्चा, वो जो कब्र मैं तैयार करूंगा उसके अंदर मुर्दा किधर से डालना है। उस मुर्दे को ढूंढने के लिए मुझे इंडस्ट्री के पास पहले जाना है कि भाई ये मैं कब्रें बना रहा हूँ, इसको करने के लिए मुझे इस मुर्दे चाहिए, इसके लिए तो मुर्दा मुझे तुमने देना है। तुम्हारा मसला मैं हल करूंगा, तुम्हारे मुल्क का प्रॉब्लम हल करूंगा। अगर मैं इंडस्ट्री को किसी तरीके से कन्विंस कर दिया, अगर इंडस्ट्री ने मुझे मुर्दा दे दिया, मैं कब्रें ये मैं फिल कर दूंगा, फिर आप देखिएगा कि हम पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। हैव टू डू इट। ये बातों से नहीं। वो डॉक्टर शायद आपने वो कब्रिस्तान वाली बात नहीं बतानी इनको। कौन सी जो आपने वहां टैबलेट किया वो नहीं बतानी, वरना और हालात खराब हो जाएंगे। कौन सी जो आपने कब्रिस्तान वहां एस्टैब्लिश किया मुसलमानों के लिए, वो छोड़े। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सर मैं मॉडल टेस्ट कर चुका हूं, हमने प्रोटोटाइप टेस्ट कर लिया है, वी कैन डू इट, देयर इज नो, आई डोंट सी एनी रीजन व्हाई वी कैन नॉट डू इट। हम इसको कर सकते हैं। डॉक्टर शाहिद और जिया साहब ये बताइए शुरू कहां से करना है? मैं तो कह रहा हूं आप 2-3 चीजें आप मुझे दे दें। एक तो मुझे एलएमएस सिस्टम दे दे जहां पे मैं पूरा सिस्टम गेटिंग ऑन बोर्ड हिशाम सर्वर जी। ओके, हाँ हिशाम भाई, वालेकुम। एक तो मुझे आप एलएमएस सिस्टम दे दे जहां पर मैं पूरा सिस्टम ये सारा चढ़ा दूं, ठीक है। दूसरा जो जरूरी है कि वो बच्चा मुझे यही कहता है कि सर हम कर लेंगे, अब हमने आगे करना कि मैं उनको फ्रीलांसिंग की तरफ, हिशाम से सीख के फ्रीलांसिंग की तरफ उनको मैं लेके जा रहा हूँ कि आप अपवर्क पे या द फाइबर पे ये प्रोजेक्ट, गिटहब पे आप चले जाएं, कैगल्स पे चले जाएं, आप ये प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन वो बहुत कम बच्चे होंगे। दूसरा मुझे वो एक ऐसा बंदा चाहिए जो मुझे बैंकिंग के वीसीज के साथ मिला दे, जो मुझे अस्पतालों के वीसीज के साथ मिला दे, जो मुझे यूनिवर्सिटीज के वीसीज के साथ। उनको मैंने बोलना है कि यार तुम्हारे ये मसले हमने हल करने हैं और डेटा के साथ हम करने हैं, ये मेरे पास बच्चे हैं,
इनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। ये हिशाम मुझे हेल्प दे रहा है, बाबर मुझे हेल्प दे रहा है, ताहिर भाई, जिया साहब मुझे, आसिम भाई मुझे हेल्प दे रहे हैं। इन बच्चों को अगर सिर्फ तुम 5,000 रुपया इंटर्नशिप ही दे दो महीने की, ये बच्चे स्टिक इन रहेंगे मेरे साथ। ये अगर 6 महीने की मैं ट्रेनिंग दे दूं, 30,000 बच्चे को तो स्पॉन्सर कर दो, ये बच्चे मेरे साथ स्टिक इन रहेंगे। डॉक्टर साहब आगे चलते हैं, डॉक्टर साहब आगे चलते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का कामयाब नौजवान प्रोग्राम का ये प्रोग्राम है, मैं उस कमेटी में भी हूँ और बाकी बहुत सारी चीजों को देख रहा हूँ। आपको कितने बच्चों के लिए कितने स्कॉलरशिप चाहिए, मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट आगे चलें। अच्छा चलें, इससे बात स्टार्ट कर लें। अब बात अगर आपने की, लेट्स पुट ए टारगेट। अगर मैं कहता हूं कि मैंने 2025 तक पाकिस्तान का 1 मिलियन बच्चा मुझे 10 लाख करना है, तो मुझे साल में करना है 2 लाख बच्चा। 4 सूबे हैं, मुझे एक सूबे में 50,000 बच्चा तैयार करना है। ठीक है, उनमें शहरों में आप देख लें, अगर हम उसको मैं कहता हूं जी मुझे लाहौर से जो है ना वो 5,000 बच्चा तैयार करना है, कराची से मुझे 10,000, प्रपोर्शन उसकी कर ले, उस हिसाब से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अब फंडिंग अब कहां से आएगी? मैपिंग कर दी आपने। नेक्स्ट पायलट करें इसका। जी पायलट मैं इसलिए मैं यही कह रहा हूं कि आप मुझे LSMS दे दें, हम अपने कंटेंट को जो है ना वो जरा रिफाइन कर दें, सारा एकदम से उसको रिफाइन, मुझे 2-4 बच्चे मिल दें जो वीडियो शीडियो ये वो सारा लटरम पटरम वो सारा कर लें, वो कंटेंट एक दफा रिफाइन हो गया। 6 महीने की हम ट्रेनिंग देंगे, हम 0 से लेकर डीप लर्निंग तक उनको लेकर जाएंगे, जहां पर वो बच्चा अपने पांव पे खड़ा होकर फ्लोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर मजीद 6 महीने करके अब प्रोजेक्ट भी हम उसको देके, वो 1 साल की ट्रेनिंग है, वो पाकिस्तान का एक एसेट बनेगा जो अगर पाकिस्तान का भी मसला हल कर पाएगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी से प्रोजेक्ट भी उठा पाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। डन हो गया, आगे चलें। नेक्स्ट स्टेप बताएं। नहीं, नेक्स्ट स्टेप यही कहना, फिर उसको स्केल अप करेंगे ना हम। ठीक है ना, एक पायलट ये बताइए 2021 में ये जो फुटप्रिंट है हमारा, इसके ऊपर कितने स्टूडेंट्स को हमने लेना? दिसंबर 2021 तक अगर साल की बात करें ना, मैं आपको पूरा एक पायलट प्रोजेक्ट रन करके 5,000 बच्चों का मुख्तलिफ सूबों से, मुख्तलिफ एजुकेशनल बैकग्राउंड से उठा के मैं आपको साबित कर दूंगा कि ये इज डूएबल, वी कैन डू इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डन हो गया। आपको क्या चाहिए, ये एक प्लान बना लें, ये 6 लोग बैठे हैं इस वक्त, आप भिजवा दें। इसमें जो हमारी तरफ से चाहिए हमें बता दें, जो आपने करना है वो बता दें, जो जिया साहब ने करना है वो बता दें। आसिम भाई जहां जा रहे हैं वो वहां से हेल्प कर देंगे। हिशाम भाई यहाँ बैठे हैं और ऊपर हमारे बाबर साहब बैठे हैं, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी नेक्स्ट में। ठीक है, जी बाबर आप कुछ कह रहे हैं? जी, हम शेरवानी साहब को भी ऑन बोर्ड करेंगे, उस्मान साहब को भी ऑन बोर्ड करेंगे। बिल्कुल करें। नहीं, वो तो मैं अगली बात कर रहा हूँ ना, वो तो बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि अभी सारी चीजें अवेलेबल हैं, यूटिलाइज नहीं हो रही। हाँ, ठीक है ना, हमने कड़ियों को जोड़ना है। मिसिंग चीजें जो है, जिया साहब कंपनी बना के बैठे हुए हैं सिलिकॉन वैली में, ठीक है ना, बे एरिया में, उनको लोग चाहिए यहाँ से। यूनिवर्सिटियों को इंटर्नशिप चाहिए, PSEB को इंटर्न्स प्लेस करने हैं, कामयाब नौजवान प्रोग्राम। हम तो एक इंस्टीट्यूट के साथ, मैं, बाबर और कुछ और हमारे चैंपियन यहाँ बैठे हैं, हम तो वहां बच्चे उनको 275 बच्चे मिले हुए हैं, वो बच्चे पूरे नहीं हो रहे इस्लामाबाद जैसे शहर में। ठीक है ना, चैलेंजेस बड़े डिफरेंट हैं, कोविड की वजह से कुछ चीजें और फर्क हैं, लेकिन आई एग्री विद यू, वी विल स्टार्ट मेक ए ब्लूप्रिंट, एक उसका पायलट कर लें। 2021 के दिसंबर 31 को जब हम बैठे हों तो हमें 5,000 स्टूडेंट को क्या करना है ये मुझे बता दें, आई विल हेल्प यू आउट। सर ये आप मेरी आपकी कमिटमेंट, लेट्स सिट टुगेदर। मेरे पास प्लान है, मैं उसको एक वाइट पेपर ब्लूप्रिंट में मैं ले आता हूँ, पूरा शेड्यूल आपको बता देता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिक्वायरमेंट भी आपको बता देता हूँ, जो टाइम स्केल के साथ सारा मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। विल मूव फ्रॉम देयर इंशाल्लाह। जिया साहब बैठे हैं, जिया साहब से जो आपको हेल्प चाहिए, मेरी तरफ से ब्लैंक चेक है, हाजिर है। आपको करिकुलम चाहिए, इनके पास बना हुआ है, आपके पास वीडियो चाहिए, आपको ट्रेनर्स चाहिए, किस शहर में चाहिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, कराची से बस में ट्रेनर बैठे हैं, सियालकोट जाके लैंड किया है डायरेक्ट बस में, और वहां जाके उनको पढ़ाया है। इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। मान लीजिए नोटिस पे हम यहाँ से पेशावर गए और पेशावर की 4 यूनिवर्सिटियों में फिर के हमने जगह पसंद की है, चारों यूनिवर्सिटियों ने कहा जी बताएं आपको कितनी जगह चाहिए, कहाँ आपको हॉल लगाना है। जिया साहब कहते हैं जी मुझे लाहौर में जगह चाहिए, जिया साहब ने कहा जी मुझे फैसलाबाद में जगह चाहिए, मैंने कहा जी चलें, जगह ले दी उनको, जगह यूनिवर्सिटी में हॉल, सो एवरीथिंग इज अवेलेबल। आप बताएं करना है।
जगह भी नहीं चाहिए, जगह भी नहीं मैं चाहिए। ऐसा कर रहा हूँ ना, मैं तो मिसाल दे रहा हूँ जो काम कर चुके हैं। हाँ, मैंने सर 10,000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स ट्रेन किए हुए हैं इस पाकिस्तान के लिए, जो नादरा में इस वक्त सर्व कर रहे हैं। मैं 2 दिन कराची, 2 दिन लाहौर, 2 दिन इस्लामाबाद जाता रहा हूँ। एक दिन घर में होता था, सब्जी गोश्त ला के देता था, ठीक है ना। सो मेरे पास टेस्टेड केस है, मैं बातें नहीं करता, मैं काम करता हूँ। आप मुझे एक व्हाइट पेपर को ब्लूप्रिंट में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, और 5,000 स्टूडेंट का बना दें। ये सारे चैंपियन बैठे हैं, ये सारे जिगर गोशे बैठे हैं यहाँ पे, इनमें से जिसको जो काम, और इस तरह के 100 लोग हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सही है। इस वक्त जॉब लेंगे सर, मेरे पास 200 यूनिवर्सिटीज हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिया भाई आपने 6 यूनिवर्सिटियों में तो देख लिया आपने क्या काम किया। जी जी, ठीक है ना, कोई शक आपको कि यूनिवर्सिटियां में सपोर्ट नहीं करेंगी? नहीं, जहाँ अगर ताहिर भाई साथ होंगे तो कोई मसला नहीं होगा। तो आप सर यूनिवर्सिटियां सारी ऑन बोर्ड करें, आप समझें, आप सारे ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन, और श्याम भाई बैठे हैं, बाबर भाई बैठे हैं, आसिम भाई बैठे हैं, जिया भाई बैठे हैं, और इस तरह के 100 भाई हमारे पास और हैं। आगे बताएं क्या करना है। नहीं तो आगे इसको मैं एक ब्लूप्रिंट बना लेता हूँ, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ, उसको माइलस्टोन हम बना लेते हैं, टाइम बना देते हैं, रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए, टेक्निकल हमें कितने चाहिए, 5,000 बच्चों का हमने टारगेट रखना है, इंशाल्लाह विल गेट इट डन। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 5,000 को 200 यूनिवर्सिटियों पे डिवाइड कर लें, आपका रिजल्ट निकल आएगा सर। रिजल्ट निकल आएगा, बिल्कुल। वैसे मायने में आप यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्यों जा रहे हैं? वो जिसने पहले भी जिया साहब ने बात की थी कि यूनिवर्सिटी नहीं आपको अकोमोडेट करेगी। डॉक्टर साहब 750 कंपनियां स्टार्टअप की मैंने यूनिवर्सिटियों से बनाई है। मंडे को मैं फिर जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी से बनाई है, यूनिवर्सिटी के बच्चों को सर ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के बच्चों ने बनाई है। नहीं यूनिवर्सिटी के बच्चों, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑन बोर्ड होती है आपके साथ, मुझे बुलाती है, मैं वहां खड़े होकर लेक्चर देता हूँ। सबसे पहले कमाल है सर, ये अल्लाह का करम है कि नस्ट के साथ हमने काम किया, आईबीए के साथ हमने काम किया, फास्ट के साथ हमने काम किया, यू नेम इट, सखर आईबीए के साथ हमने काम किया है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैं बाद में गया हूँ, मेरे बच्चे ने फैसलाबाद में, ये बाबर भाई साथ थे, आसिफ भाई नहीं गए थे, बाबर भाई साथ थे, उस बच्चे ने फैसलाबाद में हमारा लेक्चर सुना है और जाके मेहरान यूनिवर्सिटी में काम शुरू कर दिया। अगले हफ्ते में मेहरान जा रहा हूँ। लेट्स डू इट सर। शाहिद भाई, अभी कासिम भाई ने कोई कमेंट्स में सेक्शन में जाके देखिएगा, वो कह रहे हैं मैं आपके लिए एलएमएस सेटअप कर देता हूँ। हाँ, ये कौन है बिल्कुल कनेक्ट। ये पता नहीं, मेरे भी एक जानने वाले कासिम साहब हैं, मगर मुझे पता नहीं है कि कौन से वाले कासिम है, क्योंकि मोहम्मद OSFP के समय। अच्छा देखें, अभी तक हम सप्लाई साइड पे बात कर रहे हैं, हमने डिमांड साइड पे बात नहीं की है। देखें, वी शुड नो कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस तरह आप बात कर रहे थे इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस की, PSEP ने मेरे ज़माने में वी प्लेस 3800 interns in more than 200 IT companies of Pakistan, and 60% of them ended up getting jobs after completing the 6-month internship, क्योंकि उनको वो skill set आ गया था by working in those companies for 6 months that they became employable for those companies. तो उसी तरह आपको चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के साथ यूनिवर्सिटी शुड बी इंटरेक्टिंग विद चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑन अ मंथली बेसिस कि आप हमें बताएं कि आपको किस किस्म के आईटी सॉल्यूशंस चाहिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, रिटेल सेक्टर के लिए, एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। फिर आपकी यूनिवर्सिटीज उनके लिए वो सॉल्यूशंस बनाएं, क्योंकि जब आप फॉरेन प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करेंगे, अगर आपकी लोकल कैपेसिटी नहीं होगी, वो आपसे पूछेंगे कि आपने पहले कौन से प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, किस लेवल के किए हुए हैं। अगर आपकी कंपनीज ने उस स्केल के प्रोजेक्ट्स ही नहीं किए हुए तो दे विल नॉट रिस्क। अगले साल आप सिर्फ पाकिस्तान पे फोकस करें, डोमेस्टिक बिजनेस पे। हाँ, आप विद इन बेशक 5,000 रुपए का काम कर लें, लोकल करें, अभी आप बाहर की बात ना करें। यस, तो पहले हम बिल्ड कैपेसिटी लोकली and then be more successful in। मैं आपको पहला टास्क दे देता हूँ, फैसलाबाद में एक हॉस्पिटल है, उसको अपनी फार्मेसी के लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए, पूरी फार्मेसी को चलाने के लिए। उसके बाद पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। पहला कस्टमर मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप सवाल। अच्छा, मैं
हिशाम को मैं डिस्कशन में शामिल करना चाह रहा हूँ। हिशाम साहब आके बैठे हुए हैं। हिशाम ये साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इट शुड कम टू एन एंड। और आसिम भाई की बात 110% सही है, सिर्फ सप्लाई साइड फोकस की हुई है, डिमांड साइड को देखें। ये बोलना ऐसे तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई प्रोडक्ट आई हुई होती है जिसकी डिमांड नहीं है, उसने की करना तुझी मार्केट। So I'll stay quiet. It's an important discussion and आसिफ भाई ने सही पल्स दबाई है, आसिफ भाई ने पल्स सही दबाई है। मैं एक पॉइंट पे आना चाहूंगा, जो अभी ये डिमांड साइड की बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बड़ा शदीद एहसास था ताहिर भाई कि एक जगह में बहुत ज़्यादा नाकामी हुई है, दो जगह मुझे बहुत ज़्यादा नाकामी हुई है। एक तो ख़वातीन में कंप्यूटर साइंस की दिलचस्पी पैदा करने में मैं इतना कामयाब नहीं हुआ, और 10% से ज़्यादा ख़वातीन की पार्टिसिपेशन नहीं है इवन PIIC में भी और भी जगह भी। तो वो फिर किसी और दिन डिस्कशन का मौजू है। मगर जो दूसरी जगह में मसला था कि मैं जो बच्चे ट्रेन कर रहा हूँ ज़्यादातर मैं उनको फ्रीलांसिंग इंटरनेशनल की कहता हूँ, तो वो मामला ठीक नहीं है कि उसका सिर्फ एक बेनिफिट होता है कि फॉरेन एक्सचेंज आता है पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तान में प्रोजेक्ट पे काम होगा, जैसे सर आप सारे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फर्ज करें हॉस्पिटल को हमने वो कर दिया ऑटोमेट, तो उससे ना सिर्फ ये कि पैसे तो मिलेंगे ही बच्चे को, मगर पाकिस्तान का भी फायदा होगा सिवाय फॉरेन एक्सचेंज के अलावा भी। तो अच्छा मैं ये बात समझता हूँ। अच्छा, मेरी साथ खुशकिस्मती ये है कि मेरे ताहिर भाई जैसे दोस्त हैं, मैं तो किसी को नहीं जानता, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो तकरीबन सभी को जानते हैं। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नवेद करीम साहब, वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस वक्त सॉफ्टवेयर कंपनी है टेमिनॉस, और उसके साथ NDC है जो कि 12 बैंकों में उनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। टेमिनॉस एक यूरोपियन कंपनी है और यहाँ का उनका डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो NDC है, और नवेद भाई उसके मार्केटिंग लीड है, और ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि यार ये तो सारे बैंक इनके कस्टमर हैं, तो भाई मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। तो सर बाबर भाई मैंने क्या किया, मैंने नवेद भाई को कहा कि मेरे सारे CTO जितने भी बैंक के CTO है ना, सबसे मुझे बुलवा दें। फिर मैंने ना एक ड्राफ्ट पेपर तैयार किया। मैंने कहा कि कुबरनेटिस की सर आपने बात की ना बाबर भाई, मजा भी आएगा, आपको बात भी समझ में आ रही होगी। मैंने उनको कहा कि मैं आपको लड़के भेजूंगा, पैसे मैं दूंगा। पैसे कौन देगा? मैं। आपके पास 15 से दिन लगा के आपके हार्डवेयर पे, ताकि आप लोग उस पर कंफर्टेबल हो, कुबरनेटिस वगैरह सारा इंस्टॉल कर देंगे और आपको प्राइवेट क्लाउड बना देंगे। अच्छा बाबर भाई, आपके लिए भी ये कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, मेरा सोर्स इतना मजबूत, नवेद करीम, मैं आपको सारे नाम ले रहा हूं उन सबका, क्योंकि टेमिनॉस को यहाँ पे मोनोपोली है। स्टेट बैंक के पास भी टेमिनॉस है, यहाँ टेमिनॉस की मोनोपोली है। अच्छा, अब मैं CTO के साथ आके बैठ रहा हूं, हम लोग उनकी दावत भी कर रहे हैं। अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। बाबर भाई, आपके ख्याल से मेरा ऑफर ये किसी ने एक्सेप्ट किया होगा? नहीं। क्यों ताहिर भाई? सर, आप सबसे हाई एंड सिक्योर इंडस्ट्री के साथ बात कर रहे हैं और बच्चों वाली बात कर रहे हैं, उनकी चीजों को छेड़ने की बात कर रहे हैं। आप उनका एक सिंपल क्लर्क के पास जो डेस्कटॉप होता है, आप उसको नहीं छेड़ सकते। आसिम भाई, मैं आपकी बात का जवाब मैं थोड़ा सा इस तरह दूंगा कि थोड़ा सा मुझे आपकी बैकग्राउंड का नहीं पता, लेकिन मैंने आई रेड समवेयर कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर या प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना? अगर मैं आपको ये कहूँ कि आसिम भाई, मैं आपको 500 लोग ला के दूंगा जो इसके पेड मेंबर होंगे, ठीक है, और आपको मैं 200 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान से उठा के दूंगा जो कि इसको फंड करेंगी एनुअली, वुड यू माइंड गिविंग मी दिस प्रोजेक्ट? ओपन सोर्स फाउंडेशन को ठीक है ना? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, आप करेंगे ना? और वो आगे मेरा काम है कि मैंने कैसे करना है, ठीक है ना? तो मार्केट कहाँ है? मार्केट आप बैठे हैं ना, आपको तो पता ही नहीं कि आपका प्रॉब्लम क्या है। डेटा न्यू फ्यूल है ना, न्यू ऑयल कहते हैं ना, वो तो मैंने बताना है आपको कि भाई आपका ये वाला मसला मैं हल कर सकता हूं डेटा का, AI का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना? ये नहीं होगा कि हम पहले ये देखें कि यार वो कहाँ पे जरूरत है इस टाइम पे डिजिटल दुनिया के अंदर, आजकल की दुनिया के अंदर, AI की वर्ल्ड में। ये नहीं होगा कि पहले मैं होल देखूं, ये होल उसको जाकर फिल करूं। नहीं,
हमें उसको जाके बताना होगा कि तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में ये होल्स हैं, यहाँ पर तुम फिल इन कर सकते हो, ये हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये हमें अपनी इंडस्ट्री को हमने बताना है। देखिए मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं घर में पैसे भेजता हूँ, तो मेरे सिस्टर का बैंक अकाउंट बंद कर दिया हबीब बैंक ने, यूबीएल ने बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि आपके पैसे बाहर से आते हैं और यहाँ पे 1000 किस्म के मसाइल हैं, तो हमने अकाउंट आपका बंद कर दिया। अच्छा जी क्या करना है जी, आप वो जो पैसे भेजते हैं ना, आप उनके डॉक्यूमेंट्स भेजें। अच्छा जी, मैंने अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, वो लेकर चले गए। वो कहते हैं जी ठीक है, अब इसको आप अटेस्ट करवा के लाए किसी गैजेटेड ऑफिसर से। मैंने को यार अजीब बात है कि मैं अमेरिका का डॉक्यूमेंट है जो कि फोटो कॉपी है, वो पाकिस्तान में क्या उसने टेस्ट करना है। खैर मेरे एक दोस्त ने टेस्ट कर दिया, जाके उसने जमा करा दिया। वो कह जी अब आपने भेज दिए हुए हैं, तो वो तो पता नहीं कब जवाब आएगा, अब आप जो है ना नया अकाउंट खुलवा लें। अब उसी वक्त नया अकाउंट खोला, मैं उसी तरह ही पैसे भेज रहा हूँ। सर ये लूप होल हमने फिल करने हैं, उनको बताना है कि अगर तुम्हारे इस किस्म के मसाइल हैं तो हमने किस तरह सॉफ्टवेयर के जरिए या डेटा के जरिए या एआई के जरिए हम तुम्हारे ये मसाइल हमने हल करने हैं। ठीक है, प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन भी हैं। मैं इससे मैं एग्री नहीं अनफॉर्चुनेटली करता कि हमने डिमांड हमने क्रिएट करनी है। और मुझे पता है कि इस वक्त दुनिया के हर कोने में डिमांड है, हर कोने के। मुझे 1000 ईमेलें रोजाना आती हैं कि अच्छा तुम्हारा ये मसला हम हल कर देते हैं, तुम्हारा ये मसला हल कर दे, अच्छा तुम ये करे, तुम वो करे, तुम हम ये, वो मुझे कन्विंस करते रहते। लेकिन तो यही हमने अपनी इंडस्ट्री के साथ करना है। बड़ी सिंपल सी बात है जी। मैं सॉरी, यहाँ इस्लामाबाद में एक कंपनी है जिसकी इस वक्त वर्थ 110 बिलियन है पाकिस्तानी रुपीस में, और जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ आज से 7-8 साल पहले की, वो कोई 45 बिलियन पे थी। मुझे 2.5 साल लगे उसके सेठ को, जो 22 साल से मेरा दोस्त है और मेरी 2 गलियां छोड़ के रहता है और मेरी मस्जिद में सुबह फजर की अजान दे के नमाज पढ़ता है, उसको 2.5 साल लगे मुझे कन्विंस करने में कि तुम एक ईआरपी सोल्यूशन ले लो। उसको मैंने आपकी जुबान में, डॉक्टर साहब आप जो भी बात कर रहे थे ना आसिम भाई से, कि मैंने कहा अपने दोस्त को मैंने मुखातिब करके कहा, मैं उनके दफ्तर में बैठता था समझ लें कि अमल दखल था मेरा, उसके बावजूद मैंने कहा यार आपको 1.5 करोड़ रुपया खर्च करना है, उसके साथ 1 करोड़ रुपए का आपका टाइम का लॉस होगा। और एक ईआरपी कंपनी ने उनको कहा कि जी हम 3 महीने में इंस्टॉल कर देंगे। मैंने कहा बेटा मेरे जितने बाल सफेद है ना उतने तुम्हारी उम्र नहीं है, उतना मेरा तजर्बा है। मैंने कहा तुम 1.5 साल में अगर डिप्लॉय कर दो ना इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो मेरी तरफ से मतलब मैं खुश हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तुमने सेठ साहब को 3 महीने कहा है, लीव इट। 1.5 साल के अंदर मैंने कहा आपका 2.5 करोड़ रुपया खर्च होगा। पहले साल अगर आपको 10 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट ना हो तो पैसे वापस। आज सर वो 110 बिलियन की कंपनी है, 18 शहरों में 7 शहरों में 1800 लोग काम करते हैं। ठीक है, दे आर ग्रोइंग लाइक रॉकेटिंग। वोल्टा बैटरी की मैं मिसाल दे देता हूँ। तो बेसिकली ये 360 डिग्री का पूरा मॉडल है जिसके अंदर चेंज मैनेजमेंट भी आएगी, उसके अंदर साथ में एम्बेड भी करना है। वही अंडा पहले या मुर्गी पहले, ये एक अलग बहस है, लेकिन आप चीज तो देना। सॉरी एक एग्जांपल, मैं फिजिकल एग्जांपल मैं जरा कन्विंस करना चाह रहा हूं ताकि एक दफा मैं इंटरप्ट करूंगा जी, एक मैं इंटरप्ट करूंगा। हाँ 10 मिनट में हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, मुझे हाँ ठीक है, मुझे 2 मिनट चाहिए। एक हमारे पास प्रोजेक्ट आया कंसल्टिंग का था जो कि हमें मिला नहीं है, लेकिन हमने उनको वो रीजन वो कह रहे हैं जी कि हमारे पास एम्प्लॉई आता है, ठीक है, वो एम्प्लॉई टिकता नहीं है, तो हम चाहते हैं कोई ऐसा एम्प्लॉई हम रखें, बड़ी कंपनी थी, हम ऐसा एम्प्लॉई रखें कि वो टिक जाए या जो भी तरीका। हमने बोला ठीक है, हमने उसका पूरा एनालिसिस किया। हमने उसको एनालिसिस करके बताया कि जिस दिन तुमने फोन उठाया ना कि मुझे एक एम्प्लॉई चाहिए, उस दिन से लेकर जो बंदे उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि उसने फोन उठाया, मैंने बाबर को कहा, बाबर सीईओ है, उसने एचआर को कहा, एचआर ने 2-4 फोन कॉल की, ये किया वो किया, बंदा हायर किया, बंदे हायर करके ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद उसको तनख्वाह दी, जो भी 65,000 यूरो लगता है एक बंदे को हायर करके, जिसकी टोटल तनख्वाह 20,000 यूरो साल की होगी, और महीने के बाद या 2 महीने के बाद छोड़ के चला जाता है। ठीक है, 4 टाइम्स लॉस होता है हमारी एचआर की। मैंने भाई मैं सीईओ हूँ, मैं $10,000 मैं पर वीक ले रहा हूँ, जब मैं फोन उठाता हूँ तो मेरे पैसे वहां से कट रहे हैं ना, आई एम स्पेंडिंग, ठीक है ना, somebody is paying for this।
उसको हमने एक प्रिडिक्टिव मॉडल बना के दिया कि ये प्रिडिक्टिव मॉडल है तुम्हारा। उसकी पूरी हिस्ट्री उठाई हमने उसके एम्प्लॉइज की, जो छोड़ गए हैं, जो नहीं छोड़ के गए, जो स्टे किए हैं, वो पूरे हमने प्रिडिक्टिव मॉडलिंग करके बताया कि अब जो तुम्हारा नया कस्टमर एम्प्लॉय आएगा उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे कि ये कितनी देर ये ठहरेगा। ठीक है, उनको बात हमारी समझ आ गई। ठीक है, उसको बात हमने जो उसको कोट की थी प्राइस, वो उसकी रेंज में नहीं थी। ठीक है, और खैर उन्होंने प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि हम प्रॉब्लम उठा के उनको बताएंगे कि तुम्हारी सेविंग कितनी होगी, फिर हमारी मार्केट भी ठीक होगी और ट्रेनिंग भी होगी और पाकिस्तान की इकॉनमी भी चलेगी। सॉरी मैंने 2 मिनट से ज्यादा कर लिए हैं। तो जी शाम भाई, आधा ग्लास भरा हुआ आधा ग्लास खाली, पर अच्छी बात यह कि बहस बहुत अच्छी है। चाहे एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि आप डिमांड क्रिएट कर सकते हैं बाय टेकिंग द फर्स्ट प्रोएक्टिव एक्शन, विच इज व्हाट शायद भाई इज इंसिस्टिंग, और वो बड़ी सही बात है। मतलब वो काम कर रहे हैं ना, उनको लोग बता रहे होंगे कि यार इस चीज़ की डिमांड है, इनको पता है कि मैं तकमील के साथ इनडायरेक्टली जुड़ा हूँ को पिछले कुछ 7-1 साल से, तो मैं तो देख रहा हूँ ये प्रोग्रेस। आसिम भाई भी गलत नहीं कह रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आसिम भाई इज मोर ऑफ अ कैलकुलेटेड आदमी ना, वी ऑल नो दिस, पूरा कैलकुलेशन के साथ चलना। तो उनके नज़दीक एक ऐसी चीज़ ठीक है कि पहले डिमांड हो जाए तो फिर उसको देख लेते हैं। बट वन थिंग इज फॉर श्योर, वक्त चेंज हो रहा है और मेरे ख्याल में जितनी जल्दी प्रोएक्टिवनेस दिखानी चाहिए दिखा देनी चाहिए, रादर देन यू नो द वाटर स्पेल्स ओवर। तो अगर कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है बाय प्रोवाइडिंग द ईआरपी, प्रोवाइडिंग द एलएमएस एंड ऑल दैट स्टफ, मैं कमेंटिंग में तारिक रहमान साहब कमेंट करें, मैं इसके 100% सहमत हूँ। आजकल के दौर में 6 महीने में ईआरपी सर हो जाती है, मतलब वो वक्त भी एडवांस हो गया है, दुनिया भी तेज हो गई है। तो एनीवेज proactiveness, I think it's about time, let's take action to get this done. शामबार भाई, आप इस चीज पे भी एग्री करेंगे। देखें कि आपने फ्रीलांसिंग में लर्न किया होगा कि फ्रीलांसर्स उसी वक्त जॉब मिलता है व्हेन दे हैव एक्सपर्टीज इन द स्किल सेट व्हिच इज नीडेड बाय द क्लाइंट। अगर आपके ग्रेजुएट के पास वो स्किल सेट नहीं है जो क्लाइंट को चाहिए, तो दे वोंट गिव हिम द जॉब। तो आप ये नहीं कि आप फोर्ट्रेन में कोर्स कर रहे हैं और क्लाइंट को जावा और .NET का प्रोग्रामर चाहिए, तो दे विल नॉट गिव दिस जॉब। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द करंट डिमांड ऑफ बोथ द लोकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट सेकंड फेज में आएगी, लेकिन पहले आप लोकल मार्केट की डिमांड्स को फुलफिल करें। बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ योर ग्रेजुएट्स, योर IT firms. Once they start doing big projects, then they'll be more successful when bidding for foreign projects. ठीक, I agree. सही जी जिया भाई, मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूं, मैं नए शेयर होना नहीं चाह रहा, मगर अभी जितने मेरे पास डेवलपर काम कर रहे हैं ना, अगर मैं उनसे कहूँ कि यार 10 करोड़ रुपए का यूबीएल का कॉन्ट्रैक्ट है, मिल गया है, मेरे दोस्त है दिला दिया है, ताहिर भाई ने दिला दिया, मैं वो काम नहीं करेंगे। क्यों? अभी एक हमने जिक्र नहीं किया जो कि बहुत ही अफसोस से कहना पड़ता है। देखें, फ्रीलांसिंग में मैं वक्त पे जब काम करता हूँ ना, तो मेरे डॉलर अक्रू होते हैं इमीडिएटली विद इन 1 मिनट। 1 घंटा जब गुजरता है ना, तो 1 घंटे के मैं अगर $50 घंटे पे काम कर रहा हूँ या $70 घंटे पे कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। अकाउंट से मतलब अपवर्क के अकाउंट में, मैं फिर जब चाहूँ उसको ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ मुझे, अच्छा मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, मैं सिंगल आदमी हूँ, मैं लड़ाई झड़ाई भी कर सकता हूँ, मैं बदतमीजी भी बर्दाश्त कर लूंगा और कर भी लूंगा, मगर मुझसे मेरी एक कमजोरी है कि मैं पैसे पे लड़ाई नहीं कर सकता। मुझसे अगर कोई मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, मुझे कोई बुरा भला कहे, मैं उसको 10 बुरा भला कहूंगा, मगर पैसे के लिए मुझसे लड़ाई होती नहीं है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, इस 6 जो लोग बैठे हुए ना, हम 6 में से एक भी पाकिस्तानी कस्टमर से पैसे नहीं निकलवा सकता। कम से कम अपने बारे में तो बता रहा हूं कि मैं नहीं निकलवा सकता, मैं यूबीएल से भी नहीं निकलवा सकता। हाँ? तो भाई आप निकलवा लेंगे, मैं नहीं निकलवा सकता। मेरा काम ही यही है पिछले 37 साल से। बहुत बड़ा ये 1988 में मुझे EGS प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पास रखा था, और मैंने ट्रेनिंग शुरू नहीं की थी अभी, तो मुझे सबसे पहले जो मैंने काम करके दिया था वो यही काम करके दिया। क्योंकि पॉइंट मेरा कहने का ये है कि पाकिस्तानी कस्टमर
मैं आपकी अभी सीडिया कंपनियों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ यूबीएल, हबीब बैंक, दो साल पेमेंट नहीं करते। में इश्यू है ना, नेशनल असेंबली, सेनेट, ज़राई तरक्कियाती बैंक, आर्मी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी और कुछ और भी। ताहिर भाई मैं कह रहा हूँ कि आपका कमाल है, मोस्ट प्रॉब्ली मेरे साथ तो ये होगा कि मैं उनको पैसे दूंगा। दिस इज एन आर्ट, ये सीखना पड़ता है कि मैं उनको क्या कहते हैं, उनका काम भी करूंगा और पैसे भी मैं दूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आखिर में यही होगा मेरे केस में। तो अच्छा नहीं, अगर मैं इस ग्रुप में बैठा हूं और मैं इस शायद कमर साहब के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, तो फिर आपको इस चीज की फिक्र नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले आपको मेक श्योर करके उसमें कूदने दूंगा कि भाई यहाँ सर्वाइवल है या नहीं, इस स्विमिंग पूल की गहराई नाप लेंगे पहले, उसके बाद कूदेंगे। ये मैं आपको गारंटी भैया भाई, मेरी आपके साथ पहले कभी बात पहली दफा ही हो रही है, तो मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेता हूँ थोड़ा सा बिल्कुल करने में कि पंजाबी कि तुसी अपने दोस्त बदलो सर। आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग से मुझे लग रहे हैं, जो आपको कहते हैं ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सर बदले दोस्त फ्रेंड। शाहिद भाई, मैं थोड़ी सी लिबर्टी मैं भी लूं, ले ले अगर आप इजाजत दें। अमेरिका में बैठ के मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, मैदान जंग में हूँ। हाँ, इसलिए अभी मैदान जंग में उतरे हैं तो पता लगे कि लड़ाई क्या होती है। हाँ, हम भी जो अमेरिका में बैठे हैं तो उसके पीछे भी 1400 साल पुरानी हिस्ट्री है। ये सुन्नत है कि आपने मुल्क छोड़ा, फिर आपने मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी नीयत पे मुझे 100%, मैं अभी मुझे कोई गारंटी कहना है कि शाहिद भाई की वारंटी वो कर लो, क्या कहते हैं, इनकी तरफ से वकालत करो और इनकी तरफ से गारंटी लो, तो ताहिर भाई की वजह से भी, और मैं आपकी अपनी भी मेरी कुछ जजमेंट है, मैं आपकी गारंटी खुद लूं, मगर इस बात की गारंटी कि आप यहाँ पे पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप हैं नहीं यहाँ। आई एग्री। आप कितने भी नेक नियत हो, यहाँ पे जो नेगेटिव सोच है, देखिए मैं ये, देखिए अगर ये होता है, देखिए मैं 60 साल का हूँ, मेरे पास माशाल्लाह थोड़े बहुत पैसे भी हैं, मैं आराम से जाके एरिया में बैठ सकता हूँ, मुझे पाकिस्तान में अपना सर मत, तो मैं नाउमीदी की बात नहीं कर रहा, मगर ये वही वाली बात है। मैं आपसे ये बात कहूँ, मैं आपसे ये कहूँ कि शाहिद भाई, मैं अभी नाम नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मुझे तो कहीं भी नाम लेने से किसी का डर नहीं है, मगर दूसरे लोग भी इन्वॉल्व है ना, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व है, तो नाम लेने से मैं घबरा रहा हूँ। मैं कोई पॉलिटिशियन का नाम लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार इससे बगैर कमीशन के काम करा लो। अभी नाम नहीं ले रहे, कोई भी है। नहीं, जिया भाई मुझे बात करने दीजिए। शायद भाई आपने 5000 लोगों की बात की है, ये जिया भाई बैठे हैं, इन्होंने 50,000 बंदे को ट्रेन कर दिया है पिछले 1.5 साल में, बल्कि 1 साल 9 महीने में, ठीक है ना। और मैंने काम करते हुए देखा है, 18 19 घंटे जाग रहे हैं और लिस्टें बन रही हैं और टेस्ट हो रहे हैं, और एक बच्चे का कैन यू इमेजिन कि ये बंदा अपने 50,000 स्टूडेंट को पहले दिन अपना सेल नंबर दे देता है कि मुझे इसके ऊपर कॉल करोगे, मुझे इसके ऊपर व्हाट्सएप करोगे, SMS करोगे, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। आई एग्री, ठीक है ना, ये कमाल है। अच्छा, अब सैलानी से पैसे निकलवाना, ये भी कमाल है। प्रेसिडेंट अनाउंस करना, ये भी कमाल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कमाल प्रेसिडेंट समझता हूँ कि हमारे जितने प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने ऐसे लोगों ने उनसे रिश्वत के पैसे लेके काम, मतलब वो पैसे खाए हैं। इन्होंने इस पाकिस्तान के लिए एक प्रोजेक्ट अप्रूव करा के 50,000 स्टूडेंट को, तो मैं कहता हूँ उसमें से 50 स्टूडेंट जो है ना, वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, इस बंदे को क्रेडिट मिलेगा, ये बंदा जन्नत में जाएगा। सर मैं पहले दिन से जिया भाई को फॉलो कर रहा हूँ, और इस बंदे ने जो ऑपरेशन बदर वाला प्रोजेक्ट किया था सर, वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जावा के ऊपर, मैं कहता हूँ कि लोगों को कॉन्सेप्ट, जब मैं जावा को जावा चाय समझता था, बिलीव मी, ये उस वक्त की बात है जब आपने ये मेरे लिए काफी एम्बैरेसिंग है। आप मेरे दोस्त हैं तो एम्बैरेसिंग है, मगर मैं सिंपल ये बात कह रहा हूँ कि मेरे ख्याल से बाबर भाई ने खत्म करना है, बहुत देर हो गई है, तो मैं सिंपल ये बात कह रहा हूँ। देखें शाहिद भाई, मैं ये एज अ मुसलमान, एज अ पठान, ये आपको बात कर रहा हूँ, मेरी जान हाजिर है आपके लिए, मगर मैं पाकिस्तान की सोच को चाहे मैं अपनी जान भी दे दूं ना,
तो बदल नहीं सकता। तो हमें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ काम नहीं करना चाहिए, हमें उसके वर्क अराउंड करके, अब यही वही वाली बात है ना, आप मुझसे कहें थानेदार से बगैर रिश्वत दिए FIR कटवा दो, तो क्या कहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है पाकिस्तान के कल्चर में। तो यहाँ पे शनाख्ती कार्ड आपका खोल जाए तो आप बगैर पैसे दिए 300 रुपए दिए आप FIR नहीं कटवा सकते। तो पॉइंट भी है कि, और मैं ये आपके लिए वो भी नहीं कह सकता कि शायद भाई आए पाकिस्तान में तो देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी मोटिवेशन खराब हो, मैं तो चाहता हूँ आपकी मोटिवेशन बढ़े। तो मैं कोई नेगेटिव आदमी थोड़ी हूँ कि मैं आपकी नेगेटिवेशन कम करना चाह रहा हूँ कि यार आओ तो बच्चों पता लगे भाग जाओगे। तो मैं तो ये चाह रहा हूँ कि आप कभी भी ना भागें और हमेशा इतने मोटिवेटेड रहें। सर मैं आपको बड़ी देर से फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि हमें सिर्फ पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी भी करना चाहिए। बाबर भाई, ओवर टू यू। जी बाबर, सर बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाह रहा हूँ कि इसको अगर हम कंक्लूड कर लें, बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हुई। ज़िया भाई के आने की वजह से ये हुआ कि हमारा एक और पैनल बन गया। मैं आप सबका बहुत मशहूर हूँ, थैंक यू वेरी मच। और शाहिद साहब, आपने एक ब्लूप्रिंट बनाना है, कोई तारीख हम तय कर लें उसकी? सर ब्लूप्रिंट जो है ना, इंशाल्लाह आपको 2 वीक के अंदर एक सॉलिड मिल जाएगा। हमने 1 जनवरी से उसके ऊपर काम शुरू करना है इंशाल्लाह जी। सो आज है 12 तारीख जी, और हम इसमें 15 दिन और ऐड कर लें, 26-27 तारीख को आप शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद 1 जनवरी से हम उसके ऊपर काम शुरू कर देंगे। हाँ, और 5000 स्टूडेंट जो हैं उनको हम जियोग्राफिकली डिवाइड कर देंगे पाकिस्तान में। और उसके बाद जिस जिस जगह से जो जो काम करना है, ये 6 लोग आज इसके बुनियादी मेंबर हैं, और उसके बाद और आप कह लें 94 लोग और हैं जो इसके अंदर शामिल हो जाएंगे। तो और 200 की लेना साढ़े करोड़ सर, इंशाल्लाह विल डू इट। ज़िया भाई मेरी बात का नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो सारी उम्र लड़कों में बैठा हूँ, और हम तो अब लड़के ही हैं, जबकि मेरी बहन हमेशा मजाक उड़ाती है कि अब लड़के नहीं कहें बुड्ढे कहें, मगर हम सबका माशाल्लाह दिल जवान है। तो डिस्कशन में तो क्या कहते हैं, ये तो बहुत शरीफाना डिस्कशन था। हमारे जो इंटरनल डिस्कशन होता है वो बहुत पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे, डेफिनेटली लेके जाएंगे। इसी डिस्कशन से ही चीजें निकलेंगी इंशाल्लाह। बिफोर क्लोजिंग मैं एक 3rd डे की वीडियो चलाना चाह रहा हूँ, जो हमारा 3rd डे का सेशन होगा। तो आप सबकी तरफ से इजाजत है, मैं वो चला दूं? जी बिल्कुल इजाजत है, क्योंकि अभी तक लोग हमें सुन रहे हैं और हमें देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी थोड़ी सी इज्जत कर लें आखिर में। अच्छा, 1 मिनट मैं जरा देख लूं। डे 3 मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, डे 3 की वीडियो। जी जनाब, से देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़े तबादुल के साथ जो है वो ये सर बस क्लोजिंग की तरफ चलते हैं सर। जनाब, मैं ज़िया खान साहब आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए कुछ वक्त निकाला और हमें अपनी कीमती आरा से आपने मुस्तफीज फरमाया। डॉक्टर शाहिद कमर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मंजिल की तरफ चल पड़े इंशाल्लाह। श्याम भाई,
हमेशा आपने जब भी कोई मशवरा दिया है तो बहुत ही नाप तोल के ठोक बजा के और टिका के दिया है, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। बाबर भाई, आपकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह हम बहुत तरक्की करेंगे। आसिम भाई, आपकी प्रैक्टिकल बातें बहुत अच्छी होती हैं और हमें अलाइंड रखती हैं सीधे रास्ते पे। वक्ती तौर पे हमें थोड़ी कड़वी लगती हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन काफी बेहतर होती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी अता फरमाए और हमें जो भी हमने टाइम लगाया है इसको एक नेकी के रास्ते पे कबूल करे, और हम इस पाकिस्तान के लिए और इसके अवाम के लिए, लोगों के लिए और एट लार्ज पूरे ग्लोब पे जो दुनिया है, प्लेनेट है, उसके लिए और इंसानियत के लिए हमें इस काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।